alaikum. My name is Kashif Arif. I joined Greenwich in the very first batch of the Southeastern University program that they were running. I did my BBA in marketing as well as my MBA with specialization in marketing too. After that, I've had a very long career in the marketing and advertising, more like business communications career, and eventually I've recently joined the Synergy Advertising Group. I'm looking after the content development. I'm the head of content development at Syntax Communications, which is one of the PR divisions of Synergy. We also have our digital marketing and digital communications setup. Going back to the Greenwich days, it's been a very exciting journey. We've had the most memorable times of my life, at least, in this institution. It's come a long way. Started off from a very humble start, and I wish best of luck to the graduating students of this institution. They have a long way to go. The market is ready for good people. If you have the capacity, the capability, the talent, the market has a lot of space for students who are from, regardless of the institution they get. But Greenwich has a special advantage of being there for such a long time. With a lot of the curriculum is, as far as I've seen the curriculum here, the media-related curriculum, it looks pretty wholesome. It's pretty rich, and it's a great opportunity to learn before you enter the practical life. And I wish best of luck to the students who are, especially the students who are doing their media sciences here. That's about it. Sultana Siddiqui, a woman of substance, a woman of courage, a woman of international fame. Sultana Siddiqui came from Hyderabad, Sindh, a historical city that has produced legends in many fields. She studied at a government high school, then at Government College for Women. She did her BA Honours and Masters in Comparative Religion from Sindh University. Oh, she's a role model. बच्चों की तालीम में she's a role model. और फिर उन्होंने economically अपने को खुद दो पैरों पर खड़ा किया. तो तीनों she's a role model. Very hard working, intelligent हैं और बहुत ज़्यादा उनकी नज़र जो है वो मुस्तक़बिल पे काफ़ी होती है. She's a very good planner. बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सिर्फ अपनी सलाहियत की बिना पर यह मुकाम हासिल किया है, और सबसे अच्छी खूबी यह है कि उसने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को इतना आली तालीम और तरबियत दी है कि वो आज ज़िंदगी में बड़े कामयाब हैं. इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो हम सब की बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह के रोल मॉडल हमारी सोसाइटी में बहुत होने चाहिए, सुल्ताना जैसे. Sultana Siddiqui joined PTV in 1974 and took the most difficult task, production of programs for children. She then expanded her horizons with producing music shows and from there moving on to dramas. In 2005, Sultana Siddiqui launched her first TV channel, Hum TV, with a very enthusiastic team of family, friends and fellow workers. Hum TV quickly turned into the talk of the town and then the world. I think Sultana Siddiqui leaves a legacy of great professionalism. She's probably a woman leader, who has given empowerment to a lot of women, and in Pakistan, not just in Pakistan, but the entire subcontinent Asian region, she's probably
the only president of a broadcasting network who has taken this network to a level where no other institution has been taken by a woman. मोहब्बतों से गुंदी एक शख्सियत है जो सिर्फ मोहब्बतें फैलाना जानती हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से काम भी सिखाती जाती हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता और इंसान उनके पास सिर्फ बैठा होता है और उनसे सिर्फ बात करता है, तो उस थोड़े से टाइम में भी रोज़ जितनी देर मैं उनके साथ बैठती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख के उस कॉन्वर्सेशन में से निकली हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव हर. आई थिंक शी इज़ वन रिलेशनशिप दैट आई एम प्राउड ऑफ. I think she's an amazing mother, and the motherly love and motherly affection and motherly advice she would give to us, she gives to everyone, and she makes everyone treat as special. And I cannot think of any mother or any professional better than, of course, my mother. मम्मी ने जो हमारी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल. It's basically a learning experience for everybody. और मैं कहती हूँ कि 3 बहुएं डिफरेंट बैकग्राउंड से, 3 बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फिर इतने सारे बच्चे, उसके साथ साथ वो दुनिया का वो हर काम कहती हैं हमसे कि करो, और कहती हैं जो चीज़ तुम लोगों को करनी है उसमें और बेहतर करो, बैठो नहीं, क्रिएटिव बनो. हम सब क्रिएटिव हैं और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि घुटन है या आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ी सी हमारे ऊपर एक बर्डन भी है कि वी नीड टू डू बेटर, वी कैन नॉट लेट हर डाउन एंड वी नीड टू प्रूव हर कि वी कैन डू बेटर एंड हेल्प हर अचीव द गोल्स फर्दर. Now Hum TV has 2 more siblings, Hum Masala TV and Hum Sitare. Sultana Siddiqui has been behind the introductions of many renowned names in the industry. Abda Parveen, Tina Sani, Ali Haider, Nazia Hassan, Shazia Khushk are some of which come to mind. I think that Sultana is a remarkable woman. She's one of those people who doesn't need degrees to demonstrate her skills. She has the most potent communication skills in the field of television broadcasting. She has converted her skills into a legendary, I think, demonstration of what is possible within the context of clean, wholesome and artistically well-honed entertainment in Pakistan. In her long media career, she has won many national and international awards, including the prestigious Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Sultana Siddiqui is truly a pride of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सुल्ताना सिद्दीकी से सुल्ताना आपा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है, जो आपका विजन होता है, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपका हो जाए तो फिर सारे जो हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं. इस मकाम पर पहुंचने में कोई तो रोल मॉडल होगा आपकी ज़िंदगी का. मैं रोल मॉडल अपने बड़े भाई मज़हर सिद्दीकी को समझती हूँ, जिसने ज़िंदगी भर इतना इनकरेज किया, इतनी हिम्मत दिलाई कि बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल भी हुई मुझे मुश्किल न लगी, तो वो मेरा रोल मॉडल है. मैडम, बहैसियत ख़ातून इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जब ख़वातीन बाहिम्मत होकर निकलती हैं तो मर्दों से बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हैं. कुछ फ़ैसले होते हैं जिनको करने में आपको ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल समझ में आती है, जो मेरे लिए तो आसान हो गई कि 3 लड़कों को सिंगल हैंडेड पालना और तीनों को इस सोच से पालना कि कोई एक दूसरे से कम भी ना हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनकी सक्सेस. तो जब मैं उसमें कामयाब रही तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि इससे बेहतर काम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया. हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और हम उनको अपने पास कुछ ना कुछ जो कुछ आता है उनको सिखा सकते हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.
Assalamu alaikum. Hi guys, my name is Khurram Parvez and I am from SB 151087. I'm a proud alumni of Greenwich University. I graduated from here in 1997 and I think it's my life-changing experience, and there was a lot of fond memories, past memories which I have of Greenwich University. In fact, after doing my graduation from Greenwich, I also taught in Greenwich University for about 8 years, and now I am working as an assistant professor at ICRA University. I thank all my teachers who taught me during my studies, and I have made many good friends, and we are still, along with my good friends, meeting at different intervals with each other, and I very much thank Greenwich University once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फरोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज़ इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीजा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिले सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुताद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met
regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages, and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and are awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन इनका नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है। तन्हा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माय फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवामुन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है।
कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजी लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजी लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. You're watching Greenwich TV and right now you're watching Greenwich on the Move, जहां हम जगह जगह पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। तो हम मौजूद हैं कराची के साहिल समंदर पे, जहां पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं जो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। तो आके इनसे बात करते हैं। आज क्या करने हैं आप लोग सारे दोस्त हैं? हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं क्योंकि पेपर्स हमारे खत्म हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। पेपर की स्ट्रेस थी, बहुत पेपर दे दिए। कौन सी क्लास में? हम मैट्रिक में। अच्छा, तो मैट्रिक के अब एग्जाम्स हो चुके हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है? जी बिल्कुल। तो रिजल्ट से पहले पार्टी हो जाए, क्योंकि हो सकता है शायद रिजल्ट के बाद पार्टी रह जाए। घर वाले पार्टी देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और देखते हैं हमारे साथ और मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मसर खान है, मैं इन्हीं की क्लास में हूँ। लोग इसी जैसे मेरे दोस्त ने आपको कह दिया कि हमारे पेपर ख़त्म हो गए, बहुत स्ट्रेस से पढ़ाई के, इसलिए हम घूमने आ रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है? मज़ा तो अभी हम आए, अभी हमारा एंट्री हुई और हमें नहीं पता। अच्छा, तो ये देखें, आपस में सारे ये लोग एक क्लासमेट्स हैं और कितना साथ इनमें मज़ा मस्ती है, वो सब हम आज देखेंगे। तो इंग्लिश गाना अब हमें सुनाने वाले हैं। सोच रहे हैं हमारे भाई के कौन सा इंग्लिश गाना। कोई टेंशन नहीं है, मैं भी साथ गाऊंगा। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid of sight of aim of flight. Wanna see us alight? Where are you now? Thank you so much. Alright, that was Faded by Alan Walker. और सवाल ये उठता है कि ये Where are you now कह किसको रहे हैं भाई? कोई है ज़हन में तो बता दो। अभी तक तो कुछ नहीं है। चलो जी, मैट्रिक में आगे पढ़ेंगे, हो सकता है ज़हन में कोई आ जाए। और हमारे साथ कौन भाई है? ये भाई तो पीछे हट गए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप ये बताएं, सारे दोस्त वगैरह आए हुए, तो किस तरह से आए हो? बाइकों पे आए। बाइकों पे आए? अच्छा, तो फुल एंटरटेनमेंट सारे। अभी हम लोग गार्डन गए थे, गार्डन से अभी फिर यहाँ आए। हम लोगों को था नहीं यहाँ का आने का, एकदम से बन गया। हमसे मिलना लिखा था। हाँ भाई, यही समझ ले, आपसे मिलना लगा यार। तो कोई सीटी बजा के हमें दिखाओ। जितना भी कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राइट गाइस, आपने देखा हमारे साथ एक स्कूल के मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे जो कि अपने एग्जाम्स के ख़त्म होने की खुशी में यहाँ सेलिब्रेट करने आए हुए थे और उन्होंने हमसे बात की, गाने भी सुनाए, सीटियाँ भी बजाई। एंड लेट्स सी हु एल्स वी हैव ओवर हियर। कराची की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं और हर इंसान एक से एक इंटरेस्टिंग होता है। और इसी तरह से मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे देखा है और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? नवीद। नवीद भाई, समंदर का आपने रुक किया, फैमिली के साथ इधर आए हुए, ऐसे ही घूमने फिरने हैं या कोई खास? एक्चुअली वी आर विजिटिंग फ्रॉम लाहौर।
ऑलराइट, जिंदा दिलाने लाहौर, तो इनसे तो खूब गप लगेगी। और So it's so beautiful, nice, warm water, and weather is so pleasant. We are enjoying a lot. We had a horse ride, which was so nice, and in general, it was really nice, good. So comparatively to Lahore, you don't have the sea over there, you don't have the beach over here. So when you come to Karachi and you visit Karachi, how does it feel to visit the beach? The beach is beautiful. The only thing we don't have in Lahore, in Punjab, is a beach. Is a ocean. Ocean makes the Karachi really different than Punjab. But we have the a river over there, but it's not big like ocean over there. तो कुछ पंजाबी विच गल भी कर लें। Why not? I mean, it's hard for me, but let's try again. Okay. तो कोई गाना सुना दे हमें। I don't sing in Punjabi. I do not know how to sing in Punjabi. English में सुना दे। No, I cannot sing even in English. And here is my daughter. Come on, my daughter. और यहाँ हमारे लाहौर से। She's visiting me from abroad. She's visiting me from USA. Oh wow! So we've got a little angel from USA. We'll talk to her. Hello, how are you? Good. So is this your first time in Pakistan? Yes. How do you like it here? Good. I like it. So did you enjoy on the beach? Yes. Did you take a horse ride? Yes. Can you tell us some poem? Sing some poem, Ravi. How was the horse ride? Good. Good. You like Pakistan? Is Pakistan beautiful? Yes. Do you want to come back here again? Or is it good, better than USA, or Pakistan is good? Pakistan is good. All right. राइट तो आपने देखा हमारे पास यहाँ यूएसए से भी एक छोटी सी नन्ही सी परी आई हुई थी एंड वी हैड विजिटर्स फ्रॉम लाहौर और वो कितना पाकिस्तान के लिए कराची के लिए अच्छा सोचते हैं दैट इज द थिंग। देखते हैं हमारे साथ यहाँ और कौन कौन मौजूद है। कराची के अंदर जब आप समंदर पे आते हैं तो आपको वहाँ पे घोड़े, ऊंट, सांप, बहुत सी चीज़ दिखती हैं एंटरटेनमेंट के लिए और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जो कि सांप के एक्सपर्ट हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? सलाम, इकबाल हमारा नाम है सही बादशाह, हम सांप वाले फकीर। इकबाल भाई, कितने अरसे से आप सांप के जो है चीज़ें देख रहे हैं? गुजर गया हमारा ये जिंदगी तलक हम सांप ही पकड़ते हैं और काम नहीं है हमारा। सांप पकड़ना, गिदड़ सिंगी निकालना, हाथ जोड़ी निकालना, ये हमारा काम है। मनके वाले भी सांप पकड़ते हैं और बीन बजाने वाले भी सांप पकड़ते हैं। अभी थोड़ा बीन सुनाओ मेरे। चले जी, हमें बीन सुनाएंगे। क्या बात है। देखिए, कोई म्यूजिक की, आर्ट की लैंग्वेज नहीं होती और जिस खूबसूरती से भाई ने बीन बजाया, अब इनसे हम इनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। और भाई हिंदी में इनसे अब आप सवाल करें। इधर है मेरे पास। क्या यहाँ पे आते हैं, क्या होता है, क्या होता है, मतलब वो छा हूंदो छा न हूंदो इहो मतलब रोज़ी 300-400 रुपया थिए थी, वधीक कोन, कॾहिं 200, कॾहिं 300, कॾहिं 100, कॾहिं 400 में। मतलब तव्हांखे कीअं लॻे थो, एंजॉय कयो था तव्हां? हाँ, वीआईपी आहे। मौसम भलो आहे घुमण जे लाइ, माना कराची शहर भलो आहे, हा न। आऊं नवकोट शहर मिठी ज़िलो। एक चीज आपने देखी भाई कि जितना टाइम हमसे हमारे भाई ने बात की, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट है हमारी शहर की खूबसूरती के। यहाँ पे हर इंसान मुस्कुराता है, हर इंसान अपने रोजमर्रा की मुश्किलात के बावजूद खुश है, जिंदगी से लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कराची। Hello and welcome, अस्सलाम वालेकुम। You're watching Lighter Note with me उमर खान और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर दफ़ा एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। और आज की जो हमारे ख़ास शख्सियत है, बहुत ही ब्लेस्ड, टैलेंटेड आवाज़, क्या कमाल के सिंगर हैं, क्योंकि जब वो गाना शुरू करते हैं तो मैं तो पर्सनली किसी और ही जोन में चला जाता हूँ। और प्रीवियसली आपने ग्रीनिच लाइव सेशंस में हमारा फॉर्मेट कुछ और देखा था। लाइटर नोट में आप एक डिफरेंट अंदाज में हमें और हमारे गेस्ट को देखेंगे, क्योंकि लाइव सेशंस के बाद
लाइटर नोट में हम अपने गेस्ट के घर जाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गेस्ट के घर में और अब उनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर पे दावत दी और ये हमारा लाइटर नोट शो है, तो सबसे पहले तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ। घर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी और अपना कीमती वक्त दिया कि हम आपके घर पे आ सकें और आपका जो हुनर है वो सबके साथ शेयर कर सकें। ब्रदर, ये आपका ही बड़प्पन है जो आप मेरे घर आए। थैंक यू सो मच। बस ये है कि कुछ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश है आपके लिए पेश करेंगे। जी, ये ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे जाके नसीम खान सर्च करेंगे और जो आपके सामने इनका टैलेंट आएगा, जो इनकी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज़ आएंगी, आप खुद एक अलग जोन में चले जाएंगे। और वो टीज़र हम आपको दिखाएंगे ज़रूर और शो के एंड में, लेकिन उससे पहले आज हम नसीम खान की लाइफ जर्नी शेयर करेंगे कि कहाँ से उन्होंने गाना शुरू किया, क्या उनकी पूरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहे, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनली दुबई में रहे 7 साल, वहाँ उन्होंने गाए और बेतहाशा बड़े नामों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसमें सज्जाद अली हैं, शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं और बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स रही हैं ऑन स्टेज वाइल सिंगिंग, जिसमें हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नसीम भाई, बताइएगा कि ये जो आपकी जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या बचपन से शौक़ था या फैमिली में चला आ रहा है, ब्लड में चला आ रहा है, घराना है आपका पूरा सिंगिंग से रिलेटेड? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा जो है घराना ही है अल्लाह की रहमत से। बाकी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, मैं एक साल का था उस वक़्त। तो मेरे जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल गाते हैं, गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ गाते हैं माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब जो हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जो है तवज्जो हो गई थी उनकी। तो इस फील्ड से थोड़ा सा, मीडिया से जो है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया था। बाकी उन्होंने ही मुझे तैयार किया है बचपन से। तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र से है मैंने तालीम लेना शुरू कर दिया था। जब थोड़ा बहुत मुझे अब्बू को देख के मैं गुनगुना लेता था, तो अब्बू ने मुझे इस काम पर लगा दिया था। अब जब आप बात भी करते हैं ना, तो आपकी बात की आवाज़ की टोन भी इतनी सुर में होती है कि पता चलता है जी ये सिंगर बात कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इतनी यंग एज से आपकी तालीम शुरू हुई, तो वो कौन सा टाइम था, पहला टाइम जब आपने किसी स्टेज पे परफॉर्म किया हो या सबके सामने परफॉर्म किया हो, जहाँ आपको खुद भी ये फील हुआ हो कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ और इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ? कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत होते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया हुआ था कि बेटा अभी आप तैयार नहीं हो, जब आप काबिल हो जाओगे तो उस वक़्त मैं आपको इजाज़त दूंगा। क्या बात। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिल्कुल रोका हुआ था। तो इस वजह से मैंने कोई भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। एक बस यही है कि अब्बू ने जब इजाज़त दी मुझे, तो मैं दुबई चला गया था। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टैलेंट को प्रमोशन बहुत कम मिलती है। तो मुझे दुबई में एक मौका मिला, तो वहाँ पर फिर अल्लाह की रहमत से मेरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ इंटरव्यू होने के बाद मुझे जॉब का जो है सिलसिला बन गया था मेरा। तो जॉब जो है फैमिली रेस्टोरेंट में जो है मुझे मिली थी, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। बाकी ऑफ़र्स भी मुझे बहुत आई थी। लंदन से मुझे ऑफ़र आई, बहरीन से मुझे ऑफ़र आई, मस्कत से, मलेशिया से, यानी मुझे बहुत सी ऑफ़र्स जो हैं आती रहती थी। अपने लाहौर से भी मुझे ऑफ़र आए थी। तो मेरा जो है, मैंने जो वहाँ पर वर्क किया, तो यकीन करें ऑफ़र्स तो बहुत आई, बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप जो हैं, मैं आपकी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यही कहा कि यहाँ से जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा,
फिर मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है अगर हमारा राब्ता रहा तो वहाँ पर फिल्म में भी मुझे मौका मिला। इंडिया का मुझे मौका मिला था जबकि ये एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें नबील शौकत ये भी थे वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला तो मैं उस कंपटीशन में जा नहीं सका। मेरा दुबई में 7 साल से आना जाना है और वहाँ पर मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, ठीक है, यानी मीडिया फील्ड में नहीं हूँ। मीडिया में तो अब आया हूँ मैं बोल टीवी के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान स्टार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जो कि माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ऑडिशन जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में 15 लाख व्यूज़ थे उस ऑडिशन के, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। बाकी उसके बाद जो है अल्लाह की रहमत होती रही मुझ पर। जी बिल्कुल। और जिस ऑडिशन का इन्होंने जिक्र किया वो ऑडिशन ही अगर आप सिर्फ देखें जाके, जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करें नसीम खान, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत तोहफ़ा खुदा ने इनको दिया है इनकी आवाज़ के ज़रिए से। और जब ये शुरू होते हैं और जो इनकी रेंज है वो क्या कमाल रेंज है कि अगर हमें अपने लाइटर नोट, सिंस प्रोग्राम का नाम है, कि अगर उस रेंज की ऊंचाई पे मैं पहुंच के गिर जाऊं तो बचने का कोई चांस नहीं है, वो रेंज है नसीम खान की। और वो आपको हम आगे जाके सुनाएंगे भी। सर, आपकी जो एक जॉनरा है स्पेसिफिक जहाँ आप गाते हैं वो क्लासिकल है, सूफ़ी है। तो आजकल के हम दौर में देखते हैं कि बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ऑफ कोर्स क्लासिकल ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कभी ये सोचा कि यार मैं भी जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से गाऊं, या क्लासिकल या सूफ़ी ही आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है? देखिए, आजकल के दौर के हिसाब से ही मैं गा रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ऑलराउंडर गा रहा हूँ मैं। और अगर महफ़िल पे बात होती है, महफ़िल जैसी मिल जाए उस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फ़र्स्ट तो मैं क्लासिकल गाता हूँ, उसके बाद जो है गज़ल, गीत, सूफ़ी जो है वो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस वक्त। ये तो आजकल की दौर का है। और पॉप रॉक गीत सभी करता हूँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट, सिंगर कौन थे? मैं बचपन से जो मेरे फेवरेट रहे हैं ना, वो ग़ुलाम अली साहब रहे हैं, और जो कि गज़ल गायक है माशाल्लाह, बहुत ही मुझे मेरे फेवरेट हैं। और मेरा जॉनरा भी जो है उनके साथ टच होता है। और मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब, ये जो हैं मेरे फेवरेट रहे हैं। फ़तेह अली ख़ान साहब जी, जितने आपने नाम लिए, ऑफ कोर्स हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सब हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमारे वो पाकिस्तानी असासे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो शफ़क़त साहब कर गए, अमानत अली साहब कर गए, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कर गए, जो ग़ुलाम अली कर गए हैं, और जो मेहदी हसन साहब कर गए, वो काम आई थिंक कोई कितनी कोशिश कर ले उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते, और आपके क्या शौक़ हैं? बस मुझे बचपन से जो है मेरे वालिद साहब से यही तालीम मिली है। अगर और मैं कुछ करता तो वो मेरे वालिद साहब भी डिसाइड करते, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं था। बस बचपन से सिंगिंग ही मैं देखता आया हूँ, और प्रोफेशनल सिर्फ सिंगिंग ही कर रहा हूँ मैं, और कोई काम नहीं। ये देखें, ये होती है डेडिकेशन, ये होता है पैशन, कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपनी ज़िंदगी में सिंगिंग के अलावा कुछ और कर भी सकते थे, सोच नहीं सकते। तो ये पैशन हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि अपनी फील्ड से ऐसा इश्क करो कि दूसरी फील्ड की तरफ ना निगाह करो, ना सोचो कि यार मैं ये भी कर लूँ। और ये जब आप डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक फील्ड में रहते हैं तो सक्सेस आपको मिलती है। और वो सक्सेस का रिजल्ट क्या है, वो जब एंड में नसीम भाई हमारे लिए गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो नसीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप दुबई में रहे, आप जैसे मैंने जिक्र किया साजाद अली साहब के साथ आपने परफॉर्म किया, शफ़क़त अमानत अली के साथ आपने परफॉर्म किया, उनसे मुलाकातें रहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, इनके साथ गाना, स्टेज शेयर करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सज्जाद भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ परफॉर्म नहीं हुआ था। बाकी शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं जो
उनसे मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम, पहले तो वेलकम किया था, फिर उनकी ओपनिंग की थी मैंने, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं वहाँ पर गया हुआ था जॉब के लिए, तो मेरी जगह किसी को मिल गई थी, तो मैं तो परेशान था वहाँ पर। फिर वहाँ पर मुझे मौका मिला कि वेलकम और ओपनिंग का, शाजिया जी हैं दुबई में, बहुत अच्छी जी बिग से उनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उनका एफएम है। तो उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया, तो मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम कर लिया था। फैसल कपाड़िया साहब जो हैं, तो वही मुझे मिला। फिर मुझे माशाल्लाह कुछ पेमेंट मिल गई थी अच्छी खासी, मैंने थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत खर्च करके गया था यहाँ से। फिर वहाँ पर 1 महीने तकरीबन मैं रहा था, तो उसी टाइम पे सज्जाद भाई से भी मुलाकात हुई थी। सज्जाद भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, इब्ने बतूता जो है मॉल, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको तालीम देता था मैं पहले, तो फिर मैं अपने बॉस से ही मिलने गया था। अभिषेक माथुर जो हैं, उन्होंने ही मुझे दुबई में एडजस्ट करवाया है, यानी कि जो भी मेरी जॉब का सिलसिला, इंटरव्यूज़, एक ही इंटरव्यू हुआ था, बाकी उसके बाद जॉब का मसला हल हो गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी की जाए, उसके बाद आगे का जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। राइट और देखा आपने नसीम भाई अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ का दूसरा नाम है स्ट्रगल। हम देखते हैं कि लाइफ में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो किसी मुकाम पर आ जाते हैं, तो हम सिर्फ चमक देखते हैं, हम सिर्फ उनका फेम देखते हैं, हम सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस फेम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक रियल साइड ऑफ द स्टोरी होती है, जो मैं आप एक एक कॉमन आदमी उससे रिलेट कर सकता है। कि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ के बीच का जो मेरा सफ़र था, वो बहुत कठिन था, वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो वही बात आप सबके साथ भी यहाँ हम इस प्रोग्राम के थ्रू और आज हमारे गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू शेयर करेंगे कि सक्सेस कम्स विथ टाइम, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टिक ऑन द पाथ। आपको लगे रहना है, मुश्किल वक्त आएगा, घबराना नहीं है, चलते जाना है और अपने टैलेंट पे भरोसा करना है। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ और जितना मैंने बिल्डअप किया है, तो अब मजीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते और नसीम भाई की खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाते हैं। क्लासिकल और सूफ़ी के अंदर इनकी महारत है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नसीम भाई अगर आप हमें कुछ क्लासिक में, कुछ सूफ़ी में, कुछ एक हमारे व्यूअर्स के लिए मेडले सा सुना सकें। मैं एक सहरा आपको पहले सुना रहा हूँ, जो कि सज्जाद भाई का है। माशाल्लाह, देखें अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ी, और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उस्तादों की भी जगह हैं। तो उनका एक सहरा है रंग लागा, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जिद्दोजहद की है, वो मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और। पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे कैसे लाया तेरा मामा थारे बनड़े को सेरा वाले बनड़े को
वो रंग लगा, रंग लगा, ओ रंग लगा, निरे ग म ध प द म प म ग म रे ग म ग रे ग रे नि रे नि नि ध नि रे ग म ग रे सा नि रे ग म ध प द म प ग म प नि ध प द म प ग ग म प नि रे ग रे म ग रे ग रे नि रे नि नि ध नि रे सा नि ध प द म प ग ग म प नि रे नि ध प द म प ग म रे ग रे सा ओ रंग लगा, हा ओ रंग लगा, आ ओ रंग लगा, निरे गम द प द म प ग म प नि द प द म प ग ग म प नि रे ग नि ध नि नि ध नि ग नि ध नि नि ध नि रे ध नि ध प द म प ग ग म प नि ध नि ध प द म प ग म रे ग रे ध रे नि नि ध नि रे सा 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 ध नि ना ना। क्या बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं हिलाना चाहूंगा, होश में आ जाए, ये हकीकत थी, ये असली था। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अंदर दो चार और गुर्दे लगवाए हुए हैं या एम्प लगाए हुए हैं, क्या क्या चक्कर क्या है? ये इतनी आवाज, इतनी रेंज, माशाल्लाह, क्या बात है। ये बस आप जैसे बहुत से लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, ये बस उनकी दुआओं का असर है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे वालिद साहब की मुझ पर बहुत बड़ी दुआ है कि जब उन्होंने मुझे कहा था ना कि नसीम अब आप जाओ, तो उस टाइम पे अल्लाह की रहमत से मैं बहुत तैयार था। और ये जो तैयारी है, ये सारी मेरे वालिद साहब की मेहनत है मुझ पर, और मेरा लगाव है। क्योंकि इंसान अपनी मेहनत और लगाव हो ना सिंगिंग से, इससे हार नहीं माननी पड़ती, इससे निकलना पड़ता है। तो अगर वहाँ से निकल गए तो फिर अल्लाह की रहमत हो जाती है इंसान के ऊपर। क्योंकि ये बहुत बज़न करने वाला काम है। जब इंसान 2-2 4-4 घंटे मेहनत करता है तो ये बज़न हो जाता है इंसान के, अब मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ इससे। वहाँ से निकलना पड़ता है, तब जाके ये हासिल होता है। जी बिल्कुल। देखें, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि जब लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे यकीन रखें, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और सिंस आपने अभी जो आवाज़ सुनी नसीम भाई की, ये वो आवाज़ है जो रूह को छू जाती है। और इसी बात पे मैं नसीम भाई से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि नसीम भाई कुछ और अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक डिफरेंट जॉनरा में, कुछ एक डिफरेंट रेंज में सुनाना चाहें। मैं आपको एक और सॉन्ग सुना रहा हूँ जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत फेमस है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो भी मैं जो है उसमें थोड़ा सा मैंने काम किया है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बैठे हैं वालिम पे मेरी। क्या बात है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से। सो लेट्स सी। तो राग दरबारी उसके अंदर है ये सॉन्ग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो मैं पेश कर रहा हूँ आप सबके। सा नि सा रे सा द ध नि रे ग म रे नि ध रे सा द नि रे सा
रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से करारा जाए, जैसे शहरों पे होले से चले बांध नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग महाबदाली पासा ददली बाबा मबली गा मरे सा। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं, आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम भाई मैं तो एक अलग जोन में चला गया हूँ, मुझे वापस आने में जो है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या गजब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार भाई। और ये जो स्केल जो है बहुत ही हाई मैंने रखा हुआ था, ओरिजिनल से भी ऊपर था। बाकी यही कोशिश करते हैं आप सबके लिए। ये जो स्केल था, ये स्केल पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अगर अपने अब एक मिसाल देता हूँ, आप अपने जो टेप रिकॉर्डर है उसकी वॉल्यूम जब फुल पे कर दें तो वो स्पीकर फटना शुरू हो जाते हैं, साउंड सिस्टम्स फटना शुरू हो जाते हैं। ये एक इंसान का गला है और वो जब इतने हाई जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी आवाज में कोई झोल नहीं आया। ये वो टैलेंट है जो कि बहुत रेयर है और इसको हमें कदर करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए और सराहना चाहिए। और आज आपकी जो मुलाकात हमने नसीम भाई से कराई है, मैं वापस कहूँगा जाके सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे इनके नाम से और इनका टैलेंट मज़ीद देखें। जो जिस बोल के शो का इन्होंने जिक्र किया उसमें ये इनकी क्या परफॉर्मेंस रही और कितने बड़े बड़े नाम इनकी आवाज़ सुन के वैसे ही गुम हो गए जैसे अभी आप लोग गुम हो गए, जैसे मैं इनके गाते हुए गुम हो गया था। तो नसीम भाई, जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्ट्रगलिंग बहुत है, उन सब बच्चों को, नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो देखें मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत करे। देखें अल्लाह ने कोई ना कोई तो ज़रिया बनाया हुआ होता है, ठीक है? तो बस इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर होगा, मेहनत करते रहें और उस अच्छे उस्तादों से सीखें ताकि आपको कुछ मज़ीद पता चले कि इसके अंदर आखिर है क्या। अब देखें ये जो मैंने अभी जो स्केल, जिस स्केल से मैंने गाया है वो स्केल में कॉन्सर्ट में यूज़ करता हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लाइव है ये, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितना भी हो सके खाना पीना अच्छा करें, अच्छा करके और उसके बाद जो है अपनी मेहनत को जारी रखें, अच्छे उस्ताद से सीखें। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके लिए अल्लाह ने मंजिल एक रखी हुई है, सोची हुई है, वो ज़रूर मिलेगी आपको, हारे ना बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं जानना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम पे आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे उमर भाई। बहुत प्यार मिला आपसे भी भाईजान। और सजील भाई जो हैं उन्होंने मुझे याद किया है यहाँ पर, मेरे बोल टीवी में मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान हैं जो कि ख़ुद सिंगर हैं और इन्होंने मुझे याद किया। ये किस लिए याद किया? ये इनकी मोहब्बत है और टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जैसे भाई उमर भाई एंड सजील भाई, उन्होंने मुझे याद किया है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल, ये इनकी हम्बलनेस है
और इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम फिर तकलीफ़ देंगे और चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के सामने आके उनको एक लाइव लेक्चर दें, वो आपकी जर्नी से आपकी इंस्पिरेशन एज एन इंस्पिरेशन आपसे सीखें, क्योंकि जो आपकी स्टोरी है और जो आपकी जर्नी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है कि उससे मैं सीखा हूँ। आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और स्पेशली जब नसीम भाई गाना शुरू हुए होंगे तो आप लोग सब गुम से गए होंगे। तो नसीम भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपके फ्यूचर में जितने आपके इरादे हैं, जो जो आपकी मंजिलें हैं, अल्लाह उन सब में आपको कामयाब करे। और आपको सिर्फ वंस अगेन थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है भाई। आप तो हमें कभी भी याद करेंगे इंशाल्लाह। आपके एक फ़ोन पर ही हम आ जाएंगे, हम नखरे नहीं करते। थैंक यू सो मच। क्या बात है। राइट, सो गाइज, आपने आज हमारे गेस्ट से मुलाकात की और आज के हमारे गेस्ट थे नसीम खान, जो कि मैं सिंगर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी आवाज़ और जो इनका टैलेंट है वो एक लफ्ज़ में बयान हो नहीं सकता। तो आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान थे नसीम खान, और आपने बिल्कुल उनका टैलेंट देखा, उनकी जर्नी देखी, उनकी सादगी देखी, और ये थे हमारे आज के गेस्ट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख़ास ख्याल रखें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा ये नया फॉर्मेट, नया शो कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम आएंगे विद अनदर गेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात
बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी ये कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ में या कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Transformation, adaptation and actualization is what we humans must do. इनिशियली आई वाज अज्यूमिंग कि ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम करना या कंटिन्यू करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा और कैसे होगा, बट ड्यू टू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑफ टीम ग्रीनिच एंड फैकल्टी सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो गई। The teaching strategies that were used by the teachers were according to the students' needs, and the management was always there to help us in every way possible. As these were difficult situations and times, but the teachers made it easier for us to learn and understand. Regardless of fact I am at university or at campus, Greenwich level up their game even in this pandemic. And online classes में कोई chaos या कोई haphazard बिल्कुल नहीं होता. I really enjoy it. I just want to thank my university's management for tackling this pandemic situation so well. Hats off Greenwich University. They made a portal for us, GEMS portal, जिस पे इन्होंने हमारे एग्जाम्स कंडक्ट किए। हमें लगा था हम चीटिंग कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, कॉपी से देख लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, बट इन्होंने वो चीज़ को इतना बेटर कर दिया था कि हम वो कर नहीं पाए। I want to appreciate the efforts of the team which led to the completion of this semester in an ongoing pandemic. Thank you to the Greenwich team. Greenwich University is providing hybrid learning facility. Students can attend the classes at their home as per their convenience, or they can attend the campus. For this purpose, if they would like to attend the campus, they can register themselves at the Greenwich Blended Learning Management System. Just log into the learning management system, go to the Student Secure Desk, click on Reserve under Blended Learning. See if the capacity is still available in your upcoming classes. Click on Reserves. You are done. The new normal is the new norm and we should learn to embrace it by practicing social distancing, staying 6 feet apart and avoiding close contact, and also sanitization of our hands and wearing masks.
Greenwich has always put the interests of its students first, and that's why they've provided sanitizers at every social point on campus, starting with the main entrance and in the lobby. Also, the campus is disinfected every day. Technology can't substitute, human contact. I mean, we are avoiding contact, but it's better for me to actually look at a teacher while he or she is explaining something to me. Because it makes more sense that way and I can understand it better. Proud to be a part of Greenwich University. Greenwich is like a home. Thank you for everything. Thank you, Greenwich. Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये बताऊं, ही इज़ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनका जो क्राउड है वो झूम उठता है। क्राउड एंटरटेनर हैं और कमाल के सिंगर हैं। इनका हम मज़ीद आपको तारुफ कराएंगे लेकिन ड्यूरिंग द शो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी वेलकम मिस्टर अजीम खान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं उमर? ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और लाइट नोट का पार्ट बने। माय प्लेजर सर। तो आपकी शुरुआत हम करते हैं जर्नी के साथ। आप एक सिंगर हैं और कमाल के सिंगर हैं जो कि हमारे आज व्यूअर्स को भी पता लगेगा जब आप परफॉर्म करेंगे विद दिस गिटार अलोंग। थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि शौक तो हर किसी को होता है। मैं भी बहुत गाना गाता हूँ लेकिन अकेले वो भी हेडफोन लगा के। लेकिन जब एक इंसान प्रोफेशनली गाने की तरफ आता है तो उसके बड़े चैलेंजेस होते हैं, पूरी जर्नी होती है। तो आपका ये शौक कब पैदा हुआ और आपको कब एहसास हुआ कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली देखें, सिंगिंग या कोई भी आर्ट इंसान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये, ठीक है। बाद में इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करता है, लेकिन बस यही था कि व्हेन आई वाज 5 or 6 year old तो एक शौक़ था और स्ट्रिंग्स बैंड आया था नया नया। उसमें जब लाल भाई जब गिटार बजा रहे थे और वो दूर गाना था तो बस उस वक्त से मुझे एक जो ना वो यानी कि जुनून सवार था कि यार मुझे जो है वो गिटार सीखना है। दैन शौक़ था, क्रेज़ आप उसको कह लें। सो फिर आगे पीछे हाथ पाँव मार के किसी न किसी दोस्त से गिटार लिया। गिटार लेने के बाद जनाब जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना तो फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि आप उसकी जुस्तजू में होते हैं। सो इसी तरीके से मुझे जो है वो हमारे ही एरिया में मुझे टीचर मिले, उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी मुझे गिटार्स के बारे में कि इस तरीके से हो। अब मैं अपनी बात पर आऊँगा दोबारा कि जब एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है ना आपके अंदर तो वो गॉड गिफ्टेड चीज़ आती है सामने। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो आई सामने तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे अंदर म्यूज़िक का सेंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैंने कहा यार बस ये मुझे नहीं पता कैसे, हालांकि हमारा कोई ऐसा यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई मेरे वालिद साहब या उनके कोई जो है वालिद साहब मतलब आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ हो। बस एक चीज़ है कि बस ये मेरे अंदर आया और तो सीखने के बाद ऐसा ऐसे जब मैंने गिटार पे थोड़ा सा अबूर हासिल कर लिया, थोड़ा सा मैं अपने आप को मतलब अभी भी यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। सो उसके बाद 2008 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। हमारा यहीं रांची का बैंड था और उसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने वहाँ पे जो है ज्वाइन किया। बस वो हम लोग जो है वो शोज़ रात को करते थे, जो है वो जा के पार्टीज़ में, गिग्स में, इधर उधर। उसके बाद अच्छा उसमें होता ये था कि शो जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, हम आर्टिस्ट को बेसिकली मतलब प्ले करते थे। तो उस आर्टिस्ट के आने से पहले एक बैंड परफॉर्मेंस होती थी जिसमें होता ये था कि बैंड का कोई भी मेंबर सॉन्ग गाएगा, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि मतलब स्टार्ट मुझसे होता था वहाँ पे।
तो उधर मैं स्टार्ट करता था, ऑब्वियसली मैं गिटारिस्ट था तो मैं जो है स्टेज पे आगे खड़ा होता था। तो वहाँ पर लोग हमारे जो बैंड मेंबर थे वो ये कहते थे कि अजीम भाई आप गाएं, आप ही गाएं क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है, हमसे तो बहुत अच्छी है, आप ही गाएं। तो मैं कहता ठीक है। तो उधर से थोड़ा सा गा के ना आवाज़ और निखर गई थी। ऑब्वियसली जब इंसान को म्यूज़िक का सेंस होता है, आपको पता है कि आप एक यानी कि म्यूजिशियन हैं, तो आपको पता है यार मुझे अपनी आवाज़ अपने इंस्ट्रूमेंट से कैसे मैच करनी है। तो इतना सेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जिक्र किया स्ट्रिंग्स को, आपने इनिशियली देखा, फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन इंस्पिरेशन है और कौन सा जॉनर है? क्योंकि आपकी 2015 में एल्बम भी आई लौट आवना, अभी हाल में ही आपका एक कमाल गाना जो कि हर किसी ने देखा होगा, जोगी के नाम से वीडियो भी इज देयर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कौन सा जॉनरा है जिसमें आपका ज़्यादा अबूर हासिल है और वो कौन से जॉनराज हैं जो फ्यूचर में हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए मैं जॉनरा इज़ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है पॉप म्यूज़िक। सॉफ्ट रॉक इज़ बेस ऑन यू नो थोड़ा सा उसमें रोमांटिक टाइप और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक जैसे मेरा जो पहला एल्बम आया था उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग, एक्चुअली मेरा सीन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रिंग्स यू नो स्ट्रिंग्स तो हर कोई जानता है, तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे ना उससे बड़ा इंस्पिरेशन थी मुझे कि यार दूर अब लाइक दूर पॉप म्यूज़िक है, ठीक है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन कि यार गिटार के साथ जो है ना वो एक आवाज़ अपनी मैच करके और फिर गाना उसी थीम के अंदर रहते हुए तो जो स्ट्रिंग्स की थी, लेकिन कॉपी नहीं किया उसको। ऑब्वियसली एक अपनी यानी कि फीलिंग थी अंदर किस तरीके से एक अगर कुछ अपना मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना एल्बम जो मेरा जो है वो लौट आना मेरा जब लॉन्च हुआ था, उसमें जो पहला सॉन्ग था एल्बम का वो था लौट आना। तो उसमें अगर आप जो है वो सुनेंगे उसमें लौट आवना कह रहे थे अभी, अगर हम मैं किसी को लौट आवना नहीं कह रहा था। कहीं देखे कहते एक सिंगर एक आर्टिस्ट का जब तक कहीं कोई दिल का दर्द ना हो तब तक वो जो है ना डेप्थ नहीं आती, तो ये लौट आवना के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। उसके पीछे बस ये था कि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी इस तरीके से आपको बताता हूँ कि लौट आवना हमने इस तरीके से गाना बनाया था कि एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उनकी थोड़ी सी जो है ना वो असल में राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, उनकी थोड़ी सी शायरी लिखी हुई थी। तो हम बैठे हुए थे, मुझे ये एडवाइस देने वाले भी वही थे कि यार अपना कुछ करके और तुम मार्केट में आओ। क्या ठीक है यार। तो उन्होंने मुझे अपनी ये शायरी दी थी जिसमें सिर्फ स्टार्ट की लाइन थी कि तुम लौट आओ ना मेरी राहों में मेरी बाहों में। अब इसको बनाना था। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चलूँ कि कंपोजिंग भी एक अलग आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिलसिला होता है आमदों का, कि आमद होती है, लाइन आती है कोई दिमाग में, वो कोई धुन बनती है, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए ना, लेकिन तो आपको मैंने बताया कि वो गॉड गिफ्टेड जब चीज़ होती है और आपके अंदर जब वो यानी कि पैशन और वो जो यानी कि एक रजीपन आपके अंदर होता है ना वो, तो आप फिर नहीं सोचते कि यार ये मुश्किल है। राइट। सो ऑफ कोर्स फिर आपने कॉन्सर्ट्स किए, जगह जगह किए, इंटरनेशनली गए, दुबई में आपके कॉन्सर्ट्स रहे, ऑफ कोर्स एक फ़ैन फॉलोइंग आती है। तो लौट आवना की इंस्पिरेशन से कोई पहले तो था नहीं, आपने जैसे बताया, तो फिर कोई लौट के आया? नहीं, लौट के फिर एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। सो एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस फील्ड में एज प्रोफेशनल्स आना चाहें तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, फैमिली की तरफ से एक प्रॉब्लम आता है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, लोग ज़्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं करते। आपकी जर्नी में जब आपने लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया कि यार मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, तो कोई चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया? और जितने यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिवाइव हुआ है कुछ पाकिस्तान में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया, कुछ डिफरेंट अंडरग्राउंड आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस आ रहे हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्राउडली ग्रेनिच के भी कुछ बैंड्स थे जो उसमें जीते हैं। सो एक रिवाइवल आ रहा है, बट आपकी इस जर्नी शेयरिंग के अंदर आपका कैसा सफ़र रहा और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली देखें, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इतनी आसान फील्ड नहीं है। हम किसी आर्टिस्ट को देखते ना यार, कि कोई आर्टिस्ट आया, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो बड़े फेमस हुए हैं,
आर्टिस्ट आया, हम ये देखते हैं स्टेज पे, यार आते ही मशहूर हो गए, आते ही मशहूर। यार आप उनकी हिस्ट्री देखो पहले कि वो आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे ना, वो आए आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर, आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री में जाते हो ना कि वो बंदा कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको पता चलता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी है, वो अब जाके स्टेज पे आया है। तो सोने का चमचा लेके हर कोई 1000 में से एक कोई पैदा होता होगा जो आते ही जो स्टेज और पे आज के ज़माने में जो एकदम से जो लोग वायरल होते हैं वो एकदम से फेड अवे भी हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूट टू ऑल दोज लेजेंड्स इन पाकिस्तान जो 20, 30, 40, 50 साल से आज भी हैं, और जो हमारे लेजेंड्स हमें छोड़ के जा चुके हैं वो ताहयात जिंदा रहेंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक वी हैव। सो सर, बहुत बातें हमने बड़ी कर ली, लोगों को अब महरूम नहीं करते मजीद, कुछ आपका आर्ट टैलेंट पोटेंशियल लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कुछ आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? अपनी जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है मेरा जोगी, उसकी चंद लाइनें में बिल्कुल देखी है, आप लाइव भी सुन लें कि किस तरह के, और अगर नहीं देखी है तो अजीम खान AK के पेज पे जाके या अजीम खान AK के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जोगी के नाम से वीडियो है वो देखें ज़रूर, और इसको एंजॉय करें और शेयर करते रहें। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई, राहें नई, दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग ये, इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। वेल बहुत ही एक कैची और मेलोडियस इसकी बीट थी, एंड आई एम श्योर कि ये गाना, क्योंकि मैंने खुद वैसे भी सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप प्लीज़ जाके सुनिएगा, अजीम खान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जोगी की वीडियो देखें, क्योंकि आपने इस गाने में ना बड़ी वेरिएशन लाए। स्टार्ट होता है एक स्लो टोन से, फिर पूरी एक स्टोरी बिल्डिंग है, आप वीडियो के साथ देखें तो ऑफकोर्स वो स्टोरी की थीम भी दिखती है। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो टॉक अस थ्रू दैट। इंस्पिरेशन इज़ दैट के ऐसे ही मैंने बताया आपको कि एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, तो बैठे बैठे एक ऐसी आया कि यार कुछ अलग टाइप का बनाता हूँ, कमर्शियल कुछ होना चाहिए जो ये वेडिंग्स वगैरह में भी चले और हर जगह चले। तो क्योंकि मेरे सॉन्ग जो है ना वो ज़्यादातर आप सुनेंगे तो वो सिर्फ एक वो इस तरह के हैं कि वो ड्राइविंग पे आप सुन लें, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं सुन लें, लेकिन मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए ना, हर आर्टिस्ट के पास एक ना एक यानी कि एक ऐसी वैरायटी होती जो उसकी यानी कि थोड़ी सी कमर्शियल हो जाती है वो। मैंने कहा यार ये जो है वो करके देखते, तो ऐसी ये लाइन थोड़ी जहन में आई थी, तो मैंने कहा यार कुछ है इसमें ना जो जान है, मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। मैंने कहा यार फिर बाद में देखेंगे। फिर मुझे एक ऑफ़र आई, एक हमारे ही मतलब यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, वो एक मतलब राइटर हैं, ये अभी उन्होंने वो लिखी मूवी, क्या नाम है इसका, हीर मांझा, तो उसके राइटर भी हैं, वैस कुराई बलोच है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, कह रहे हैं यार हमारी मूवी के लिए एक सॉन्ग बनाते हैं कुछ कमर्शियल जो है टाइप का, जो थोड़ा सा वेडिंग टाइप और ये हो। तो मैंने सोचा यार एक दिन मैंने एक पेलोडी बनाई थी, उसी को निकाल के दोबारा से कुछ करता हूँ। तो मैंने ना वो निकाली मेलोडी और उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, कुछ करा। तो स्टार्टिंग की लाइन्स थोड़ी, फिर वही आमदें आती रही, थोड़ा सा बैठा जो है। फिर मैंने कहा कि यार एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा पहला एल्बम आया था मैंने वो खुद लिखा था पूरा, इसको मुझे खुद मैं जो है इसको यानी कि सोच रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा बन सकता है, इसको मैं लिखवाऊं तो किसी
अच्छे कोई यानी कि नोन जो है वो राइटर से लिखवाऊँ ताकि थोड़ा सा नाम हो। तो मैंने SK जो है वो खलिश हमारे भाई हैं एक, और बहुत से राइटर भी हैं, आजकल OSTs भी लिख रहे हैं ड्रामों की, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार कि खलिश भाई इस तरह के एक जो है वो मेलोडी है, उस पर कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई वेडिंग टाइप जो है ना वो लिख के दें। बहरहाल वो आए मेरे पास, हम दोनों बैठे, हम तो वो दोनों की कोलैबोरेशन से वो यानी कि लिखा हमने। और ये जो लाइन है, जो इसकी जो पंच लाइन है, ये मुझे खलिश भाई ने ही लिख के दी थी। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैंने कहा यार खलिश भाई सैल्यूट है यार आपको, क्या जबरदस्त आपने कंप्लीट पैकेज बन गया। तो और ये जितने लोग हैं हमारे, उन्होंने जो देखा वो वाकई अगेन रिपीट के, आप ये अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड डू कमेंट, क्योंकि कमाल चीज़ है, स्पेशली सच ए प्राउड मोमेंट के पाकिस्तानी म्यूजिक में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले एक मेडले आखिरी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मेडले तो बहुत सारे हैं। एनीथिंग यू नो, जो आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टेज परफॉर्मर है, क्राउड झूम जाता है, सो एनीथिंग फॉर सिंग अलोंग, जो कि हमारे ऑडियंस उस तरफ जो हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेडले आप साथ गाएंगे मेरे? नहीं, फिर आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल दिल मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले जिन बेरिए। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। शोला जो भड़के दिल मेरा तड़पे, रंग जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये इसी नोट के ऊपर हम एंड की तरफ आएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा आर्ट के साथ एक रिलेशन है, जो एक किसी भी यंगस्टर की लाइफ के अंदर जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, कोई भी एक क्रिएटिव अगर आपके पास हॉबी है या हैबिट है, that keeps you away from lots of negativity, and this is something that is really good. So sir, आपका बहुत शुक्रिया that you joined us on lighter note. But last question is कि आपका आज इस प्रोग्राम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज रियली गुड यार, और बड़ा मज़ा आया। आप लोग आए और
इधर, और आप लोगों ने आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आज संडे है, संडे को बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा दिन गुजरता है, वरना तो बोरिंग जो है ना वो डे जो है गुजरता है। लेकिन आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा कि टाइम भी पास हो गया और एक थोड़ा सा म्यूज़िक भी जो है वो हो गया। अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर हमारे पास, और आपने लेकिन खिदमत करने का मौका नहीं दिया बिल्कुल हमें। नेक्स्ट टाइम खिदमत का मौका देंगे ज़रूर, एंड द प्लेजर वाज ऑल माइन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लानिंग्स एंड व्हाटएवर यू प्लान टू डू। बहुत माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, और स्पेशली जो आपकी परफॉर्मेंस है वाकई मज़ा आ गया। तो गाइज बिल्कुल आपने सुना आज अजीम खान को, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कमाल के सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब एक सिंगर लिख रहा होता है, एक उसमें आमद आती है, तो ये वो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं कि कब किस तरह से क्या चीज़ जहन में आती है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं बड़ी आसानी से उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको रियलाइज करना ज़रूरी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन फॉर टुडे। बिल्कुल अपना फीडबैक दें ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हमें बताएं कि फ्यूचर में आप लाइटर नोट पे किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, और अपना खास ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा।
कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, और नहीं भी अच्छा गुजरा तो इस प्रोग्राम के थ्रू ये ख्वाहिश है कि आपकी शाम जो है वो बहुत ही खूब गुजरे। शाम बखैर। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है शाम अपनी इंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। आज वीडियो में हम आपके सामने एक और सोशल इशू उठाकर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सामने रखेंगे। उनका एक अकवाल है, बेशुमार उनके अकवाल हैं और हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर भी होता है और साथ साथ हमारे अंदर एक मोटिवेशन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। कायद आज़म ने एक जगह ये भी कहा कि इज्जत और वक़ार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है, इदारों की इज्जत और वक़ार नहीं जिम्मेदारियां होती हैं। अब कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बोली है। आप आखिरी वाली बात में कितना वज़न है, तो आप देखें कि जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज़ जो है वो आपकी जो है उसको सारा जवाब मिल जाता है। तो बड़ी खूबसूरत बात हमने आज शाम आपके सामने ये शेयर की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बात पसंद आई होगी। सोशल इशू क्या है? सोशल इशू ये है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो एक्चुअली सोशल तो ऐसा नहीं था। एक निजी टीवी है, वहाँ पर एक गेम शो आ रहा था और उस गेम शो में ऑन एयर जो है वो एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो एक बंदे को, यानी कि जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था उस शो में, उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और होस्ट को, यानी कि उसके प्रोग्राम के जो मेज़बान थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गेम का कार्ड जो है वो थ्रो किया और वो गेम शो जो है वो एग्जिट करके चले गए। और ऑन एयर जो है वो, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी प्रोग्राम, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने स्टेट को और दुनिया भर में आपके चैनल्स को देखा जा रहा होता है, और जो इस तरह के बच्चे हैं ये हैं तो बच्चे, लेकिन इनकी तरबियत का पे बड़ा सवाल उठ जाता है कि किस तरीके से आपने माशरे में हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो वो ऑन एयर जो है वो थप्पड़ मार रहे हैं। बेशक आपका आपस में मजाक हो और आप थप्पड़ मार रहे हैं उसको। एक ये बहस हमने देखी और दूसरा लोगों ने कहा कि एंकर को इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। एंकर ने क्या अल्फाज अदा किए वो आपके सामने रखेंगे। एंकर ने कहा कि कहाँ से बुला लेते हैं इन जाहिल लोगों को, और बहुत ही बदतमीजी से कहा। तो सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है डिस्कस हो रही है कि क्या फैसल कुरैशी ने सही बात की या नहीं की, ये आपने फैसला करना है हमारी इस वीडियो को सामने रखते हुए कि आप देखें कि आप क्या समझते हैं कि फैसल कुरैशी को गुस्से में ये बात की उन्होंने, तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा फीडबैक है, वो शायद काफ़ी दिनों से इस ऑडियंस को टॉलरेट कर रहे थे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फैसल कुरैशी, एक बहुत अच्छे अदाकार हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैंने हमेशा उनको अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हुए देखा है। और यही वजह है कि आप जब अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो आपके आने वाले भी होंगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और फिर आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी हमारी इज़्ज़त करें। तो रिस्पेक्ट वाला मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फैसल कुरैशी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने गेम शो जो है वो एग्जिट कर दिया और छोड़ के चले गए उस वक्त और कहा कि जाहिल लोग। लेकिन ट्विटर पर हैशटैग के साथ, फेसबुक पर लोग जो है फैसल कुरैशी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उन बच्चों ने ये ऑन एयर सही किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो इस तरह की जो हरकत हैं और मुख्तलिफ मुग़ल्लिज़ात भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने शो पे, वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये मिला जुला रुझान है, मिला जुला रद्द अमल है, इस हवाले से जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं।
तो ये मामला हमने सोचा कि आपसे डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इस वक्त आपकी शाम जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। और रात की क्या प्लानिंग है वो भी आप हमें बताइए कि रात में आप लोग किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। आजकल एक्टिविटी क्या है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और गर्मी में तो बस दिल नहीं चाहता कि कुछ खाएँ, लोगों की ख्वाहिश होती है दिन में लस्सी पिएं, रात में जो है कुछ लाइट सा ले लें। अच्छा, सिंध की आवाम जो है वो उनके खाने का क्राइटेरिया डिफरेंट है गर्मी में, और पंजाब की आवाम के खाने पीने का क्राइटेरिया डिफरेंट है गर्मी में। तो बड़ा मज़ा आता है जब दोनों सूबों के लोगों को कंपेयर किया जाता है, तो उनके जो रेसिपीज़ और उनके जो खाने और पकवान होते हैं वो डिफरेंट होता है। और इस वक्त यकीनन आप लोग जो है प्लानिंग कर रहे होंगे कि रात को क्या खाना है। जो भी खाइए अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। जो कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशानी है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ़ में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आपको खुशामदीद कहेंगे हमारा ये प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ये उम्मीद करेंगे कि ये जो शाम है और जो आने वाली रात है वो आपकी अच्छी गुजरे। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हमारी और आपकी ज़िंदगी में हैं, और हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उन मसाइल का हल हो जाए, तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो किसी हद तक कुछ लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं और किसी हद तक कुछ लोग कामयाब नहीं होते। फिर हम लोग इतने ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए तो अपने लिए तो वक्त निकालना हमारे लिए मुश्किल ही हो गया है। तो थोड़ी सी कोशिश इस प्रोग्राम के थ्रू है कि आपकी शाम की चाय को हम बहुत खूबसूरत बना सकें और थोड़ी आपसे जो है चिट चैट कर सकें। अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक सोशल इशू उठाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको
देखने को मिलता है, और उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन मसाइल का हल भी हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, अम्मी कोई बात भी आप शेयर करके यहाँ पर रख सकते हैं कि क्या ये जो सोशल इशू है इस पे आपकी राय क्या है। प्रोग्राम में सबसे पहले अच्छी बात शामिल कर लेते हैं, और वो ये है कि कायदे आज़म के बहुत सारे अकवाल जो है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कायदे आज़म के अलावा भी आपके सामने मुख्तलिफ अकवाल आते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कुछ सेकंड आप सोचते हैं कि काश इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो किसी हद तक जो है हमें याद रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनको जो है अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करते हैं या कर भी चुके होते हैं। एक बड़ा अच्छा कॉल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, बानी है पाकिस्तान, वो आपके सामने रखेंगे, फिर प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे। कॉल ये कि उन्होंने कहा कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, और इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। कायदे आज़म ने कहा है कि इल्म की जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, और ये जो ताकत है इल्म के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमें मिल रही है, और इससे आप लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। अब आप देखें कि इस सेंचुरी में और इस मॉडरेट दौर में भी इल्म, नॉलेज, सारा काम जो है इसी पर बेस है, और इसी तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, और इसी की मिसाल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन बनानी हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे, आप कलम नहीं उठाएंगे, आप लिखेंगे नहीं। अब ये बात नहीं कि सिर्फ लिखना पेपर पर है, आप टाइप करने को भी और आप गूगल कर को कुछ सर्च इंजन पर सर्च करने को भी आप इल्म या पावर कह सकते हैं। चलें जी, सोशल इशू उठाते हैं। सोशल इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से नादिया हुसैन की वीडियो वायरल हुई है, और लोगों ने उस पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने कहा कि नादिया हुसैन ने गलत किया, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। एक गरीब नौकरानी काम कर रही थी, उसको डांटा, उसको जलील किया, उसके साथ बदतमीज़ी की। लेकिन दूसरा पहलू हमने ये भी देखा कि लोगों ने ये भी कहा कि उनके साथ सही हुआ, और उन्होंने एक गफलत बरती जिसकी वजह से घर में जानी और माली नुकसान हो सकता था। वो स्टोरी क्या थी? नादिया हुसैन की एक निजी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हकाइक सामने रखे। वो हकाइक हम भी आपके सामने रखते हैं। कि जब बिजली झटके मारे तो पीछे से मेन स्विच ऑफ कर दिया करो। ये तुम्हारा तो उपकरण है ना तुम्हारी इस मोबाइल में, ये समझ नहीं आती तुम्हें? जब भी बिजली झटके मारे तो तुम पीछे से मेन स्विच ऑफ करोगी, क्यों नहीं तुम्हें याद रहता है? महीने में दूसरी दफा ये मशीन चली है सिर्फ तुम्हारी अकल की वजह से, समझ ही नहीं आती है। बिजली का बिल अलग, ऊपर से ये दूसरी दफा मशीन कौन भरेगा इसका बिल? तुम्हारी वजह से हुआ ये, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। दफा हो जाओ यहाँ से मेरी नजरों से, तो किसका बिल भरोगी? पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा और फैशन डिजाइनर नादिया हुसैन ने वायरल वीडियो से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और फिर बिजली की गफलत ही नहीं, जानी नुकसान का सबब भी बन सकती है। लिहाजा अगर वायरल वीडियो एक इश्तिहारी मुहिम होने के बरक्स हकीकत भी होती तो मेरा अपनी मुलाजमा के साथ यही सलूक होता जो इस वीडियो में आपने देखा। नादिया हुसैन ने बताया कि इनके पालन में भी अक्सर लड़कियां बास औक़ात ऐसी ही गफलत बरती जाती हैं और ऐसी ही गफलत करती हैं। ये एक या दो के लिए नहीं बल्कि पूरे सैलून में मौजूद हर इंसान के लिए ख़तरे का वजह बन सकती है। नादिया के मुताबिक इसी गफलत और गैर जिम्मेदारी के सबब उनके सैलून के कई बरक़ी आलात ख़राब हो चुके हैं और उनके सैलून के माइक्रोवेव ओवन फट चुके हैं। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। नादिया हुसैन का ये मौक़िफ़। अदाकारा का कहना था कि मेरी मुलाजमा से की गई गुफ्तगू को माशरे में हैसियत के दर्जे से जोड़ा गया है और गलती और गफलत में हैसियत मायने नहीं रखती। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। इस पर आपको मालिक या बॉस की जानिब से डांट डपट की जा सकती है और मैंने भी वही किया। नादिया हुसैन ने गुफ्तगू के दौरान अपनी मुलाजमा की गफलत से मुतालिक एक वाक़े पर भी शेयर किया और बताया कि हाल ही में मेरी ज़ाती मुलाजमा की गफलत मेरे और अहले खाना के लिए हादसे की वजह बन सकती थी। नादिया के मुताबिक मुलाजमा ने उनके बच्चों को बात देने के बाद हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद वो हेयर ड्रायर बंद किए बगैर बच्चों के कमरे से बाहर चली गई। फैशन डिज़ाइनर का कहना था कि वो ड्रायर मुसलसल
3 घंटों तक बच्चों के रूम में उसी तरह चलता रहा और 3 घंटों के बाद उन्हें बच्चों के कमरे में दाखिल होकर ड्रायर को खुद बंद करना पड़ा। लेकिन उस वक्त प्लग इतना गर्म था कि उन्हें स्विच से हटाने के लिए भी उसे कपड़े से पकड़ना पड़ा। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल नादिया हुसैन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो घरेलू मुलाजमा को स्विच बंद करने और मोबाइल में मगन रहने पर डांट डपट करती दिखाई दे रही थी। नाज़रीन, पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी है। अब आप हमें बताइए कि नादिया हुसैन ने सही किया या गलत। आप कमेंट कीजिए नीचे, अपना मौक़िफ़ रखिए सामने। और आप समझते हैं कि अगर नादिया हुसैन ने गलत नहीं किया या आप समझते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी ये बात सामने रखें। दोनों बातों में से आप देखें कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपनी बिजली को बचाएं। अपने घर में जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती है, चाहे वो आपके किसी काम की भी ना हो, गैर ज़रूरी है तो वहाँ पर जो है उसको बंद कर दें, ज़्यादा रोशन ना रखें, क्योंकि 5-6 बजे के बाद से वैसे भी आप देखें कि आपकी जो बिल है वो ओवरचार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बिजली सेव करना मैं समझता हूँ बाहैसियत कौम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये तो नादिया हुसैन का मामला आपके सामने रखा है और अब ज़रा कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। शाम का वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगर दफ्तर में थे, दफ्तर से घर आ गए होंगे या कहीं बाहर शॉपिंग पर गए हुए थे, घर पर आ गए होंगे, तो लिहाजा अपनी शाम की चाय को बहुत खूबसूरत बनाइए। मैंने ये फ़िलहाल ये चाय पी ली है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले और हम उम्मीद करते हैं कि आप चाय अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे। बाय द वे, कराची का मौसम बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है। प्लान कीजिए अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने का, कहीं बाहर जाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। ज़िंदगी नाज़रीन बहुत छोटी सी है, सबकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, स्ट्रेस है, उसको अपने ऊपर हावी ना कीजिए। थोड़ा सा वक्त अपने और अपने अहले खाना के लिए निकालिए, दोस्तों के लिए निकालिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। अपना आज का दिन, अपनी आज की शाम जो है वो बाखैर बनाइए, एंजॉय के साथ बनाइए। हमारा ये प्रोग्राम शाम बाखैर देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे ये आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Geo Sports Box, जो कि आप देखते हैं बिल्कुल Greenwich TV पे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपकी हमारी मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड थर्सडे एट 8 PM और आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे
नज़र डालेंगे हम क्रिकेट पे, और क्रिकेट में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है। नॉट वेरी एक्साइटिंग फॉर द पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि इंग्लैंड की समझ लें बी या सी टियर टीम, जो कि बिल्कुल मैच शुरू होने से 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि ये टीम और ये स्क्वाड आपस में साथ में खेलेंगे, उनसे पाकिस्तान 3-0 वाइट वॉश हुआ है। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक इंग्लैंड की वीकर टीम है, पाकिस्तान के पास सीरीज़ जीतने का सुनहरा मौका है। सीरीज़ जीतना तो दूर, तीनों मैचों में वनडे के एक मैच भी पाकिस्तान ना जीत सका, और वो 3 मैचेस में क्या कुछ हुआ उस पर नज़र डालेंगे। और अब जो T20 का बिल्डअप है उस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लैंड का स्क्वाड, जो कि एक फुल स्ट्रेंथ इन इंग्लैंड का स्क्वाड है। तो अब पाकिस्तान का क्या होगा उस पर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जारी है, और ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि पाकिस्तान इसके बाद वेस्ट इंडीज़ से खेलेंगे, और वेस्ट इंडीज़ क्या कुछ कर रहा है उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। 3-1 से सीरीज़ लीड कर रहा है वेस्ट इंडीज़। पिछला चौथा T20 जो खेला गया, ऑस्ट्रेलिया फाइनली जीतने में कामयाब हुआ, और उसका भी जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है मिचेल स्टार्क को, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 लगातार डॉट बॉल्स की, वो भी हार्ड हिटिंग एंड्रे रसल को। तो इस मैच में भी क्या कुछ हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द होल समरी एंड स्कोर कार्ड ऑफ द गेम्स, आपसे हम पूछना चाहेंगे ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube, हमारे फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई ऐसा हिस्ट्री फैक्ट स्पोर्ट का जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डू राइट टू अस एंड लेट अस नो कि वो कौन सा इवेंट है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं और आप चाहते हैं कि हम फुली कवर करें। तो नाउ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़। चौथा T20 खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया से पहले 3 लगातार T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार चुका था वेस्ट इंडीज़ से। 5 मैच की सीरीज ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ अपने नाम कर चुका था, और चौथे मैच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 189 स्कोर किया 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें एरन फिंच जिनका रिकॉर्ड भी है मोस्ट रन्स का हाईएस्ट स्कोर का T20 में, तो उन्होंने 53 रन की बारी खेली। 37 गेंदों पे 3 छक्के और 5 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। वेयरएज मिचेल मार्श चिप्ड इन विद 75, 44 गेंदों पे 6 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल था। थैंक्स टू दीज 2 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया ने 190 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो कि जिस फॉर्म में लग रहा है कि जी 200 रन में इनके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ पिछले मैच में हमने क्रिस गेल को वापस फॉर्म में आता देखा। एक अरसे दराज बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने क्रिस गेल की जानिब से हाफ सेंचुरी देखी, और जिसका क्रेडिट उन्होंने जाके दिया कैरन पोलार्ड को कि उन्होंने उनको एक पेप टॉक दी, याद दिलाया कि क्रिस गेल की इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में और वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए क्या है। इसके बाद उन्होंने अपनी इनिंग्स डेडिकेट की कैरन पोलार्ड को। हाउएवर चेसिंग 190, वेस्ट इंडीज वर ऑन ट्रैक, बड़ी शानदार बैटिंग रही। लंडन सिमल्स ने शुरू में 72 रन बनाए, 48 गेंदों पे 2 छक्के और 10 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। एंड्रे रसल और फैबियन एलन वो 2 आखिर में टेल पे बल्लेबाज थे, जिन्होंने मैच को तब्दील कर दिया। 2 ओवर में 36 रन दरकार थे, जब ओवर में मेरिट को पहले एंड्रे रसल ने एक छक्का लगाया, सिंगल लिया, और फिर फैबियन एलन जो कि PSL में भी पाकिस्तान के खेले थे, फैबियन एलन ने 3 लगातार छक्के लगाए और 19वें ओवर में 25 रन कंसीड किए। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन दरकार थे, और एंड्रे रसल क्रीज पे मौजूद थे, जहां एंड्रे रसल ने आखिरी ओवर में 5 लगातार डॉट बॉल्स खेली, और जो गेंदबाज थे वो मिचेल स्टार्क थे। 3 गेंदें ऐसी थीं जो एंड्रे रसल के बैट से कनेक्ट हुई, उनके पास सिंगल या डबल लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं रन लिया, और आखिरी गेंद पे जब 11 रन चाहिए थे तो एंड्रे रसल ने एक छक्का लगाया। अ लिटिल टू लेट, बट वेस्ट इंडीज एंडेड अप विद 185 फॉर 6। क्रेडिट जाएगा यहाँ तमाम मिचेल स्टार्क को कि आखिरी ओवर में एंड्रे रसल के अगेंस्ट 5 डॉट बॉल करना। एट द सेम टाइम एंड्रे रसल से सवाल रहेगा कि जो 3 गेंदें उन्होंने कनेक्ट की थी, अगर उन 3 गेंदों पे वो 2 रन भाग लेते तो आखिरी गेंद पे 11 की जगह 5 रन दरकार होते और वो छक्का लगा के मैच जीत सकते थे। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो एंड्रे रसल ने किया क्या वो ठीक था या गलत। नाउ मूविंग ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। सीरीज कुछ ऐसी हुई कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान जीतेगा, एक इंग्लैंड की वीकर टीम है, लेकिन हर चीज़ उलट हुई।
पाकिस्तान डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट। बैटिंग लाइन हमारी कोलैप्स की, पहले वनडे में 141 पे आउट हुए, 21 ओवर 5 गेंदों में आसानी से चेस डाउन किया इंग्लैंड की टीम ने। क्रॉली जो उनका डेब्यू था जी, उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए, दीगर बल्लेबाज जो इतने फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए। फिर सेकंड ओडीआई पाकिस्तान ने कम बैक किया, हसन अली ने 5 आउट किए, 248 का टारगेट था और वहाँ भी पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ और 195 पे पाकिस्तान ढेर हुआ, जिसमें सऊद शकील की निफ सेंचुरी थी, हसन अली ने एंड में आके कुछ 3-4 छक्के लगाए, बट पाकिस्तान 52 रन से मैच भी हारा। और उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो डिपेंडेबल बैट्समैन है वो रन नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान का बैटिंग फेल हो रहा है। तीसरे ओडीआई में हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुंची, बाबर आजम ने 158 स्कोर किया और 14 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। रिजवान चिप्ड इन विद 74, 58 गेंदों पे 8 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। इमामुल हक ने 56 रन किए, 73 गेंदों पे 7 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, जबकि बाबर आजम ने इनिशियली 14 गेंदें डॉट बॉल खेली थी बिफोर कमिंग ऑफ द मार्क, और उसके बावजूद ही एंडेड अप विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100। दैट शोज प्योर क्लास। क्रिटिक्स फिर भी कहेंगे जी बाबर ने स्लो खेला, टीम में बहुत सारे खिलाड़ियों को निकाल दो, लेकिन क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग की बात करें 332 वाज अ गुड स्कोर। हाउएवर शुरू में अगर हम तेज़ खेलने पे जाते विकेट्स खो देते तो वंस अगेन कोलैप्स होता। आई इनकी बाबर आजम ने फाउंडेशन लेके और पूरी इनिंग्स बिल्ड करके चले हैं। जैसे मैंने कहा कि जब बाबर और रिजवान रन करते हैं पाकिस्तान 300 क्रॉस करता है, ऐसा ही हुआ। बाबर की 150, रिजवान के 74 हेल्प पाकिस्तान टू स्कोर 331 और पाकिस्तान ने मैच बराबर भी कर दिया था, क्योंकि जब इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया फिल सॉल्ट बड़ी तेज़ी से रन करते हुए आए, 37 रन फिल सॉल्ट ने किए और एक अच्छा स्टार्ट दिया। क्रॉली चिप्ड इन विद 39, लेकिन इंग्लैंड वर डाउन एंड आउट। 165 पे उनके 5 आउट हो गए थे, लेकिन रन रेट उनका काफ़ी तेज़ था। छठी विकेट पे हमने स्टैंड देखा, 129 रन का स्टैंड, जहां जेम्स विंस ने 102 रन की बारी खेली, 95 गेंदों पे बगैर कोई छक्का लगाए 11 चौके उन्होंने लगाए। फ्लुएंट बैटिंग, ब्यूटीफुल बैटिंग, और जेम्स विंस वो डिफरेंस रहे, लेकिन उन्होंने फ्लॉलेस इनिंग्स नहीं खेली। पाकिस्तानी फील्डर्स ने खूब कैचेस छोड़े, खूब रनआउट्स मिस किए और खूब मिस फील्ड की, जिसने मौका दिया इंग्लैंड को कि वो इस रन चेस को आसानी से चेस डाउन करें। जबकि यहाँ क्रेडिट देना होगा लुइस ग्रेगरी को भी, पीएसएल में भी खेले थे ग्रेगरी, और 77 रन 69 गेंदों पे 3 छक्के 6 चौके ग्रेगरी के बल्ले से आया। और ये जो 129 रन का स्टैंड था, फ्रॉम 165 फॉर 5 टू 94 फॉर 6, इंग्लैंड ने इस पार्टनरशिप में मैच बराबर कर दिया और इन दी एंड 3 विकेटों से मैच इंग्लैंड के नाम रहा। 3-0 से पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ और ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये एक इंग्लैंड की 3rd टियर टीम थी, जो कि सीरीज से 2 दिन पहले कंपाइल हुई। लड़कों ने आपस में खेला भी नहीं था साथ। 5 डेब्यूटेंट्स थे इंग्लैंड टीम में, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम लूजिंग 3-0। और अब T20 की बात है, 3 T20 खेले जाएंगे 16 जुलाई को नॉटिंघम में, 18 जुलाई को लीड्स में और 20 जुलाई को मैनचेस्टर में। ये सीरीज के 3 मैचेस खेले जाएंगे। स्क्वाड आपको बताते चले, इंग्लैंड की स्क्वाड के अंदर कप्तान ओवन मॉर्गन, टीम इज बैक, मोइन अली, जॉनी बेस्ट्रो, जेक बॉल, टॉम बैंटन, जॉस बटलर, टॉम क्यूरन, ग्रेगरी, जॉर्डन लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डेविड मलान, साथ ही साथ पाकिंसन जिनका डेब्यू हुआ और अब एज स्पिनर खेलेंगे T20 में, वेराज आदिल रशीद, जेसन रॉय और डेविड बिली। एक तगड़ी इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जबकि पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस के अंदर आप अरशद इकबाल को देखेंगे जो कि कराची की जानिब से खेले थे। पीएसएल में आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस बैक, मोइन खान के साहबजादे अपनी 6 हिटिंग कैपेबिलिटी की वजह से स्क्वाड में आए हैं। जबकि दीगर खिलाड़ियों के अंदर जिनका कमबैक हुआ उनमें इमाद वसीम हैं जो कि T20 स्क्वाड में ऐड ऑन होंगे, मोहम्मद हफीज़ ऐड ऑन हैं, साथ ही साथ मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ एन ऐड ऑन, और दीगर वनडे की जो स्क्वाड थी वही खिलाड़ी मौजूद होंगे। तो 16 जुलाई जो कि ऑफकोर्स अब नज़र है कल के दिन पे कि क्या होगा मैच में, क्या कुछ होगा, और जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। लूजिंग फ्रॉम अ 3rd टियर इंग्लैंड टीम, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है
पाकिस्तान टीम से कि वो T20 में कुछ अच्छा करें, लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान टीम के जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करते हैं। दैट इज़ द रीज़न देर कॉल्ड द कॉर्नर टाइगर्स। तो क्या करेंगे कॉर्नर टाइगर्स? मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में पीर के दिन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, उमर खान को दीजिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया।
और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी ये कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए और आपके अतराफ में या Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan, and I'm back with another show, another guest. And let me introduce my guest for today. Well, he is the founder of Fuel Your Business. He received the Man of the Year in 2019 in Business and Social Enterprise. He has won several awards for his public speaking skills. He's also the international mentor at Mentor X. In fact, that's not all. He's also a licensed meta coach, and he's a meta NLP practitioner as well. With a very warm welcome, Mr. Atish Bagola. Welcome to the show, sir. How are you? I'm very well, thank you, Mary. Thank you for such an introduction. It looks good when you read it, but when you say it seems very long. Well, absolutely. You totally deserve it for all the wonderful things you've been doing over the years. And, they say that hard work doesn't go to waste. So naturally, the things you've been doing for over the years, and now people are benefiting from the wonderful things you're doing, especially being a life coach, being a public speaker, a motivational speaker. You change lives every day. So that's an additional add-on. When you can do such great things. I mean, yeah, definitely. By God's grace, I can say that God has blessed me blissfully with so many things, so many warm blessings from so many people. And, I like saying one thing, it always starts with one conversation at a time, and the world gets changed one person at a time. So yeah, it's a real blessing to be around here and to be on this planet. And to be enjoying every moment of my life, be it good or bad. I just take it bad. The world is a show. We have to play the actor. Absolutely. Very well said. And that's the whole thing about life. You have to stay positive no matter what comes towards you. Talking about the positivity thing, we all know we're stuck in this COVID-19 situation. How is everything at your end in Mauritius? Well, so far, we've got we've got exactly 332 cases of COVID. And so far, inshallah, thanks to God's blessing, we have no further cases. And I believe we are taking all the necessary sanitation, hygiene precautions. And slowly but surely, the world is starting here in Mauritius, and work has started. Things are getting almost back to normal. But yes, normal is something else. The new normal is again something else. Absolutely. Very rightly said. The new normal is something else. So how has this whole time in this COVID situation changed you, or how have you been spending your time? How is life and work affected? Well, to be honest, it hasn't really affected me as a person, but it affected a portion of my mind, a portion of maybe of my soul, if I can put it that way. Because being a public speaker, I'm used to being with people. And now I'm getting used to being with technology, to people. So basically, it's a drastic change, if I call it that way. But as a person, I'm still the same. But maybe a few of my qualities have changed. I'm more IT conversant nowadays. Wow, I never knew I could be that IT conversant before that. And I had to grow a few of my skills as well, to be honest with you. So aside from technology, but the pace of my speaking, being in front of people, and then being alive on a screen,
I'm so used to speaking to real live people in front of me, the flesh and the blood. But now it's like hard screen, but I'm just making with it, I have to. So in any case, I have so many people around me whose life have changed. In fact, a few of my ex-colleagues, I would put it that way, who used to work in a firm, some of them had to accept the fact that they had to reduce their salary. Why? Because if they have to stay alive and survive and get inside the survival mode consistently, they will have to change with time. And change is such a drastic stuff, it's such a thing in itself. But politically, many things have changed as well. Tourism has gone down. Obviously, it's throughout the world. But I'm very glad when I'm going throughout the city this past week, as many people are actually giving food for free. An act, a charitable act that I wasn't used to see in a city. And now people are moving around in vans and vehicles around and giving food. Wow. A bread a day saves the lives a day. Wow, it's beautiful. Indeed, it is beautiful, and we've seen around the globe that whenever some difficult times occur, the whole humanity comes together, no matter what religion they're from, what country they belong to, what color they have. They all come together, and that's the most beautiful thing about humanity, that when difficult times comes, they all stand together, and that's like the most beautiful sign of them all. You mentioned the change, so definitely this new normal, as you mentioned, will require a lot of adaptation. The trends of working, the trends of business, the strategies of organizations, everything going to change a lot when the new normal will come. So how do you look at it? Well, that's one of the actually beautiful question, Umair. Thank you for that. One of the things, and this is why actually last week I created something on Facebook called I just created the page for it, but the idea was always there, doing it through my own workshops and seminars. It's about fuel your business. Now, be it a big dog organization, I'm not paid to really advertise big companies, but Google, Facebook, StreamYard, Zoom, all these, big fat organizations now are turning really to some hardcore reality. And that reality is being human through a screen. And this is something that we've seen throughout the course of time. People saw advertising, promotions through videos, live shows, and so on. But really talking to people, speaking to people using words and images, we call that the visual and the auditory are being used much more. However, I think that one of the things that we will have to do is to be not comfortable, but to get a little more comfortable in our uncomfortable zone. So I would say that before this COVID pandemic, humanity in general, we were in some sort of, I would say, comfortable zone. We know we had to go to work. We know we had, like, for example, kids, they knew they had to revise, and private tuitions were there, private schools were there, university were there, life-to-life interaction. But now the whole scenario changed. We're in fact talking about a massive change, a change which I call abysmal change, from in-person to on-screen. And I think that's the kind of change we're now talking about. It's a huge scale, Umir, to be in IT interactions. Absolutely, it is. But then again, I always mention this thing that around the globe, when we look at the large level, especially in the developing countries, even in Mauritius, not everyone is not comfortable with these platforms. Everyone is not ready to cope up and adapt to this IT things. Talking about the people who don't have the resources, people who are not that privileged, people from the rural areas, the workers on the daily wages, they have the issues, adapting to this online. So when you talk about people who are educated and who have the platforms, who can easily adapt, it's good for them. But we have to carry the people who actually
needs to be carried right now, because they don't even have an opportunity to use these IT-based things. So, as people and as a trainer, of course, what would you suggest? How can we, as humanity, as a group, as people, carry them together with us during these testing times? Well, again, I think today we are in such an era, at a point in our time, that I believe that every person, at least I'm talking about here in Mauritius, they have a smartphone. Maybe our old-aged people who are above 60, 65, in villages here in Mauritius, they might be having some real troubles now, because during confinement, they were not able to get out, to move around. And, when you come at a certain age in your life, mobility is such a problem. You want your heart to beat, you want your blood to be pumped inside your body. Okay, you might be doing some household chores, but it's not the same as going out, maybe paying your bills for electricity, for water. So for them, definitely, talking with a family has been, I think, one of the best things that happened to them. Why go far? Take my example at my home itself, my mom. I mean, I go out from the house at 7 a.m. in the morning time. I go to work, and then I'd return home, obviously around 6 p.m., 7 p.m., sometimes 8. My interaction with my own mom, who is above 65, has increased so much within this pandemic lockdown period. I'm having to, I like really having a food back again in my mouth. And I go back to my younger days. I'm not saying I'm old, but I go back to my younger days when I taste the salt, I taste the sweetness, I taste the spicy thing that she does. And I think one of the things that has happened really, really good, we say a coin has two sides. The bad side, we are seeing it already in the world right now. People are not there. So many people have passed away because of this virus. But look at the other side. People like me who, inshallah, we are getting blessed by our parents, spending time with them. Before the door of life closed on them, at least I'm accompanying them, at least her, and I would wish all the people do that. I was having a chat with one of my friends, and he has 2 kids, and he was saying to me the other day that, you know what, Hatish, most of the days I go to work, and then my wife is at home with the kids, and both kids will actually watch TV almost whole day, and then they do their homeworks or go to school, back again, TV. And most of the times they watch the French channel. So actually in Mauritius, a lot of people speak in French. English as well, not so much, but then our local language. But French is very, very common. So the other day he was home during the confinement that happened just 2 weeks back, or maybe last week. And his son, 8 years old, told him, Dad, so why are we seeing the meteo for Mauritius? Why are we not seeing the meteo for France? So my friend, his dad, said, well, son, we are in Mauritius. We are just looking at the meteo, the service. How is it going to be, the weather? The son just replied, Dad, but are we not in France? So an 8-year-old kid watching TV whole day, the French channel, thinking the entire life till his 8 years, he's in France. And even when he goes out, he still thinks he's in France. Wow, what a discovery. I never heard of such kind of story. And it's a story worth sharing, that kids, even if they're at home, through TV, they are learning so many things as well. It's not that they're just glued to the TV, but they're also learning things. They know what is happening around the world as well. So, yeah, the question is about adaptation, I think, at the end of the day. And that is something that's, we have a long way to talk about adaptation, Umir. Absolutely, and I totally agree to this, that in fact the youngsters these days, everyone who's getting born after the 2010s in this technology era, they're very bright and they're very sharp. Now the attention span and the things that they're adapting and they're absorbing at their early age, from by the time they're born to the age of 5, they have the capability to do wonders. So that is the time, you of course being a trainer as well,
whatever they learn, whatever they see, whatever they experience, builds their personality there and then, builds their confidence there and then. So it's very important and essential for even the parents to give them that freedom, to give them that space where they can explore themselves and where they can move on to, be something that they really want to, rather than forcing them to do things that they want them to do. So that's also very essential. Exactly, that's What part would of you like? very correctly, Umair. That's also an integral part of the personality as well. So we say that from the age of 0 to 3 years old, that's the maximum amount of neuroplasticity, which is the pathway that the mind, that the neurons, the nerve cells in the mind, in the brain, functions very well. That's a lot of memory cells getting introduced in the head of the kid. And as they move on, as a meta coach, we say that they are experiencing the world, they're experiencing the territory. Because you see, the map is not the territory. So the map that you and I, we both have, are so different. So my map is a territory for you, and vice versa. So I believe that as a trainer, one thing that has to happen really now is the relationship that parents have with their kids, to define that relationship very, very clearly. And it is now time than ever to really go and start narrating stories, beautiful stories, folkloric stories, stories that the kids can listen not just before bed or during bedtime, but stories where they can learn about, okay, how our ancestors used to live, how ancestors used to, in a way of saying, breathe, what were their activities, and that life should not be taken so at ease. We have to show that kind of gratitude, teach them humility at the end of the day as well, on the personality trait that, yes, Umair, you're talking about. Absolutely. And in addition to that, there's one thing that we notice a lot in the world, especially amongst the youth. We're noticing that there's a lot of depression. There's a lot of frustration in the youth around the globe, not just one country. Young people, at the age of 12, 13, 14, they are diagnosed with depression. There's less clarity of mind. They're very confused. They're very scared of their future. What has caused this amongst the youth around the globe over the years? What is that thing, and how can we overcome it? Because if our youth is affected, our future generations are affected. Very correctly said. One youth affected is a whole generation affected. Well, let's get back to this question about youth. When we talk about youth, we are talking actually just this, we call that this barrier between very young as a kid to getting slowly into becoming an adolescent, to slowly becoming 18 years old, a very young adult, and then to really becoming the adult and then the old adult, if I can use that word. Okay, so what's happening to our kids nowadays? Right. Think clearly. In days gone by, I would say in my days, when I was a kid, I used to play with the soil. I used to feel and smell the soil. And there was no problem if I didn't put my slippers on. I would still walk. Yes, my mom would maybe come and tell me, be careful, you might get worms. But guess what? It built my immunity. Let me talk about immunity now. One of the biggest problems kids are having is they all almost have bottled water. It's like they have sanitized their digestive system, if I can put it that way. Whereas in my days, we used to really go towards tap water. At least in Mauritius, you can have your tap water without any problem. So you can either boil it when the weather is bad, or you can just have a bottled water. But most of the times, we have tap water. So we have a very strong immune system here. And basically here in Mauritius, I'm talking about Mauritius principally because I live here, I understand the system a little bit more. So we have like 2 seasons, winter, summer, nothing more complicated than that. So our body, our human body has adapted to these seasons. But as kids, we see that parents now have to work more.
we see that suddenly parents have started realizing that financial literacy is a big problem in this country, or maybe around the world as well. It's a big problem. So because financial literacy is a big problem, parents find the necessity to go out and work. And what we mean by work is offering a service to a company, meaning that you have to spend time away from home, spend time away from kids. So let's look at kids now. Kids stay at home, go to school. I think the closest they get to are their friends at school. And they might also consider their teachers as parents in some sort, authoritative parents teaching them something. So as it is, I'm not saying parents are not doing their job. In fact, they are accomplishing a part of their duty to grow up the kid. But there's more than that. There's more than that. For example, spending quality time. So let me explain quality time now. One example of quality time is telling stories to kids about how they, the parents, used to spend their childhood, how they used to respect their mom and dad, their grannies, their forefathers, their grandparents, and ask the kid through the story, you know what, you could be doing better than me. I was a bit more naughty than you, but you could be less naughty than me. Now, this is a beautiful anecdote, if you can teach kids this. Number two, we see that nowadays the world seems like in a rat race. Wow. Maybe not even rat race, it's a jet race. So in my days, it was called rat race, but now I think it's much more jet race. So there's now, I think every kid nowadays, the modern kids, urban kids, I would call it that way, even in rural areas, kids have a mobile phone. Why? Looks like it's a substitute for a parent. Looks like it's a substitute for a grandma. Looks like it's a substitute for reading. They put their mobile phones everywhere. They think taking pictures of themselves will prove the worthiness of themselves. And I'm actually here talking about those young girls, about 15, 16 years old, trying to find their identity. And that's a big problem. Talking about girls, Amir, right. How many countries do not still allow girls to voice out? I mean, what I like is that in some Bollywood and Hollywood movies, at least we're teaching that our ladies, our future generation, the forebearers of humanity, do have and certainly needs to have their chance to speak, to voice out. It's not only for boys to voice out. Genetically, boys are much more aggressive by nature. It's very normal because we've got the genes of a caveman, and we had to protect ourselves. We had to go in that fight and fight, fear zone, run away or run after animals, things like that, or danger. So, but women used to stay at home, fending for their kids, giving the milk they need, giving the warmth of their arms around the kid. And I think that's one of the reasons why the female generation, the female species that we have, whom we have to respect so much, they need to have a platform to actually say much more about themselves, about how they feel and so on. So kids nowadays lack this kind of fending. Certainly. Totally. Other thing I would say, Umer, is because of this jet race or rat race, there is a tendency that parents in general, they feel that if the kid doesn't pass the exam, then their self-worth gets diminished, their self-esteem get diminished. And most parents then add this sort of pressure to say that, my kid is not doing brightly at school. But one thing we have to know that Albert Einstein failed his 6th grade 2 times. And potential is something else. Learning is something else as well. And implementation of learning is something else. Last word on that, Umer, is entertainment, I would say. How are kids now entertained? As human beings, we need to be entertained by something or by an event, by anything. So kids nowadays, because they have the easy way to go inside their mobile phones, chat to their friends, it has become the newest form of entertainment. Now, with COVID,
that could be the potential, I could say, danger now, because this is going to magnify a lot now. Earlier, they used to go to school, but now they are glued to the screen. Now it's the friends who've become families. It's the friends who've become the co-host of their life. So we have to be careful about that. And that's why I would say we need to take this pandemic in the most beautiful way, obviously by not forgetting that it's a pandemic as well. Right. So very beautifully explained and with a lot of details. I'll just summarize this, and what I think about it is starting from point one, that I totally agree with the fact that because of this jet race, the family time has been reduced. You're so much busy in your daily life trying to meet your ends that you forget to live that little things in life. You know, spending time with family, having dinner together, talking it out, how you spent your day or how was your day. So that family time matters a lot. The second thing that you mentioned is, be connected to your roots. That if you're connected to your roots, if you know what your ancestors, how your ancestors have spent their time, how they built whatever they built, what were their struggles, so you'll have the sense of realization. So that again, beautifully quoted. And once again, that in this generation, things are very easy for the youngsters. So if they, connecting it to the previous point, they have the realization and the actual worth of how things are done or how things are made. I think that would create more awareness and realization in this youngsters. So very rightly said. We'll include some messages now, and we have the first message is from our Honorable Chancellor, Madam Seema Mughal is here. Welcome, ma'am. And she says, Atish, looking forward that you take communication skills of our students in Pakistan as well. Seema ma'am, thank you so much for getting here and listening to us. Really, you can count me in any time. When it comes to education, anywhere in the world, you'll tell me. That would be a very, very warm pleasure to be. Yeah. I'll include some more messages. We have with us Mr. Imadul Kareem. He's also a brilliant teacher at Greenwich University Karachi campus. We have with us Tariq Iqbal. He is with us. We have with us Manur Faruqi. She says, yes, immunity is built by exposing them to the environment and building immunity to fight with the bacteria. The point you were quoting earlier. We have with us a student provost, Mr. Naveed Mughal. And he says, always a pleasure to listen to you, Atish. I totally agree to that. Thank you, Naveen. Always a pleasure to see you as well and speak to you as well at a point in time, definitely. Oh, we have Rab Nawaz, and we all love Rab Nawaz. He says, one of the best faculty member of Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. And I totally agree with that. I think Mr. Rub is a work alcoholic. He never lets anything down. I don't even know if his agenda is, if there is something in his agenda, on his agenda, which hasn't been done. He's a super jet. Indeed, he is. In my previous program, we were talking about it, that at one position, there are 5 people, and at one place, there's Mr. Rab Nawaz. And every time, Rab Nawaz, he'll outplay those 5 people when it comes to working. So he's such a workaholic and wonderful gentleman. So moving on with our conversation, we mentioned the roots. We mentioned the family time. Now, I'll take that personal example. I'll share a personal example of mine. Like, I was really close to my father, and we were so close, and we talked so much about his life, how he spent his life, the exact thing that you were talking about, that I actually relived his childhood, his early ages, his life. So I actually felt like I was there with him. Confident, I'm more realizing, and I've got more sense of responsibility. All because I was really close to my parents. I spent a lot of time with my parents. So I totally agree with the fact that the gap that we are facing in these days, these jet race days, that the parents are unable, though they want to,
but they're unable to spend that quality time when required. And by the time the parents get old and they want to build that connection, the gap is too much to be covered. So we need to fix this thing before it gets, gets the space bigger. Yes, this is one of the phenomenon that we call the generation gap, and well, we want it, we don't want it. In my opinion, I think generation gap is in our mind, in our parents' mind. Now, I would wish I become parent soon, but because I'm not yet. But there's one thing: I still have my parent, and I have to be honest that sometimes, and we have to be human as well at the end of the day, that sometimes as a young person, you are trying to find your happiness score in the span of time, and then you're looking to make a name for yourself, you're looking to make a life for yourself, and you're really using your survival genes almost every day to do something around you and for you, hopefully for others as well. So what happens in this time is, my mom, for example, is at home. Now, when I come back, and for example, on a weekend, I'm trying to have a conversation with her, because our parents nowadays, imagine our 60, 70-year-old parents, or even grandmoms, granddads. I mean, not all of them are like that, but some or many of our parents, we do have some sort of, I would say, territorial differences. Now, I'm very, very clear here. It's territorial differences. I think as young people, there is one thing that we will need to understand, and this is a presupposition that I would like to infuse in the mind of as many young people as possible, that the map is not the territory. That the map is not the territory. Our experience is our own visual that we live, is our own auditory that we hear, is our own kinesthetic that we feel. So our life has its own experience, has its own feelings. We have our own thoughts that we've built around our set of beliefs around ourselves. Now, the same is for our parents. They have their own experience, their own feelings, their own kinesthetics, their own thoughts, their own set of expectations. So when we go this generation to that generation, there is that gap. Now, because we know that there is that gap as young people, there is one thing that we will need to start doing as young people as well, to have a word called acceptance. Can we accept that there is a difference? Can we have the courage to accept that they are the ones who raised us, who bred us, who made us however we are right now, that we are safe, we are in true health, all because of their efforts. So if we have that dose of acceptance, the whole story changes now. The gap starts to get filled by acceptance. Now, another word for acceptance in my mind is tolerance. Can I tolerate someone else? Now, that someone else, what picture that someone else holds in the movie of my mind. So what film am I playing? What reel am I playing in my mind about the other person? And whatever that reel, the end result is, positive, negative, even if it's negative, well, can I tolerate that? Because the map is not the territory. And if I walk my life with the level of acceptance that, hey, this is another human being who raised me, the picture changes. But let's get back to your question now. This is one side of the story. The other side of the story. If parents could understand that they have got kids who are now grown up or growing up. Now, growing up is a big, huge process. If parents start to think that, okay, my kid has grown up now, they need to show responsibility. Ah, what a word. Responsibility. For me, it would mean the ability to respond. That is responsibility. So they know their kids can now have the ability to respond to the pressures of the world. They will need to know that they also need to give time and space for that kid to get used to that world.
that they never went through. Exactly. Because this world is a changing world almost every day. So I hope I was around that concept. Absolutely. Yes, absolutely. And this actually applies the adaptability thing we were talking about, that the world is changing so rapidly that even the parents have to adapt and understand to the things. But at the same time, I would add on to the point that even the children, they have to realize, they have to respect. For example, if when I was born and I was an infant, I was helpless. I couldn't even move. I couldn't even eat. I could not even speak. Right? So if I'm here today in a position, that is all because of my parents. And no matter what I do in life, I can never repay them back. And that goes to anywhere around the globe. How a person starts walking by holding the finger of their parent, their dad, their mother. How the mother cares for a little child. Like, that is so beautiful and that is so amazing that even if we spend our whole lives, we can never repay back for that little favor. But what we can do, that if we're lucky enough to serve them back when they get to their old ages, I think we can never repay them, not even 1%. But at least we can have that sense of realization when you said tolerance. So we've seen so many old age homes now. We've seen so many cases where as soon as the parents get old, the youngsters, the children, they take them as liability. What if the parents call the little child a liability and never let them grow? So we have to pay back. We have to have that realization. The respect, the understanding should be mutual. And that's how we can reduce this gap and build our relationships in a much stronger and better way. That's what I personally believe. What would you say on that? Well, I've got a beautiful story about when you say this old age homes. So there was this man who was a well-known personality in the world, and he used to receive a lot of letters from different companies. Okay, there were some sort of launchings to be done. So he would used to come and cut the ribbons because he was such a big personality and people used to respect him. Now, one day he was at home and during his breakfast, he was opening a letter that he received on the eve. Now, as he opened the letter, he read the few words. He read it, took a blank page, and started writing. He wrote a letter and sent it back to the old age home. So actually, an old age home sent a letter to the person saying, "We would like you to come for the inauguration of our facility." We call that geriatric facility. So the person now wrote back a letter as reply. And when the manager of that geriatric facility, old age home facility, read the letter was like this: "The day you close the home, that day I will come personally to do the launching and cut the ribbon back." Wow. So if I continue, I would say that what the person said in very simple layman's language, the person replied to say, "You know what, don't invite me for the day you're opening an old age home to cut the ribbon. Invite me the day you close it, I'll come and cut the ribbon." So I think I would do the same thing because I know the story now. This is another story by itself. We can never repay that. I also believe that just like we have breath in our nose, just like we have heartbeats in our heart, just like we have blood in our veins and capillaries and arteries, we also need to have that genuine feeling of gratitude with us as we move in our life, be it in front of our parents, be it with our partners in life, be it with our siblings that we have, friends that we consider friends, even our enemies if we think we have enemies. Because we never have an enemy. It doesn't exist. It's just in your mind. Actually, who is an enemy, if we can have a chat about that very quickly, is just a person whom you do not have the belief that that person has the capacity or capability to be in the subset of friend. Means that you've closed the door and characteristic for the friends. So you have an avatar for friends. But that's not true.
anybody can be your friend, even if those whom you do not like, or you don't like one thing about that person, and you say, okay, that person is my enemy. It's so wrong. You just mentioned something a few moments ago, Umair, that with COVID-19 now, with this global pandemic, I think, and everybody would say that humanity has become humanity. So the one has learned the oneness in itself. Absolutely. So, and you mentioned gratitude, because since we're talking about understanding people and all the relationships, it's not just limited to parents and children. We have relationships everywhere, between co-workers, between friends, between partners, between colleagues, and everywhere, even amongst the students. So what we need to understand and realize that this very strong word called hate, and how easily we use this word, that we hate this, we don't like this, we don't like that. It takes a lot of heart to use this word hate and actually apply it on something. This world is full of acceptance, as we were just talking about. If we just accept things the way they are, if we just try to understand the other person, walking into their shoes and trying to understand why they are reacting, why are they aggressive, or why are they upset, I think we will never react back. Our tolerance level will increase. And this is something that we all need to do. The reasons we do these kind of sessions is to spread the awareness. The reason we talk about these topics, because we need people to talk about these things. Because the biggest problem in the relations these days, people don't talk, they assume. They put their feelings into social media statuses rather than calling up the person and clearing it out. So what we need to do, as you said, we need to talk it out. We need to express our feelings. We need to show we care while we are alive. No use of putting flowers or giving gifts to the family of the person who passed away. Do it when they're alive. So this is something very important that we need to realize. Yeah, very correct, Umar. Again, I have actually three things in my mind as you spoke, and I'll just get them one by one. Number one is trying. What a word! I honestly would like to meet the person who invented the word to try. Literally, it means to make an effort. Okay, but most people will use the word to try. Now, here is one beautiful thing. No one can do by trying. You can only try. For instance, everyone who's listening to this show right now, and even you, Umar, try to look at the back. It will never happen. Because I'm not saying look at the back. It's a direct command. Look at the back versus try to look at the back. Because by trying, you will just keep trying. You will be forced, but then you won't look at the back. So you just have to go on a directive command. Look at the back. Okay, I'm trying to do my homework, Mom. Don't try, my son, do it. I'm trying to work hard in life, and I'm trying everything in my life. Well, don't try, my boy or my girl. Please do it. I'm trying to build an empire in my business. I'm trying to put my business alive. Don't try. Do it. So that's the thing about from trying to doing. And this is something that we call from the knowing to doing gap. So in whatever context we apply it, we have to do. Now, the second thing that, yes, I heard you saying the word hate or any such words like that. You know, there's something that I personally say, and it is something that comes directly from me. Why react when you should not even act? So most people will react to circumstances. We react to situations, to people, to things around us. We react to ourselves, actually. But then why react when you shouldn't even act, but just absorb whatever's coming to you and feel free in the abundance of life? Just accept that we are just one with oneness. There's nothing more
different from me or she, whatever the eye sees doesn't mean that it's different. It only means that that's a different form of me. So if you think in those terms and wake up every day like this, in this sort of state of mind, I guarantee you 21 days is enough to change our perception in life. So I'll now go on the third point, which I was thinking is, we all have our differences, we all have our dislikes about things, but the moment we believe in the power of abundance, and I'm just not using words for words, I'm actually asking people to feel that word. They can close their eyes to feel it during their breath. They can close their eyes to feel it in their heartbeat, or maybe on their skin. But to feel abundant, even if you don't have a morsel of food at your home, or even if you don't have tap water, something to drink, even if you don't have the kind of money you would like to have to buy the next bungalow, maybe the next Ferrari, whatever you want to do with with money, but just feel that you have it, because you have it. It's just that you didn't touch it. So if you walk around with those kind of mindset, Umer, you know what? My next neighbor would be a happy neighbor. And if all happy neighbors around the world start becoming happy, we have a one global world in its own time global. Absolutely. And I totally agree to this, that mindset defines everything. How I look at myself is what's important, because this world is full of negativity. And if you react to that, I'll share a little story. And then, of course, we'll move on, because as much as I'm loving this conversation, we're running out of time as well. Like, I look at it this way. The world is like a boiling hot water, right? And there are three kinds of people in this world. One are like the eggs, hard on the outside, but soft in the inside, right? So when you put that egg into water, that is the world. That thing that was hard on the inside and soft in the hard on the outside and soft in the inside, it becomes hard on the inside. So when you're hard, and this boiling water, that means this world, the negativity, the hate, and everything, the pressures, it changes you on the inside. It makes you harder. It makes your heart like a stone. The other person is like a carrot, hard on the outside, but as soon as they enter in the world, the boiling water, they turn soft. They become vulnerable. And then the third sort is like the coffee beans. When they enter the boiling water, they don't change, but they make the boiling water more meaningful. It changes the scent. It changes the taste. So it's up to the people what sort of personality they want to be. The egg, the carrot, or coffee beans. I would like to be the coffee bean any day. Make this world a better place. Give more meaning to life and to people around me. So summarizing that little story, we always need to stay motivated. We always need to back each other up. Rather than pulling each other down, we need to support each other, because life is short and we can make the best of it while we are together, spreading love and spreading affection. Definitely, Umer. So very beautiful. Well said. In fact, that topic about boiling water, they say that if a person has to change for the better, and because water boils at 100 degrees and not 99 degrees, but the moment you keep heating water, it becomes 98, 96, 97, 98, 99. It is only that one extra degree Celsius that boils water. And I think everyone needs to find their 1 degree Celsius to make them change and transform, but for the better. And there you are, yes. Right, absolutely. So always I say one thing: expect miracle, believe in yourself, stay positive, keep smiling, and accept the hardest of the challenge in life with open arms. Because when even if we look at our ECG, our heartbeat in the hospital, if it's flat, that means you're dead. So we need ups and downs in life to learn. We need ups and downs to stay alive. So I love this conversation, and as much as I want this to go on, we're running out of time. Atish will definitely
continue this session. It was lovely having you and discussing people, their behaviors, and how we can turn this world into a better place. Before we leave, I would like you to share your feelings and your one word for Greenwich family. Right. First of all, I'll share my word for the Greenwich family. First, the Greenwich family, Greenwich University, you have been one of the kind that I will continue to support because I believe in your endeavors. Mr. Rab Nawaz, personally, whom I know, he's working so hard to make this one with oneness. And I believe that Greenwich University is certainly doing a lot of things. I mean, really out of ordinary sometimes. I have been on your campus in Mauritius and I have seen things. I have seen your love for education, not just because you offer this service, but really this love for education, for what you do and your endeavor for what you do for those children who want to actually have a better and brighter life. And thank you for what you're doing. Now, coming back to the show, Umair, I want to thank you for being such a nice host and someone who's so energetic from your voice itself. I would wish I would come one day next to the other show if the God bless. And I've enjoyed it. And my one last word about everything is contagious. Yes. If the world can find a virus to be contagious, well, so does a smile. There you are, Umair. True. Absolutely beautiful. Thank you so much, Atish, for your time. We'll definitely have another session because we need to talk a lot about these things and spread awareness and make real. Because if you keep talking about it, I think that's when you increase the sense of realization amongst people. So I wish you all the best. Stay safe, and we'll definitely get back together again sometime soon, inshallah. Thank you, man. So, Thank guys, you heard Mr. Atish. Absolutely, you're most welcome. So, you heard Mr. Atish Bagola and the beautiful things he had to say. We discussed life. We discussed how people behave, why they behave like this, and how we can make this world a better place by just understanding each other and rather than reacting and acting, just stay and understand why things are happening the way they are. So we'll definitely be back tomorrow with another session, another topic. You can always leave your feedback in the comments, or if any topic you want us to talk about, please let us know. We'll be back tomorrow, inshallah, with another show, another guest. Until next time, stay safe, stay home, take care of yourself and your loved ones. Keep smiling, and Allah Hafiz. कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Currently, I'm working as Director Supply Chain in KB Group of Companies, dealing in metals and minerals and chemicals. I'm a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich for building my success, creating confidence in me, and laying the foundation stone of my success. Thank you. Assalamu alaikum everybody. My name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you.
And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Welcome to Greenwich University, Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. And my name is Amit Prem, and I'm very glad to host you all since I have been to your campus. And to be very honest, your campus is beautiful and Moshid itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here, and they are very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology, and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus, and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students, and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well, and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People. If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status, check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places.
Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' head. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia, and under this Language Academia we learn three different languages, which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our Media Lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have two cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies and have a lot of fun after your class or before your class. Hi, my name is Mariam Sumro and I'm a very proud alumni of Greenwich University. I did both my BSc Honours and my MBA from Greenwich. I'm currently working as a Director Education at Standard Chartered Bank, London. I think the one piece of advice that I have is that always be the hardest worker in the room, because that is something that has really served me very well in my career. A lot of people might think that Greenwich, might not have good students, good teachers, or I don't know, might not be the best place for them. But what I can tell you is that hard work and being at Greenwich has helped me build such a strong network of friends and colleagues through the years that it has only enabled me to achieve success in life. The Grid is an ideology put forth by Alicia Kanani. The Grid is a community center in its purest form that provides the general community a creative space to organize events. They facilitate three broad categories of artists, musicians, and writers. For musicians, they offer them a free stage to perform, sell tickets, and make money. For artists, they offer space for exhibition without charging any commission. For writers, they have a library and a typewriter. The vision aims to streamline a generation of creative minds who will become a change agent in the society. They vociferously campaign against the notion that art and music is an impractical profession in Pakistan by facilitating talent to earn money. They offer courses and services ranging from classical vocals to philosophy classes.
The model of this community center relies on the crowdfunding with an assumption that the community will reciprocate if a venue is provided to them, which becomes a meeting point to discuss general problems in the society and possibly come up with solutions. Nasir. I'm a primary teacher at Bayview Academy. I'm a proud alumnus of Greenwich University. Greenwich has shaped my life, and whatever I am today, I owe it all to Greenwich. It's been a wonderful 14-year association with Greenwich University, and I hope to continue that in future. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University.
Rahil Masood, and currently I'm into construction industry, and I had a great time with Greenwich, and for the great learning curve. Thank you, Greenwich, for everything. We took the green, the most sacred green, from the dome in the city of Medina. Then we unfurled a flag, the most beautiful flag, from the Everest to the shores of Abyssinia. By the Arabian Sea is a university, a creation of a beautiful mind. It's the best place for learning, for souls that are yearning to seek and to search and to find. Greenwich, Greenwich, where wisdom and knowledge they breed. Greenwich, Greenwich, what conquers all is our creed. Greenwich, Greenwich, the only place I'd rather be. Greenwich, Greenwich, we all are the Greenwich family. We all are a Greenwich family.
कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan and I'm back with another show, another guest, and let me introduce my guest for today. He is the country head of Organization for Hotel and Tourism Management, OTHM UK. He's an entrepreneur and advisor for higher education in Singapore. So let me welcome our first guest for today, Dr. James Tan. Welcome to the show, sir. How are you? I'm good. It's my pleasure to join you tonight. Yeah. It's our pleasure as well. We also have with us Mr. Salman Rajani, who is a lecturer at Greenwich University. He's also manager, ORIC, and program coordinator of OTHM. So welcome to the show, Salman. I hope you are well. Thank you, Umar. Yeah, I'm good. Hope the same for you. Yes, thank you so much. So, Dr. James, I want to start with you. We all know that we're in a situation right now globally due to the pandemic, COVID-19. You're right now in Singapore. How are things there right now? We call it circuit breaker, which is in short a lockdown. So currently we are in the first 1.5 months now. So we are hoping that they will ease the circuit breaker by 1st of June. And right now, we are restricted in certain movement. We can only go out of our house when we buy our grocery store or buy food. And a law has been in place that once we step out of our house, we have to wear a mask. So currently is quite restricted. A lot of activities has to come to a store at this moment in time. Yeah. Right. So how have you been spending all this time? Because of course we're forced to change our lifestyles, the way we work. So how have you been spending all this time? In fact, I've been spending most of my time advising school what to do during this period in time, where a lot of school will come to me to say that the students' number have dropped. And this is a factual question where every school will face the same problem at this point in time. So a lot of school will come to me to ask me what should they do and what should they do differently in order to gain some businesses. Yeah, so I've been advising school for the past few weeks every day. Yeah, so have been keeping myself very busy. Yeah. Absolutely, and we need to stay busy and positive. That's one thing for sure. So of course, the basic topic for today is, and the basic reason is that we need to spread awareness about the OTHM program. Greenwich University will be offering the OTHM program in this summer. So I would like to ask you, why should a student opt for this program, and what's the benefit for them? Okay, let me give a brief background of OTHM. OTHM have been in more than 30 countries right now, and currently we offer a wide range of programs ranging from the area of finance, accounting, hospitality, business, project, logistics, and so on. So our coverage, we cover from level 3, which is A-level equivalent, to all the way to level 7. Level 7 is postgraduate equivalent. So we have a wide spectrum of area to cover, at the same time different levels. So
the advantage of taking OTHM is this. OTHM is a regulated program where it's regulated by Ofqual, which is the regulating body in UK. So this regulatory body and OTHM are internationally recognized program worldwide. So I think the advantage will be, once you get the OTHM certificate, you will be recognized by most of the country as whether or not you are going to progress to the next level of your study or to work. So that will give you a advantage towards other people when you get a regulated program like OTHM. Definitely. Salman, you're of course, the program coordinator. And as you all know, Pakistan is this course is not very popular in Pakistan as compared to the UK. So what would you like to tell our students and how can you motivate them and tell the importance of this course, especially if they tend to do a future degree in the UK? Yeah. So there's a lot of tendency in the students that obviously anything that comes for the first time in the market, people are a bit apprehensive to test it. They are worried that whether it will be recognized or not, whether they have a future with it, whether or not their money is going to be secure enough when they invest in it. So these are the issues that, or these are the apprehensions that the students initially have. So as Dr. James had mentioned, that all of OTHM qualifications are vetted by Ofqual, which is the UK degree attestation body and qualification body, regulatory body. So this is the good thing about these qualifications, that since these are Ofqual regulated, therefore students don't have to worry about whether or not their degrees will be recognized, whether or not their progressions will be recognized. And I believe this then gives them an opportunity to have a degree that is truly international in its outlook. Absolutely. So Dr. James, we've been noticing that globally this program is gaining quite a lot of attention. People are opting to choose the hospitality field. They are opting to choose the hotel management, and there's a lot of scope globally. So how do you look at it? In fact, based on Singapore context, we are not talking about any scenario that is COVID at this point in time, because at this point in time, of course, you are talking about hospitality, hotel management, the numbers will be down definitely, because at this point in time, nobody willing to travel and a lot of travel restriction as well. But COVID-19 will need to end at certain point in time, whether or not this year or next year. After COVID-19 has ended, when it comes to end, it could be a vaccine or whatever cure that is coming upon. So when we come to the end of COVID-19, definitely the travel industry will definitely pick up. And that is the point in time where we need a lot of trained professionals to come into the industry to serve the industry as well. So for example, in Singapore, all these hospitality students are very in demand in Singapore, like hotel industry, service industry as well. So it's very in demand at this point in time. You raised a very good point that due to COVID-19, the tourism industry will be affected throughout the year. So we've seen all of the businesses and all of the industries, they have adapted to something that they can manage during this time. How do you think that this industry of tourism and hotel management can adapt or save their businesses during this time and the after effect of COVID-19? Actually, at this point in time, the hotel industry, in fact, is a good time to train and retrain their staff to be ready for once the COVID-19 is over. Because during the actual operation is very difficult to train the staff because everyone is very busy. So although there's a COVID-19 at this point in time, training the staff is essential because you grab hold of the opportunity to train the staff. But of course, during this period, we are not able to do it face to face. But
we are able to do it online, like what Greenwich University is planning to do, and we can also do it like certain platform like Zoom or Skype as well. All this training can be conducted. So at this point in time, I think it's a good opportunity, although the profit is going down, but it's good opportunity to gear up and then to face the future. Absolutely. Very rightly said that we can utilize this time to train our staff and get ready for the future. Salman, what would you like to add to this point? Yeah, so definitely, as Dr. Ten just highlighted, that this is a very uncertain time, and uncertainty leads to a fear of the future, and whether or not students also have this anxiety that whether they should wait it out, they should opt for the summer courses or not, or whether they should wait for a time when face-to-face tuitions are available again. So these are uncertain times, not just for the students, but also for the teachers. So, Dr. Ten, my question then is that for these students who will take a break from the learning and later on they will rejoin the education field. So, does OTHM has any edge or any relaxation that it can give to these kind of students, or any benefit that OTHM qualification can bring to these type of people who are continuing their education, or let's say people who are mature learners in that sense? Yes, in fact, OTHM, we have two ways of entry requirement. First entry requirement will be via academic. Of course, if you are going to a master's level, you must have a degree. This is via the academic path. Another path of the going to OTHM as an entry requirement, it can go through the matured path. That's to say, example, I just quote example for those who progress to postgrad level at level 7. The student need to be 21 years old and then have few years of working experience as a management level, and we recognize the working experience as entry requirement. But of course, on the other hand, the centers itself will need to test or conduct certain English proficiency tests to make sure that the students are up on par, because we in OTHM, we do not want to see any failures or student dropout in that perspective. So we will definitely want to make sure that the students who join OTHM can successfully pass out from OTHM. Right, very rightly said. And we've seen the change in the whole education industry in a whole. We've seen that the typical traditional degrees that used to opt for, 50 years ago, doctors, engineers, now people tend to set for skill-based education. They tend to enhance their skills as well. So I think this is a very fresh kind of a program which add on some very different sets of skills for the students. Yes, I do agree, because example for hotel management is a form of skill set that is training the student a certain form of skill set. Some university also do provide some internship per se. So these are a form is in terms of skill set for the students as well. As for what we used to do in the past, which is face-to-face teaching in a university platform, but I think when we come to COVID-19, that mentality will change towards the online platform, because just to be very factual, even COVID-19 go away tomorrow, the market will not recover immediately, which is the market will definitely take some time to recover, and as a parent, you may also fear that to send your kids to a school, although we have recovered, but then the fear in the parents is still there. So what we need to do now
the best way is to go for online, and then once the situation change, maybe then we can conduct some face-to-face. But I think COVID-19 have teach us a very good lessons to make sure we are prepared, whether or not when there's a situation like this, we will go through online. But I think we will definitely good to carry on this kind of practice throughout, because we do not know when this kind of pandemic will hit us again. Right. Salman, you yourself are a lecturer. You have been putting on your online sessions as well. So if we add on your experience of online classes, how would you comment on what just Dr. James said? I agree absolutely, because all of these things are easier said than done. Because when you enter your classrooms, you gain energy by looking at your students, what they are feeling, their emotions, their expression, everything from their face you can judge and gauge whether or not they understand what you are trying to teach them. But Zoom and these other options, though they have brought closer in virtual spaces, but that kind of energy, that kind of live interaction that we draw from our students, that is missing. And often at times we are conducting sessions at 9 a.m. in the morning, and half of the students, it's very, they are online in their beds and wearing their PJs, and it's very difficult to get them in that study spirit at these times. And obviously we understand that this is something that is new for them. This is experience that they need to gel in with. So yeah, these times, though they are uncertain, they create a lot of challenge. But I believe there is an opportunity in this, and there's a lot that we can do as a nation to make use of this time and the technological benefit that we have been pushed into. But this is something that will change the face of education forever, I believe, in Pakistan. Absolutely right, and open a lot of new doors as well. What we've seen that during this time, lots of students they tend to pick up online courses, and they have actually widened their horizon to international boundaries as well. So I think it's a very good platform if you stay positive, constructive. There's a lot you can learn. And one thing is for sure, when this COVID-19 ends, the student will appreciate the classes because they do miss their teachers, they do miss the interaction. So I think we once we're back, so things are going to be much better. So I'll include some comments. We have our very beloved Madam Seema Mughal, the Chancellor of Greenwich University, and she says, Dr. James Tan, it is a pleasure to have you at our platform. We are looking forward towards having OTHM programs through both the streams, academic and work experience background. COVID-19 is definitely a challenge, but has opportunity as well. I do agree with her completely. Yeah, because I think COVID-19, although it's bad, but it push the way that the human think, and actually push out of our comfort zone, because we have been living in our comfort zone for years till COVID-19 hit us, and that is the point in time where people try to do something different, so I think although COVID-19 is a very bad scenario that is going to happen, that is happening, but it also, on the positive side, is it also push a human to think differently in a way, and to move out of their comfort zone to do something that is more beneficial in a way. Yeah. Absolutely right. So we'll add on some more comments as well. Our very beloved Dr. Nimal De Silva is also here with us. He's watching us, and he says, fantastic, great to see Salman as well. So Salman, you're getting some fan base right now. Yeah, we had a pleasure to host Dr. De Silva when he came for our graduation program, the convocation that we had, and it was an absolute delight to have him here and as a guest here in Pakistan. Absolutely. So next comment is Manur Farooqi, and she says, I agree, nothing can replace physical lectures and classroom studies. Online has proven to be beneficial in this situation, but nothing can beat face-to-face lectures. So we all do miss
the face-to-face interactions? Yeah, I think I study in the past. All the way is face to face. I've never take up any online courses before, but I think when the situation change, we have to change accordingly to adapt to the situation. Otherwise, we will be stagnant. Just for example, a school contacted me 2 weeks ago to and he says that the students do not want to go to the class. So what should they do? So in this scenario, you're only given two choices. One choice is yes, you waste your time sitting at home doing nothing. Another choice is you can take up the online courses, and then while waiting for COVID-19 to pandemic to subside, the curve. Once the curve is flattened, I think the government will then open up the restriction again. So it's a matter of knowledge against time, because whether or not you want to sit at home and wait till a good time for you to step out, or you want to learn at home, I think the choice is very clear. Very well said. The choice is absolutely very clear that how you want to spend all this time. You want to spend it in being constructive and being a better self as a person. Because I believe that life is giving us a second chance. We can take this time to improve ourselves, the things around us, give time to things that we always used to say we're very busy with work and we cannot give time to this, we cannot give time to that. Now we can spend all the time with our families, we can spend all the time to think how to spend a better life and make better decisions in the future as well. So absolutely, that's right. Salman, I would like to ask you something. Greenwich University will be offering OTHM in the summers. So how do you think that during this time the students can gain from this, and what future scope do you see of OTHM in Pakistan? Thank you, Amar. So, as we have discussed, in the present scenario in Pakistan is that there is a lot of saturation, and the options that people usually take are quite limited. So, in that sense, OTHM will give them a flexibility, a variety of options. They can go for logistics management, they can go for healthcare, they can go for higher education. There are other fields, though they're quite popular as well. For example, accountancy and business management, but OTHM routes are much faster. The plus about this is that you don't have to take any exams, so there is nothing to worry about. So for majority of OTHM qualifications, it's a pass or fail degree, and therefore all of the assessment is done via lectures, and whatever your lecturer will decide as an assessment for learning, that will be it, and there will be no exams. So there is a very positive point that it is a kind of degree where you don't have to be afraid, you don't have to be bounded in that actual knowledge that you have to rote learn things, you have to remember certain facts and figures. No, it's nothing like that. Everything is assignment based, and these are the assignments that you and your lecturer together will decide upon, and they are available for any kind of support, they're available for any kind of follow-ups. So I believe these degrees are the need of the day, and they don't just expand the options and the boundaries of knowledge that we have, but it makes it easier for the students to be engaged constantly. And I believe, given that the situation, given that the stress that every student especially feels nowadays, these degrees are a terrific way, a very incredible way to come out of the stress of exams and pressure. And these degrees will definitely benefit whoever approaches them. Absolutely, absolutely right. And then again, we have this whole fresh approach, because in Pakistan we've been seeing intermediate and A-levels degrees for years, and now we have this other option of OTHM. So that adds on to the knowledge of people that they can opt for different degrees before starting their universities. So I'll add on another comment here.
we have with us Burmesian historian, and I hope I pronounced that right. He says COVID-19 has learned to the world that knowledge is important, not distant. So I think he's very right that we all got to know that knowledge is the key. Distance doesn't matter, restrictions doesn't matter. Even if we are locked down here in our home, we have access to the whole knowledge in the world. Agree. I just want to add to Saman comment just now. In fact, in OTHM, we train someone that is street smart. We believe in training someone that is street smart and not exam smart. That is the reason why OTHM do not have exam, because we believe exam smart doesn't mean street smart, because end of the day you have to face your work and you have to face your boss as well. So in that perspective, you have to be street smart because you are working for your boss. I mean, I'm not disqualifying exam is no good or whatever, but I'm saying that there's different type of perspective and different type of trainings that we are concentrating on. We do believe in street smart people. Thus, all our course, all our module are assignment based, because assignment based will train street smart candidates. A very well raised point, Dr. James, that apart from teaching education, the student should be street smart as well, because we have no idea what life has in store for us. We don't have any contingency plans for anything. Like, for example, just take this COVID-19. No one expected this would happen. But if you're street smart, you're ready to adapt, you have your contingency plans ready, you're smart enough to innovate and improvise with life and your profession. So that would be a complete add-on. So Salman, what would you like to say? How important is it to be a street smart as well, being educated? I absolutely agree, because you see, it is very easy in our current education scenario. We do create people who have perfect 4 GPAs, but that doesn't mean that when they reach their destination, either in business or in corporates where they want to serve, that whatever they have learned as a theory they will be able to apply it. So it's very crucial that we understand this, that every student is different, their learning needs are different, and how they engage with their curriculum is also very different. So we cannot expect every student to be at the same level and create same kind of output that one particular student is producing. So therefore, this notion that street smartness and that practical knowledge that you have is very important. And this is something that today's employers are also looking for. They don't want people who are just expert in the bookish knowledge. They know all the theories, but when it comes to practical life, they cannot apply it. So I believe now street smartness is gaining an edge over people who have, let's say, perfect GPAs. Absolutely right. And what I personally believe that if you're street smart, you learn the skill of surviving. And what I believe that if you know the skill to survive, you can deal with any situation with life, no matter how hard or how tough it is. So I absolutely agree with both of you. I'll add on a few more comments. And we have with us our lecturer and the head of linguistics of Greenwich University, Ma'am Shazia Nasir. She says, very well said, Dr. James, as even the topmost companies are no more looking at the grades or degrees, but how street smart a candidate is. So what would you like to say on that? No, I actually totally agree with her, because as educator myself for so many years, it have been proven that exam smart doesn't mean equals street smart. Because just imagine, you need to study for, let's say, 20-30 years, but you have your working life for another 50-60 years. So why do you train yourself to be exam smart where the ratio is not really that proportion? Because your working life is about 50-60 years. Absolutely right. So we'll add
one more comment. Asad Umar is with us. He is an alumni of Greenwich University and also a national level table tennis player. He represented Pakistan team for the table tennis sport, and he's a very nice person. He says great point raised, and he totally agrees. So now with all the conversation we had, we're running out of time for this program, but it was a wonderful conversation. I would like to ask you, Dr. James, how was your experience of being on the show and discussing about OTHM? Feel very honored to be in this program as well, because I always feel that especially this live session, it seems like you are talking to the audience, although right now I'm talking to a computer, but then it feels very real, and at the same time audience are having their feedback as well. So I thought these are a very innovative way of doing as well, like what I mentioned, during Street Smart. I think Greenwich University is on the frontier. Right. Speaking of Greenwich University, I'll add on another comment. This is from the student provost of Greenwich University, Naveed Mughal, and he says, looking at the current scenario, conventional methods towards educational degrees is slowly becoming obsolete. Alternative pathways such as OTHM are paving way to the future. That's exactly about the point we were discussing earlier. Yeah, that's right. That's right. Yeah, in fact, as a school owner or some university, you may know that due to COVID-19, a lot of university have stopped the on-campus recruitment, and some of the government have also stopped student pass approval. So the only choice for the to move forward right now, of course, is to go online and wait for the situation to cool down or the curve to be flattened. So yeah. Right. Thank you very much for that. Salman, before we leave, I would like to ask you, how was your experience? It was your debut, your first time on the show. How was your experience? It was great, in fact. It was a pleasure speaking to you both. And also, as Dr. James pointed out, that it is a very different experience to see all these formats and see that all, not just our faculty locally, but also internationally, is connected with us. And it was really nice to hear from Sima Mughal herself and our management that not only they just mentioned a very valid points about the process and how the face of education in Pakistan is going to change, and I think for good, and also to know that what kind of opportunities that everyone sees and what the future has in store for us. So I think it was a delight being a part of the show. Absolutely. The pleasure is all ours. And once again, I'd like to thank you again, Dr. James Stan, for your time and for the wonderful add-ons and the awareness that you brought on to the show. I would like to tell everyone, all our audience, whoever wants to apply for this OTHM course at Greenwich University, you can see the details below where our numbers are mentioned, where you can call us and you can WhatsApp us for details. You can always visit our website and always get the details of the admissions, and sign up fast because we're into COVID-19. We've got so much to do and there's a lot we can add on. So we'll be back tomorrow with another guest, another program. Until next time, Pakistan Zindabad. Hello, my name is Shahzad Hassan Khan, and I'm a proud alumni of Greenwich University. And currently I am the head of marketing for ARY Network and Karachi Kings. And about Greenwich, basically I think that what I am today, Greenwich contributes a lot to it, and it is because of Greenwich's environment and teachers that I've learned so much in such a short time, and then grown in the industry.
रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं। My name is Suhail Amin. I started my journey with Greenwich in September 1989. Completed my masters. Started off with bachelor's, and then finally completed my masters in '93. I have had a long association with Greenwich. I've always been associated with the alumni affairs at Greenwich. Was also part of the visiting faculty, assisted number of professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own group of companies. We represent Petronas of Malaysia. We represent Oman refineries for both Pakistan and Afghanistan. We also represent certain other companies like Oxia, Germany, and Milliken, US, for Pakistan, Afghanistan, and some other countries. And Alhamdulillah, we're doing well, and almost the entire professional career that I have had so far, Greenwich has had a major role to play, and obviously I would not want to forget 3, 4, 5 names who have played a major role in my life. Shahid Anwar Bajwa Sahab, of course, S.N. Durrani Sahab, Talib Karim Sahab, Mrs. Rukhsana Anwar Khan, Shafqat Hussain Sahab, so many. I mean, I'm sorry if I forget any of you, but you all of you, all my teachers who've coached me, you are so close to my heart that please don't, if I've not taken your name, please don't take it personally. It is you, each one of you is so fabulous, so amazing. You guys have made me what I am today. And of course, Seema, Saeed Bhai, rest of Greenwich, I am all yours. Whenever you need me, I'll always be there. Thank you. Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolutely amazing for me because I learned a lot. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well.
besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduced different kind of frozen parathas, puris, chapatis, which is instant ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, we in the last couple of years we introduced our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory. I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and baking slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, to be here, I mean, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So, I mean, your life should be balanced. If your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself or you're going to get tired of that particular thing. So, I mean, one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. I mean, there are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But I mean, if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. I mean, you cannot do something which somebody else tells you to do. I've met a lot of students, I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I'm doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science, I mean, you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that, work positively on that things, and I believe with over a period of time, you're going to feel a change in yourself, and once that change arrives, your life is going to change forever. Well, for me, Greenwich is a one big happy family, and all those people who are a part of Greenwich should also feel the same. There are a lot of things to do at Greenwich. I spent most of my time at Greenwich when I was having my classes, and I used to have the gap between the classes as well. So I usually used to stay back at the university and used to play sports, maybe play badminton, cricket with friends,
sit and enjoy in the cafeteria with friends. This is also needed in life, because I mean, if you just study, then your mind is just going to get blocked at one point of time, and then you cannot take in more information and data. So to do these things, I mean, you need to relax your mind, you need to calm down, you need to be happy, because if you are happy, then you can do anything. So be happy, make others happy, and make your family proud by doing whatever you desire. Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. Assalamualaikum, मेरा नाम शाज़िया वजाहत है. I am an executive producer at Showcase Productions, producing dramas, and I'm also teaching media studies at the Indus Academy. I'm a proud alumni of Greenwich, and my experiences and learnings at Greenwich has really helped me in my career. Thank you. Members of the Diplomatic Corps, Director of Tertiary Education Scientific Research representing the Ministry of Education, Mr. Ralph Bundan, past Vice President of the Republic of Mauritius, parents, families, students, friends of Greenwich University, faculty, staff, all protocol observed. Dear students, students of Greenwich, this is your evening. We're here supporting you. We're here to ensure your dreams come true as you start your journey into tertiary education. On behalf of Greenwich University, I, Georgina Raghavan, Director of Planning and Corporate Affairs, would like to welcome everybody on this very special evening. This is a once-in-a-lifetime event in the academic calendar of our students. We're brought together this evening, and I feel so proud to be part of this special occasion where we're making history come true. Here we are launching the first branch of Greenwich University outside Pakistan and here in Mauritius. I think it's a milestone in anyone's lifetime, and we're here with them making history. It's a pleasure and pride to share with you that we're welcoming students from no less than 8 countries from around the world. Again, for a first cohort, another milestone in history. We're bringing together people with mindsets of education and development. We're bringing together the different people of the African continent. Ladies and gentlemen, as we progress, can I please ask everyone to put their mobiles on silent, not to disturb speakers, as well as our students when they come up to intervene.
Another achievement that I would like to share with you this evening, as I've just been informed, Greenwich University has signed an MOU with Bangor in the UK, thus giving our students the opportunity to look at global education outside of their own country and outside of Mauritius as well. So again, another feather in the cap of the, let's say, milestones of Greenwich University. So our students, something new for you to explore, travelling further afield, exchange programs, as well as your own way of making education your path. Can I kindly request everybody to stand up for the national anthem of Greenwich and to welcome our students. Entering for their future. Mauritius, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, Nigeria, Madagascar, and Comoros. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthems of these countries. Thank you.
Thank you. I would like to now invite Dr. Sultan to the stage, Dean, Faculty of Management Sciences and Director of Quality Enhancement, CEL, for his welcome address. Dr. Sultan. Thank you. Respectable dignitaries, diplomats, honorable guests, friends and students, a very good evening. Greetings and welcome to the first orientation launching ceremony of Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. I stand proud as a member of Greenwich family while enrolling these students from 8 nationalities here in Mauritius branch campus. I'll quote Michael Creto, "Look around just people, can you hear their voice? Find the one who will guide you to the limits of your choice." Dear students, indeed you have found that one, Greenwich. In today's era, education has become the most valuable currency and most effective tool for uplifting societies and people. Quality of an educational institution can be measured by the accreditations, recognitions, and memberships of international bodies. Greenwich holds a strong international identity and presence. The quality of students that the university takes in doesn't matter. The quality of students that the university takes out does matter. And today you will be seeing one of my alumni speaking here with you. It's a pleasure to share that Greenwich University, having 3 decades of academic excellence, is determined to serve education sector globally and change the lives of students by shaping their future. Greenwich, more than 3,000 alumni all across the world are serving either at top positions or running their own businesses. It's a pride to share that 70% of Greenwich MBA graduates are entrepreneurs, making jobs not for themselves but for others. Dear students, I want you to follow the same path. Say hello to the future. The day is not far when you'd be running the show around here in the field of business, entrepreneurship, and management. Mauritius and Greenwich share the common goal of making Mauritius an educational hub for the African region and rest of the world, specifically focusing on Indian Ocean Territory Islands. Indeed, today we observed that Greenwich has taken its first step towards that very goal, and there is more to come in the upcoming semesters. We have lined up students from 13 different nations. Dear students, you will be having a multinational linkage during your stay here with people around the globe. You will be making relationships, businesses, friendships that would help you grow in the future, not only to your own countries, but globally. Be stellar. This is my wish. Today, the path of access starts.
begins today, which would indeed lead you to wisdom and glory. Just be committed, determined, and ambitious. Hold fast the rope of knowledge extended to you by your teachers. Take their words to your hearts to transform that knowledge into wisdom. Be obedient, be attentive, be practical, and be successful. It is indeed the very moment that we, all our friends, all those who helped Greenwich be here today, all the people of Mauritius, all those efforts that were made by them, to honor their efforts. Because of them, because of the efforts, we are here today. And today, it's a giant leap. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Sultan, for those inspiring words. I'm not going to start dancing, I promise. Thank you, everybody, for your attention. And as Dr. Sultan said, this is the evening of our students. This is for them. But while we're here, can I ask you all to fasten your seatbelts? Fasten your safety belts, because we're going to take a little journey, a little virtual journey. We're going to land in the campus, Pakistan, live and direct. Are you ready to join me? Are you ready to join me? Okay, guys, here we go. Mauritius campus joins Pakistan campus. I'm Vijay Purwani, your today's host. I am very great to host you all since I am here in campus, which is very honest with campus, beautiful and watching itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this space when it's really hot outside. Let's have a look at the rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here, since all your queries, all your questions are answered over here, and they are very respondent to whatever you ask. And this is our counseling room. Let's have a look inside the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have at Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology, and we have experts also working over here to help out the students with any concerns they have. Moreover, we have printing facilities, we have free Wi-Fi in the entire campus, and the Wi-Fi works really nice in the computer lab. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students, and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well, and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is there to help you out. And not only queries and concerns, but communication center ensures effective communication with each of the students they have at Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status.
check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fees allowance, regarding anything which you want to know is right over here inside the guide. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest days. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before, that there is huge crowd at communication center when the semester begins. There is huge crowd at the examination center too, just when there are exams coming up on Tuesday. So we'll give you a glance of the examination department as well, and we would like the examination experts to welcome you over here. We're standing outside the office of Professor Dr. A.P. Mughal. Let's see who has to do it. Hello sir, how are you? Good. Here we have Professor Dr. A.P. Mughal, and he's the research professor at Greenwich University, Karachi campus. And let's see what he has to do it. Well, on behalf of my colleagues, I just want to thank you for your campus. I'm a research professor. I'll be happy with all the research people are engaged. Thank you so much, sir. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is language literature, and under this language literature, we teach three different languages, which are French, Italian, and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is the corporate communication. Okay, so we're standing outside a very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of what you see on TV, like the live camera action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and DTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Akshan Farooq at Audio Diary, and the DTV is operated by our media lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization. Alright, let's have a look inside. We're going to have an insight to Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing chemical or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their studies. So this is the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. Let's have a look inside. This is a very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, football, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer education and fitness fees and often found over here. Here we have two cafeterias where you get delicious food and subsidized rates. It's like cafe one. Over here you have delicious food available in subsidized rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. We're now heading towards the office of Madam Seema Mughal, who is not only the Vice Chancellor of Greenwich University, but she's also the woman of substance and backbone of our university. Let's have a look what message she has to give to us. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, respected members of the diplomatic corps, very dear students and staff of Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. First, I would like to thank you all for gracing this occasion with your presence at the campus. I am genuinely humbled.
It was my utmost desire to be among you on this momentous day, but it was not possible since we are traveling to sign an MOU between Greenwich University and Yale University. Greenwich believes in globalization and always takes steps to achieve it. We have a number of MOUs with various educational institutions across the globe and are hopeful that MOU between Bangalore and Greenwich University will further enhance option of studies to the students. We at Greenwich are determined in imparting quality education to the youth of the world. We equip them with skills that enables them to cope up with the rapidly growing global world, both professionally and personally. This we have been doing for the last 30 years in Pakistan and are ranked among top 10 business schools in Pakistan by Higher Education Commission. Greenwich has come to Mauritius with the same mission and vision. Let me tell you that immense amount of time and hard work has been put into the formation of this branch campus. It was not easy to attain what we all have achieved. I would like to thank all the staff at the branch campus on behalf of the entire Greenwich University and on behalf of Director Administration and Registrar, Mr. Said Mughal, for their constant commitment. This would have never been possible. We would have never witnessed this day without their hard work. At Greenwich, we are working on the vision of Republic of Mauritius, that is, to develop Mauritius as an education hub of the African continent. The growth in the African region is inevitable, and Mauritius is the gateway of this growth. Alhamdulillah, we are so happy today to share with you that the first batch of this campus of students who have arrived in Mauritius. Beside Mauritius, students from Madagascar, Zimbabwe, Comoros, Nigeria, from India, Pakistan, Sri Lanka, and from Nepal are here this evening. The students will have a diverse environment to learn and grow. This would have not been possible without the untiring efforts of all the friends of Greenwich and Mauritius. We are blessed to have all of you over here. The friends have worked with us at various levels of administrative sites, marketing sites of the campus, in Mauritius and the African continent, and above all, arrangement of scholarships to the deserving students to continue their studies over here. Thank you all. In that, I would especially like to say a few words to the first batch of students. My dear students, we are happy and you are lucky that you have chosen Greenwich for your higher studies. We are determined to equip and help you to step into the global world with confidence, courage, and you become real assets to your family and to your country. During your studies, beside academic studies, you are going to experience various cultures, learn new languages, and will make friends from around the world. Take the best from us and remember that this time will never come back to you. And it is your utmost responsibility to groom and dedicate yourself towards studies only. We hope that you will abide all the academic and the administrative rules and regulations of this university. All of us, including myself, are for you all. During the orientation week, the staff will brief you about the university systems, rules, regulations, and policies. I myself am looking forward to be among you very soon. May you all stay blessed in the beautiful country of Mauritius. Long live Pakistan, Mauritius, French.
I hope you all enjoyed your little trip to Pakistan. We are the university where miracles can happen, yes? I hope so. Well, after that little journey into Pakistan, let's come back to Mauritius. Let's come back to Mauritius and our 2017 cohort of students. The students will be recommended, the students will be encouraged to come and represent their country and share in their own language a little bit about why Mauritius, why Greenwich University, Mauritius campus. Let's hear it from them, from their heart. Please, ladies and gentlemen, let's encourage our students as I call upon Ashley from Mauritius to come up and join me on stage. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Comme une découverte qui était Greenwich University, moi j'ai le dernier brin l'espoir. Mais un samedi, je décide pour aller à l'exposition qui est dans l'université. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'ils ont permis à Maurice à travers Greenwich University. Donc Greenwich, pour moi, ça symbolise la réformation, une seconde chance et l'espoir. L'espoir d'un meilleur avenir. Du moment que j'ai franchi cette porte, je me suis tout de suite senti à l'aise ici. C'était comme une deuxième maison, ma deuxième famille qui m'a apporté beaucoup de soutien pour mon épanouissement et mon émancipation. I would like to also take a moment to thank everybody working here, the students, the members of the Greenwich Resource Center, and everybody else that have made this achievement possible. I would like to end by mentioning two quotes that have inspired me since I've become a member of this family. Firstly, it is said that when you desperately want something, the universe conspires to make it happen. And secondly, there is no lemon so sour that you cannot make something remotely resembling a lemonade. I thank you for your attention. Thank you, Ashley. Now let's welcome Syed Abdul Rahman from Pakistan. ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम तालिबे इल्मों को अपने मुल्क, वालिदैन और असातिज़ा के लिए बाइसे फ़ख्र बनाएं। आखिर में अल्लामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Saeed. Can I call upon Mr. Harpreet Singh from India? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Can I call upon Mr. Yudish Dipal from Sri Lanka? Sirum Denata. Everyone, good evening ladies and gentlemen. Welcome to Greenwich. අද ගොඩාක් සතුටු දවසක්. මොකද කියනවා නම් මම මගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක් වන ග්‍රීන්විච් තෝරාගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලබා ගන්න උපාධියක් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම ග්‍රීන්විච් යුනිවර්සිටි එක තෝරගත්තා. and ග්‍රීන්විච් විශ්වවිද්‍යාල ලෝක විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සතු සියලුම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වාගෙන යන නිසා සියලුම පහසුකම් වලින් සහිත නිසා මම ග්‍රීන්විච් යුනිවර්සිටි එක තෝරාගත්තා. සියලු දෙනාටම thank you. time number 6 thank you. Mr. Anmol Thapa from Nepal. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Greenwich. I am Anmol Thapa from Kathmandu, Nepal. सर्वप्रथम यहाँ पाल्नुभएका सबैजनालाई साथै ग्रीनविच परिवार र मरिसियसलाई म र मेरो नेपालको तर्फबाट नमस्कार। म ग्रीनविच युनिभर्सिटीमा आफ्नो नाम, मेरो नाम र मेरो देशको नाम रोशन गर्न लागेको हो। म अरू देश विदेश गएर पनि पढ्न सक्थेँ, केही सिक्न सक्थेँ। म यो मरिसियसमा आउनुको मेरो ठुलो उद्देश्य यो हो कि यहाँ हामीले विभिन्न देशबाट विभिन्न मान्छेहरू आएर यहाँ बस्दछन्। म अरू देशमा गइकन सिर्फ थोरै सिक्न सक्छु भने यहाँ मैले सबैजनाको सितबाट मैले केही थोरै चिजहरू सिकेर मेरो आफ्नो उसमा धेरै बनाउन सक्छु। त्यही हुनाले म यो मरिसियसमा मैले आएको हो। साथै यो ग्रीनविच युनिभर्सिटी र मरिसियसलाई म फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु कि मलाई हामीलाई नेपालीहरूलाई यहाँ पढ्नलाई आउन दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते। Mr. Mbeke Clement from Nigeria. Good evening all. My name is Mbeke Clement from Nigeria. Obi dị m ọṅụ, obi m jupụtara na aṅụrị ịbụ nwata akwụkwọ na ọmarịcha skuul a dị n'ọmarịcha obodo a bụ Greenwich University. Na mbụ anọ m na-alọbụ nlọ n'ofu ụbọchị na m ga-abụkwa nwata akwụkwọ na mba ofesi. Odo na mbụ bụ nwata akwụkwọ na ofu na akwụkwọ dịkwa na mba ofesi. Mana ngwa ngwa m nwetara admission na ọmarịcha ụlọ akwụkwọ anụnwa, enwere m mmasị ịrapụ ihe niile m na-eme na mba nke ọzọ ịbịaba na ụlọ akwụkwọ anụnwa bụ Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch. Na-ekenekwa Chineke ma na-asị ka Chukwu onye ọ bụ mmasị ya ime ka ihe anụnwa rute m aka, ka o mekwa ụmụnne m ndị Naịjirịa, ndị obodo dị iche iche dị na Naịjirịa nwere mmasị ịbịa ebe a bịa gụọ akwụkwọ, wee na-ekwe ha nkwa na site na amara Chineke na admission ọbụla ha na-arịọ ga-erute ha aka. Ọ gwụcha ka ọ ha m n'ọnụ na nwere isi anụnwa. Amen. Thank you very much.
ladies and gentlemen, encourage the students. It takes a lot for them to be. Mr. Aina from Madagascar. Hi everyone, my name is Andrea Manantin Ain Jianza. I'm from Madagascar. Falmera batsika rehetrarehetra, salama daholo tompoko. Raha toa ka safidy ny andra teto amin'ny Maurice aho, dia satria firenena tsara ny firenentsika eto, malaza ary akaiky ny tanindrazako. Ary raha toa ka safidy ny université, Greenwich University kosa aho, dia satria université avolenta, manana ny maha izy azy ary malaza eran-tany avokoa ny Greenwich University. Misaotra betsaka tompoko. Thank you so much, dear students. I know it takes a lot of guts and courage for you to come up first week in Mauritius and to be here and face an audience like this. Well done, every single one of you. And it's amazing to hear why you chose Greenwich. And I'm sure those of you in the audience who could understand every different language, you understand now why these students are here. Thank you again, dear students. 2017, here we come, hey? Come on guys, it's their evening. And let's be honest, it's not just the students who take into a university, it's also the students who turn out of a university. And I'm really pleased to say that we have amongst us one of Greenwich University Pakistan campus's alumni. He is here this evening to share with us what it means to him being an alumni of Greenwich University. Can I please call on stage Mr. Imran, Siddiq Imran, please? Thank you, Georgina. Faculty, diplomas, excellencies, students, parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Being a former student, you can understand that what kind of a privilege it is for me to be here today speaking to you from this forum. When the views I saw on the Karachi campus, I mean, very nostalgic for somebody like me who spent years over there. When Nawaz actually asked me to say a few words regarding Greenwich today, I was pleasantly surprised and very excited because Greenwich represents a very important phase of my life and something I love to talk about. But he was very smart. He said, you've got only 5 minutes. Otherwise, they could have gone on for hours. But before, I get into what I actually want to say to the students and to the parents who made this choice, I just want to introduce myself. So I was part of the 93-94 batch, graduated in 95, ancient history for most of you students there. I did my majors in finance, and almost actually before I got my degree, I ended up in a bank, and I've been a career banker ever since. I went on to become the CEO for Barclays in Pakistan, and then here I'm the CEO for HBL Mauritius. HBL Habib Bank is the largest Pakistani bank there is. So, I mean, that's a bit about me, but more importantly, the message that I actually wanted to share basically stems from my 22, 23 years of hiring people, seeing some of them succeed, some of them not so, and trying to figure out what makes people stick, what differentiates a successful employee from an unsuccessful one, or let's just say,
a less successful one. Universities absolutely play a critical role. I think the most important role. I mean, these are the career-forming institutions. To me, there are two aspects that are very critical. One is the value of the degree that you are getting. I mean, that's very important. How valuable is the degree? The first job I got, I mean, it was because of the Greenwich degree. I mean, that got me an interview. That opened the door for me. I walked in and I got the job. But to me, that's just the, half job done. I think the more important aspect is once you are in, how to be successful. I think that's critical. That's critical because a lot of people get in and then find themselves out of their depth. And that's what basically differentiates people. So now, to me, actually, those universities that prepare people for the real world, I think that's absolutely critical. And I think that's where Greenwich has an edge. And the reason for that is, various aspects to it, but I think the critical aspect is the faculty itself. Greenwich has always employed a very professional faculty. So these are the people who've actually done it in life. I mean, these are successful people who have performed well, who have been successful in the dog-eat-dog environment of professional whatever. And these people are now passionate enough to actually pass on that to the students. So the quality of debate that you get when you are up against a professional faculty, that is not just theory. It's very different from what you get from the other side. So that is, faculty and then the curriculum. I think in Greenwich, even in the 90s when I was there, I think there was a huge focus on projects, case studies, presentations, report writing. So theory is important, obviously, but these things, they actually develop personalities. They actually get you in the right frame of mind. It's all about the thought process. It's all about problems and the thought process that you have to resolve those problems. So if you're in an environment where people who themselves have attained senior positions and they're in the room trying to get you working through a case study, so the problems that get resolved are real life problems, and that's what I saw. When I was working, when the real problems hit me, it wasn't very different from my classroom. So that helped me, and I think that gave me a huge edge. So that's pretty much it. In conclusion, I just want to speak directly to the students and the parents. Trust me, you made the right choice. And you will know what I'm talking about as you progress in your studies and your careers. Best wishes to all of you. Best wishes to Greenwich for truly going international. Thank you very much. Thank you so much, Imran, for those inspiring words. And I'm sure that the students here have taken that to heart and a role model here and now for them to look up to. Thank you so much. I would like to request Mr. Azam Subrati, representing the Ministry of Education, to please join us on stage and share his message from the Ministry. Thank you. Chancellor is not here, right? Okay. All right. Okay. So members of the Diplomatic Corps, accommodations, faculty and management, dignitaries, students, parents, ladies and gentlemen. Good evening and peace be upon us all.
I would like to congratulate the organizers, first of all, for such a magnificent show today. It was really quite an emotional event to see these international students and the national anthems and all that. It's quite an innovation, believe me. I wish to extend the apologies of the Honorable Minister who is taken up in a prior commitment. But I would like to air her thoughts and views with you today, and also share my own thoughts on this big experiment here. It is a great pleasure for the Minister of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research to be associated with the orientation launching ceremony of Greenwich University, Pakistan, Mauritius campus. That's quite a mouthful. Mauritius aspires to develop into an education hub, and this has already been mentioned by previous speakers tonight. An education hub of repute in the region, attracting world-class institutions to set up quality higher education branches here. In fact, there are various facilities and incentives that have been put in place to encourage just this. We are also in the process of drafting a higher education bill, which inter alia will be geared towards improving the regulatory framework regarding the higher education sector in Mauritius. The quality assurance framework, a fundamental condition for quality education, will also be enhanced. The process of accreditation of courses at the Tertiary Education Commission will be reviewed in this higher education bill, laying greater emphasis on relevance of courses that meet national and regional needs. We have to aim for regional needs because we want to develop into a higher education hub, bringing people together and for the benefit of everyone and progress of everyone. In fact, we cannot have development, we cannot have peace if we don't have the proper education. Mauritius is a member of a number of regional economic communities such as SADC, the COMESA, the APEI, and has signed agreements and memoranda of understanding with a number of countries that would facilitate the movement of students and business people that would include academicians. And we also encourage our institutions to do likewise. We want our institutions here in Mauritius to be signing memoranda and acting on them, should not just be pieces of paper. And here I would like to congratulate this branch campus here for its MOU with Bangor in the UK. This is a good beginning, and I hope it goes on with other institutions as well. Setting up of the Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus is a testimony of Mauritius making progress in this direction of internationalization, and we're indeed most grateful to the promoters of the project here. Congratulations, this is a very good start. Small beginnings, but I'm sure you will grow up exponentially. In fact, at this launching ceremony, I would like to welcome students from all these countries and others. You are ambassadors of your countries, and we wish to play the perfect host for you and to ensure that you have the learning experience that will turn you into professionals. So that when you go back to your countries, your respective countries, we can hope that there will be development. And this will act as a break to extremism and all that's associated with that. The labor market in Mauritius and elsewhere is becoming more and more global, open and competitive. The demand for high skills is growing, and higher education, with its link to research and innovation, has a crucial role to play in equipping students with these skills. We want not only to develop into an education hub, but we also want to develop research in all aspects of life that will improve quality of life of the people and their livelihoods. In fact, many people recognize that many professions of tomorrow have not yet been discovered. And so how do you train people for that? It's a big task, and the way it can be done is to develop skills for adaptation.
so that you can change from one job to the other. In fact, it has been said that most people in this century will be changing jobs more than a dozen times. I've changed jobs almost 12 times. And as such, it is even more important for academicians to help equip students with the skills that will enable them to adapt and acclimatize to new situations. It's the only way. The international higher education landscape is changing. Students from China, India, and Korea have become the most mobile in the world. The number of students in higher education worldwide is expected to increase fourfold, from around 100 million in the year 2000, to an estimated 400 million in 2030, with Asia and Latin America in the lead. If there are today around 4 million internationally mobile students in the world, estimations indicate that might grow to 7 million by 2020, which is in 3 years' time. Students' expectations are changing too. In today's digital era, students want to be able to choose what they learn, how and where they learn, and when they should learn. The internationalization of higher education is no longer just about students leaving their countries to study abroad. It is a whole change in mindsets. And universities need broader strategies that go beyond mobility and cover many other types of academic cooperation, such as joint degrees, support for capacity building, joint research projects, open and distance learning programs. These are new things that are coming on now. Mauritius, as many other countries, is experiencing the phenomenon of graduate unemployment, in part due to the skills mismatch in what is being taught in higher education institutions and the requirements of the working environment. We would wish Greenwich University, Mauritius campus, Pakistan Mauritius campus, to participate in the process where courses offered will serve the purpose of alleviating unemployment. Of importance is also the inculcation of practical entrepreneurship skills that will enable students to set up once they graduate, so that they're able to stand on their own feet and not be dependent on others. And in fact, there are a number of local bodies in Mauritius that will be able to provide assistance in this domain should this branch campus so wish. Talking about entrepreneurship, this branch campus here itself is an example of entrepreneurship. And congratulations to the home university for taking the step, for taking the risk. Because entrepreneurship is also about taking risks, but if you don't take risks, you don't move. The Tertiary Education Commission already has updated its list of indicative priority fields of study, which indicates and gives an indication to students and parents about the courses to pursue for higher education studies based on the demands of industry and the labor market. Greenwich University, Pakistan, we know, is going along with the industry needs in the context of its orientation launching. This is an opportunity to orientate students to courses where there will be demand in the market. We are not all prophets, but we can have an indication of what are the main areas that are developing and are coming up in this world, whether Mauritius or elsewhere. Young people keen on learning are the future of our society, of any society. They need support, they need space to think, they need an appropriate learning environment, which I'm sure that this branch campus is going to provide. They should be empowered to take their learning in their own hands in order to shape their future and to be able to contribute to the development of society. There are so many ills in society. And in fact, you will find that most of the ills in society come from areas where there is very poor or no education whatsoever. Education brings development. Without development, this will lead to fanaticism and extremism of all kinds. So while you are here, remember,
it's not only your own education that we are concerned with, it's the future of our societies. Right. So while it is understood that the Greenwich University Pakistan Mauritius branch campus will cater for all these aspects about the learning environment, about the resources, about the teachers, the faculty, etc., I would like to address the few students who are here directly. You are invariably responsible for your own development, for your own success. To be really global students on a global playing field, you have to read widely, okay? Improve your general knowledge. Rub shoulders with those from elsewhere. Do not build silos. Develop attitudes and soft skills that will make you tolerant, respectful of the idiosyncrasies and cultures of others, and helpful of those less privileged than you are. There is godliness in all of us, and together we can strive for a better world. Okay? But being here with you this evening makes me feel I wish I was maybe 20 years younger, when it was at a time of, not 20 years, maybe 45 years younger, when we were full of hopes, full of plans, when we are at the time of making so many mistakes, but that's all part of life. Okay? So I wish you courage in all that. Having said that, I wish this institution here, Greenwich University Pakistan Mauritius branch campus, and its students, plenty of success in its endeavors. Just to close, our Master of Ceremonies here and myself, we were both teachers at Le Bocage International School. That was in a previous lifetime. Okay. And I'm so happy to be seeing you here again today. Thank you very much. Yes, pioneers setting up in private colleges for Mauritius some time back. Thank you very much for your words of wisdom to the students, your encouragement to the staff, the faculty, and of course to the understanding that by encouraging universities to set up campuses in Mauritius, we're encouraging not just Mauritius, but the region to come and join us. As you saw this evening, 8 different nationalities under one roof, all studying together, which is, again, a wonderful achievement in such a short space of time. I would now like to call on stage Mr. Rob Nawaz, who is the Manager for Academics, to come and share with us his vote of thanks. Members of the Diplomatic Corps, Director, Tertiary Education and Scientific Research, Minister of Education, parents and families of students watching us live through our website, distinguished guests, friends of Greenwich University, faculty and students, all protocol observed. On behalf of the Chancellor, the Registrar and the entire Greenwich family, we would like to thank you all for your gracious presence at the orientation launching ceremony of Greenwich University Pakistan Mauritius branch campus. Our special thanks to the Ministry of Education, Government of Mauritius, members of the Diplomatic Corps. Your presence is a source of motivation not for all of us, but for the student body especially. Respectable parents, we are very much thankful to you for your trust to send your kids here for the higher studies. We are very thankful for the Friends of Pakistan, Muslim Ladies Council, Dr. Sarir Ara, Mr. Ubaidullah for their continuous support and cooperation and sponsoring and mentoring the students from Madagascar, Comoros and Mauritius. Isaac Mauritius, thank you so much. Students ushered from Greenwich University Resource Center and Focus for their technical support. At the end, our sincere appreciation to the staff of Greenwich University main campus,
and the staff of Greenwich University Mauritius branch campus for their untiring efforts to make this dream come true. I'd like to call upon stage Dr. Sher Sultan Mughal, Ms. Georgina Ragavan. Please come on the stage. Please have a big round of applause for all the staff members for their untiring efforts. Ms. Grisha Dhunno, she is not here because of the operation. Ms. Janita Bodho, Ms. Anjali Moti, Mr. Kaisar Shehzad, Mr. Dharam Das, Ms. Ankita, Mr. Kavi, Ms. Rashmi. Please have a big round of applause for all of them. We all are once again very much thankful to you. Ladies and gentlemen, the dinner is ready downstairs. The ushers will lead you to the dinner area. Have a very nice evening ahead. Merci beaucoup. I'm Sonia Amjad and I'm a proud alumnus of Greenwich University. Currently, I'm working as the headmistress Beacon House School System. I would like to thank Greenwich University for my success and giving me life-changing experiences. Thank you. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo.
world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. We would like to introduce you with the student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name, as she is no more in this world. Nigat Welfare Trust is a non-profit organization. Nigat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity and is the managing director of Nigat Welfare Trust. Hi, I'm Taimur Amjad. I'm the Director Commercial Operations at Transworld Associates. I was at Greenwich from 93 to 97. Some of my best years were spent at Greenwich, and it helped shape who I am, and I had a great time. कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तुलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. You're watching Greenwich TV and right now you're watching Greenwich on the Move, जहां हम जगह जगह पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। तो
हम मौजूद हैं कराची के साहिल समुंदर पे, जहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं जो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। तो आके इनसे बात करते हैं। आज क्या करने हैं आप लोग सारे दोस्त हैं? हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं क्योंकि पेपर्स हमारे खत्म हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। पेपर की स्ट्रेस थी, बहुत पेपर दे दिए। कौन सी क्लास में? हम मैट्रिक में। अच्छा, तो मैट्रिक के अब एग्जाम्स हो चुके हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है? जी बिल्कुल। तो रिजल्ट से पहले पार्टी हो जाए, क्योंकि हो सकता है शायद रिजल्ट के बाद पार्टी रह जाए। घर वाले पार्टी देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और देखते हैं हमारे साथ और मौजूद हैं जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मसर खान है, मैं इन्हीं की क्लास में हूँ। लोग इसी जैसे मेरे दोस्त ने आपको कह दिया कि हमारे पेपर खत्म हो गए, बहुत स्ट्रेस से पढ़ाई का, इसलिए हम घूमने आ रहे हैं। तो मजा आ रहा है? मजा तो अभी हम आए, अभी हमारा एंट्री हुई है और हमें नहीं पता। अच्छा, तो ये देखें आपस में सारे ये लोग एक क्लासमेट्स हैं और कितना साथ इनमें मजा मस्ती है, वो सब हम आज देखेंगे। तो इंग्लिश गाना अब हमें सुनाने वाले हैं। सोच रहे हैं हमारे भाई के कौन सा इंग्लिश गाना। कोई टेंशन नहीं है, मैं भी साथ गाऊंगा। You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid of sight of aim of light, wanna see us alight, where are you now? Thank you so much. Alright, that was Faded by Alan Walker। और सवाल ये उठता है कि ये Where are you now कह किसको रहे हैं भाई? कोई है ज़हन में तो बता दो। अभी तक तो कुछ नहीं है। चलो जी, मैट्रिक में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ज़हन में कोई आ जाए। और हमारे साथ कौन भाई है? ये भाई तो पीछे हट गए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप ये बताएं, सारे दोस्त वगैरह आए हुए, तो किस तरह से आए हो? बाइकों पे आए। बाइकों पे आए? अच्छा, तो फुल एंटरटेनमेंट सारे। अभी हम लोग गार्डन गए थे, गार्डन से अभी फिर यहाँ आए। हम लोगों का था नहीं यहाँ का आने का, एकदम से बन गया। हमसे मिलना लिखा था। हाँ भाई, यही समझ ले, आपसे मिलना लगा। तो कोई सीटी बजा के हमें दिखाओ। चलें, जितना भी कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राइट गाइस, आपने देखा हमारे साथ एक स्कूल के मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे जो कि अपने एग्जाम्स के ख़त्म होने की खुशी में यहाँ सेलिब्रेट करने आए हुए थे और उन्होंने हमसे बात की, गाने भी सुनाए, सीटियाँ भी बजाई। एंड लेट्स सी हु एल्स वी हैव ओवर हियर। कराची की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं और हर इंसान एक से एक इंटरेस्टिंग होता है। और इसी तरह से मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे देखा है और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? नवीद। नवीद भाई, समुंदर का आपने रुख किया, फैमिली के साथ इधर आए हुए हैं, ऐसे ही घूमने फिरने या कोई खास? एक्चुअली वी आर विजिटिंग फ्रॉम लाहौर। ऑलराइट, जिंदा दिल आए लाहौर, तो इनसे तो खूब गप लगेगी। और so it's so beautiful, nice warm water and weather is so pleasant. We are enjoying a lot. We had a horse ride which was so nice and in general it was really nice, good. So comparatively to Lahore, you don't have the sea over there, you don't have the beach over here. So when you come to Karachi and you visit Karachi, how does it feel to visit the beach? The beach is beautiful. The only thing we don't have in Lahore, in Punjab, is a beach. It's just ocean. Ocean makes the Karachi really different than Punjab. But we have the river over there, but it's not big like ocean over here. तो कुछ पंजाबी वेज गल भी कर लें। Why not? I mean, it's hard for me, but let's try again. Okay. तो कोई गाना सुना दे हमें। I don't sing in Punjabi. I do not know how to sing in Punjabi. English में सुना दे। I cannot sing even in English. And here is my daughter. Come on, my daughter. और यहाँ हमारे लाहौर से। She's visiting me from abroad. She's visiting me from USA. Oh wow! So we've got a little angel from USA. We'll talk to her. Hello, how are you? Good. So is this your first time in Pakistan? Yes. How do you like it here? Good. I like it. So did you enjoy on the beach? Yes. Did you take a horse ride? Yes. Can you tell us some poem? Sing some poem, Ravi. How was the horse ride? Good. Good. You like Pakistan? Is Pakistan beautiful? Yes. Do you want to come back here again? Or is it good, better than USA, or Pakistan is good? Pakistan is good. All right. राइट तो आपने देखा हमारे पास यहाँ यूएसए से भी एक छोटी सी नन्ही सी परी आई हुई थी एंड वी हैड विजिटर्स फ्रॉम लाहौर और वो कितना पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए अच्छा सोचते हैं। दैट इज द थिंग। देखते हैं हमारे साथ यहाँ और कौन कौन मौजूद है।
कराची के अंदर जब आप समंदर पे आते हैं तो आपको वहाँ पे घोड़े, ऊंट, सांप, बहुत सी चीज़ दिखती हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जो कि सांप के एक्सपर्ट हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? सलाम, इकबाल हमारा नाम है सही बादशाह, हम सांप वाले फकीर। इकबाल भाई, कितने अरसे से आप सांप के जो है चीज़ें देख रहे हैं? गुजर गया हमारा ये जिंदगी तलक हम सांप ही पकड़ते हैं, और काम नहीं है हमारा। सांप पकड़ना, गिदड़ सिंगी निकालना, हाथ जोड़ी निकालना, ये हमारा काम है। मनके वाले भी सांप पकड़ते हैं और बीन बजाने वाले भी सांप पकड़ते हैं। अभी थोड़ा बीन सुनाओ मेरे। चले जी, हमें बीन सुनाएंगे। क्या बात है। देखिए, कोई म्यूजिक की, आर्ट की लैंग्वेज नहीं होती, और जिस खूबसूरती से भाई ने बीन बजाया, अब इनसे हम इनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। और भाई हिंदी में इनसे अब आप सवाल करें। इधर है मेरे पास बोलो, क्या यहाँ पे आते हैं, क्या होता है मतलब छा हूंदो छा न हूंदो इहो मतलब रोज़ी 300-400 रुपया थिए थी, वधीक कोन। कॾहिं 200, कॾहिं 300, कॾहिं 100, कॾहिं 400 में मतलब तव्हांखे कीअं लॻे थो, एंजॉय कयो था तव्हां? हाँ वीआईपी आहे। मौसम भलो आहे घुमण जे लाइ, माना कराची शहर भलो आहे, हा न। आऊं नवकोट शहर मिठी ज़िलो। एक चीज आपने देखी भाई कि जितना टाइम हमसे हमारे भाई ने बात की, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट है हमारी शहर की खूबसूरती के। यहाँ पे हर इंसान मुस्कुराता है, हर इंसान अपने रोजमर्रा की मुश्किलात के बावजूद खुश है, जिंदगी से लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कराची। Hello and welcome, assalamu alaikum. You're watching Lighter Note with me उमर खान, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर दफ़ा एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। और आज की जो हमारे ख़ास शख्सियत है, बहुत ही ब्लेस्ड, टैलेंटेड आवाज़, क्या कमाल के सिंगर हैं, क्योंकि जब वो गाना शुरू करते हैं तो मैं तो पर्सनली किसी और ही जोन में चला जाता हूँ। और प्रीवियसली आपने ग्रीनिच लाइव सेशंस में हमारा फॉर्मेट कुछ और देखा था। लाइटर नोट में आप एक डिफरेंट अंदाज में हमें और हमारे गेस्ट को देखेंगे, क्योंकि लाइव सेशंस के बाद लाइटर नोट में हम अपने गेस्ट के घर जाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गेस्ट के घर में, और अब उनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर पे दावत दी। और ये हमारा लाइटर नोट शो, तो सबसे पहले तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, घर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी और अपना कीमती वक्त दिया कि हम आपके घर पे आ सकें और आपका जो हुनर है वो सबके साथ शेयर कर सकें। ब्रदर, ये आपका ही बड़प्पन है जो आप मेरे घर आए, थैंक यू सो मच। बस ये है कि कुछ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश है आपके लिए पेश करेंगे। जी, ये ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे जाके नसीम खान सर्च करेंगे, और जो आपके सामने इनका टैलेंट आएगा, जो इनकी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज़ आएंगी, आप खुद एक अलग जोन में चले जाएंगे। और वो टीज़र हम आपको दिखाएंगे ज़रूर और शो के एंड में। लेकिन उससे पहले आज हम नसीम खान की लाइफ जर्नी शेयर करेंगे कि कहाँ से उन्होंने गाना शुरू किया, क्या उनकी पूरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहे, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनली दुबई में रहे 7 साल, वहाँ उन्होंने गाए और बेतहाशा बड़े नामों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसमें सज्जाद अली हैं, शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं, और बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स रही हैं ऑन स्टेज वाइल सिंगिंग, जिसमें हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नसीम भाई, बताइएगा कि ये जो आपकी जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या बचपन से शौक़ था या फैमिली में चला आ रहा है, ब्लड में चला आ रहा है, घराना है आपका पूरा सिंगिंग से रिलेटेड? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा जो है घराना ही है अल्लाह की रहमत से। बाकी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, मैं एक साल का था उस वक्त। तो मेरे जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल गाते हैं, गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ गाते हैं माशाल्लाह।
तो मेरे वालिद साहब जो हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जो है तवज्जो हो गई थी उनकी। तो इस फील्ड से थोड़ा सा, मीडिया से जो है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया था। बाकी उन्होंने ही मुझे तैयार किया है बचपन से, तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र से है मैंने तालीम लेना शुरू कर दिया था। जब थोड़ा बहुत मुझे अब्बू को देख के मैं गुनगुना लेता था तो अब्बू ने मुझे इस काम पर लगा दिया था। अब जब आप बात भी करते हैं ना, तो आपकी बात की आवाज़ की टोन भी इतनी सुर में होती है कि पता चलता है जी कि ये सिंगर बात कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इतनी यंग एज से आपकी तालीम शुरू हुई, तो वो कौन सा टाइम था, पहला टाइम जब आपने किसी स्टेज पे परफॉर्म किया हो या सबके सामने परफॉर्म किया हो, जहां आपको खुद भी ये फील हुआ हो कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ और इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ? कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत होते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया हुआ था कि बेटा अभी आप तैयार नहीं हो, जब आप काबिल हो जाओगे तो उस वक़्त मैं आपको इजाज़त दूंगा। क्या बात। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिल्कुल रोका हुआ था। तो इस वजह से मैंने कोई भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। एक बस यही है कि अब्बू ने जब इजाज़त दी मुझे तो मैं दुबई चला गया था। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टैलेंट को प्रमोशन बहुत कम मिलती है। तो मुझे दुबई में एक मौका मिला, तो वहाँ पर फिर अल्लाह की रहमत से मेरा इंटरव्यू हुआ, और वहाँ इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक जॉब का जो है सिलसिला बन गया था मेरा। तो जॉब जो है फैमिली रेस्टोरेंट में जो है मुझे मिली थी, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। बाकी ऑफ़र्स भी मुझे बहुत आई थी। लंदन से मुझे ऑफ़र आई, बहरीन से मुझे ऑफ़र आई, मस्कत से, मलेशिया से, यानी मुझे बहुत सी ऑफ़र्स जो हैं आती रहती थी। अपने लाहौर से भी मुझे ऑफ़र आई थी। तो मेरा जो है, मैंने जो वहाँ पर वर्क किया, तो यकीन करें ऑफ़र्स तो बहुत आई, बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप जो हैं, मैं आपकी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यही कहा कि यहाँ से जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है अगर हमारा राब्ता रहा तो वहाँ पर फिल्म में भी मुझे मौका मिला। इंडिया का मुझे मौका मिला था जबकि ये एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें नबील शौकत ये भी थे वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला, तो मैं उस कंपटीशन में जा नहीं सका। मेरा दुबई में 7 साल से आना जाना है, और वहाँ पर मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, ठीक है, यानी मीडिया फील्ड में नहीं हूँ। मीडिया में तो अब आया हूँ मैं बोल टीवी के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान स्टार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जो कि माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ऑडिशन जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में 15 लाख व्यूज़ थे उस ऑडिशन के, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। बाकी उसके बाद जो है अल्लाह की रहमत होती रही मुझ पर। जी बिल्कुल। और जिस ऑडिशन का इन्होंने जिक्र किया, वो ऑडिशन ही अगर आप सिर्फ देखें जाके, जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करें नसीम खान, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत तोहफ़ा खुदा ने इनको दिया है इनकी आवाज़ के ज़रिए से। और जब ये शुरू होते हैं और जो इनकी रेंज है वो क्या कमाल रेंज है कि अगर हमें अपने लाइटर नोट्स, इस प्रोग्राम का नाम है, कि अगर उस रेंज की ऊंचाई पे मैं पहुंच के गिर जाऊं तो बचने का कोई चांस नहीं है, वो रेंज है नसीम खान की, और वो आपको हम आगे जाके सुनाएंगे भी। सर, आपकी जो एक जॉनरा है स्पेसिफिक जहाँ आप गाते हैं, वो क्लासिकल है, सूफ़ी है। तो आजकल के हम दौर में देखते हैं कि बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ऑफ कोर्स क्लासिकल ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कभी ये सोचा कि यार मैं भी जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से गाऊं, या क्लासिकल या सूफ़ी ही आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है? देखें, आजकल के दौर के हिसाब से ही मैं गा रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ऑलराउंडर गा रहा हूँ मैं। और अगर महफ़िल पे बात होती है, महफ़िल जैसी मिल जाए उस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फ़र्स्ट तो मैं
क्लासिकल गाता हूँ। उसके बाद जो है गज़ल, गीत, सूफ़ी जो है वो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस वक्त। ये तो आजकल की दौर का है। और पॉप रॉक ये सभी करता हूँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट सिंगर कौन थे? मैं बचपन से जो मेरे फेवरेट रहे हैं ना वो ग़ुलाम अली साहब रहे हैं, और जो कि गज़ल गायक है माशाल्लाह, बहुत ही मुझे मेरे फेवरेट हैं। और मेरा जॉनरा भी जो है उनके साथ टच होता है। और मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब, ये जो हैं मेरे फेवरेट रहे हैं। फ़तेह अली ख़ान साहब जी, जितने आपने नाम लिए, ऑफ कोर्स हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सब हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमारे वो पाकिस्तानी असासे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो शफ़क़त साहब कर गए, अमानत अली साहब कर गए, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कर गए, जो ग़ुलाम अली कर गए हैं, और जो मेहदी हसन साहब कर गए हैं, वो काम आई थिंक कोई कितनी कोशिश कर ले उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते, और आपके क्या शौक हैं? बस मुझे बचपन से जो है मेरे वालिद साहब से यही तालीम मिली है। अगर और मैं कुछ करता तो वो मेरे वालिद साहब ही डिसाइड करते, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं था। बस बचपन से सिंगिंग ही मैं देखता आया हूँ, और प्रोफेशनल सिर्फ सिंगिंग ही कर रहा हूँ मैं, और कोई काम नहीं। ये देखें, ये होती है डेडिकेशन, ये होता है पैशन, कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपनी ज़िंदगी में सिंगिंग के अलावा कुछ और कर भी सकते थे, सोच नहीं सकते। तो ये पैशन हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि अपनी फील्ड से ऐसा इश्क करो कि दूसरी फील्ड की तरफ ना निगाह करो, ना सोचो कि यार मैं ये भी कर लूँ। और ये जब आप डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक फील्ड में रहते हैं तो सक्सेस आपको मिलती है। और वो सक्सेस का रिजल्ट क्या है, वो जब एंड में नसीम भाई हमारे लिए गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो नसीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप दुबई में रहे, आप जैसे मैंने जिक्र किया, साजाद अली साहब के साथ आपने परफॉर्म किया, शफ़क़त अमानत अली के साथ आपने परफॉर्म किया, उनसे मुलाकातें रहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, इनके साथ गाना, स्टेज शेयर करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सज्जाद भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ परफॉर्म नहीं हुआ था। बाकी शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं जो, उनसे मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम, पहले तो वेलकम किया था, फिर उनकी ओपनिंग की थी मैंने, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं वहाँ पर गया हुआ था जॉब के लिए, तो मेरी जगह किसी को मिल गई थी, तो मैं तो परेशान था वहाँ पर। फिर वहाँ पर मुझे मौका मिला कि वेलकम और ओपनिंग का, शाजिया जी हैं दुबई में, बहुत अच्छी जी बिग से उनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उनका एफएम है। तो उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया, तो मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम कर लिया था। फैसल कपाड़िया साहब जो हैं, तो वही मुझे मिला। फिर मुझे माशाल्लाह कुछ पेमेंट मिल गई थी अच्छी खासी, मैंने थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत खर्च करके गया था यहाँ से। फिर वहाँ पर 1 महीने तकरीबन मैं रहा था, तो उसी टाइम पे सज्जाद भाई से भी मुलाकात हुई थी। सज्जाद भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, इब्ने बतूता जो है मॉल, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको तालीम देता था मैं पहले। तो फिर मैं अपने बॉस से ही मिलने गया था, अभिषेक माथुर जो हैं, उन्होंने ही मुझे दुबई में एडजस्ट करवाया है। यानी कि जो भी मेरी जॉब का सिलसिला, इंटरव्यूज़, एक ही इंटरव्यू हुआ था, बाकी उसके बाद जॉब का मसला हल हो गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी की जाए, उसके बाद आगे का जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। राइट। और देखा आपने, नसीम भाई अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक इतनी बड़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ का दूसरा नाम है स्ट्रगल। हम देखते हैं कि लाइफ में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो किसी मुकाम पर आ जाते हैं तो हम सिर्फ चमक देखते हैं, हम सिर्फ उनका फेम देखते हैं, हम सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं। लेकिन उस सक्सेस, फेम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक रियल साइड ऑफ द स्टोरी होती है, जो मैं, आप, एक एक कॉमन आदमी उससे रिलेट कर सकता है। कि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ के बीच का जो मेरा सफ़र था वो बहुत कठिन था, वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस।
तो वही बात आप सबके साथ भी यहाँ हम इस प्रोग्राम के थ्रू और आज हमारे गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू शेयर करेंगे कि सक्सेस कम्स विथ टाइम एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टिक ऑन द पाथ। आपको लगे रहना है, मुश्किल वक्त आएगा, घबराना नहीं है, चलते जाना है और अपने टैलेंट पे भरोसा करना है। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ और जितना मैंने बिल्डअप किया है, तो अब मजीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते और नसीम भाई की खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाते हैं। क्लासिकल और सूफ़ी के अंदर इनकी महारत है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नसीम भाई अगर आप हमें कुछ क्लासिक में, कुछ सूफ़ी में, कुछ एक हमारे व्यूअर्स के लिए मेडले सा सुना सकें। मैं एक सहरा आपको पहले सुना रहा हूँ जो कि सज्जाद भाई का है। माशाल्लाह, देखें अल्लाह की रहमत उनके ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ी, और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उस्तादों की भी जगह हैं। तो उनका एक सहरा है रंग लागा, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जिद्दोजहद की है, वो मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और। पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे कैसर लाया तेरा मामा थर बनड़े को सेरावाल बनड़े को वो रंग लगा ओ रंग लगा निरे गा मा धा पा दा मा पा मा गा मा रे गा मा ग रे ग रे निरे नि नि दा निरे गा मा ग रे सा निरे गा मा दा पा दा मा पा गा मा पा नि दा पा दा मा पा गा मा पा नि रे गा रे मा गा रे ग रे नि रे नि दा नि रे दा नि दा पा दा मा पा गा मा पा नि रे नि दा पा दा मा पा गा मा रे ग रे सा ओ रंग लगा हा ओ रंग लगा gama pani da ba da ma ba ga gama pani re gani da ni da ni gani da ni da ni da ni da ba da ma ba ga gama pani da ni da pa da ma ba ga ma re gani da ni da da ni re sa da da ni re sa da da ni re sa da ni re sa da 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 da na क्या बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैं हिलाना चाहूंगा, होश में आ जाए, ये हकीकत थी, ये असली था। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अंदर 2-4 और गुर्दे लगवाए हुए हैं या एम्प लगाए हुए हैं, क्या क्या चक्कर क्या है? ये इतनी आवाज, इतनी रेंज, माशाल्लाह, क्या बात है। ये बस आप जैसे बहुत से लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, ये बस उनकी दुआओं का असर है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे वालिद साहब की मुझ पर बहुत बड़ी दुआ है कि जब उन्होंने मुझे
कहा था ना कि नसीम अब आप जाओ, तो उस टाइम पे अल्लाह की रहमत से मैं बहुत तैयार था। और ये जो तैयारी है ये सारी मेरे वालिद साहब की मेहनत है मुझ पर और मेरा लगाव है, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत और लगाव हो ना सिंगिंग से, इससे हार नहीं माननी पड़ती, इससे निकलना पड़ता है। तो अगर वहाँ से निकल गए तो फिर अल्लाह की रहमत हो जाती है इंसान के ऊपर, क्योंकि ये बहुत वज़न करने वाला काम है। जब इंसान 2-2 4-4 घंटे मेहनत करता है तो ये वज़न हो जाता है इंसान के, अब मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ इससे। वहाँ से निकलना पड़ता है, तब जाके ये हासिल होता है। जी बिल्कुल, देखें यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि जब लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे यकीन रखें, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और सिंस आपने अभी जो आवाज़ सुनी नसीम भाई की, ये वो आवाज़ है जो रूह को छू जाती है। और इसी बात पे मैं नसीम भाई से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नसीम भाई कुछ और अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक डिफरेंट जॉनरा में, कुछ एक डिफरेंट रेंज में सुनाना चाहें। मैं आपको एक और सॉन्ग सुना रहा हूँ जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत फेमस है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो भी मैं जो है उसमें थोड़ा सा मैंने काम किया है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी। क्या बात है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से, सो लेट्स सी। तो राग दरबारी उसके अंदर है ये सॉन्ग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो मैं पेश कर रहा हूँ आप सबके। सा नि सा रे सा द ध नि रे ग म रे नि ध रे सा द नि रे सा। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से करारा जाए, जैसे शहरों पे होले से चले बाद नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग मा बदाली पासा ददली बाबा मबली गा मरे सा। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम भाई मैं तो एक अलग जोन में चला गया हूँ, मुझे वापस आने में जो है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या गजब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार भाई। और ये जो स्केल जो है बहुत ही हाई मैंने रखा हुआ था, ओरिजिनल से भी ऊपर था। बाकी ये कोशिश करते हैं आप सबके लिए।
ये जो स्केल था, ये स्केल पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अगर अपने, अब एक मिसाल देता हूँ, आप अपने जो टेप रिकॉर्डर है उसकी वॉल्यूम जब फुल पे कर दें तो वो स्पीकर फटना शुरू हो जाते हैं, साउंड सिस्टम्स फटना शुरू हो जाते हैं। ये एक इंसान का गला है, और वो जब इतने हाई जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी आवाज़ में कोई झोल नहीं आया। ये वो टैलेंट है जो कि बहुत रेयर है, और इसको हमें कदर करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए और सराहना चाहिए। और आज आपकी जो मुलाकात हमने नसीम भाई से कराई है, मैं वापस कहूँगा जाके सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे इनके नाम से, और इनका टैलेंट मज़ीद देखें। जो जिस बोल के शो का इन्होंने जिक्र किया, उसमें ये इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, और कितने बड़े बड़े नाम इनकी आवाज़ सुन के वैसे ही गुम हो गए जैसे अभी आप लोग गुम हो गए, जैसे मैं इनका गाते हुए गुम हो गया था। तो नसीम भाई, जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्ट्रगलिंग बहुत है, उन सब बच्चों को, नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो देखें मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत करे। देखें अल्लाह ने कोई ना कोई तो ज़रिया बनाया हुआ होता है, ठीक है? तो बस इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर होगा, मेहनत करते रहें और उस अच्छे उस्तादों से सीखें ताकि आपको कुछ मज़ीद पता चले कि इसके अंदर आखिर है क्या। अब देखें, ये जो मैंने अभी जो स्केल, जिस स्केल से मैंने गाया है, वो स्केल में कॉन्सर्ट में यूज़ करता हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लाइव है ये, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितना भी हो सके खाना पीना अच्छा करें, अच्छा करके और उसके बाद जो है अपनी मेहनत को जारी रखें, अच्छे उस्ताद से सीखें। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके लिए अल्लाह ने मंजिल एक रखी हुई है, सोची हुई है, वो ज़रूर मिलेगी आपको, हारे ना बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे इस प्रोग्राम पे आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे उमर भाई। बहुत प्यार मिला आपसे भी भाईजान। और सजील भाई जो हैं, उन्होंने मुझे याद किया है यहाँ पर, मेरे बोल टीवी में मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान हैं जो कि ख़ुद सिंगर हैं, और इन्होंने मुझे याद किया। ये किस लिए याद किया? ये इनकी मोहब्बत है और टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जैसे भाई उमर भाई एंड सजील भाई, उन्होंने मुझे याद किया है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल, ये इनकी हम्बलनेस है, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम फिर तकलीफ़ देंगे, और चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के सामने आके उनको एक लाइव लेक्चर दें। वो आपकी जर्नी से, आपकी इंस्पिरेशन, एज एन इंस्पिरेशन आपसे सीखें, क्योंकि जो आपकी स्टोरी है और जो आपकी जर्नी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है कि उससे मैं सीखा हूँ। आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और स्पेशली जब नसीम भाई गाना शुरू हुए होंगे तो आप लोग सब गुम से गए होंगे। तो नसीम भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपके फ्यूचर में जितने आपके इरादे हैं, जो जो आपकी मंजिलें हैं, अल्लाह उन सब में आपको कामयाब करे। और आपको सिर्फ वंस अगेन थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है भाई। आप तो हमें कभी भी याद करेंगे इंशाल्लाह। आपके एक फ़ोन पर ही हम आ जाएंगे, हम नखरे नहीं करते। थैंक यू सो मच। क्या बात है। राइट, सो गाइज, आपने आज हमारे गेस्ट से मुलाकात की, और आज के हमारे गेस्ट थे नसीम खान, जो कि मैं सिंगर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी आवाज़ और जो इनका टैलेंट है वो एक लफ्ज़ में बयान हो नहीं सकता। तो आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान थे नसीम खान, और आपने बिल्कुल उनका टैलेंट देखा, उनकी जर्नी देखी, उनकी सादगी देखी, और ये थे हमारे आज के गेस्ट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख़ास ख्याल रखें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा ये नया फॉर्मेट, नया शो कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम आएंगे विद अनदर गेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ़ में या कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Transformation, adaptation and actualization is what we humans must do. इनिशियली आई वाज अज्यूमिंग कि ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम करना या कंटिन्यू करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा और कैसे होगा, बट ड्यू टू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑफ टीम ग्रीनविच एंड फैकल्टी सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो गई। The teaching strategies that were used by the teachers were according to the students' needs, and the management was always there to help us in every way possible. As these were difficult situations and times, but the teachers made it easier for us to learn and understand. Regardless of fact I'm at university or at campus, Greenwich level up their game even in this pandemic. And online classes में कोई chaos या कोई haphazard बिल्कुल नहीं होता. I really enjoy it. I just want to thank my university's management for tackling this pandemic situation so well. Hats off Greenwich University. They made a portal for us, GEMS portal, जिस पे इन्होंने हमारे एग्जाम्स कंडक्ट किए। हमें लगा था हम चीटिंग कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, कॉपी से देख लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, बट इन्होंने वो चीज़ को इतना बेटर कर दिया था कि हम वो कर नहीं पाए। I want to appreciate the efforts of the team which led to the completion of this semester in an ongoing pandemic. Thank you to the Greenwich team. Greenwich University is providing hybrid learning facility. Students can attend the classes at their home as per their convenience, or they can attend the campus. For this purpose, if they would like to attend the campus, they can register themselves at the Greenwich Blended Learning Management System. Just log into the learning management system, go to the Student Secure Desk, click on Reserve under Blended Learning. See if the capacity is still available in your upcoming classes. Click on Reserves. You are done. The new normal is the new norm, and we should learn to embrace it by practicing social distancing, staying 6 feet apart and avoiding close contact, and also sanitization of our hands and wearing masks.
Greenwich has always put the interests of its students first, and that's why they've provided sanitizers at every social point on campus, starting with the main entrance and in the lobby. Also, the campus is disinfected every day. Technology can't substitute, human contact. I mean, we are avoiding contact, but it's better for me to actually look at a teacher while he or she is explaining something to me. Because it makes more sense that way and I can understand it better. Proud to be a part of Greenwich University. Greenwich is like a home. Thank you for everything. Thank you, Greenwich. Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये बताऊं, ही इज़ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनका जो क्राउड है वो झूम उठता है। क्राउड एंटरटेनर हैं और कमाल के सिंगर हैं, इनका हम मज़ीद आपको तारुफ कराएंगे लेकिन ड्यूरिंग द शो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी वेलकम मिस्टर अजीम खान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं उमर? ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और लाइटर नोट का पार्ट बने। माय प्लेजर सर। तो आपकी शुरुआत हम करते हैं जर्नी के साथ। आप एक सिंगर हैं और कमाल के सिंगर हैं जो कि हमारे आज व्यूअर्स को भी पता लगेगा जब आप परफॉर्म करेंगे विद दिस गिटार अलोंग। थैंक यू वेरी मच। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि शौक तो हर किसी को होता है, मैं भी बहुत गाना गाता हूँ लेकिन अकेले वो भी हेडफोन लगा के। लेकिन जब एक इंसान प्रोफेशनली गाने की तरफ आता है तो उसके बड़े चैलेंजेस होते हैं, पूरी जर्नी होती है। तो आपका ये शौक कब पैदा हुआ और आपको कब एहसास हुआ कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली देखें, सिंगिंग या कोई भी आर्ट इंसान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये, ठीक है। बाद में इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करता है, लेकिन बस यही था कि व्हेन आई वाज 5 or 6 year old तो एक शौक़ था और स्ट्रिंग्स बैंड आया था नया नया, उसमें जब लाल भाई जब गिटार बजा रहे थे और वो दूर गाना था तो बस उस वक्त से मुझे एक जो ना वो यानी कि जुनून सवार था कि यार मुझे जो है वो गिटार सीखना है। देन शौक़ था, क्रेज़ आप उसको कह लें। सो फिर आगे पीछे हाथ पाँव मार के किसी न किसी दोस्त से गिटार लिया। गिटार लेने के बाद जनाब जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना तो फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि आप उसकी जुस्तजू में होते हैं। सो इसी तरीके से मुझे जो है वो हमारे ही एरिया में मुझे टीचर मिले, उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी मुझे गिटार्स के बारे में कि इस तरीके से। अब मैं अपनी बात पर आऊँगा दोबारा कि जब एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है ना आपके अंदर तो वो गॉड गिफ्टेड चीज़ आती है सामने। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो आई सामने तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे अंदर म्यूज़िक का सेंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैंने कहा यार बस ये मुझे नहीं पता कैसे, हालांकि हमारा कोई ऐसा यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई मेरे वाले साहब या उनके कोई जो है वाले साहब मतलब आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ हो। बस एक चीज़ है कि बस ये मेरे अंदर आया और तो सीखने के बाद ऐसा ऐसे जब मैंने गिटार पे थोड़ा सा अबूर हासिल कर लिया, थोड़ा सा, मैं अपने आप को मतलब अभी भी यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। सो उसके बाद 2008 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। हमारा यहीं रांची का बैंड था और उसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने वहाँ पे जो है ज्वाइन किया। बस वो हम लोग जो है वो शोज़ रात को करते थे, जो है वो जा के पार्टीज़ में, गिग्स में, इधर उधर। उसके बाद अच्छा उसमें होता ये था कि शो जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, हम आर्टिस्ट को बेसिकली मतलब प्ले करते थे। तो उस आर्टिस्ट के आने से पहले एक बैंड परफॉर्मेंस होती थी जिसमें होता ये था कि बैंड का कोई भी मेंबर सॉन्ग गाएगा, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि मतलब स्टार्ट मुझसे होता था वहाँ पे।
तो उधर मैं स्टार्ट करता था। ऑब्वियसली मैं गिटारिस्ट था, तो मैं जो है स्टेज पे आगे खड़ा होता था। तो वहाँ पर लोग हमारे जो बैंड मेंबर थे वो ये कहते थे कि अजीम भाई आप गाएं, आप ही गाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है, हमसे तो बहुत अच्छी है, आप ही गाएं। तो मैं कहता ठीक है। तो उधर से थोड़ा सा गा के ना आवाज़ और निखर गई थी। ऑब्वियसली जब इंसान को म्यूज़िक का सेंस होता है, आपको पता है कि आप एक यानी कि म्यूजिशियन हैं, तो आपको पता है यार मुझे अपनी आवाज़ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से कैसे मैच करनी है। तो इतना सेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जिक्र किया स्ट्रिंग्स को, आपने इनिशियली देखा, फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन इंस्पिरेशन है और कौन सा जॉनर है? क्योंकि आपकी 2015 में एल्बम भी आई लौट आवना, अभी हाल में ही आपका एक कमाल गाना जो कि हर किसी ने देखा होगा, जोगी के नाम से वीडियो भी इज देयर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कौन सा जॉनरा है जिसमें आपका ज़्यादा अबूर हासिल है, और वो कौन से जॉनराज हैं जो फ्यूचर में हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए, मैं जॉनरा इज़ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है पॉप म्यूज़िक। सॉफ्ट रॉक इज़ बेस ऑन यू नो थोड़ा सा उसमें रोमांटिक टाइप और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक जैसे मेरा जो पहला एल्बम आया था उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग, एक्चुअली मेरा सीन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रिंग्स यू नो स्ट्रिंग्स तो हर कोई जानता है, तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे ना, उससे बड़ा इंस्पिरेशन थी मुझे कि यार दूर, अब लाइक दूर पॉप म्यूज़िक है, ठीक है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन कि यार गिटार के साथ जो है ना वो एक आवाज़ अपनी मैच करके और फिर गाना उसी थीम के अंदर रहते हुए तो जो स्ट्रिंग्स की थी, लेकिन कॉपी नहीं किया उसको। ऑब्वियसली एक अपनी यानी कि फीलिंग थी अंदर, किस तरीके से एक अगर कुछ अपना मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना एल्बम जो मेरा जो है वो लौट आना मेरा जब लॉन्च हुआ था, उसमें जो पहला सॉन्ग था एल्बम का वो था लौट आना। तो उसमें अगर आप जो है वो सुनेंगे, किसको लौट आना कह रहे थे अभी? अगर हम मैं किसी को लौट आना नहीं कह रहा था। कहीं देखे कहते एक सिंगर एक आर्टिस्ट का जब तक कहीं कोई दिल का दर्द ना हो तब तक वो जो है ना डेप्थ नहीं आती। तो ये लौट आना के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। उसके पीछे बस ये था कि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी इस तरीके से आपको बताता हूँ कि लौट आना हमने इस तरीके से गाना बनाया था कि एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उनकी थोड़ी सी जो है ना वो असल में राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, उनकी थोड़ी सी शायरी लिखी हुई थी। तो हम बैठे हुए थे, मुझे ये एडवाइस देने वाले भी वही थे कि यार अपना कुछ करके और तुम मार्केट में आओ। ठीक है यार। तो उन्होंने मुझे अपनी ये शायरी दी थी जिसमें सिर्फ स्टार्ट की लाइन थी कि तुम लौट आओ ना मेरी राहों में मेरी बाहों में। अब इसको बनाना था। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चलूँ कि कंपोजिंग भी एक अलग आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिलसिला होता है आमदों का, कि आमद होती है, लाइन आती है कोई दिमाग में, वो कोई धुन बनती है, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए ना, लेकिन तो आपको मैंने बताया कि वो गॉड गिफ्टेड जब चीज़ होती है और आपके अंदर जब वो यानी कि पैशन और वो जो यानी कि एक रजीपन आपके अंदर होता है ना वो, तो आप फिर नहीं सोचते कि यार ये मुश्किल है। राइट। सो ऑफ कोर्स फिर आपने कॉन्सर्ट्स किए, जगह जगह किए, इंटरनेशनली गए, दुबई में आपके कॉन्सर्ट्स रहे, ऑफ कोर्स एक फैन फॉलोइंग आती है। तो लौट आओना की इंस्पिरेशन से कोई पहले तो था नहीं, आपने जैसे बताया, तो फिर कोई लौट के आया? नहीं, लौट के फिर एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। सो एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस फील्ड में एज प्रोफेशनल्स आना चाहें तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, फैमिली की तरफ से एक प्रॉब्लम आता है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, लोग ज़्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं करते। आपकी जर्नी में जब आपने लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया कि यार मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, तो कोई चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया? और जितने यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिवाइव हुआ है कुछ पाकिस्तान में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया, कुछ डिफरेंट अंडरग्राउंड आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस आ रहे हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्राउडली ग्रेनिच के भी कुछ बैंड्स थे जो उसमें जीते हैं। सो एक रिवाइवल आ रहा है, बट आपकी इस जर्नी शेयरिंग के अंदर आपका कैसा सफ़र रहा और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली देखें, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इतनी आसान फील्ड नहीं है। हम किसी आर्टिस्ट को देखते ना यार, कोई आर्टिस्ट आया, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो बड़े फेमस हुए हैं,
आर्टिस्ट आया, हम ये देखते हैं स्टेज पे, यार आती मशहूर हो गए, आती मशहूर, यार आप उनकी हिस्ट्री देखो पहले कि वो आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे ना, वो आए आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर, आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री में जाते हो ना कि वो बंदा कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको पता चलता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी है, वो अब जाके स्टेज पे आया है। तो सोने का चमचा लेके हर कोई 1000 में से एक कोई पैदा होता होगा जो आते ही जो स्टेज और पे आज के ज़माने में जो एकदम से जो लोग वायरल होते हैं वो एकदम से फेड अवे भी हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूट टू ऑल दोज लेजेंड्स इन पाकिस्तान जो 20, 30, 40, 50 साल से आज भी हैं, और जो हमारे लेजेंड्स हमें छोड़ के जा चुके हैं वो ताहयात जिंदा रहेंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक वी हैव। सो सर, बहुत बातें हमने बड़ी कर ली, लोगों को अब महरूम नहीं करते, मजीद कुछ आपका आर्ट टैलेंट पोटेंशियल लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कुछ आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? अपनी जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है मेरा जोगी, उसकी चंद लाइनें में बिल्कुल देखी है, आप लाइव भी सुन लें कि किस तरह के, और अगर नहीं देखी है तो अजीम खान AK के पेज पे जाके या अजीम खान AK के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जोगी के नाम से वीडियो है वो देखें ज़रूर, और इसको एंजॉय करें और शेयर करते रहें। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई, राहें नई, दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लागा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। वेल बहुत ही एक कैची और मेलोडियस इसकी बीट थी, एंड आई एम श्योर कि ये गाना, क्योंकि मैंने खुद वैसे भी सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप प्लीज़ जाके सुनिएगा, अजीम खान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जोगी की वीडियो देखें, क्योंकि आपने इस गाने में ना बड़ी वेरिएशन लाए। स्टार्ट होता है एक स्लो टोन से, फिर पूरी एक स्टोरी बिल्डिंग है, आप वीडियो के साथ देखें तो ऑफकोर्स वो स्टोरी की थीम भी दिखती है। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो टॉक अस थ्रू दैट। इंस्पिरेशन इज़ दैट के ऐसे ही मैंने बताया आपको कि एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, तो बैठे बैठे एक ऐसी आया कि यार कुछ अलग टाइप का बनाता हूँ, कमर्शियल कुछ होना चाहिए जो ये वेडिंग्स वगैरह में भी चले और हर जगह चले। तो क्योंकि मेरे सॉन्ग जो है ना वो ज़्यादातर आप सुनेंगे तो वो सिर्फ एक वो इस तरह के हैं कि वो ड्राइविंग पे आप सुन लें, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं सुन लें, लेकिन मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए ना, हर आर्टिस्ट के पास एक ना एक यानी कि एक ऐसी वैरायटी होती जो उसकी यानी कि थोड़ी सी कमर्शियल हो जाती है वो। मैंने कहा यार ये जो है वो करके देखते, तो ऐसी ये लाइन थोड़ी जहन में आई थी, तो मैंने कहा यार कुछ है इसमें ना जो जान है, मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। मैंने कहा यार फिर बाद में देखेंगे। फिर मुझे एक ऑफ़र आई, एक हमारे ही मतलब यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, वो एक मतलब राइटर हैं, ये अभी उन्होंने वो लिखी मूवी, क्या नाम है इसका, हीर मांझा, तो उसके राइटर भी हैं, वैस कुराई बलोच है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, कह रहे हैं यार हमारी मूवी के लिए एक सॉन्ग बनाते हैं कुछ कमर्शियल जो है टाइप का, जो थोड़ा सा वेडिंग टाइप और ये हो। तो मैंने सोचा यार एक दिन मैंने एक पैरोडी बनाई थी, उसी को निकाल के दोबारा से कुछ करता हूँ। तो मैंने ना वो निकाली मेलोडी और उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, कुछ करा। तो स्टार्टिंग की लाइन्स थोड़ी, फिर वही आमदें आती रही, थोड़ा सा बैठा जो है वो। फिर मैंने कहा कि यार एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा पहला एल्बम आया था मैंने वो खुद लिखा था पूरा, इसको मुझे खुद मैं जो है इसको यानी कि सोच रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा बन सकता है, इसको मैं लिखवाऊं तो किसी अच्छे कोई यानी कि नोन जो है वो राइटर से लिखवाऊं ताकि थोड़ा सा नाम हो। तो
तो मैंने SK जो है वो खलिश हमारे भाई हैं एक, और बहुत से राइटर भी हैं, आजकल OSTs भी लिख रहे हैं ड्रामों की, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार कि खलिश भाई इस तरह का एक जो है वो मेलोडी है, उस पर कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई वेडिंग टाइप जो है ना वो लिख के दें। बहरहाल वो आए मेरे पास, हम दोनों बैठे, हम तो वो दोनों की कोलैबोरेशन से वो यानी कि लिखा हमने। और ये जो लाइन है, जो इसकी जो पंच लाइन है, ये मुझे खलिश भाई ने ही लिख के दी थी। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैंने कहा यार खलिश भाई सैल्यूट है यार आपको, क्या जबरदस्त आपने कंप्लीट पैकेज बन गया। और ये जितने लोग हैं हमारे, उन्होंने जो देखा वो वाकई अगेन रिपीट के, आप ये अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड डू कमेंट, क्योंकि कमाल चीज़ है, स्पेशली सच ए प्राउड मोमेंट के पाकिस्तानी म्यूजिक में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले एक मेडले आखिरी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मेडले तो बहुत सारे हैं। एनीथिंग यू नो, जो आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टेज परफॉर्मर है, क्राउड झूम जाता है, सो एनीथिंग फॉर सिंग अलोंग, जो कि हमारे ऑडियंस उस तरफ जो हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेडले आप साथ गाएंगे मेरे? नहीं, फिर आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल दिल मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले जिन बेरिए। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। शोला जो भड़के दिल मेरा तड़पे, रंग जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये इसी नोट के ऊपर हम एंड की तरफ आएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा आर्ट के साथ एक रिलेशन है, जो एक किसी भी यंगस्टर की लाइफ के अंदर जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, कोई भी एक क्रिएटिव अगर आपके पास हॉबी है या हैबिट है, that keeps you away from lots of negativity, and this is something that is really good. So sir, आपका बहुत शुक्रिया that you joined us on lighter note, but last question is कि आपका आज इस प्रोग्राम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज रियली गुड यार, और बड़ा मज़ा आया। आप लोग आए और इधर, और आप लोगों ने आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आज यू नो संडे है, संडे को
बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा दिन गुजरता है, वरना तो बोरिंग जो है ना वो डे जो है गुजरता है। लेकिन आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा कि टाइम भी पास हो गया और एक थोड़ा सा म्यूज़िक भी जो है वो हो गया। अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर हमारे पास, और आपने लेकिन खिदमत करने का मौका नहीं दिया बिल्कुल हमें। नेक्स्ट टाइम खिदमत का मौका देंगे ज़रूर, एंड द प्लेजर वाज ऑल माइन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लानिंग्स एंड व्हाटएवर यू प्लान टू डू। बहुत माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, और स्पेशली जो आपकी परफॉर्मेंस है वाकई मज़ा आ गया। तो गाइज बिल्कुल आपने सुना आज अजीम खान को, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कमाल के सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब एक सिंगर लिख रहा होता है, एक उसमें आमद आती है, तो ये वो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं कि कब किस तरह से क्या चीज़ जहन में आती है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं बड़ी आसानी से उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको रियलाइज करना ज़रूरी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन फॉर टुडे। बिल्कुल अपना फीडबैक दें ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हमें बताएं कि फ्यूचर में आप लाइटर नोट पे किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, और अपना खास ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया
और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजी लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजी लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, और नहीं भी अच्छा गुजरा तो इस प्रोग्राम के थ्रू ये ख्वाहिश है कि आपकी शाम जो है वो बहुत ही खूब गुजरे। शाम बखैर। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है शाम अपनी एंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। आज वीडियो में हम आपके सामने एक और सोशल इशू उठाकर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सामने रखेंगे। उनका एक अकवाल है, बेशुमार उनके अकवाल हैं और हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर भी होता है और साथ साथ हमारे अंदर एक मोटिवेशन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। कायद आज़म ने एक जगह ये भी कहा कि इज्जत और वक़ार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है, इदारों की इज्जत और वक़ार नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। अब कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बोली है। आप आखिरी वाली बात में कितना वज़न है, तो आप देखें कि जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज़ जो है वो आपकी जो है उसको सारा जवाब मिल जाता है। तो बड़ी खूबसूरत बात हमने आज शाम आपके सामने ये शेयर की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बात पसंद आई होगी। सोशल इशू क्या है? सोशल इशू ये है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो एक्चुअली सोशल तो ऐसा नहीं था। एक निजी टीवी है, वहाँ पर एक गेम शो आ रहा था और उस गेम शो में ऑन एयर जो है वो एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो एक बंदे को, यानी कि जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था उस शो में, उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और होस्ट को, यानी कि उसके प्रोग्राम के जो मेज़बान थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गेम का कार्ड जो है वो थ्रो किया और वो गेम शो जो है वो एग्जिट करके चले गए। और ऑन एयर जो है वो जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी प्रोग्राम, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने स्टेट को और दुनिया भर में आपके चैनल्स को देखा जा रहा होता है, और जो इस तरह के बच्चे हैं ये हैं तो बच्चे, लेकिन इनकी तरबियत का पे बड़ा सवाल उठ जाता है कि किस तरीके से आपने माशरे में हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो वो ऑन एयर जो है वो थप्पड़ मार रहे हैं। बेशक आपका आपस में मजाक हो और आप थप्पड़ मार रहे हैं उसको, एक ये बहस हमने देखी। और दूसरा, लोगों ने कहा कि एंकर को इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। एंकर ने क्या अल्फाज अदा किए वो आपके सामने रखेंगे। एंकर ने कहा कि कहाँ से बुला लेते हैं इन जाहिल लोगों को, और बहुत ही बदतमीजी से कहा। तो सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है डिस्कस हो रही है कि क्या फैसल कुरैशी ने सही बात की या नहीं की, ये आपने फैसला करना है हमारी इस वीडियो को सामने रखते हुए कि आप देखें कि आप क्या समझते हैं कि फैसल कुरैशी को गुस्से में ये बात की उन्होंने, तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा फीडबैक है, वो शायद काफ़ी दिनों से इस ऑडियंस को टॉलरेट कर रहे थे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फैसल कुरैशी, एक बहुत अच्छे अदाकार हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैंने हमेशा उनको अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हुए देखा है। और यही वजह है कि आप जब अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो आपके आने वाले भी होंगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, और फिर आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी हमारी इज़्ज़त करें। तो रिस्पेक्ट वाला मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फैसल कुरैशी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने गेम शो जो है वो एग्जिट कर दिया और छोड़ के चले गए उस वक्त, और कहा कि जाहिल लोग। लेकिन ट्विटर पर हैशटैग के साथ, फेसबुक पर लोग जो है फैसल कुरैशी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि उन बच्चों ने ये ऑन एयर सही किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो इस तरह की जो हरकत हैं और मुख्तलिफ मुग़ल्लिज़ात भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने शो पे, वो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये मिला जुला रुझान है, मिला जुला रद्द अमल है, इस हवाले से जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप बताएं कि आप क्या समझते हैं।
तो ये मामला हमने सोचा कि आपसे डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इस वक्त आपकी शाम जो है वो अच्छी गुजर रही होगी। और रात की क्या प्लानिंग है वो भी आप हमें बताइए कि रात में आप लोग किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। आजकल एक्टिविटी क्या है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और गर्मी में तो बस दिल नहीं चाहता कि कुछ खाएँ, लोगों की ख्वाहिश होती है दिन में लस्सी पिएँ, रात में जो है कुछ लाइट सा ले लें। अच्छा, सिंध की आवाम जो है वो उनके खाने का क्राइटेरिया डिफरेंट है गर्मी में, और पंजाब की आवाम के खाने पीने का क्राइटेरिया डिफरेंट है गर्मी में। तो बड़ा मज़ा आता है जब दोनों सूबों के लोगों को कंपेयर किया जाता है, तो उनके जो रेसिपीज़ और उनके जो खाने और पकवान होते हैं वो डिफरेंट होता है। और इस वक्त यकीनन आप लोग जो है प्लानिंग कर रहे होंगे कि रात को क्या खाना है। जो भी खाइए अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। जो कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ़ में या डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आपको खुशामदीद कहेंगे हमारा ये प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ये उम्मीद करेंगे कि ये जो शाम है और जो आने वाली रात है वो आपकी अच्छी गुजरे। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हमारी और आपकी ज़िंदगी में हैं, और हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उन मसाइल का हल हो जाए तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो किसी हद तक कुछ लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं और किसी हद तक कुछ लोग कामयाब नहीं होते। फिर हम लोग इतने ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए तो अपने लिए तो वक्त निकालना हमारे लिए मुश्किल ही हो गया है। तो थोड़ी सी कोशिश इस प्रोग्राम के थ्रू है कि आपकी शाम की चाय को हम बहुत खूबसूरत बना सकें और थोड़ी आपसे जो है चिट चैट कर सकें। अपने इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक सोशल इशू उठाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको
देखने को मिलता है और उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन मसाइल का हल भी हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, अम्मी कोई बात भी आप शेयर करके यहाँ पर रख सकते हैं कि क्या ये जो सोशल इशू है इस पे आपकी राय क्या है। प्रोग्राम में सबसे पहले अच्छी बात शामिल कर लेते हैं, और वो ये है कि कायदे आज़म के बहुत सारे अकवाल जो है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कायदे आज़म के अलावा भी आपके सामने मुख्तलिफ अकवाल आते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कुछ सेकंड आप सोचते हैं कि काश इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो किसी हद तक जो है हमें याद रहते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको जो है अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करते हैं या कर भी चुके होते हैं। एक बड़ा अच्छा कॉल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, बानी है पाकिस्तान, वो आपके सामने रखेंगे, फिर प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे। कॉल ये कि उन्होंने कहा कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। कायदे आज़म ने कहा है कि इल्म की जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, और ये जो ताकत है इल्म के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमें मिल रही है और इससे आप लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। अब आप देखें कि इस सेंचुरी में और इस मॉडरेट दौर में भी इल्म, नॉलेज, सारा काम जो है इसी पर बेस है, और इसी तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, और इसी की मिसाल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन बनानी हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे, आप कलम नहीं उठाएंगे, आप लिखेंगे नहीं। अब ये बात नहीं कि सिर्फ लिखना पेपर पर है, आप टाइप करने को भी और आप गूगल कर को कुछ सर्च इंजन पर सर्च करने को भी आप इल्म या पावर कह सकते हैं। चलें जी, सोशल इशू उठाते हैं। सोशल इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से नादिया हुसैन की वीडियो वायरल हुई है और लोगों ने उस पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने कहा कि नादिया हुसैन ने गलत किया, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। एक गरीब नौकरानी काम कर रही थी, उसको डांटा, उसको जलील किया, उसके साथ बदतमीज़ी की। लेकिन दूसरा पहलू हमने ये भी देखा कि लोगों ने ये भी कहा कि उनके साथ सही हुआ और उन्होंने एक गफलत बरती जिसकी वजह से घर में जानी और माली नुकसान हो सकता था। वो स्टोरी क्या थी? नादिया हुसैन की एक निजी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हकाइक सामने रखे। वो हकाइक हम भी आपके सामने रखते हैं। कि जब बिजली झटके मारे तो पीछे से मेन स्विच ऑफ कर दिया करो। ये तुम्हारा तो उपकरण है ना तुम्हारी इस मोबाइल में, क्या समझ नहीं आती तुम्हें? जब भी बिजली झटके मारे तो तुम पीछे से मेन स्विच ऑफ करोगी, क्यों नहीं तुम्हें याद रहता है? महीने में दूसरी कपड़े की मशीन चली है सिर्फ तुम्हारी अकल की वजह से, समझ ही नहीं आती है। बिजली का बिल अलग, ऊपर से ये दूसरी कपड़े मशीन कौन भरेगा इसका बिल? तुम्हारी वजह से हुआ ये, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। दफा हो जाओ यहाँ से मेरी नजरों से, तो किसका बिल भरोगी? पाकिस्तान की मारूफ मॉडल और अदाकारा और फैशन डिजाइनर नादिया हुसैन ने वायरल वीडियो से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती और फिर बिजली की गफलत ही नहीं, जानी नुकसान का सबब भी बन सकती है। लिहाजा अगर वायरल वीडियो एक इश्तिहारी मुहिम होने के बरक्स हकीकत भी होती तो मेरा अपनी मुलाजमा के साथ यही सलूक होता जो इस वीडियो में आपने देखा। नादिया हुसैन ने बताया कि इनके पालन में भी अक्सर लड़कियां बास औक़ात ऐसी ही गफलत बरती जाती हैं और ऐसी ही गफलत करती हैं। ये एक या दो के लिए नहीं बल्कि पूरे सैलून में मौजूद हर इंसान के लिए ख़तरे का वजह बन सकती है। नादिया के मुताबिक इसी गफलत और गैर जिम्मेदारी के सबब उनके सैलून के कई बरक़ी आलात ख़राब हो चुके हैं और उनके सैलून के माइक्रोवेव ओवन फट चुके हैं। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। नादिया हुसैन का ये मौक़िफ़। अदाकारा का कहना था कि मेरी मुलाजमा से की गई गुफ्तगू को माशरे में हैसियत के दर्जे से जोड़ा गया है और गलती और गफलत में हैसियत मायने नहीं रखती। गलती अमीर करे या गरीब, गलती होती है। इस पर आपको मालिक या बॉस की जानिब से डांट डपट की जा सकती है और मैंने भी वही किया। नादिया हुसैन ने गुफ्तगू के दौरान अपनी मुलाजमा की गफलत से मुतालिक एक वाक़े पर भी शेयर किया और बताया कि हाल ही में मेरी ज़ाती मुलाजमा की गफलत मेरे और अहले खाना के लिए हादसे की वजह बन सकती थी। नादिया के मुताबिक मुलाजमा ने उनके बच्चों को बात देने के बाद हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद वो हेयर ड्रायर बंद किए बगैर बच्चों के कमरे से बाहर चली गईं। फैशन डिज़ाइनर का कहना था कि वो ड्रायर मुसलसल
3 घंटों तक बच्चों के रूम में उसी तरह चलता रहा और 3 घंटों के बाद उन्हें बच्चों के कमरे में दाखिल होकर ड्रायर को खुद बंद करना पड़ा। लेकिन उस वक्त प्लग इतना गर्म था कि उन्हें स्विच से हटाने के लिए भी उसे कपड़े से पकड़ना पड़ा। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल नादिया हुसैन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो घरेलू मुलाजमा को स्विच बंद करने और मोबाइल में मगन रहने पर डांट डपट करती दिखाई दे रही थी। नाज़रीन, पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी है। अब आप हमें बताइए कि नादिया हुसैन ने सही किया या गलत। आप कमेंट कीजिए नीचे, अपना मौक़िफ़ रखिए सामने। और आप समझते हैं कि अगर नादिया हुसैन ने गलत नहीं किया या आप समझते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी ये बात सामने रखें। दोनों बातों में से आप देखें कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपनी बिजली को बचाएं। अपने घर में जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती है, चाहे वो आपके किसी काम की भी ना हो, गैर ज़रूरी है तो वहाँ पर जो है उसको बंद कर दें, ज़्यादा रोशन ना रखें, क्योंकि 5-6 बजे के बाद से वैसे भी आप देखें कि आपकी जो बिल है वो ओवरचार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बिजली सेव करना मैं समझता हूँ बाहैसियत कौम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये तो नादिया हुसैन का मामला आपके सामने रखा है और अब ज़रा कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। शाम का वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगर दफ्तर में थे, दफ्तर से घर आ गए होंगे या कहीं बाहर शॉपिंग पर गए हुए थे, घर पर आ गए होंगे, तो लिहाजा अपनी शाम की चाय को बहुत खूबसूरत बनाइए। मैंने ये फ़िलहाल ये चाय पी ली है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले और हम उम्मीद करते हैं कि आप चाय अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे। बाय द वे, कराची का मौसम बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है। प्लान कीजिए अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने का, कहीं बाहर जाइए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। ज़िंदगी नाज़रीन बहुत छोटी सी है, सबकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, स्ट्रेस है, उसको अपने ऊपर हावी ना कीजिए। थोड़ा सा वक्त अपने और अपने अहले खाना के लिए निकालिए, दोस्तों के लिए निकालिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। अपना आज का दिन, अपनी आज की शाम जो है वो बाखैर बनाइए, एंजॉय के साथ बनाइए। हमारा ये प्रोग्राम शाम बाखैर देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of GU Sports Box, जो कि आप देखते हैं बिल्कुल ग्रीनिच टीवी पे और हमारे सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स पे आपकी हमारी मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड थर्सडे एट 8 PM। और आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, नज़र डालेंगे हम क्रिकेट पे, और क्रिकेट में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है। नॉट वेरी एक्साइटिंग फॉर द पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि इंग्लैंड की समझ लें बी या सी टियर टीम, जो कि बिल्कुल मैच शुरू होने से 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि ये टीम और ये स्क्वाड आपस में साथ में खेलेंगे, उनसे पाकिस्तान 3-0 वाइट वॉश हुआ है। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक इंग्लैंड की वीकर टीम है, पाकिस्तान के पास सीरीज़ जीतने का सुनहरा मौका है। सीरीज़ जीतना तो दूर, तीनों मैचों में वनडे के एक मैच भी पाकिस्तान ना जीत सका, और वो 3 मैचेस में क्या कुछ हुआ उस पर नज़र डालेंगे। और अब जो T20 का बिल्डअप है उस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इंग्लैंड का स्क्वाड जो कि एक फुल स्ट्रेंथ इन इंग्लैंड का स्क्वाड है, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा उस पर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जारी है, और ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि पाकिस्तान इसके बाद वेस्ट इंडीज़ से खेलेंगे, और वेस्ट इंडीज़ क्या कुछ कर रहा है उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। 3-1 से सीरीज़ लीड कर रहा है वेस्ट इंडीज़। पिछला चौथा T20 जो खेला गया, ऑस्ट्रेलिया फाइनली जीतने में कामयाब हुआ, और उसका भी जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है मिचेल स्टार्क को, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 लगातार डॉट बॉल्स की, वो भी हार्ड हिटिंग एंड्रे रसल को। तो इस मैच में भी क्या कुछ हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द होल समरी एंड स्कोर कार्ड ऑफ द गेम्स, आपसे हम पूछना चाहेंगे ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube, हमारे फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई ऐसा हिस्ट्री फैक्ट स्पोर्ट का जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डू राइट टू अस एंड लेट अस नो कि वो कौन सा इवेंट है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं और आप चाहते हैं कि हम फुली कवर करें। तो नाउ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़। चौथा T20 खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया से पहले 3 लगातार T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार चुका था वेस्ट इंडीज़ से। 5 मैच की सीरीज ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ अपने नाम कर चुका था, और चौथे मैच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 189 स्कोर किया 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें एरन फिंच जिनका रिकॉर्ड भी है मोस्ट रन्स का हाईएस्ट स्कोर का T20 में, तो उन्होंने 53 रन की बारी खेली। 37 गेंदों पे 3 छक्के और 5 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। वेयरएज मिचेल मार्श चिप्ड इन विद 75, 44 गेंदों पे 6 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल था। थैंक्स टू दीज 2 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया ने 190 का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो कि जिस फॉर्म में लग रहा है कि जी 200 रन में उनके लिए कुछ नहीं है। तो पिछले मैच में हमने क्रिस गेल को वापस फॉर्म में आता देखा। एक अरसे दराज बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने क्रिस गेल की जानिब से हाफ सेंचुरी देखी, और जिसका क्रेडिट उन्होंने जाके दिया कैरन पोलार्ड को कि उन्होंने उनको एक पेप टॉक दी, याद दिलाया कि क्रिस गेल की इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में और वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए क्या है। उसके बाद उन्होंने अपनी इनिंग्स डेडिकेट की कैरन पोलार्ड को। हाउएवर चेसिंग 190, वेस्ट इंडीज़ वर ऑन ट्रैक, बड़ी शानदार बैटिंग रही। लंडन सिमल्स ने शुरू में 72 रन बनाए, 48 गेंदों पे 2 छक्के और 10 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। एंड्रे रसल और फैबियन एलन वो 2 आखिर में टेल पे बल्लेबाज थे, जिन्होंने मैच को तब्दील कर दिया। 2 ओवर में 36 रन दरकार थे, जब ओवर में मेरिट को पहले एंड्रे रसल ने एक छक्का लगाया, सिंगल लिया, और फिर फैबियन एलन जो कि PSL में भी पाकिस्तान के खेले थे, फैबियन एलन ने 3 लगातार छक्के लगाए और 19वें ओवर में 25 रन कंसीड किए। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन दरकार थे, और एंड्रे रसल क्रीज पे मौजूद थे, जहां एंड्रे रसल ने आखिरी ओवर में 5 लगातार डॉट बॉल्स खेली, और जो गेंदबाज थे वो मिचेल स्टार्क थे। 3 गेंदें ऐसी थीं जो एंड्रे रसल के बैट से कनेक्ट हुई, उनके पास सिंगल या डबल लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं रन लिया, और आखिरी गेंद पे जब 11 रन चाहिए थे तो एंड्रे रसल ने एक छक्का लगाया। अ लिटिल टू लेट, बट वेस्ट इंडीज एंडेड अप विद 185 फॉर 6। क्रेडिट जाएगा यहाँ तमाम मिचेल स्टार्क को कि आखिरी ओवर में एंड्रे रसल के अगेंस्ट 5 डॉट बॉल करना। एट द सेम टाइम एंड्रे रसल से सवाल रहेगा कि जो 3 गेंदें उन्होंने कनेक्ट की थी, अगर उन 3 गेंदों पे वो 2 रन भाग लेते तो आखिरी गेंद पे 11 की जगह 5 रन दरकार होते और वो छक्का लगा के मैच जीत सकते थे। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो एंड्रे रसल ने किया क्या वो ठीक था या गलत। नाउ मूविंग ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड,
सीरीज कुछ ऐसी हुई कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान जीतेगा, एक इंग्लैंड की वीकर टीम है, लेकिन हर चीज़ उलट हुई। पाकिस्तान डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट। बैटिंग लाइन हमारी कोलैप्स की। पहले वनडे में 141 पे आउट हुए, 21 ओवर 5 गेंदों में आसानी से चेस डाउन किया इंग्लैंड की टीम ने। क्रॉली जो उनका डेब्यू था जी, उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए। दीगर बल्लेबाज जो इतने फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आ गए। फिर सेकंड ओडीआई पाकिस्तान ने कमबैक किया, हसन अली ने 5 आउट किए, 248 का टारगेट था और वहाँ भी पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ और 195 पे पाकिस्तान ढेर हुआ, जिसमें सऊद शकील की निफ सेंचुरी थी। हसन अली ने एंड में आके कुछ 3-4 छक्के लगाए, बट पाकिस्तान 52 रन से मैच भी हारा। और उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो डिपेंडेबल बैट्समैन है वो रन नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान का बैटिंग फेल हो रहा है। तीसरे ओडीआई में हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुंची, बाबर आजम ने 158 स्कोर किया और 14 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। रिजवान चिप्ड इन विद 74, 58 गेंदों पे 8 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। इमामुल हक ने 56 रन किए, 73 गेंदों पे 7 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, जबकि बाबर आजम ने इनिशियली 14 गेंदें डॉट बॉल खेली थी बिफोर कमिंग ऑफ द मार्क, और उसके बावजूद ही एंडेड अप विद स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100। दैट शोज प्योर क्लास। क्रिटिक्स फिर भी कहेंगे जी बाबर ने स्लो खेला, टीम में बहुत सारे खिलाड़ियों को निकाल दो, लेकिन क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग की बात करें 332 वाज अ गुड स्कोर। हाउएवर शुरू में अगर हम तेज़ खेलने पे जाते, विकेट्स खो देते तो वंस अगेन कोलैप्स होता। आई इन की बाबर आजम ने फाउंडेशन लेकी और पूरी इनिंग्स बिल्ड करके चले। एंड जैसे मैंने कहा कि जब बाबर और रिजवान रन करते हैं पाकिस्तान 300 क्रॉस करता है। ऐसा ही हुआ, बाबर की 150, रिजवान के 74 हेल्प पाकिस्तान टू स्कोर 331 और पाकिस्तान ने मैच बराबर भी कर दिया था, क्योंकि जब इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया फिल सॉल्ट बड़ी तेज़ी से रन करते हुए आए। 37 रन फिल सॉल्ट ने किए और एक अच्छा स्टार्ट दिया। क्रॉली चिप्ड इन विद 39, लेकिन इंग्लैंड वर डाउन एंड आउट। 165 पे उनके 5 आउट हो गए थे, लेकिन रन रेट उनका काफ़ी तेज़ था। छठी विकेट पे हमने स्टैंड देखा, 129 रन का स्टैंड, जहां जेम्स विंस ने 102 रन की बारी खेली। 95 गेंदों पे बगैर कोई छक्का लगाए 11 चौके उन्होंने लगाए। फ्लुएंट बैटिंग, ब्यूटीफुल बैटिंग, और जेम्स विंस वो डिफरेंस रहे, लेकिन उन्होंने फ्लॉलेस इनिंग्स नहीं खेली। पाकिस्तानी फील्डर्स ने खूब कैचेस छोड़े, खूब रनआउट्स मिस किए और खूब मिस फील्ड की, जिसने मौका दिया इंग्लैंड को कि वो इस रन चेस को आसानी से चेस डाउन करें। जबकि यहाँ क्रेडिट देना होगा लुइस ग्रेगरी को भी, पीएसएल में भी खेले थे ग्रेगरी, और 77 रन 69 गेंदों पे 3 छक्के 6 चौके ग्रेगरी के बल्ले से आया। और ये जो 129 रन का स्टैंड था, फ्रॉम 165 फॉर 5 टू 94 फॉर 6, इंग्लैंड ने इस पार्टनरशिप में मैच बराबर कर दिया और इन दी एंड 3 विकेटों से मैच इंग्लैंड के नाम रहा। 3-0 से पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ और ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये एक इंग्लैंड की 3rd टियर टीम थी, जो कि सीरीज से 2 दिन पहले कंपाइल हुई। लड़कों ने आपस में खेला भी नहीं था साथ। 5 डेब्यूटेंट्स थे इंग्लैंड टीम में, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम लूजिंग 3-0। और अब T20 की बात है, 3 T20 खेले जाएंगे 16 जुलाई को नॉटिंघम में, 18 जुलाई को लीड्स में और 20 जुलाई को मैनचेस्टर में। ये सीरीज के 3 मैचेस खेले जाएंगे। स्क्वाड आपको बताते चले, इंग्लैंड की स्क्वाड के अंदर कप्तान ओवन मॉर्गन, टीम इज बैक, मोइन अली, जॉनी बेस्ट्रो, जेक बॉल, टॉम बैंटन, जॉस बटलर, टॉम क्यूरन, ग्रेगरी, जॉर्डन लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डेविड मलान, साथ ही साथ पाकिंसन जिनका डेब्यू हुआ और अब एज स्पिनर खेलेंगे T20 में, वेरएज आदिल रशीद, जेसन रॉय और डेविड बिली। एक तगड़ी इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जबकि पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस के अंदर आप अरशद इकबाल को देखेंगे, जो कि कराची की जानिब से खेले थे पीएसएल में। आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस बैक, मोइन खान के साहबजादे अपनी 6 हिटिंग कैपेबिलिटी की वजह से स्क्वाड में आए हैं। जबकि दीगर खिलाड़ियों के अंदर जिनका कमबैक हुआ, उनमें इमाद वसीम हैं जो कि T20 स्क्वाड में ऐड ऑन होंगे, मोहम्मद हफीज़ ऐड ऑन हैं, साथ ही साथ मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ एन ऐड ऑन, और दीगर वनडे की जो स्क्वाड थी वही खिलाड़ी मौजूद होंगे। तो 16 जुलाई जो कि ऑफकोर्स अब नज़र है कल के दिन पे कि क्या होगा मैच में, क्या कुछ होगा, और जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। लूजिंग फ्रॉम अ 3rd टियर इंग्लैंड टीम, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है।
पाकिस्तान टीम से कि वो T20 में कुछ अच्छा करें, लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान टीम के जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करते हैं। दैट इज़ द रीज़न देर कॉल्ड द कॉर्नर टाइगर्स। तो क्या करेंगे कॉर्नर टाइगर्स? मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में पीर के दिन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, उमर खान को दीजिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ़ में या
since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता। And right now I'm working for an ad agency for over like 10-12 years, and the thing is, like, Greenwich has really groomed us, and I'm really proud to be a part of Greenwich Institute, and thank you, Greenwich. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Session, and this is your host Umar Khan, and I'm back with another program, another guest, and let me introduce my very special guest for today. We have with us Dr. Nadeem Malik, who is the professor in the School of Social and Political Sciences at the University of Melbourne, Australia. His research specialization includes third world development, globalization, gender and development, governance, civil society and the state, decentralization, project and program management and monitoring and evaluation of development projects, anthropology of development. And he's not just associated with academics only, he is also a professional artist with an honors degree in fine arts from the National College of Art, Lahore. He is also the author of several books and research publications. So a very warm welcome to Dr. Nadeem Malik. Hello, sir. How are you? Thank you very much. I'm very well. Thank you. First of all, thank you so much for taking out time. And our next guest for today is Mr. Ali Jalani. And let me tell you a bit about Mr. Ali Jalani. He is the head of diplomatic affairs at Greenwich University. And that's not all. Ali is a decolonialist
and a development policy analyst. He has made several interventions at the regional and global level on human rights, neoliberal corporatocracies, multilateral diplomacy, diplomatic governance, and sustainable development. He has represented Pakistan at various global forums, including the high-level political forum of the UN and the European Parliament. And we're really proud to have both of these gentlemen with us. So welcome to the show, Ali. How are you? Ali, can you hear me? Ali, can you hear me? Hello, can Dr. Nadeem, can you hear me? Yes, yes. I think Ali has some issues with the technical aspect. So we'll get back to Ali, of course. So, Doctor, how is everything going on in Australia right now? We all know we're in the COVID situation. So how have you been spending all of the time? Yeah, in fact, I was in the UK and then I was stranded in Pakistan. The situation in Australia is pretty in control. I think there's not been any COVID-19 case in the last 24 or 48 hours. So yeah, they're doing very well. Absolutely. And how have you been spending your time, of course, because we all know that life in itself overall has been affected. So any changes to your life or routine? Yeah, look, I'm quite used to be with myself, so it was not that boring. I had a lot of time to read and write, and then I'm a musician. I practiced my musical instrument, so it was all right. It was fine. Right. We all know that you're an artist and you have that artistic side. We will be touching that, of course. But today, our topic is pandemic is a promise for people and the planet over profit. So we'll be discussing different aspects of it. So Ali, how are you? Can you hear me now? I'm good. Thank you. Yes, I'm good. Right. Welcome. As you all know that we're live, so when we are live, there are some technical glitches. So I apologize to the audience for that. Ali, how have you been spending all your time during this COVID-19? Well, it's been difficult, of course. I mean, being locked down inside, but because of the work, I mean, since we've shifted online, so it's been so far so good, and a lot of time for reading stuff. So yeah. So I'm actually very excited today because I've got two gentlemen, and this discussion would be so intellectual and such a treat to watch and hear for the audience. Ali, what would you like to say on our topic today? Pandemic is a promise for people and the planet over profits. I think it's a great topic because you see governments around the world, I mean, have this renewed emphasis. From, say, spending in defensive expenditures. I'll just share a few statistics and then I'll try to loop in Doc Saab in the discussion. So as far as 2019 is concerned, we had these CIPRI statistics where the United States spent almost like $730 billion in its defense. You had China at number one, which was $261 billion. Then you had the likes of Russia, around $74 billion, and then we had the likes of India and Saudi Arabia at fourth and fifth with $65 and $62 billion in defensive expenditures and weapons. As far as the pandemic being a promise is concerned, this is basically the major shift in the entire political economy, in the entire emphasis as far as the governance around the world is concerned. So what's happening now is the pandemic has shifted your focus from defensive expenditures towards expenditure in, say, education, expenditure in health, expenditure in standard of living. And this is pretty much what the civil society had been campaigning for the last few decades.
but there wasn't that stimulus, which could turn the tables around. And pandemic in that way has pretty much reshaped the entire discussion around the world. So would also like to hear from Doc Saab as to what he feels, how he sees the shift in the political economy around the world. Yes, Dr. Saab, your view on this? I don't think there's any significant shift in political economy of the world. But this pandemic has surely brought to focus certain very important questions which have not been addressed so far. But I think we can't sort of ascribe a certain kind of agency to pandemic, that this is because of coronavirus, as if coronavirus is some conscious entity which will bring some change. It will depend on and that is something we have yet to see, to what extent it has really brought to focus or could sort of appeal to the conscience of global policymakers to bring certain more meaningful change and more sort of humane political economy regime. So let's wait and see what happens. Absolutely. This nonetheless as a wake-up call, right? It is a wake-up call, definitely. It is a wake-up call, yeah. So, Ali, we have two different views on the same scenario. What do you personally think that, because this pandemic has affected globally, not just Pakistan, and every country, every continent has its whole different scenarios. So, looking at it on a wider perspective, how do you see the future post-COVID? I think life as we know it is going to be completely changed. Sticking to our topic, as far as the social, political, and economic side of things is concerned, this could bring about certain perspectives, like Doc Saab also alluded to, which might turn the tables as far as global policy making processes are concerned. For instance, just one of the examples, like IMF, these international lending institutions, the likes of IMF, there's this global institute, Jubilee Institute in London. So they're campaigning right now as we speak in terms of writing off the debts of developing countries around the world. Because the economy is going to be completely changed after this pandemic. It already has dented a lot of countries around the world. So it could be a different ball game altogether. Absolutely, and we've seen the switches and the change of strategies from different countries and different business scenarios. Dr. Nadeem, what would you like to say on this post-COVID? How will be businesses and people, everyone reacting regarding to the socio-economic scenarios? Definitely, the focus is shifting more towards better health infrastructure and environment, protecting environment, sustainable development, meaning that whatever we do today, we have to take care of the future generations as well. And then education, these are some of the sort of concerns which have become very, very pivotal now. I think it will all depend on how taxpayers in developed world, what kind of pressure they are able to build, and what kind of changes they are able to bring in the global economic policy and policies at the national level as well. So taxpayers in developed countries and the ruling elites in developing countries, it will depend how they react or what kind of decisions they take in post pandemic situation. Right now, I wouldn't sort of predict anything. Situation is so fluid. It's uncertainty is all over. So you can't sort of predict a definite future. But I think
the main concern now is, or the main change that we can see now is that there are certain questions like inequality, as Adi Jilani mentioned, like issues of health infrastructure. We have seen that health infrastructure, even in most developed countries, was not adequate enough to deal with such health hazards. So the focus has changed. It has become on these crucial aspects of human survival. But and the pandemic has certainly raised certain very important questions globally. But you can't be too sure about predicting, what will be the post-pandemic situation. I think it will all depend. Civil society is not strong enough globally to bring any meaningful change, I think. But taxpayers' pressures in developed world and the political will of ruling elites in developing countries, these are two main variables that would matter, I think, post. Right. Meaningful change in post-pandemic situation. Absolutely. Ali, I'll come to you on this. Absolutely, we have no clue what the future holds, how long this is going to take, how the world will react, and once we come back to normal, will life will be normal or it will be different. Keeping all that in mind, what is your view on Dr. Nadeem's comments? I think I agree with Dr. Saab. I mean, let me just contextualize the statistics that we already spoke about. He said, like, I mean, these are two variables. So when you talk about the taxpayers' pressure as an active civic infrastructure around the world, for communities around the world, then the impetus for that pressure is already there. For instance, I mean, we spoke about the United States spending about $730 billion on defense. It is one of the hardest hit countries as far as this particular pandemic is concerned. Then you talk about China, where you had like about $260 billion. This is where it started. Now the two countries, as far as their GDP and economic size is concerned, I mean, there's this tremendous potential. But the problem is, both of them were not good enough in terms of their health infrastructures. They were not ready enough to deal with this kind of a pandemic. I see two concerns right now. Number one, we don't have a definitive end line as far as this particular pandemic is concerned. Number two, there's no definitive answer as to whether there will be many more to come. This is just one, and it's shaking the entire global infrastructure once and for all, right? When you come to number three, which is Russia, around like $71 billion in defense, I mean, you don't even get the statistics from Russia, right? I mean, there's this very low score of cases reported from there. I mean, speaking to a couple of friends, what I've come to know, there's snatching going on the streets as far as Russia is concerned. People are already starving. So this could also be a pandemic of hunger, beyond pandemic of a health. Perspective. So these are also some of the questions too. Then you come down to Saudi Arabia and the likes of India. I mean, India could be talking about, say, millions of people displaced who've already been thrown out of the cities, who used to be daily wagers, right? So this could pretty much be a pandemic of hunger moving forward if this emphasis is not renewed, if there's no equitable financing as far as health, education, and standard of living is concerned. So in a way, this wake-up call has to, substantiate into policy action. Of course, I mean, mobilized by the impotence of that political pressure that Dr. Saab spoke as far as the taxpayers are concerned. Absolutely right. And of course, we also have comments with us, and we'll be including that as well. But before that, Dr. Saab, you have also specialized in the third world countries development. So taking Ali's point, of course, there's also this scenario that people are dying of hunger and they're taking drastic measures of coming to crime and everything else. So how can we and how can the government and organizations take care of that factor? Because people are getting affected in huge numbers.
Look, in developing countries, there are millions of people who die every year out of ordinary, curable diseases like malaria, waterborne diseases, and nobody was ever bothered in developing countries. Still, I don't see any proactive approaches within most developing countries. So it will all depend on now the change. I think still in post-pandemic situation, the change might come from abroad, from first world, because this kind of pandemic, if in future again, takes rebirth within developing countries. It is globalized. It can easily, cross borders and affect everyone. So maybe, global governance probably has more role or might be more instrumental in dealing with this issue within developing countries as well. I'm not very hopeful that, developing countries on their own would be able to, who are absolutely debt prone. They are dealing with massive debts. They are dealing with so many problems. They don't have enough resources. So to what extent they can do on their own, of course, if the political will is there, which I don't see right now, then they can make some difference. But of course, but this has to be a collaborative effort, and I think the call probably will come or has to come from the first world. Right. They have resources. They can cancel the debts. They are scared of their own living standards, going down because of these pandemics. And if they are concerned that this is, if they are conscious, which they are, I think that this is quite an integrated world, and something happens in one part of the world can impact on the other part. And in the era of globalization, no, unlike the colonial period, one part of the world cannot develop at the expense of the other part. You have to sort of give something back to that part of the world as well. So that giving something back, to what extent and what will be the volume of that giving back to developing world will matter a lot, I think. Right. I see Ali smiling. I think he has something in mind. Ali, taking this point, of course, we are expecting change from the first world countries, but this pandemic has caused huge disasters, even to the giants like USA. They were even short of beds. We've seen Italy. They're known for their medical industry, but even they struggled. So, of course, when we talk about first world countries struggling, of course, the developing countries even don't stand a chance. What would you like to say about it? I'll just touch base first on what Dr. Saab said about the colonial aspect of things. I mean, being a decolonialist myself, the emphasis has to be on fairness as far as the retribution is concerned, because there have been like centuries of plunder which has been perpetual, and as far as neo-imperialism is concerned, the same pattern of that plunder continues through multinational corporations, which happen to be one of the key reasons of where we are today in terms of environmental degradation in particular. Plus, I think we also need to focus on changing the terms of discussion. So Dr. Saab talked about the capacity of the first world to help the third world. I would rather take it to the responsibility of the first world to tackle the situation for the third world also. I would rather emphasize that as far as the Paris Agreement was concerned on the environment, it had a particular instrument which was CBDRRC. This was common but differentiated responsibilities and respective capabilities. So we are talking about the capability of the first world to finance and then provide that technology transfer, provide that technical support to the first world. But we also need to talk about the responsibility aspect of it. I mean, for instance, as far as carbon emissions are concerned, which are one of the key reasons of climate change, the largest emitters of carbon greenhouse gases are the developed countries, the first world.
and mainly then your multinational corporations, because there's not much emphasis on regulation. As far as the state is concerned, there's not much emphasis on accountability as far as third world countries are concerned. So you see a lot of power with these multinational corporations that they have in the first world, and I think that is what needs to be tweaked within and then in the post-pandemic scenario. So it's more about responsibility than about capability, because they're mainly responsible for the climate change. So you're talking about, say, in Bangladesh, within next few years, I mean, even before pandemic, these were the realities that within next few days, you're talking about, about 50 million people in this particular region, being displaced because of climate change. And mainly those responsible for it have to take the action then. Absolutely right. And of course, the reason for all these sessions that we give is to spread awareness and actually raise those points that people are not, maybe looking at. So let's just talk about the opportunities. Let's just include some messages. Our respected Chancellor is with us, and she writes, what are the opportunities which are there with the current situation? And she also mentioned that please share opportunities for developing countries in specific. So, Dr. Nadeem, your point on that. You're asking me? Yes, I'm asking for this question, and the question says, what are the opportunities which are there with the current situation? And for the developing countries, what are the opportunities in specific? What opportunities developing countries have now? Now, because of the COVID-19, what opportunities do they have for the future to get back to normal and sustain their economy? Yeah, I think they need to, the opportunity, I don't know whether it's just an opportunity or because that opportunity existed always, what is important now is that in order to, harness these global economic forces or the onslaught of transnational companies that Ali Jilani has talked about, you need, regional cooperation. And without, like ASEAN, like NAFTA, like SARC. Now, the role of SARC becomes very, very important as far as South Asia is concerned. And we need to reconsider our foreign policies. This is very much now linked to regional cooperation. If there is more regional cooperation, we are able to spend more on development. If there's more regional cooperation, we can grow collectively. All countries within the region can grow collectively and can be more competitive in the global market. So that's the key, I think. Right. Ali, I'll come back to your previous point. You were talking about more responsibility rather than capabilities. We've seen that even in the first world countries, more businesses, more banks, more economic sectors have been shut down as compared to the developing countries. So even the hit on the first world countries is much, much bigger because the stake is much bigger in the first world countries. So how do you look at that? Omar, I mean, I'm bound to actually go back. I'll also link it with the opportunities question. I'm bound to go back. I mean, it's not just the opportunity for the developing countries, also for the developed world. If you can spend, say, about $750 billion on defense, why do you not have a good enough system to cope with this kind of a pandemic? For instance, it's a very small question to the supreme power in the world, right? As far as the question is concerned, and then bringing it back into the perspective of opportunities, then at the local level, you have this opportunity of tweaking your internal governance in terms of allocation of resources, which should be equitable for human development. It has to be pro-people, pro-poor governance policies at the internal level. This is your opportunity. At the external level, you need to, the developing countries need to mobilize a collective resolve
in terms of debt distress reduction, for instance, we spoke about the IMF debt. These countries, I mean, a huge chunk, for instance, Pakistan, a huge chunk of our GDP goes in debt servicing only, right? So if you reduce that debt on these developing countries, they will have much more to be able to finance, critical strategic sectors like health, education, and poverty alleviation, for instance, right? And then these developing countries need to also come together, especially at the Asia Pacific level. We've had these discussions on the Asia Pacific Forum on Sustainable Development. We are talking about a regional entity to combat illicit financing. We're talking about a regional entity to counter these multinational corporations, holding them accountable, to be able to qualify a particular framework for what they call corporate social responsibility, which doesn't exist as we speak, right? So we would probably have to reinvent the framework and the conceptualization of the state itself to enable that regulatory lens for the countries, to enable these developing countries to cope better with these multinational corporations and neoliberal maneuvers. Right. I would like to interject here. I think more than opportunities, it's a matter of realization. Post-pandemic situation doesn't provide you so many opportunities that we have already missed. We had more opportunities. The entire world had more opportunities in pre-pandemic, situation, but there was no realization. For example, scientists, policymakers knew about this pandemic, knew about the fact that this pandemic might occur. For example, George Bush in 2005 had mentioned in one of his speeches that the world might see this kind of pandemic. Scientists have been warning, but there was no realization. So it's more an issue of realization, which will, come forth through people's pressure, especially pressure of first world taxpayers, because there is hardly any taxpayers in developing countries, and of course the political realization of and coming forward of political will, some kind of political will of ruling elites here and the upper classes. So it's not an issue of opportunities. We will be having less opportunities now. Ali, we all know that the situation is tough. It is unknown what future holds. We all have this huge question mark. Even time will tell how things will react. But rather keeping in mind of whatever this things happened in the recent past, what precautions can we take? And if we talk about solutions, so if we talk about Pakistan mainly over here, what do you think Pakistan should look at currently? Switching from reactive to proactive governance. And it's not just for Pakistan, it's for the entire globe. This is what's been proven by this particular pandemic, that the focus has to shift back to prioritize people. And I mean, it's not just the growth fanaticism that we see. It's not just about the economy that should be the stimulus for society's survival. It has to be the people at the center of governance and policy making processes, which should be the focus, not just in Pakistan, also outside. Right. Dr. Nadeem, your view on this? Sorry, can you repeat the question? Ali, can you please repeat the question? Sorry? Can you please repeat the question for Dr. Nadeem? Yeah, Dr. Saab, I mean, what exactly should countries like Pakistan do now in this situation, and how can we prevent these kind of pandemics moving forward? Well, I think to me, it's absurd to suggest anything to Pakistani establishment. They have their vested interest, and what I would suggest is to the people of Pakistan, and I think they need and political parties also, that they need to organize people. I think political parties have more important role here. They need to organize people. They need to organize their political parties.
They need to go to the grassroots, to be more accountable to the people. Otherwise, I'm not very optimistic as far as Pakistan is concerned, considering what was going on here and whoever rules, So my message would be to the citizens of Pakistan that it is not necessary, first of all, to turn each and every house into a mosque to be a good Muslim. First of all. Secondly, so there's a difference between respecting religion and becoming orthodox Muslims, which is a major hindrance in creative, has become, this is at least my observation, that has become a major hindrance towards innovation, towards creative thinking, towards thinking beyond the box, Secondly, people need to be organized. Right. And unless people are organized, they cannot. There won't be any potential, pro people with kind of that would emerge. We will still be ruled by what people call in Pakistan establishment. I would say it's military establishment, right? Which I don't think is ready to take even a step back as far as their own institutional and vested interests are concerned. Right. So if you look at it, I think coming from the whole conversation, that first we need realization, and every individual on their own, they should step up. They should look at things the way they are. They should realize what they are in and be aware of everything. We'll include some comments, and we have a question here from Manur Faruqi. Can I have a viewpoint over the service industry? Because experts say that it will be one of the sectors affected because of the digitalized system, because people are being led to shift from traditional banking to online banking. So Ali, you have a very deep eye on all the scenarios. How do you think that service industry will be affected or not? Because in Pakistan, mainly, we are more comfortable with the traditional way of work. And now, since we're forced to come on online, everyone is having a bit of difficult time to adapt. Yeah, I mean, as far as the two sectors of the economy are concerned, like the agriculture and the industrial sector, I see those a little more affected compared to the services sector of the economy, because I think the imperative is to brace the technology moving forward, so that we can basically provide these services in the digital realm also. So you do have that room available there. But as far as your industrial sector is concerned, as far as your agricultural sector is concerned, I mean, they've been hard hit in a way. Plus, there's been this domino effect as far as hospitality sector is concerned. So you have these hotels, you have this tourism sector. That's going to be something which will take quite some time to actually, stand back up again. Umar, I'll just quickly go back to what Dr. Saab alluded. I think, Dr. Saab, we can afford to be optimistic still, based on the fact that I agree with you. There has not been a lot of realization. There's been a lot of campaigning. You've spent a lifetime doing that. But there have been serious problems in terms of tweaking the policy mindset. But I believe that this particular pandemic, which is why I really like the topic, that it could be a promise for tweaking that particular policy mindset, and people like yourself and me can afford to be a little optimistic in terms of things shifting to the other side. Of course, mobilized by the collective resolve of the people on the ground. No, look, that would be a kind of normative thinking, and taking in account the current evidence. The situation doesn't seem to be too optimistic. Although I'm not now. Lack of optimism doesn't mean that there's no hope. Hope is always there, but optimism. But you can't be optimistic. You may have some wish
wishes, So I also wish that something good happens, but seeing, even during this, the way state is handling and has handled this pandemic, it seems that they are absolutely not bothered about people or their interest at all. Right. So that's the beauty of it, of course, that how we look at things. And since the conversation is so interesting, I wanted to go on a bit further. But we are short of time, and we do agree to disagree on a lot of things. But the main thing remains that we all should be positive and hope for the best for the future for the entire humanity. And we really hope that things do get better. So, Ali, what I would just add this, we need to be positive, but being positive about something which is negative is insanity. We can't be positive about things which are not positive. What is important is to create a critical mass of people who can think critically without being positive. This term positive is such a cliched term that I don't think we need to be positive. I think we need to be critical. So what is more important is that we need to be more and more critical about things instead of being positive and close our eyes. Right. Yes. That then again comes to the realization that we do need to realize that things are tough, and critical analysis, of course, is essential. And of course, we all need both sides of the story. Ali, your views on that? Yeah, I mean, I agree with Dr. Saab, I mean, as far as the criticality is concerned, but I would rather soften it to pragmatism. I mean, you have mixed feelings. I mean, we do have to harbor our hopes somewhere, right? So like Dr. Saab said, I mean, I do pretty much believe as far as the people power is concerned, and that's one thing that can turn the tables around still, as far as I'm concerned. It's just about mobilizing that collective resolve based on critical thinking. I concede, plus that general awareness, which this particular show is also a medium of, bringing those critical questions to the table, which have been long forgotten, in the aisles of policy making. Right. And Ali, you have a very deep eye on the whole scenarios around the socio-economic, socio-political. What would you like to suggest the students right now? Which field should they pursue for, and what career should they look towards for the future post-pandemic? I think in the globalized scenario, I mean, everybody has these different, channels of communication where you have this continuous education going on. No matter which field you are in, you are relevant to the reality around yourself, right? So everybody has to be. This is one thing that I believe that we need to shift the focus towards. Educational establishments around the world have had this focus, especially in Pakistan, that we do not tend to politicize our consciousness in terms of those critical questions. I think it's high time that we started politicizing our consciousness in the right way. I mean, by politics, I mean in terms of that critical thinking Dr. alluded to, by posing those right questions, which also happen to be, say, moral imperatives, long forgotten ideas. We need to bring those back to the table, and then, talk about the ideas of equality and justice and, human development and whatnot. So these perspectives have to come back. So no matter what field you I think we've lost Ali's connection for a while. Dr. Nadeem, corporations. Right. So, Dr. Nadeem, what would your suggestion be for the students right now, keeping the whole scenario in mind, critically thinking how the students should, pursue their fields and choices right now? I think the prime goal of students has to gain knowledge. Because knowledge is essential to bring any change.
number one. Number two, they need to be sort of aware of what's going on around, in their surrounding and globally. And more importantly, I think there's a very critical role of educational institution to develop certain progressive, forward-looking, liberal, critical thinking. And for example, in our universities, this is one of the mission statements that one of the aims of universities here is to create a mass of critical people who can think critically, who have the ability to say, no, we don't want this. We want something else. And we need to sort of contemplate then what that something else has to, how that something else would be manifested in policies, what, different stakeholders within the society need to do to bring that something else. So, unfortunately, in Pakistan, the thinking has become so dogmatic that people are living in their comfort zones. Whether it's religion, whether it's something else. The people, and there has been politics. I would add to what Ali Gilani has said. There has been politics of de-politicizing people. Look at the media. Media 24 hours keep depoliticizing people. There's always, I don't want to go into detail because we don't have much time. So we have to somehow deal with this very discourse of depoliticization and build counter discourses. This is the role of students, academics, teachers, civil society activists, educational institutions, to offer a counter narrative, to offer a counter discourse to our students and then to the society. I think that is very critical, because right now what is more important in countries like Pakistan is awareness. People are not aware of things. So creating awareness, sensitizing people about crucial, world affairs, national affairs, what is their role as individuals and as collective. So these are the things which need to be highlighted, and role of institutions, especially educational institutions, become very, very critical. There's more and more need to do more and more research. There are hardly any research-based institutions in Pakistan. These are only teaching factories. So there's more and more need to do more and more research, so that we know, this tendency in Pakistan. I'll share an anecdote. Whenever I come here from my field, where I talk to people, especially to those who are educated, they have the sense that they already know everything without doing any research. So they take things so for granted. That this is, and many times I face sort of ridicule as well. Why are you wasting time doing this research? We already know about it. Right. So the hunger should be there to learn more. Ali, you have been a very active person. Even Greenwich University started the research chair project as well. You're a very active member of the ORIC as well. What would you like to say about the whole research Dr. Nadeem stated? I think I agree with it. I absolutely second that we need to focus on developing that consciousness in our people, which then leads towards the development of that civic infrastructure we're talking about, which is critical, which is politically conscious, which is intellectually responsible. And that is pretty much the emphasis at Karachi Research here. Also, what we try to do is we look into the governance side of things, and try to come up with actionable recommendations for the government. We are doing it not just within Pakistan, but also at the Asia Pacific level, at the Sustainable Development Forum. We are chipping into the process with different recommendations. This regional entity for combating illicit financing and corruption that I spoke about was one of the recommendations of Karachi Research Chair, which was taken on board at the Asia Pacific Forum.
Then there's the high-level political forum of the UN General Assembly, where we also have tabled our recommendations as well. Unfortunately, the session could not be held this particular year because we don't see this going away by July. But the online session for the APFST is due in another few days, and we'll be participating in that as well. Absolutely right. So, gentlemen, thank you so much for your time. I'll be including this comment as well. Our Chancellor, Madam Seema Mughal, says that Dr. Nadeem, your association with Greenwich is deep down in many ways conceptual theme of Convocation 2019, logo of Global Institute, and many more. Thank you for being a part of the institution. No, it's my pleasure, Seemaji. That's you're always welcome, to engage me, and I'm always there to contribute anything to Greenwich University. I'll just mention one thing. Whatever I was, saying was inspired by the vision of Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam wanted the kind of Pakistan which I was talking about, which unfortunately has unfolded in very strange, very different directions. Right, and the irony is that when we state the truth, many people taste it as bitter, because the fact of the story is we need to be aware, we need our consciousness to get alive, because you very rightly stated that when you say that I know everything and there's nothing new to learn, I think that is the beginning of the downfall. So we have to get that straight, of course. Yeah, there's a saying, it's not ignorance, but ignorance of ignorance, which is the death of knowledge. So that's what is happening in Pakistan. People are not aware of their ignorance, and we have to make them aware that you are ignorant, like us. We also are ignorant, and that's why we are in pursuit. But at least we recognize that or our ignorance. So recognizing your own ignorance is the key to gaining knowledge. Right. Otherwise, that's the distinction that made Socrates the genius he was. Yeah. Indeed. And life is a learning stage, and we keep learning on every step of life, and we have to keep ourselves open and not close-ended if we want to progress, if we want to grow, and if we want to make this world a better place. Thank you so much, gentlemen, for your intellectual insights. It was lovely having you both, and we'll definitely have another session sometime soon, and hopefully things do get better sooner for the entire world. Thank you for inviting. Thanks a lot. Right. Thank you so much, Ali. And that was all for today. And we got to learn so much from the two intellectual gentlemen, Dr. Nadeem and Mr. Ali Jilani. We'll definitely have another session regarding this topic. If you have any topic in mind, you can always get back to us through the comments. You can give your feedback, and we'll definitely be back tomorrow with a new guest and a new session. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself, and Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जियो मॉर्निंग विद समीन राशिद। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ डिफरेंट करने के लिए। सो आए और मिलते हैं विद द वन एंड ओनली द फेमस कराची वाइन्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हैंडसम हैं और मतलब लोग क्रेजी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह है, मैं आपको बताऊंगा 2-3 जगह। I believe you. अच्छा, तो हमारे साथ हैं सलमान, मंसूर, अजलान एंड असद। ओके, सो अब आप लोग बताइए सबसे पहले कि आप लोग ग्रेनिच में क्या करने आए हैं आज? क्या करने आए? हम किसी को उठाने आए। हम सोई हुई आवाम को सुबह रात को बताने आए हैं कि हम आए हैं। एग्जैक्टली। ओके, एंड क्या कर मैं आपको बताता हूँ कि डे फ्रेश ने हमें हायर किया बहुत सारे पैसे देके, और सीक्रेट बात है जब उन्होंने पैसे दिए तो हमें फिर परफॉर्म करना है। मजदूर आदमी है, मेहनती आदमी है,
तो परफॉर्मेंस ही हमारी, उनका कोई ब्रांड मैनेजर प्रोग्राम है आई गेस ना, स्टूडेंट ब्रांड फ्लेवर फोर्स के नाम से तो वो हो रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने हमें सिर्फ रखा है कि यार एंटरटेन करें लोगों को, कि हमारे नाम पे शो बिक जाए, दैट्स ऑल। तो इस वजह से हम लोग आए थे एंटरटेन करने के। बेसिकली पीपल थिंक हम सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ स्टैंड अप भी कर लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, कुछ थिएटर भी है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मल्टी टैलेंटेड है, माशाल्लाह। म्यूजिक भी कर लेते हैं। अच्छा, और कुछ मुझे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफी भी कर लेता है, शादियों के इवेंट्स साथ भी ले लेते हैं, ये लिख भी लेते हैं शायरी वगैरह, आप गा भी लेते हैं। वेरी गुड राइटर, कैन राइट, ओके। और कोई आई कैन मिमिक, और मैं चलते पंक्ति में स्क्रू टाइट कर लेता हूं, इनका टैलेंट अच्छा, तो सबसे पहले मंसूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वेयर डिड कराची वाइन स्टार्ट फ्रॉम, शुरू कहां से हुआ था? कमरे से, तारिक रोड। या एग्जैक्टली सही बोला, कमरे से। हाँ तो कमरे में सही बोला। अच्छा सही बोला, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इलेबोरेट, वेरी इंटरेस्टिंग। TV1 पे एक शो था जिसके लिए हमें हायर किया गया। हम लोग क्योंकि कोई कहीं थिएटर परफॉर्म कर रहे थे, और सीमा ताहिर जो वहाँ की CEO है, उन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा, उन्होंने बोला यार ये कौन है क्रेजी लड़के यार, 5-6 ना ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारे अंदर यूनिटी देखी। कौन थे आपके टीम मेंबर्स उस वक्त? सारे थे, यही थे सारे। और कुछ और लड़के भी थे, बट मतलब यूनिवर्सिटी के ना, यूनिवर्सिटी में हो रहा था, तो वो मेहमान खुशूसी थी, उन्होंने देखा यार ये कौन क्रेजी लड़के हैं, और मजे की बात है कि इनके दरमियान कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए यूनिटी है। तो उन्होंने, अच्छा लड़की नहीं है इसलिए यूनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को मैं बड़ा पकड़, सही है। तो उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें फिर बुलाया कि यार जाएं, क्योंकि मैं उस वक्त बहरी रोमांटिक सोसाइटी को हेड कर रहा था, और मेरा जो मुझसे ऊपर था एक अब्दुल्ला हमारा दोस्त था जो मेरा सीनियर था, तो उसको उन्होंने बेसिकली, वो इंटरफ्लो में काम करता था, TV1 की जो एजेंसी है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार ये लड़के मुझे चाहिए अपने शो के लिए। तो 5 मिनट का हमें स्लॉट मिला था, जिसके अंदर कहा था कि यार आपने कंटेंट बनाना है। अब हमने जो कंटेंट दिया वहाँ वो 50% रिजेक्ट हो गया, 50% जो बचा हुआ था वो कराची में इसकी सूरत है। तो एक दिन हमने सोचा यार जो रिजेक्टेड कंटेंट है, इतनी मेहनत से हमने बनाया है, इसको क्या करें। तो दानियल ने बोला यार लेट्स शूट एंड अपलोड समवेयर। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, फेसबुक पे पेज बनाते हैं, ठीक है, और उस पर अपलोड करते हैं। उसमें दानियल ने मुझे बोला यार मेरे पास कैमरा है, मैंने कहा मुझे एडिटिंग आती है। बोले चलो बिस्मिल्लाह करो। तो हमने 150 रुपये का माइक खरीदा था, आई गेस पता नहीं कौन सी रेशम गली है कौन सी, जहाँ से ना, वहाँ से हमने खरीदा। और एक माइक, एक कैमरा, ट्राइपॉड भी नहीं था, कभी कुर्सी पे, कभी घुटने पे, कभी कुछ, इस तरह करके हम शॉट्स लेते थे और हम बनाते थे। अच्छा, उस वक्त जब हम बनाते थे तो हमारा इतना कोई ज़्यादा मतलब वाइड एक्सपोजर भी नहीं था कि हमने कहाँ तक जाना है, हमें कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ फेम चाहिए था। फेम के भूखे थे। 3 साल पहले की बात है। तो बस फेम, यू नो, कि फेम के पीछे जब भाग रहे होते हैं ना आप, तो आपको कुछ समझ नहीं आता आप क्या करो। तो उसमें हमने दिल खोल के जो दिल में आया वो बनाया। तो ये नतीजा है कि आज माशाल्लाह कराची में जानते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं। सलमान, आपसे मेरा सवाल है कि फिक्र नहीं करिए। अच्छा, सब जब आपने ये शुरू किया, व्हाट वाज द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या थी? फैमिली, सोसाइटी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट बैरियर? फैमिली, क्योंकि आई वाज नॉट, आप लड़कियों भी प्ले करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल नहीं, वो इशू नहीं था, टाइम देना इशू था, क्योंकि माय फैमिली वाज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट ऑफ इट ना। उनको नहीं पसंद था, मेरे फादर थे वो अगेंस्ट थे इसके, लेकिन एक बार घर से निकाल दिया था। हाँ, ये भी हो चुका है। मैं, आप जस्ट इमेजिन, मैं ये मसाला आपको यही मिलेगा। मैं घर से बाहर खड़ा हुआ रात के 11 बजे, क्योंकि मैं शूट से वापसी आया था। ये सीन 11 बजे यार, एक्चुअली मैं बताता हूँ सीन क्या था। हमने एक बनाया था एक, अच्छा कहानी उनकी है, सुनाएंगे आप? एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आप छोड़ो ना, मैं कंप्लीट कर, नहीं मैं बताऊं, उनको बोलने दीजिए ना, आप मजे से बताइए। बेसिकली एक एक्ट था, इसके अंदर ना हमने उसको, लड़की तो हम नॉर्मली बनते थे, लड़की यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, दुपट्टा ले लिया, बस एक्ट करनी होती। इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ दुपट्टा, ये कहानी, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है। सोशल मीडिया का ट्रेंड मुझे पूछना है, इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ दुपट्टा। सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट दिखता है, बॉस, क्वालिटी मैटर नहीं करती। मतलब आप थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, अच्छी होती है। आप लोग ये ट्रेंड लाए, हम सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं, हम एग्जीक्यूशन पे करते ही नहीं है। मतलब हम 3 शॉट्स में जो है ना एक फ्रेम निपटा लेते हैं, मतलब एक पूरा सीन हम लोग मास्टर शॉट पे भी निकाले, सिर्फ कंटेंट आपको जो है ना जानदार होते हैं। तो एक कंटेंट था, उसमें हमने कुछ ज्यादा क्रेजीनेस दिखा दी, इसको हमने साड़ी बना दी। अब ये माशाल्लाह से पूरा नाचा है, ये वगैरह, उसमें क्या भरपूर नाचा है कि हमने तो वो यू नो गाँव तक वगैरह लगा फैमिली उसके बाद निकाल जाओ इस घर से और शक्ल नहीं दिखाना। तो ये हुआ, तो जब वो अपलोड हुई यहाँ से ये अनलोड हो गए। नहीं, वैसे ये चीज है, स्पेशली द मीडिया इंडस्ट्री, और आप तो जबकि एक लड़के हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ होगा ये उस वक्त। अच्छा, अगला सवाल जो है पूरी टीम से है, अभी तक आपके पूरे 3 साल के जर्नी में सबसे अजीब कमेंट क्या मिला आप लोगों को? सबसे अजीब
चाहे वो रियल लाइफ में हो या फेसबुक कहीं भी? एक था, एक मुझे याद आया अभी। अच्छा, कमेंट वो बेसिकली सपोर्ट में नहीं था, वो एक दिल की ख्वाहिश उसने बताई थी, अपनी इजहार किया था अपना। एक लड़का था, नाम मैं नहीं लूंगा, वो जिंदगी का क्रेजी कमेंट था मेरी, मतलब पूरे हिस्ट्री में ना कराची में इसकी। वो क्या था कि एक कमेंट आता है, यार थैंक यू सो मच दानियाल भाई, मानी भाई, आई लव यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बन गई। अच्छा, मैंने कहा चलो कुछ मोटिवेशन, कुछ अच्छी बात समझ में आ गई हो, कुछ सीख गया होगा। आगे नीचे लिखा हुआ थोड़े से गैप के बाद, यार आपकी वीडियो पे ना, लास्ट वीडियो पे खूबसूरत लड़की का कमेंट था, मैंने वो कमेंट जाके लाइक किया और अभी आपका भाई उनके साथ डेट मार गया। मैंने कहा हम यहाँ पे बैठे हैं और लोग जिंदगी बना रहे हैं। मतलब कराची वाइज की वजह से लोगों को डेट मिल रही है, कराची वाइज को डेट मिल रही है। क्या कर रहे हैं ना, हमने तो सोचा यार कि मतलब क्योंकि हम उससे अर्निंग भी कर रहे थे वीडियो से, पैसे कहीं हराम तो नहीं कमा रहे हैं। पर चलो आइदर गर्ल्स या मनी, सो वैसे क्या पसंद करेंगे आप, लड़कियां या पैसे? किस वे में आप पूछ रहे हैं? बहुत ही शरीफाना वे में पूछ रही हूँ। पैसे हैं तो फिर लड़के तो ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, पैसा हो तो फिर दुनिया, पैसा नहीं होगा ना लड़की नहीं मिलने वाली। अच्छा अजलान, आपसे एक सवाल है, सबसे ज्यादा व्हाट वाज द फनीएस्ट इंसिडेंट बर्फी के शो पे? एंड यू कैन टेल मी अबाउट बर्फी एज वेल। बर्फी हमारा एक शो था जो हमने रिसेंटली किया है ईद पे, या लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी हमने किया है। और बर्फी पे काफी सारे फनी इंसिडेंट थे, लेकिन एक जो मुझे जो सुनने में आया था, जो हमने, क्योंकि मैं उस टाइम उस मौजूद नहीं था उस जगह पर, लेकिन एक फनी इंसिडेंट ये था कि सलमान जो है आपस सरापा बन के घूम रहे थे एक मार्केट, वही जो आप अभी हमें दिखा रहे थे। बिल्कुल, तो ये दुपट्टा पहन के इनका एक कैरेक्टर है आपस सरापा, बोल के दिखाया कैसे, देखिए आ गए तुम्हारी दादी आ गए। तो ये कैरेक्टर था और ये मार्केट में घूम रहे थे और इनको ऐसे जबरदस्त प्यारे प्यारे बुढ़े लोग मिले थे और एक होता है ऐसे जवाब थे कि दुपट्टे में था या पूरे अटायर में दुपट्टा था। एंटी गवर्नमेंट को जानती हैं आप? वो उसका सॉर्ट ऑफ अभी होता, आदमी बुढ़ापे में लिहाज करता है। कुछ लोग ऐसे मिले तो घर से फारिग, और उनके जवाब ऐसे कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। They were like dudes, बुड्ढे dudes, 90 years के dude। यो तो बार होता है, लेकिन इस तरह के बड़े मतलब होते हैं। अच्छा, क्रेजीएस्ट थिंग मुझे याद है एयर वाई पे एक हुआ था, वो वहाँ पे ना जीतो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें जो क्राउड यूजुअली आती है ना, तो वो मतलब वो किसी भी स्टार को अगर देख लेना, चाहे कोई भी हो, मतलब ये एक्सप्रेशंस होते हैं उनके ना कि मतलब कौन आ गया सामने ना। तो एक बच्ची याद है वो जो आई थी, वो अच्छा अब बच्ची आई, बच्ची थी या लड़की? छोटी बच्ची, मतलब अच्छा बच्ची, लिटरली बच्ची, कराची की, सॉरी टू से लैंग्वेज, 8-9 ठीक है, 8-9 क्लास की होगी मैक्सिमम ना, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस क्या था ना लड़कियों के मामले में। तो वो आई आके बोलिए, हाँ वो कहती है कि यार मुझे पिक्चर लेनी आती है। चले भी ठीक है, सब खड़े हो गए, सब इधर आगे पीछे, ये वो छोटी सी थी उसको एडजस्ट किया, ये वो सुनो मेरे को मोबाइल नहीं है। अरे बोलिए आप खींच के मुझे पेज पे अपलोड कर दे, मैं वहां से कॉपी कर लूँ। मैंने कहा थैंक यू, मैंने पिक्चर तो ली लेकिन मैंने फिर वो अपलोड ली। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो इस सब के अंदर आप लोगों के तासुरात क्या होते हैं, मतलब दिमाग में लिटरली क्या चलता है जब कुछ ऐसा व्हाट आई वुड कॉल अभंड होता है, तो व्हाट हैपेंस फैंस के साथ? हाँ, फैंस के साथ। देखिए मैं सीरियस नोट पे एक बात बताऊं कि बहुत से लोगों को लगता है हम लोगों के अंदर ईगो है या हम लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मजबूरी कह लें आप इसको या वक्त की जरूरत कह लें, करना पड़ता है। मैं इसे समझता हूँ कि आपका टैलेंट आपको फेमस जरूर कर सकता है, मगर आपको कभी स्टार नहीं बना सकता। आपका स्टार आप तब बनते हैं जब आपका एटीट्यूड डायनामिक हो, मतलब ना सिचुएशन के हिसाब से आप हम्बल रहें, लेकिन इतने भी ज्यादा हम्बल ना हो जाए कि अगला आपको फॉर ग्रांटेड ले ले, समझिए। मतलब कुछ लोग, मेरी शुरू की जब स्टार्ट हमें फेम मिला था तो कुछ एक्सपीरियंस बड़ा बुरा ये था कि जब हमें नॉर्मली लड़के मिलते थे या स्पेशली जो बाइकर्स बॉय टाइप के होते हैं तो कहीं पे भी मिल जाते हैं आपको, तो उनसे हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से करते हैं। तो 5 मिनट के बाद ना मतलब वो ना बदतमीजी कह लें आप उसको, या वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अबे तबे तू उतरा जानी, इस पे उतर आते हैं ना। तो वहाँ पर हमने रियलाइज किया यार एक अपने आप को ना थोड़ा सा एक बना के रखना है, डिस्टेंस बिल्ड रखना है। भले वो किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, रिसेंटली से यहाँ पे MUN वगैरह चल रहा है काफी ना, तो बल्कि ये भी नहीं कहूँगा मैं, एक और चीज़ कहता हूँ, अक्सर मैसेजेस आते हैं हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग की फेक आईडीज बहुत बनी है, तो लोग मैसेज करते हैं कि यार आर यू रियल, मैं उनको जवाब देता हूँ नो आई एम नॉट रियल। कहते हैं प्लीज बताए ना ये वो, मैं देखिए आपने बिलीव करना है, करे ना करना ना करें। तो आगे से क्या आता है यार आप एक काम करें, अपनी पिक्चर लेके भेजें या मुझे फला जगह पर पिक्चर पोस्ट करके प्रूफ दें। मैं क्यों आपको प्रूफ दूं, आप क्या समझिए। और आगे से मैं बोलूंगा यार आई डोंट केयर, आपको यकीन करना ना करो तो यार आप तो बड़ा एटीट्यूड है,
मतलब लोग समझते नहीं है और जजमेंटल बड़े होते हैं, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्ट ऑफ द गेम, अगर आप Exactly. ऐसी चीजें होती हैं, व्हाट कैन वी से, बस यही है कि थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने डीओपी सर के पास। असद, आप मुझे ये बताइए, अच्छा एक्चुअली आप लोग मुझे बताइए कि असद के बाद लाइक व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम, मतलब ये कैसे होते हैं ऑन सेट? ये मासूम बच्चा है हमारे पैक का, वो पता चल रहा है, वो बोल, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा, ये मैं बताऊं, मैं सबके साथ देखें, वैसे तो मुझे सबसे ही एक बराबर का प्यार है अपनी पूरी टीम से, इससे मुझे कुछ ज्यादा ही है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये बॉय ऐसा है कि रात को 4 बजे भी आपको बोले यार असद भाई बोलिए कहीं चले जाना, चलो आ जाओ, ये वो बनता है, ठीक है ना। इसको करूंगा टोपी कर देगा, इसको करूंगा कहीं और होगा, अब नहीं आऊंगा मैं, अब नहीं आऊंगा मैं। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें, लेकिन इसका ये बड़ा डेडिकेटेड बंदा है। जब ये शूट पे होता है ना मेरे साथ, तो मुझे टेक्निकल कोई टेंशन नहीं होती, मतलब मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, वरना मुझे खुद देखना पड़ता है अगर ये ना हो ना, क्योंकि किसी का भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है ना मेरा है, बस ये कि मैंने मीडिया में थोड़ा काम किया हुआ है, थोड़ा सीखा हुआ है, थोड़ा सा अपना जुनून कह लें आप उसको। सलमान काफ़ी अच्छे है, कभी कभी एग्जीक्यूशन ले आता है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपको पता होता है कि यार आपने शूट करना है, तो आपके टेक्निकल हैंड हर कोई, मतलब एक बंदा है जो संभाला, चाहे वो माइक से लेके, चाहे वो फ्रेमिंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो फ्रेम को मैनेज करना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं पड़ेगी, तो उस पर आपको नजर नहीं रखनी पड़ती, तो उससे बहुत काम आसान हो जाता है। इन शॉर्ट, हम पहले जो है वो सब चीजें सब लेके चल रहे होते हैं, जब ये होता है हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी एक्टिंग को डायलॉग ने बता दिया, मैं क्या बताऊं। आप इनके बारे में कुछ तारीफ करते हैं या तुम वो बताओ, इनके एक्सपीरियंसेस बताइए। शिकायत है हमसे, अच्छा आज सब बोल, प्लीज बताइए। एक ही तो शिकायत है यार, ब्रेकिंग न्यूज। ये हर दफा यही होता है, क्या कहते हैं, मुझे इंट्रोड्यूस कराना ही भूल जाता है हर जगह, ये हमारा पूरा क्रेडिट जो है ये बेचारा नजरों में। आज हम आपकी जो क्या कहेंगे, आपकी शिकायत दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको मिलाते हैं कराची वाइन्स के सबसे बड़े स्टार से, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, द वन एंड ओनली असद। मिस्टर एडी प्रोडक्शन है ये, ब्लैक स्टूडियो के मालिक हैं, ये बहुत मशहूर काम कर रहे हैं ये लोग ना। जितने शोज आप देखते हैं, जितने इनके व्लॉग्स आप देखते हैं, सब ये शूट करते हैं। ही इज द मैन बिहाइंड द कैमरा। एक और चीज जो हम लोग इंटरनेशनल थाईलैंड वगैरह के व्लॉग्स जितने भी आपने देखे, चाहे वो पानी के अंदर हो, पहाड़ के ऊपर हो, जहाँ से छलांग मारी, पैराशूट से छलांग मारी, वो सब इसने शूट किया। हम लोग छलांगे भी मारे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल है, आपका सबसे मजेदार एक्सपीरियंस क्या था थाईलैंड? थाईलैंड क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको थाईलैंड के बारे में। मेरा जो एक्सपीरियंस आया ना, जब भी मैंने किसी को बताया ना मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो सब हैं ये एक्सप्रेशन होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन थाईलैंड मैं समझता हूँ कि आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आप मतलब आप जैसे हमारा मीडिया से हमारा ताल्लुक है ना, आप अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें या वहाँ की जो लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है। नो डाउट पाकिस्तान का खूबसूरती में कोई आसानी नहीं, लेकिन वहाँ की एक डिफरेंट, वहाँ की जो आइलैंड्स हैं, इतने सारे आइलैंड्स हैं, मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल लोग मिलते हैं। इवन कि हमने वहाँ पे कुछ वीडियो शूट किए हैं जो हमने अंग्रेजों के साथ किए हैं। हाँ, वो फीमेल भी हैं उसमें, लड़के भी हैं, मतलब मिक्स है ना। वो इतने मजे के लोग होते हैं कि आप उनसे एक तो लर्निंग आपकी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है। थाईलैंड इज द नंबर 1 कंट्री ऑन टूरिज्म, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, आपकी लर्निंग होती है, आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, आप उनसे बातें करो, आप उनसे ये पूछो कि यार आप बहुत कुछ क्या क्या मतलब आपकी मतलब जो आपकी कंट्री है उसमें ये चीज़ कैसे होती है, अपने बारे में बताओ। और इवन कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा यूँ रहा है कि मैंने जब भी किसी से पूछा ना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने हमेशा अच्छे ही अल्फाजों में मतलब ना याद किया पाकिस्तान को। मतलब ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे होता है, लोग समझते हैं हम टेररिस्ट हैं या ये चीज़ है या हमारे बारे में एक बुरा इमेज है। होता है, हर जगह होता है, लेकिन लोग हर जगह के बुरे होते हैं। हमारे यहाँ सीन है कि हमारे मशहूर है। जी मंसूर, आपका हो गया मैसेज? हम वेट कर रहे थे आपका। मेरा मैसेज मतलब ये होता है जब हम ब्रेक पे जाते हैं, सबके हाथों में फोन, और मेरे हाथ में फोन है, मैं यहाँ देख क्या करें, डिमांड नहीं है। हाँ चलो, किसी एक के पास नहीं, घर बसे हैं यार, मतलब यू नो लाइक जवाब देना। आएंगे हम इस पे, आएंगे हम इस पे। अच्छा मंसूर, आप हमें बताए थे कि थाईलैंड में क्या हुआ? अच्छा, थाईलैंड में नहीं हुआ, ट्रिप के स्टार्ट में हुआ था, जो कि हमारा पहला जो स्टॉप था वो श्रीलंका था। 1 दिन का स्टे था वहाँ पे, फिर वहाँ से मैं थाईलैंड जाता था 10 दिन के लिए, फिर वहाँ से मलेशिया। तो श्रीलंका में हम जाते हैं, और श्रीलंका के वीजे जब सबके लगे थे ना, तो सबके आए 24 घंटे बाद वीजे, मेरा आ गया 5 मिनट के अंदर। मैंने इतना इन लोगों का दिमाग खराब किया, मैंने बोले क्लास देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर। खैर ये हुआ, हम पहुँचे, लैंड किए हम लोग कोलंबो एयरपोर्ट पे। कोलंबो एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ पे सब लोग चले। अच्छा, दानियाल ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि सबसे आगे दानियाल होगा, ठीक है ना, बाकी बीच में क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे ट्रैवल कर रहे थे, और सबसे पीछे होगा मानी, क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया हुआ दानियाल के साथ काफी। मैंने ठीक है ठीक है ना, तो सबकी टेंशन थी, और सब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलते चले गए ना। तो दानियाल बहुत
यहाँ से मैं सुनाऊं? तो यहाँ से मैं दानियल ने बोला अब तो मानी है, अब दानियल ने बोला अब तो मानी तो निकल ही जाएगा। हाँ, ये बंदा जाता है काउंटर पे और इस बंदे का जब पासपोर्ट और वीजा देखा तो उसको कहा कि आपका जो वीजा है इसमें गड़बड़ है। मानी की आवाज आती है, दानियल पुलाव मानी, हम लोग इमिग्रेशन पर खड़े हुए बाहर निकल, 5 बज रहे, बोले पुलाव कहाँ से पड़ गया, बाहर तो निकले पहले जाके ना। दानियल भाई पुलाव, बोले व्हाट पुलाव, मैंने कहा कोड वर्ड, माय कंट्री इज पुलाव इन द वीजा, द नेशनैलिटी इज वीजा वाज रिटन पुलाव, और ये एजेंट की गलती। अब मैंने आपको बताया ना 5 मिनट के अंदर वीजा क्यों आया था, वो जिस ट्रैवल एजेंट ने मेरा वीजा सिलेक्ट किया था ना, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होते हैं, उसमें पाकिस्तान से ऊपर था पुलाव, तो उसने पुलाव पे क्लिक कर दिया। गुरूर मरवा देता है इंसान को। तो ऑफिशियली हमारी टीम में सब ने 3 मुल्कों का ट्रिप किया था सिवाय एक बंदे के। नहीं देखो मुल्कों का ट्रिप हो गया था, मुल्क का मैं कदम रखे मैंने वहाँ पे जमा के। आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले? आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले? एयरपोर्ट तो कोलंबो में था ना, तो उसका मतलब मुल्क में था ना या हवा में था कि एयरपोर्ट? शायद हवा में हमने 10 घंटे यार जीत गया भाई। सही है भाई, देखा इनके इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हमने किया कि उनकी आवाज आ रही है, कमाल, ये यही कर सकता। तो बहरहाल खैर इतना अच्छा एक सीन ये हुआ था कि यार मुझे वहाँ पे रूम दे दिया गया था एयरपोर्ट वाले की तरफ से। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो क्रेजीएस्ट थिंग थी वहाँ पे, चीज थी वो ये थी कि ये लोग जब वापस आए ना, मतलब जब शाम वहाँ में अपना घूम फिर के अगले दिन जब वापस आए, जब ये एयरपोर्ट पे अंदर आए ना, तो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे वो तक मुझे जानता, पूरा एयरपोर्ट जानता था, पूरे एयरपोर्ट के स्टॉल वाले। आपकी सोच है, जो बंदा मिला उसको मैंने बैठ के आधा घंटा अपनी कहानी सुनाई। लिटरली हमें भी गार्ड ने बताया वो अपने दोस्त गुलाब का वहाँ कर रहा है, वो ऊपर है। जब ये लोग आए ना तो मैं एक चाइनीज लड़की के साथ बैठा हुआ गप्पे लगा रहा था, क्योंकि मुझे फ्री वाईफाई मिल गया था उसके पास से। वाह। अच्छा अदलान, हम आप पे आएंगे। यू रिसेंटली जॉइन कराची वाइन्स, तो सो फार आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा है और जो है मंसूर के बारे में कुछ कहूंगा कि बताइए, चूंकि को फाउंडर है कराची वाइन्स के, और मतलब है ना ये इज लाइक कैप्टन ऑफ द शिप, लाइक कैसे लेके चलना है कैसे लेके नहीं चलना, तो ये सारी चीजें ये मैनेज कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत तंग करते हैं कि टाइम पे पहुंचो, टाइम पे, क्योंकि मैं अमूमन मैं लेट हो जाता हूँ। मैं मेरी अंदर थोड़ी सी बुराई, मैं थोड़ा सा जब कॉल टाइम होता है सिर्फ 10 अच्छा ये थोड़ा सा कितने घंटे है वहाँ? थोड़ा सा समझ आ रही, तो वही सर थोड़ा सा मतलब 4 दो लोग हैं, एक तो ये और एक हमारा भाई दानियाल जो कि मेरा पार्टनर है, उसको कैसे भूल सकते हैं। मैं सोचा था कि इस पॉइंट पे आके मैं उसकी बात शुरू करूंगा। स्टोरी मत बताएं, हम उस पे आएंगे जरूर। अच्छा अजलान, हमने आपकी साइड में एक सरप्राइज रखा हुआ है। बिल्कुल। तो प्लीज हम जैसे जैसे मानी है, मंसूर है, ये पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह, और सलमान गाना बहुत अच्छा बजाते हैं, ये तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं, मैं भी ताली अच्छी बजाता हूं, थोड़ा बहुत गिटार आता है। क्या गाऊं मैं जैसे आपने कहा था ना कि घर वाले हैं, तो उन्हीं की याद में कुछ गाना। चलो भाई फौरन आ गई। धागे तो मिलाओ चांदनी से मुझे, घूंघट की बना लो रोशनी से मुझे, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से रहे मेरी सांसें, समीर राशिद कुरैशी। अरे भाई मुबारक हो। अच्छा ठीक है, हाँ कुछ कह नहीं दिया। ये होते हैं सस्ते जोक्स। वेलकम बैक टू द शो एंड हम अब शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड से। तो जी हम आपसे पूछेंगे सवाल, आप सबको अपने जवाब देने हैं, सच बोलना है। हो गया? हो गया, टाइम ले लिया तुमने, रैपिड फायर है भाई। ओके, तो आप सबको इंडिविजुअली जवाब देना है, कॉपी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, और हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके सो जी जनाब, सो स्टूडियो में, अंधेरे स्टूडियो में ये पहनते हैं सनग्लासेस, दैट इज रैपिड फायर में कुछ भी निकल सकता है, मैं फेस नहीं कर सकता। इट इज अ सब्लिमिनल मार्केट। अच्छा सलमान, सबसे ज्यादा कौन खाता है, सबसे बड़ा भुक्कड़ कौन है? इट शुड बी द क्वेश्चन। He is very foodie actually, माशाल्लाह। He loves to eat. मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दानियाल he loves to.
मैं आगे बढ़ लूं? मुझसे आप पूछेंगे तो ये, क्योंकि हर वक्त तैयार रहता है खाने के लिए। तभी तो नर्वसनेस थी जवाब देते हुए। अभी कौन खा रहा था बैठ के? आप अंदर हवा खा रहे थे। चले जी, कौन खाना खाता है? दानियाल। वैसे ऑनेस्टली दानियाल 2 points। दानियाल से बड़ा फूडी मैंने आज तक नहीं देखा। ही नोज अबाउट फूड, दुनिया जान है, खाना जानता है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, सब पता है उसको। लाइक तो मेरा वो दानियाल। माशाल्लाह। सेम दानियाल। आप जा सकते हैं। मैं अपने दोस्त की क्यों उस तरह की की बात। तो ये आपके दोस्त नहीं है? पक्के दोस्त। मतलब दानियाल इज मतलब ये कच्चे हैं, यू नो, ये कभी भी कटा हम लोग यूं है, देखें यूं है मैं और दानियाल। एक मिसाल देते ये जुड़ी हुई होंगी ना, मतलब साथ है हमारा, थोड़े से लिए जुड़ जाता फिर। अच्छा सी, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? सब पहले वो। ओके अजलान आप एक सेकंड नहीं हमारे आप अपनी भड़ास निकालिए। मैं वो नहीं कह रहा, मजाक में बोले या सीरियस बोला है? सीरियस सच बोलना, सीरियस सच बोलना है यार, सच बोलना है। पार्ट ऑफ सच बोलिएगा, आपकी समझ नहीं आएगी। ले आसिम का नाम यार, ले दो अच्छा ना लगे ना यार, बुरा लगे। वैसे एक बात मैं कहूंगी, मुझे जितने कमेंट्स मैंने कराची वाइन्स के बारे में सुने हैं, आसिम इज अ वेरी गुड एक्टर, ये बात सब मानते हैं। मतलब माशाल्लाह से जब भी वो आपकी वीडियोस में आते हैं, भी मानती है, हमें पता है। बिल्कुल मुबारक हो आपको। मेडल नहीं है वरना जरूर देती मैं। सबसे महंगा एक्टर है हमारी टीम में। उसकी इनवॉइसेस ना सबसे महंगी जाती है, सबसे एक मिनट इनवॉइस का वर्ड तुमने कहां से सुना? ये कल से ये कर रहा है इनवॉइसेस सुबह से 2 कहां से पता चला तुम्हें? यार मैं ये आजकल मेरे रेट भी बढ़े हैं। वो होते हैं ना कुछ चीज के रेट बढ़े हैं भाई, शादी ब्याह पे नाचने के रेट बढ़े हैं। देखे बाजी चाचा देखिए हमारा एक बड़ा, जब हमें चिल होना होता है ना तो हम एक बात करते हैं, आइए बाजी आइए, देखे यहाँ पे जोड़े भी है, कंगन भी है, पाले भी है, चूड़ियां भी है, दुपट्टे भी है, जानी बॉयज सारे पिंडी बॉयज। अच्छा आसिम और शहबाज। एक मिनट यार, आसिम और शहबाज। यू नो ये रैपिड फायर है जिसमें फौरन शहबाज मैं शहबाज से कहूंगा। आसिम और ये हर जगह है आपकी, ये हर जगह। ये तो बदला था लग रहा है। असली जवाब नहीं, ये बहुत खर्च करता है लेकिन किसी पे क्यों? अच्छा ये शहबाज ऐसी क्या कंजूसी करते हैं जो आप लोग सब शहबाज? वो पैसे नहीं निकालते करेंगे। एक सेकंड सच्चा आदमी मतलब सच्चाई के लेवल तोड़ दिया आपने। आपने एक पॉइंट मारा था ना, उसका जवाब देना। लेकिन मेरे बारे में जो जिसने भी कहा बहुत ही गलत है। ये आप अंधे को भी बोलेंगे मानी बहुत खुले हाथ का, मतलब कहीं भी जाता है मानी में पहले बिल। वो तो मजाक में हमारे सारे बिल्कुल मानी जो है वो ऑनेस्टली। अच्छा ऐसा लग रहा है वो जो किसी को कमेंट देता हूँ तो बुरी लगती है, सारे से मनाने में लगे। कितना खुले हाथ का है, सार्काज़्म दिख रहा है हमें। अच्छा सबसे ज्यादा देर से कौन आता है? अब आप बताइए। मैं बताता हूँ, 2 लोग हैं। सही। एक तो ये, ठीक है, एक दानियाल का ये कि अगर आपने उसको 10:30 बजे बुलाया तो आप उसको 8:30 का टाइम दो, फिर भी वो 9:45 बजे आएगा। ये है दानियाल। मेरे हिसाब से सभी लेट आते हैं क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंच के सबको कॉल कर रहा था, भाई इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। हाँ, 2 चीजें इसकी जिंदगी में, मैं सबसे पहले टाइम पे होता हूँ हमेशा। एक फोटोग्राफी और दूसरी तंबाकूनोशी सेहत के लिए। जो इंसान अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत है वही होता है कामयाब। अच्छा ओके, अगला कौन सबसे ज्यादा अपने फोन पे? सलमान तो सबका एक सेकंड इस पे ये जवाब दे दे फिर। सलमान मेरा तो है, लेकिन ये भी बोलेगा मैं। सलमान ये इतना परफेक्ट है ये। हर चीज में एक सेकंड माशाल्लाह। मुझे इसमें कोई नहीं आ सकता। एक सेकंड, थाईलैंड में जिस हम होटल में रुके हुए थे ना, उसमें जो लॉबी में नहीं, जो उनका स्टाफ होता है, वो दोस्त बन जाते सारे, उन तक को भी पता है कि ये बंदा ऑलवेज उसकी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा कौन है जिनसे आप इतनी बात कर रहे हैं? ये तो पर्सनल हो रहा है। ये सवाल है, कौन है? अच्छा कितने हैं? सब देख रहे होंगे तभी मेरी गर्दाई कुटास लगने वाली। कितने हैं? अच्छा चले नाम मत बताएं, गिनती में बता दें। मैं तो चीनी लेने आया था। नहीं समझ जाए जिनको समझना है। एक मिनट, क्या बच्चों वाले सवाल, पर्सनल सवाल पूछो ना। पर्सनल सवाल मैं पूछूं, लेकिन आप दुबई ले जाओ इनको। इनको दुबई जाना है, इनको दुबई जाना है। आप नोट करेंगे, दुबई जाना है। इनको दुबई जाना है। आप दुबई कब जा रहे हैं मंसूर? मेरा बस चले, मैं कल चला जाऊँ। देखा, आप समझे इस बात को, इनका बस चले कल चले जाए। अवाम आपको समझ नहीं आने वाली है इनसाइड जो
अच्छा, मूविंग ऑन, आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा देर तैयार होने में कौन लगाता है? आगे भी कुछ बताएंगे या बस? नहीं, दानियाल। नहीं, हम लोग जब मोस्टली शूट कर रहे होते दानियाल के घर पे, हम लोग शूट कर रहे होते ना, तो क्या कपड़े पहने हमारा तो होश ही नहीं होता ना उसको। वो बंदा ऐसे जब तक प्रॉपर तैयार नहीं होगा ना, उसकी शेप प्रॉपर नहीं बनी होगी, वो किसी इवेंट में नहीं जाएगा, किसी शूट। ये होता है कि ये बात मैं मान सकती हूँ, सबसे प्रेजेंटेबल होता है। एग्जैक्टली, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें इरिटेट हो जाता है। हम दानियाल के घर पहुंचे हैं, दानियाल से पहले वो भाई ऑफिस से आएंगे, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, अब हम वेट कर रहे हैं, लेट लिए, सो लिए, उठ लिए, खा लिए, वो गए जाके शेव बनवा के, नहा के, अपना खाना खा के, फिर वो बंदा उतरता है, हाँ भाई कहाँ चलना है। और कितने घंटे लग जाएंगे इसमें? डिपेंड करता है कि हम जा कहाँ रहे। चलिए जी नाज़रीन, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड एंड अब हम चलते हैं हमारे आखिरी राउंड पे, फर्स्ट थॉट। अच्छा, हमें चाहिए 2 कैंडिडेट्स, आप बताएं हम किससे सवाल करें? एक तो मानी भाई हो गए। किस चीज के लिए चाहिए वैसे? मतलब फर्स्ट थॉट बेसिकली मैं आपसे चाहिए एक लफ्ज कहूंगी और आपके जो सबसे पहले दिमाग में आता है। ये दोनों सब है। चलिए कुछ मैं अपनी तरफ से बना डन। आ अजलान, हम आपसे शुरू करते हैं, सही? पहला थॉट जो आए फौरन बोलना है, सोचने का वक्त नहीं लेना है, सही है? ओके, कराची वाइन्स। बेस्ट थिंग। ओके, गिटार। माय लव। गर्लफ्रेंड। लाइफ। ओके, मैं पूछ नहीं सकती। You can ask anything. ओके, नाम मत पूछना, चलो पूछो। नाम? Ignored. Ignored his story of your life. Ignored your question and seen your answer. Seen blue ticks. बहुत मसले हो जाएंगे। बड़े उससे बोला था ना पर्सनल सवाल पूछिए। नहीं, like you know, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। ओके, ग्रेनिच। ठंडी। I love you for that. Crowd was, you know, a bit low क्योंकि you know freshies थे and आप लोग टाइम पे भी तो गलत आए। ये कौन सा वक्त है? जिस टाइम पे बुलाया था जब ही आए। इतनी गर्मी में। अच्छा चलो, लड़ाई करा माफ करो, लड़कर साहब को आगे पूछो। लड़ने तो दे। इतनी गर्मी में कौन आता है? हम आते। पॉइंट। अच्छा क्या अच्छा कुछ नहीं क्या बोल रही थी? इतनी टेंशन मत ले। नहीं। अच्छा मंसूर, अब आपकी बारी। अजलान। इतना सोचना थोड़ी है। सॉरी अजलान ना, बड़ी बस क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर यार देखो, डिस्टर्ब कर, सोचने नहीं देते। मैं पूछूंगी नहीं। सॉरी। हाँ, लड़की। आई रिस्पेक्ट। मैं आंखों में देखी बोलता हूँ, आई रिस्पेक्ट वुमेन। कैमरा की आंखों में देखिए। देखिए लड़कियाँ, कांटेक्ट करने के लिए नीचे नंबर आ जाए। नो बताएं। हम कौन सा नंबर मैं डाल चैलेंज रहे कर हैं? सकता हूँ, मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूँ आपके फोरम पे थ्रू। ओके, मैं एक स्टेटस लगाता हूँ अपने पेज पे, ठीक है ना? जिसको कहना है, जो मेरे बारे में कह सकता है ना, मतलब जो भी लड़की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कभी आप मेरे बारे में कोई बुराई नहीं सुनेंगे। और अगर एक भी नेगेटिव कमेंट आ गया, जबरदस्ती तो वो है, लेकिन जनरल होना चाहिए वो। जनरल ठीक है, अगर हो गया तो भाई देखिए, नेगेटिव कमेंट आएगा, मैं देखूंगा उसको, ठीक है ना? मैं अगर जानता हूँ नहीं, मैं अगर जानता हूँ, आपने बड़ा से चैलेंज दे दिया। चैलेंज दिया, मैंने कहा कोई भी लड़की मेरी बुराई नहीं कर सकती। स्क्रीनशॉट्स अगर आ गया नहीं आ सकता ना, आई एम श्योर। लेकिन फेक कमेंट्स की बात अलग है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं। अगर आ गया ना तो हम आपको देंगे एक डेयर जो आपको करनी पड़ेगी। श्योर सही है, चलें। ओके, फ्रेंड्स, माय लाइफ, माय रूल्स, माय कोड याद आ गया। भाई कुछ लोग कमिटेड है। माय लाइफ, यस हम कमिटेड। अबे मुझे कोड याद आ गया, माय लाइफ, मुझे आ गया, मैं सब कुछ पॉलिटिक्स। आई हेट। वैसे व्हाट पार्ट ऑफ एक लव्स बोलना है? बोले प्लीज। अच्छा फोन बंद हो गया। ठीक है सलमान, हम अब आते हैं आपके ऊपर। शहबाज जानी। इतना सोचना नहीं है। फर्स्ट थॉट, नाम ही फर्स्ट थॉट है, इतना सिंपल कर दिया है मैंने। ओके, एडिक्शन।
सॉरी, आपका नाम सलमान है, आपका नाम सलमान है, मुंह उधर करके बैठ जाइए, सवाल कीजिए, मुंह उधर करके बैठिए, कीजिए। अगली दफा नहीं बोलना है बीच में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, वर्क, फैशन, शादी, इंशाल्लाह जनवरी, फूड, आई लव। चलें, ये होता है, ऐसे जवाब डीओपी साहब हम आप पे आते हैं। मैं सिर्फ इनकी, मुझे पता है हंसी बात पे नहीं, इनकी हंसी देख के हंसी आती, इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत हंसी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किसकी, मेरी हंसी? आप दोनों की। मेरे को मेरी हंसी का पता नहीं है अभी नहीं पता, बिल्कुल। चलिए, अच्छा जी, आप पे आते हैं आसिम। बड़ी, बेस्ट बड़ी। देखिए बड़ी से कुछ बड़ी का मतलब किसी को नहीं पता। बहुत बड़ी। अच्छा, GU मॉर्निंग विद समीन राशिद। गुड टाइम। गुड, अगली बार आएंगे, इनवाइट करेंगे तो जरूर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अब मैंने सोचा हुआ नहीं है कि कुछ सजेस्ट करें, आप दोनों ने कान बंद कर लिया, क्या ऐसा पूछूं मैं इनसे कि कोई कहानी लिखी हो? क्या ऐसा पूछेंगे? कोई एक ऐसा लव हाँ नहीं, जो जवाब बहुत डीप हो, आप ही पूछ लें। ये क्या है? इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने खामोश, आप लाल हो गए। मैंने सब कह दिया, इसमें सब कुछ है। अब मुझे फीलिंग आ रही है कि आप समझाने नहीं वाले हैं। इससे पहले बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, इट वाज एन अमेजिंग टाइम, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत बातें हुई, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड आते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और हमें बुलाते रहिएगा। डेफिनेटली। सो दैट वाज आवर शो, एंड इंशाल्लाह हम आपको देखते हैं नेक्स्ट टाइम। स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड। Greenwich was a second home because college, you spend more time at college than your home. So you get accustomed to the experiences here and your friends and colleagues and teachers. So it was a second home in a nutshell. I think amazing faculty. Some of the teachers were really brilliant. The experiences were unmatched. I think the extracurriculars were really helpful, and the push we got and the encouragement we got in music and in theatres and in drama classes and all helped us finding a career for ourselves. Secret तो अगर पता चल गया किसी को तो वो adapt कर सकता है बार-बार. But there's no secret as such. I think persistence is everything. I read somewhere that talent is kind of common. But when you're at something, you're persistent about something, so eventually you get your goals. I think these days it's pretty specific and structured as to what one needs to do. In our time, it was a generic, everybody wanted to do a marketing degree or a business degree. But go with your gut feel, whatever you want to study. If you're towards the arts or towards media, you go for a school that's good in that department. Other than that, then look at the faculty. That would be most crucial. Unforgettable मैं बता नहीं सकता. एक दफा से सईद साहब आ गए थे, उन्होंने कहा कार्ड लाएं, तुमने कहा अच्छा मरे. But I can't tell you why that was, क्यों ऐसा हुआ. But I think वो performances जो थी, हाँ you can probably know. Unforgettable तो वही है जब उन्होंने ID कार्ड लिया था. But there are a lot more other good memories also जब हम perform करते थे on stage. Singing and playing with a band and everything, so वो होगी second most unforgettable memory. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू GU मॉर्निंग्स विद समीन राशिद. हम लाए हैं आपके पास एक नया मॉर्निंग शो जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं दिन से रात तक, टीचर्स के साथ क्या चल रहा है,
नए कोर्सेज क्या आ रहे हैं, पुरानी चीजें क्या हो गई हैं, और हर दिन हम आपके लिए लाएंगे नई एक्टिविटीज विच आर गोना मेक यू हैव अ लॉट ऑफ फन जस्ट बाय वाचिंग देम। सो आज हमारे यहाँ हो रहा है एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही मजे का इवेंट विच इज कॉल्ड द ओलंपियाड 2017। दिस इज वेरी बिग बिकॉज ये ग्रीनिच का सबसे पहला ओलंपियाड है एंड इसमें ले रही हैं पार्ट बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वेदर इट बी जेबिस, इकरा, बहरिया, पैपकीट, बहुत सारी। मैचेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और हम जाके देखेंगे बीच में कि क्या हो रहा है। सो फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द टेबल टेनिस मैच। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, लड़कियों का फाइनल्स चल रहा है और यहाँ पे एक जनाब में जो बहुत इंथुजियास्टिकली मैच देख रहे हैं। जी जनाब, आप क्या देख रहे हैं, लड़कियों को या मैच को? अभी तो नॉकिंग चल रही है तो अच्छा सही है। सो अभी मोर इम्पोर्टेंटली वेट हो रहा है, कब से हमें 4 बजे बुलाया हुआ है तो हम लोग अपने मैच का वेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, आप जानते हैं ना? यस। तो आपको नहीं लगता बड़ी बात होती है अगर ये टाइम पे शुरू हो जाता? हाँ, हम क्या कर रहे हैं, बुलाया तो हम उस टाइम पर आ गए। अच्छा, सो अब हम चलते हैं कोच की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है लड़कियों ने कैसा परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ स्टार्ट। वालेकुम सलाम। जी सर, आप बताइए आपको क्या लगता है लड़कियों की परफॉर्मेंस देख के कि लड़कियों का क्या फॉर्म है? बहुत ज़बरदस्त खेला है लड़कियों ने और बड़ा टफ मैच था बहरिया के साथ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला और 3-0 जीता है और इंशाल्लाह IBA से भी हम उम्मीद करते हैं कि लड़कियाँ अच्छा खेलेंगी और फाइनल जीतेंगी। और सर लड़कों का क्या ख्याल है? लड़के भी हमारे ग्रुप अच्छा है, अब देखते हैं, अब स्टार्ट हो तो उसके बाद कुछ। सर क्राउड तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, क्योंकि क्राउड मैंने जमा कर दिया है बहुत ज्यादा इसलिए। सर आप जैसे कोचेस की तो हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने देखा, ये थे हमारे कोच एंड लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी के और हमारे क्राउड में कौन कौन है। तो फाइनल स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों को जिम में आना पड़ा क्योंकि बाहर इतना शोर हो रहा है और हमें मिल गए हमारे सर। तो आइए उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बताइए क्या कंडीशन चल रही है बाहर? अभी ग्रेनिच की टीम सेमीफाइनल खेली है, सेमीफाइनल के बाद फाइनल शुरू हो चुका है IBA से और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओलंपियाड में ग्रेनिच की टीम जो है वो फाइनल खेल रही है। तो सर क्या चांसेस हैं जीतने के ग्रेनिच के? 50-50 दोनों टीमें अच्छी हैं। और सर लड़के क्या करेंगे? मैच अभी 1 घंटे बाद है। 1 घंटे बाद है। तो क्या लगता है सर हमारे लड़के किस फॉर्म में? नहीं, लड़के हमारे माशाल्लाह हम काफी ट्रॉफियां उठा चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ट्रॉफी ग्रेनिच की है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो कैप्टन है दूसरे टीम की सबाहत, वो हैं ग्रेनिच की तरफ से और हमारे ऑपोजिट खड़ी हुई हैं IBA की स्टूडेंट। और सर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पहला सेट जीत लिया, दूसरे सेट में 2-0 है। अच्छा, सबाहत ने पहला सेट जीत लिया है 3-0। तो बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है और अभी तक तो माशाल्लाह से ग्रेनिच लीड कर रही है। सर तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस अब है? 50-50 उस वक्त है, आप क्या है? 50-50 दोनों टीमें अच्छी हैं, अभी 50-50 है। तो आपने देखा कि सबाहत जो है माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रही हैं। 3-1 हो चुका है, बट IBA की जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अपना रखा हुआ है पेस कंटिन्यू। लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है एंड वी विल कीप वाचिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। लड़कियों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन जीतने वाला है? मुझे लगता है कि सबाहत जीतेगी। आप ग्रेनिच के स्टूडेंट हैं तभी आपको ये लगता है। बहुत थैंक यू अपने रिव्यू के लिए। जी सर, हम आ गए वापस आप पे। माशाल्लाह से सबाहत जो है बहुत बेटर कर रही हैं। 8-5 अभी बराबर है, मैच सही है। अच्छा 11 पॉइंट्स का गेम है, 11 पॉइंट्स का गेम है। तो हमारे साथ हैं IBA के कोच और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है अपने स्टूडेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कि ग्रीनविच ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया टूर्नामेंट और टीमें भी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड सर हमने सुना इससे पहले भी आपकी जो फीमेल टीम है थ्रोबॉल की वो जीती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट एंड हम होप करते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते रहें। हाँ इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। IBA तकरीबन काफ़ी गेमों में पार्ट करता है जिसमें गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। यहाँ भी हमने गर्ल्स भी अपनी टीम खिलाई है, बॉयज़ भी खिलाई है। इवन अक्सर इवेंट्स में हम खिलाते हैं IBA की टीम। सर इससे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, फेमिलैरिटी आती है और एक स्पोर्ट्स का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। डेफिनेटली जब आप स्पोर्ट्स करवाएंगे एक गैदरिंग हो जाती है, एक दूसरे से मिलना हो जाता है, फिर स्पोर्ट्स भी एक उसमें आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा ग्रीनविच ने ये स्टैंड लिया और कराना चाहिए हर साल इनको इस तरह के इवेंट कराने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। देखा IBA की टीम जो है वो जीत चुकी है। चल के उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपका नाम? सोबिया। तो सोबिया आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है? It's a good feeling, but we haven't won the finals yet, so we're hoping for the best. तो इंशाल्लाह डटे रहेंगे। इंशाल्लाह
That's amazing sportsman spirit. Thank you so much for talking with us. So आपने देखा कि यहाँ पे बहुत टेंस माहौल है और जाके देखते हैं फुटबॉल कोर्ट पे क्या हाल है. तो हमें मिल गई है ज़ेबिस की फुटबॉल टीम और इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस ग्रेनिच पे कैसा है. अस्सलाम वालेकुम. तो आप में से कैप्टन और प्लेयर्स कौन है? कैप्टन मैं हूँ. बाकी आपका नाम? मेरा नाम फहद तारिक. अच्छा, आप थोड़ा करीब आ जाइए. आपका नाम? बिलाल और आपका नाम? अब्दुल बासित. अब्दुल बासित. ओके, सो अब आप हमें बताइए कि ग्रेनिच वेलकम कैसा है आपके लिए, मतलब आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट ओलंपिक पे आके यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है और होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में भी इनके आते रहेंगे. और अच्छा कोर्ट है और हमें बहुत मज़ा आता है. और मेरे ख्याल से अगर भाई बहन का जैसे रिलेशन होता है ना, ज़ेबिस और ग्रेनिच का रिलेशन ऐसा है. हम वैसे मैंने ये सुना है कि ज़ेबिस जो है ग्रेनिच की सिस्टर यूनिवर्सिटी है, ये सुना है मैंने. समझें क्योंकि हमारा भाई बहन जैसा रिलेशन है. हम ज़ेबिस हमारा हर रोज़ हर वीक हमारा आना जाना होता है. ज़ेबिस का इधर हमारा आना जाना होता है. तो मतलब हम आते जाते रहते हैं. तो हमारा ऐसा कोई नहीं है कि यार मतलब ज़ेबिस को हमने बिल्कुल अलग कर दिया. तो ज़ेबिस का हमारा भाई बहन जैसा रिलेशन है हमारा. That's great and माशाल्लाह से आप लोग वेलकम एंड गुड लक टू यू गाइस. होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम हियर एंड हम चलते हैं अपने फुटबॉल कोर्ट की तरफ. सो हम बात करने जा रहे हैं GSA ऑल स्टार्स से, जो पहली टीम है जो सेमीफाइनल्स में आई है. सो आइए देखते हैं इनका क्या हाल है. अस्सलाम वालेकुम जी. आप लोग GSA ऑल स्टार्स हैं अगर मैं सही कह रही हूँ? अच्छा, तो आप में से कोई एक बोले, आप मुझे बताएं, मैं उसी की तरफ आ जाती हूँ. पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. जी जनाब, आपका नाम? अच्छा हमजा, आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? मैं पीछे डिफेंस लाइन. ओके, सो कैसा लग रहा है टू बी द फर्स्ट क्वालिफाइंग टीम? अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मतलब सेमीफाइनल्स है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. लेकिन अच्छा एक बात बताएं, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, लड़कियां खेल सकती हैं फुटबॉल? खेल सकती हैं. आप खिलाएंगे लड़कियों को? क्यों नहीं खिलाएंगे, मतलब खिलाने का क्या मतलब, उनका एक अलग पूरा मतलब. नहीं, अगर लड़कियां लड़कों की टीम में खेलें, अगर एक और टीम हो तो अनफेयर हो जाएगा लड़कियों को ऑब्वियसली. तो आपको लगता है लड़कियां कमजोर हैं? आपसे कमज़ोर नहीं है, मतलब लड़कियों के लिए मतलब अलग टीम बने, उनका एक अलग पूरा टूर्नामेंट लगाए आप या लीग जो भी चलाएं. लेकिन मतलब साथ खेल रही होंगी तो ऑब्वियसली अनफेयर हो जाएगा. या तो इक्वल रखें, मतलब दो लड़कियां एक टीम में हैं तो फिर समझ में आता है. जैसे टेनिस में होता है, ठीक है, मिक्स होता है. लेकिन नहीं, तो दोनों साइडों पे डबल टीम्स होंगी ना? डबल टीम्स होंगी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है ना, हम 3 प्लेयर्स खिलाएं, 2 प्लेयर्स खिलाएं. तो अगर इक्वल प्लेयर्स हैं, 2 लड़कियां उस साइड से हैं, 2 इस साइड से हैं, तो ठीक है इक्वल है. वरना जाहिर सी बात है अनफेयर हो जाएगा. बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी मैटर करती है. बॉयज़ की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत गर्ल्स के, तो आप इसलिए सेपरेट हम रख सकते हैं इनको. अच्छा, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, स्किल को या पावर को? दोनों इम्पोर्टेंट है. स्किल आपको खुद अंदर से आपके आएगी, एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग आपको खुद होना पड़ेगा. तो ये कि दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें तो दोनों आप लोग के लिए पावरफुल. थैंक यू सो मच ऑल स्टार्स, गुड लक एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट राउंड. चल के बात करते हैं इकरा की टीम से, जो एक्चुअली सेकंड टीम है जिसने क्वालिफाई किया है. अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? ताहा. अच्छा ताहा, सो आप कैप्टन हैं या आर यू? अच्छा, तो किस पोजीशन में खेलते हैं आप? मैं सेकंड लास्ट डिफेंडर खेलता हूँ. सही, तो आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस सोफा ग्रेनिच पे कैसा है? नहीं, इट हैज़ बीन रियली इनक्रेडिबल कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ इन लोगों ने. और सारी थैंक यू. अच्छा सॉरी वन ऑफ देम. नहीं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और अच्छे प्लेयर्स सारे के सारे कराची से आए हुए हैं. तो नहीं, इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस कि जब आप सारे प्लेयर्स के साथ खेलते हो आपको भी सीखने को मिलता है. और आपका जो टैलेंट होता है वो भी फिर सामने आता है कि आप किस तरीके से खेलते हो, क्या है आगे, और फिर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है. सो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम से सबसे ज्यादा खतरा? एक्चुअली ये मैं किसी और प्लेयर से पूछती हूँ. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम. आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम. सारिम. अच्छा जी सारिम, तो आप मुझे बताइए आप ज़ेबिस से हैं, व्हाट पोजीशन डू यू प्ले एट? ओके, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम. सारिम. अच्छा सारिम, तो आप भी इकरा से हैं और किस पोजीशन पे खेलते हैं आप? मैं मिडफील्ड में खेलते हैं. आप बड़े खुश लग रहे हैं, कोई खास वजह? इकरा जीती है ना अभी सेमीफाइनल के लिए, हमने क्वालिफाई किया, तो वैसी बात है. तो आपको क्या लगता है कि किस टीम से आपको खतरा है? इकरा को सबसे खतरा है. को सबसे खतरा है, इकरा से सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा इकरा से ही है. और अगर नहीं जीते बेटा तो? देखते हैं अभी क्या होता है. नहीं जीते तो क्या, फिर ये बताओ. नहीं जीते, नहीं ऐसे. अच्छा ऐसा करते हैं, लेट्स डू दिस. जीते तो और नहीं जीते तो? जीते तो ट्रॉफी हमारी होगी, नहीं तो जो हार गए तो किसी और की. हार गए तो किसी और की, बस. और क्या चाहते हैं.
नहीं मैं आपसे कुछ नहीं चाह रही. तो दिस वाज द इकरा टीम एंड लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट. हम आपको 2 मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं? जी जनाब, आप भी इकरा से हैं. हम अभी आप ही की टीम से बात करके आ रहे हैं. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? जीत गए इसलिए एक मैच जीते, अभी फाइनल जाना है, सेमी है नेक्स्ट, उसके बाद फाइनल का है, उसके बाद देखते हैं. सो आपको क्या लगता है किस टीम से आपको खतरा है? चलो किसी ने तो सच बोला. सुन लो, बहरिया से खतरा है. चलो सही है. नहीं, आई रियली कमेंट ऑनेस्टली, दैट्स रियली गुड. तो गुड लक विद यू एंड आप प्रैक्टिस करिए अपनी कंटिन्यू. हम चलते हैं. तो ये आपने देखा कि ये है हाल इस वक्त फुटबॉल कोर्ट का. अब हम देखते हैं थोड़ी देर में कि सेमीफाइनल्स के बाद क्या हालात हैं. और हम आ गए हमारे कैप्टन के पास फिर से, प्रेसिडेंट के पास. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, हम क्यों ऐसे मिलते हैं बार बार? वो क्योंकि आगे पीछे मुझे सारे स्पोर्ट्स देखने होते हैं, तो आपका काम वहाँ रिकॉर्ड करना है, मेरा काम देखना है. हम जहाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप हमें मिल जाओ. हाँ एग्जैक्टली. सही. तो सर आप मुझे बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है ये देखिए कि जो ओलंपियाड आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक इट्स गोइंग सो फार? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल है. पहले तो हमें ये डर था कि टीम की रजिस्ट्रेशन आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि काफ़ी टीम हमें बोला था कि हम रजिस्टर कराएंगे. बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहरिया, इकरा, आईबी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ही यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीमें रजिस्टर करानी है, ताकि पहला हमारा ओलंपियाड है ताकि खाली ना लगे. तो जैसे मैंने बोला ज़ेबिस्ट और ग्रेनिच भाई बहन हैं, तो वैसे ही इकरा के बारे में क्या ख्याल है? इकरा के लड़के बड़े कॉन्फिडेंट हैं. इकरा की टीम बहुत अच्छी है और उनसे अच्छी फिर जीएसए ऑल स्टार्स है. हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खेलती है, मुझे पता है ना. तो मेरा अगर प्रेडिक्शन लेंगे तो इकरा वर्सेस जीएसए ऑल स्टार्स और जीएसए ऑल स्टार्स गोना विन द टूर्नामेंट. इट्स आइदर इकरा और इट्स देम. बाकी किसी का चांस नहीं है. That's honesty and that's what we appreciate. Thank you so much sir. हम आपको फिर थोड़ी देर में आके तंग करेंगे. तो ये आपने देखा है कि फुटबॉल का है. अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है. मैच जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ पे एक हैं प्लेयर जिनकी हालत बहुत खराब है. इनसे पूछते हैं क्या हुआ है. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर, आप इतने नर्वस क्यों है भाई? हम नर्वस की बात नहीं है. वी आर एक्चुअली विनिंग राइट नाउ. अभी कुछ हुआ है. आई होप वी विन दिस मैच. ओके, सो आप ज़ेबिस्ट से राइट? तो सर आप क्या कहना चाहेंगे ग्रेनिच के बारे में? इट्स वेरी गुड टूर्नामेंट. ये जो टूर्नामेंट्स कराते हैं हम लोग पिछले हर टूर्नामेंट में इनके पार्ट लेते हैं. तो बेसिकली द थिंग इज के वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड एज यू कैन सी दैट वी हैव हैड अनदर गोल. सो वी आर होपिंग टू विन दिस टूर्नामेंट इंशाल्लाह. सर तो आप देख रहे हैं कितना शोर हो रहा है यहाँ पे. जरा हम भी जाके देखते हैं दूसरे टीम के क्या तासुरात हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. एंड एज यू कैन सी जीयू मॉर्निंग जीयू नाइट हो चुका है. आज का मैच जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा है. दिन से रात हो चुकी है और हमारे प्लेयर्स जो हैं बेचारे अभी तक खेलने में लगे हुए हैं. तो पूछते हैं इनसे कि इनका आज क्या हाल है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी भाई बहुत हालत ख़राब लग रही है. क्या हाल है? मैच कैसा जा रहा है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं फिलहाल. तो चांसेस हैं कि जीत जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, तो आपको पूरा यकीन है कि इकरा बॉयज़ को आप हराएंगे आज? कर सकते हैं तो वो भी 3 कर सकते हैं सेकंड हाफ में इंशाल्लाह. चलिए, वैसे प्रेसिडेंट आपके ऊपर कुछ प्रेडिक्शन के करीब नहीं आ रहा है ये? मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि जीएसए ऑल स्टार्स जीतेगी और इकरा जीएसए ऑल स्टार्स हो गया. ये सामने आप चेक कर लें. और अभी तो हाफ है. जीएसए ऑल स्टार्स ने 3 गोल किए हैं, तो मेरे ख्याल से 3 गोल उनके और बनते हैं, खाते में लिखे हुए हैं. हम देखते क्या होता है. देखते हैं कि इकरा बॉयज का क्या हाल है, जो बेचारे बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, लेकिन हमें मौका चाहिए. अस्सलाम वालेकुम जी. तो अभी भी सेम तासुरात हैं आपके या कुछ बदल गए? कोई एक फुटबॉल में एक चीज़ कहते हैं, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर. तो जब तक गेम खत्म नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे. इकरा हमेशा लड़ती रही है और जीतती रही है इंशाल्लाह ताला. वी हैव हाई होप्स. वैसे आप लोगों का कॉल बड़ा मजे का. यू गाइस कम इन अ ग्रुप एंड देन यू स्क्रीम एंड बहुत अच्छा है वो. वेयर डिड दैट आइडिया कम फ्रॉम? Well, actually, that idea is something that came up spontaneously. I mean, we didn't plan it, but when we're on the field, we are a team. We have to be together. We motivate each other. That's why we call the university's name that we're representing. IU. That's it. It's the university spirit. So, it's a tradition. सही. So, आप लोग अभी भी we are fighting for it. Very patriotic towards your. Hey, इकरा जिंदाबाद है. सही है. सो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग अपनी ऑपोजिट टीम्स को?
Well, they are playing a very good game. It's a competitive match. It's a tough match, but let's see what happens in the next half. The tournament is very well organized. The venue is very good. The surrounding is very peaceful. That's Are very great. Yeah, the hospitality is very good. I must, say that. And we are having fun over here. And if such tournaments will keep on coming, we will inshallah participate in every of them. आपके कैप्टन कहाँ हैं? यही है ना, मुझे लग रहा था आप जी कैप्टन। सर आपके क्या तासुरात? Like Ashlan said, it's not over till we're gonna fight in the last breath and let's see what happens. So ये आपने देखा, these were the Ikra boys and let's see what happens after the break. Okay, so मैच जो है फाइनल्स का सेकंड स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा गर्म माहौल है। इकरा बॉयज को लगता है कि वो जीतेंगे, आखिरी मोमेंट तक वो गिव अप नहीं करने वाले एंड द ऑपोजिट टीम इज डेफिनेटली नॉट गिविंग अप एनी टाइम सून। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द मैच। तो जैसे आपने देखा कि इकरा हैज लॉस्ट एंड द ऑल स्टार्स हैव वॉन, सो दैट्स देयर गेम राइट नाउ। और बीच में जाके हमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट वी कैन टॉक टू द रेफरी एंड आस्क हिम हिज ओपिनियन ऑफ व्हाट ही थिंक्स। सर फाइनली आप हमारे हाथ आगे, बताइए सर आपको क्या लगता है मैच का? नहीं सर, आप मैच में इतना बिजी थे। सो सर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आज की परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत बेहतरीन मैच हुआ फुटसॉल के हवाले से। मतलब अगर इंटरनेशनल दो टीमें खेलेंगी भी तो मेरे तजुर्बे के मुताबिक ऐसा ही खेलेंगी, क्योंकि फुटसॉल ऐसे ही रफ, टफ और बहुत ही फास्ट मैच होता है। तो आपको बहुत पोटेंशियल दिखता है सर हमारे लड़कों में? जी बेशक इनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनली जो है ना, फुटसॉल का कोई फेडरेशन नहीं है पाकिस्तान में ऐसा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, फुटसॉल फेडरेशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर। चले आइए देखते हैं टीम्स के, और पहले तो हम कोच से बात कर लेते हैं। कोच का हमें मिला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या हाल है? इस्लाम ठीक है सर। आप मुझे बताइए आपका रिव्यू क्या है इस मैच के बारे में? देखिए फुटबॉल में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है इसमें। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ तक फुटबॉल पहले खेला जाता था बहुत ज़्यादा, आज हम देख रहे हैं कि फुटसॉल में बहुत ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल के दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में आए थे रोनाल्डिनो जैसे बड़े बड़े प्लेयर हमारे हैं, तो इस वजह से हमारे जो है ना फुटबॉल जो और ज़्यादा प्रमोट होगी। और अभी इस लिहाज से जो आज जो गेम हो रहा था हमारे ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में जो ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे SGC वालों ने, ये बहुत बड़ा अच्छा इवेंट था। ओलंपियाड का फर्स्ट टाइम ऐसा रहा और उम्मीद है कि आइंदा हम प्रोग्राम चलाते रहेंगे और उसको बहुत ही अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, होप टू सी यू अगेन। तो जी हम अब हैं विनर्स के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत गए। आपने जो बोला था आपने करके दिखाया, सो क्या फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। तो इसकी सेलिब्रेशन कैसे होगी? जाएंगे कहीं खाना खाने में। आपको नहीं लगता कि ग्रेनिच को आपको थैंक यू बोलना चाहिए? अगर हम ऑर्गेनाइज ना करते ये होता ना। तो हमें ग्रेनिच, हम आपको ग्रेनिच को तो ऑब्वियसली थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल जाहिर है, वो जानते हुए मैनेजमेंट को थैंक यू बोल के जाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मैम के साथ जी। सो इंशाल्लाह गुड लक टू यू गाइज एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। लेट्स, अच्छा आपके टीम मेंबर्स, आप अपने टीम मेंबर्स को एक दफा बुला सकते हैं? जस्ट वांटेड। अच्छा जी, तो बेसिकली शुरू आपने किया था ये सब? मैं पूछूंगी नहीं, आपका दो जो दिल आता है बोल। मैं टूर्नामेंट के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, मजा आया देखने में। अभी आया हूँ लेकिन फिर मजा आया, काफी अच्छा था। साहिल भाई का बहुत खुश लगते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने ओलंपियाड कराया, बहुत मजा आया आज स्पोर्ट्स में। अच्छा रहा काफी। आप इतने अच्छे से इवेंट्स करवाते रहे। हाँ, जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी ना कि ये ऑल स्टार जीतेगी, और क्रिकेट में अगर आप मेरी प्रेडिक्शन पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि टीम जीतेगी। इंशाल्लाह आप ग्रेनिच है ना, फिर तो इंशाल्लाह। नहीं चले, थैंक यू सो मच। So we're here with the all-star boys and let's see उनका क्या मैसेज है for Greenwich. Hi guys and congratulations on your win. आप क्या कहना चाहेंगे ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के बारे में? ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसी तरह स्पोर्ट्स के इवेंट चलाते रहें और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का नहीं, बाहर की टीमों को भी चांस दें खेलने का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ फिर थोड़ी कम है। बाहर की टीम्स जो एरिया वाइज हैं उनको भी मौका दे। बाकी ये कीप इट अप, ज़बरदस्त इवेंट। यही है कि ग्रीनिच टूर्नामेंट करवाते रहे, हमारे लिए तो ये बहुत लकी पोर्ट है। दिस इज आवर 4th टूर्नामेंट हियर, तो माशाल्लाह चारों टूर्नामेंट जीते हम लोग। बहुत तो हमारे लिए तो यही है कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे। इट्स गुड फॉर अस एंड गुड फॉर द फुटबॉल।
वही थैंक यू करना चाहेंगे ग्रीनविच यूनिवर्सिटी को ऐसे टूर्नामेंट कराने के लिए, ताकि हमें चांस मिलता है अच्छी बात है खेलने के लिए, क्योंकि मोस्टली अब वर्किंग उसमें आ जाते हैं, सारे काम वाम कर होते हैं, तो इस टाइम पे हमें चांस मिलता है खेलने का, वरना बाकी टूर्नामेंट जो होते हैं वो डे टाइम में होते हैं, चांस नहीं मिलते। ऐसे इवेंट कम होते हैं बहुत कराची में, तो अच्छा है कि इस तरह होते रहें, इस तरह चांस मिलेगा इस तरह हमारे यंगस्टर्स को। बहुत इंजॉय किया यहाँ पे खेल के। That was the message that the All-Star boys had for us. Thank you so much for joining us and we'll see you next. Oh. Special thank you साजिद और आज़म भाई का कि उन लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया हमारे साथ और हमें टाइम का सारा शेड्यूल बताने का और बहुत कोऑपरेटिव रहा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you to the entire management of Greenwich. So I'm here with the Ikra guys and let's see if they have a message for us. So guys, sorry you guys didn't win, but do you have any message for Greenwich University? ग्रेनिच के लिए कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही और पूरा स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इकरा यूनिवर्सिटी आज तक जीती है या कुछ सीख के बाहर हुई है। माशाल्लाह। बस मैसेज यही है कि इट वाज अ ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम द ग्रेनिच ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज फैकल्टी, और सबने हमको बहुत सपोर्ट किया। और बात यही है कि नहीं इस तरीके के अगर टूर्नामेंट्स होते रहेंगे इन द फ्यूचर, तो यानी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी एक अलग एक्टिविटी मिलेगी। और स्पेशली ऑर्गेनाइजर को मैं थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसको, जो हेड्स ऑफ यू गाइस। Spoken like a true captain. हार्ड लक दिस टाइम, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा भी खेलेंगे और ग्रीनविच की तरफ से टूर्नामेंट भी काफ़ी अच्छा था, मज़ा भी आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Yeah, it was a great experience and very well organized. पता चल रहा है आप कितने Well, the hospitality by the management was very good and such events should happen very frequently and we would like to play them next time you guys arrange this event again. It was a very good event, very well organized and we loved the venue as well. It was great, brilliant. मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी, एक तो अनबायस थी और फेयर थी और रेफ भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब एक टूर्नामेंट काफ़ी कराने चाहिए ताकि फिर हम जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट मिले और आगे जाके इंशाल्लाह मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड की तरफ से खेलेंगे। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, मैनेजमेंट बहुत। So that's the message that the Ikra guys had for us. Thank you so much and let's see again. तो हमारे साथ हैं SCC के वाइस प्रेसिडेंट, चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, तो आपको कैसा फील हो रहा है फाइनली फर्स्ट ग्रेनिच का सक्सेसफुल ओलंपियाड आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हाउ डज इट फील? देखिए इसमें काउंसिल का तो अकेले का कोई एक मेजर रोल पूरी यूनिवर्सिटी का है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर से नए बच्चे भी हमने काफ़ी उठाए, तो एक इनिशिएटिव लेना ज़रूरी था इस चीज़ का। जैसे पिछले साल काउंसिल ने MUN का इनिशिएटिव लिया था, इस बार ओलंपियाड का एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो इंशाल्लाह बस उम्मीद हम ये करते हैं हो तो अच्छा रहा है सब। जाहिर सी बात है पहली बार हो रहा है तो थोड़े बहुत फ्लॉज होंगे, लेकिन उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आगे वाली काउंसिल्स भी जो आएंगी वो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। एक लेगेसी हम बनाना चाह रहे हैं इसकी, तो वो इंशाल्लाह बस उम्मीद करते बने। तो सर आपको क्या लगता है कि कितने और साल एटलीस्ट ये लेगेसी चलेगी? देखिए वो आने वाली काउंसिल्स पे डिपेंड करता है, अगले साल किस किस्म के लोग आते हैं। एक अपना पर्सनल मफाद छोड़ के यूनिवर्सिटी के लिए काम करना एक बड़ी चीज़ है और जिम्मेदारी मुश्किल होता है और जिम्मेदारी की चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि अगली काउंसिल अच्छी आए और हम देखेंगे जो कैंडिडेट अच्छे हुए उनको हम खुद सपोर्ट करेंगे। एंड होपफुली हम जूनियर्स आपको प्राउड करेंगे सर। जूनियर्स से देखिए टू बी ऑनेस्ट कोई ख़ास उम्मीद मुझे रहती नहीं है, क्योंकि जो जूनियर्स मैं पिछले 6 सेमेस्टर से देख रहा हूँ तो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। वंस इन अ ब्लू मून सुना है आपने? कभी ना कभी तो होगा सर। वो हो नहीं रहा असल में। वो हम भी उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। हम भी उसी के इंतजार में लगे रहते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं आप लोग। ये मुझे अच्छा लगा आपको देख के कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है काम कर रहे हैं, यहाँ तो लोग 6 सेमेस्टर हो गए कुछ करते नहीं है। तो यही हमारा मकसद यही है, पैशनेट कुछ लोगों में अगर हम एक भी बंदे में पैशन क्रिएट कर पाते हैं, बीट द स्पोर्ट्स मीडिया कुछ भी हो, किसी एक बंदे में भी हम किसी किस्म का पैशन उसका जगा सकें, तो मेरे ख्याल से काउंसिल का मकसद इंशाल्लाह पूरा हो। और सर कोई बुरी बात हमारे प्रेसिडेंट में कोई चुगली करना चाहें आप कर सकते हैं सर, हम नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। प्रेसिडेंट साहब हमारे जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग माशाल्लाह। इसमें चुगली कहाँ थी? चुगली मैं कर नहीं सकता उनकी। मैं सर आपको पता उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बुरा बोला है, अभी बताएंगे दिखाएंगे हम आपको। वो बोल सकते हैं,
वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये लॉयल्टी आपको सिर्फ ग्रेनिच में ही मिल सकती थी। तो हम पे फर्ज है उनकी इज्जत करना। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे मिलकर, एंड यू आर एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। तो ये देखा आपने, हमारे थे वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने प्रेसिडेंट के बर्थडे के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रेसिडेंट से पूछते उन्हें क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे बारे में कोई बोल ही नहीं सकते। ये तो गलत बात है ना सर। कुछ तो हमें पता है, कुछ मिर्च मसाला तो आप हमें भी देना। कुछ मिल ही नहीं सकता। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे आप हम दोनों के बारे में पूछें। आइए सर, आइए सर। शुरू ही शुरू ही बुराई से करिए। नहीं सर, बट ऑन अ सीरियस नोट, ओलंपियाड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओलंपियाड का जैसा सिद्धार्थ ने बताया, एक हमारा इनिशिएटिव था एसडीसी का। एसडीसी ने ये है कि साजिद भी लास्ट एसडीसी में था, उन्होंने एक नया ट्रेंड लाया था एमयूएन का इवेंट से हटकर एक नए इवेंट्स। इस बार भी जो ओलंपियाड हुआ है, ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, और उसमें स्पेशली जो क्रेडिट है वो साजिद बलोच का है, क्योंकि उन्होंने एसडीसी में टॉप पे उन्होंने ही लीड किया है। ओलंपियाड में उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, बाकी इवेंट्स में हम सब मिलकर काम करते हैं, हमारा बराबर का होता है, मगर इसमें जो है इन्होंने कुछ ज़्यादा लीड किया है, और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि ज़बरदस्त जो इसकी सक्सेस है, उनका क्रेडिट इनको ज़्यादा पूरी एसडीसी के अलावा समेत। उसके अलावा स्टूडेंट्स का जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी हम थैंक यू करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतने ज़बरदस्त नंबर में पार्टिसिपेट किया। सो ये है, दैट्स इट। Thank you so much, sir. आप लोगों की वजह से all of this has been possible, and hope to see you around, sir. Thank you, sir. That was a very exciting day with a lot of different events and a lot of different activities. आपने देखा कि कैसे एक टीम हारी तो एक टीम जीती। अफसोस की बात है, but that's what we call the sportsman spirit. तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम हर दफा लाएंगे आपके लिए नई एक्टिविटी। एंड अगेन congratulations to Greenwich for having its first Olympiad. तो बने रहिएगा। See you guys soon and see you next time. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है।
इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूँ ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूँ जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions and this is your host Umar Khan and I'm back again. आज के दिन में ही दूसरी बार डबल ट्रबल के लिए हम आ गए हैं और ये पहला हमारा सेशन है जो कि पोस्ट मिडनाइट होने वाला है एंड दिस इज फन फिल्ड कॉन्वर्सेशन। बहुत ही इंटरटेनिंग सेशन होने वाला है और इसीलिए हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनर हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल साइड उनकी है और ये सारे मिक्सचर्स आज के प्रोग्राम में हम देखने वाले। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारे आज के गेस्ट को। हसन बिन शाहीन हमारे आज के गेस्ट हैं। हु इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बड़े ही जबरदस्त डिबेटर हैं, कंसल्टेंट हैं, एक ह्यूमरिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडी बड़ी बेहतरीन करते हैं, इंटरनेशनली ट्रेन्ड परफॉर्मर हैं, उर्दू की रैपिंग भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं जो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सो वेलकम टू द शो हसन, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उमर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका पहला रात का सेशन मेरे साथ हुआ है। आमतौर पे शुरफा को इस टाइम पर बुलाया नहीं जाता, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हम लोग मतलब ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए तमीज के दायरे में रहकर बातें करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये शर्फ मुझे बख्शा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बड़ी इबादत की रात है, सारे शैतान मन ने, फिर भी हम दोनों बाहर निकले हुए और आजाद घूम रहे हैं। But moreover, you have a very intellectual side as well. You've done your law from UK और बड़ी एक सीरियस सोबर फील्ड है लॉ की। तो लॉ को कॉमेडी से आपने कैसे कनेक्ट किया? इसलिए तो अब मैं लॉ नहीं करता। सही सारा ये मैंने असल में आसान लॉ में आजकल मजाक ही बना हुआ है।
हाँ, आजकल आपको पता है उमर, मतलब कि मुझसे इतने सारे लोगों ने बोला कि आप लॉ करते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, आप जज के सामने भी स्टैंड अप कॉमेडी करते होंगे। लेकिन मैंने कहा कि यार मसला सा ये होता है कि जज के सामने बोलने का मौका मिले तो बात हो ना। एक एक केस इतना अरसा चलता है कि मैंने जो है ना फिर लॉ से ब्रेक ले लिया। मेरा ज्यादातर फोकस टीचिंग की तरफ है, कंसल्टिंग की तरफ है। उन्हीं स्किल्स को मैंने कहा कि टाइमली तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब ज्यादा फायदा यही होता है कंसल्टिंग और ट्रेनिंग का कि थोड़ी बहुत मस्तियां वहां कर सकते हैं। लॉ के अंदर तो जर्रा बराबर भी आपको स्पेस नहीं होती मजाक करने की। सर बताएं, कभी कोर्ट के अंदर होते हुए कानों में आवाज गूंजी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? यार आपको अगर असल में सीन सारा ये है, अगर हम कर नहीं सकते ना ऐसी बातें, क्योंकि हम छोटे छोटे लेवल के लॉयर्स हैं। आप अगर 40-50 साल की हो जाओ तो फिर आप इस तरह की मस्तियां पुल ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब शुरुआत होती है किसी प्रोफेशन की तो आपको थोड़ा समझ समझ के खेलना पड़ता है। आप पहले दिन ऊपर ऊपर से आप आओगे तो आप असल में आपको पहले दिन ही जो है ना, अगर आप न्यू लॉयर है ना तो बाकी दूसरे लॉयर्स आपको सूंघ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाई कि इसमें जो है ना बहुत इसको हीरोपंती का शौक है, तो आपको पहले दिन ही सीधा कर देते हैं वो लोग। हमने बड़े लॉ से रिलेटेड मूवीज देखी हैं, बड़ी ह्यूमरस मूवीज देखी हैं, पाकिस्तान में भी, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी। जॉली एलएलबी आई, पाकिस्तान में एक्टर इन लॉ आई। मतलब वो देख के एक आम आवाम का जो कोर्ट का सेंस है वो कुछ और ही है। असली सिनेरियो तो वहाँ कोई और ही होता है। बिल्कुल यार वो आप खुद मीडिया वाले हैं, दूर से लोगों को लगता होता है कि उफ मीडिया की क्या लाइफ है, क्या मजे हैं, लेकिन हकीकतें तो आपको ही पता है कि क्या हो रहा होता है। तो लॉ का एग्जैक्टली वही सीन है। दूर से लगता है शशके हैं, भरम है, आप पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो आप आगे से चौड़े कॉकी चल रहे हो, आप बोलते हो वकील हूं मैं, तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मसला यही होता है कि कोर्ट के बाहर आपके भरम है, कोर्ट के अंदर आप कोई भी नहीं हो। कोर्ट के अंदर जो है ना आप बिल्कुल औकात में रहते हो, वही छोले और 2 चाय पीते हो और आप चुपचाप बैठते हो, जज से भीख मांगते का टाइम मिल जाए थोड़ा सा। राइट, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल आपके अगर प्रोफेशन की बात करें तो जब आप लॉ के लिए यूके गए तो लॉ करने के साथ साथ आपने कॉमेडी की प्रॉपर क्लासेस भी अटेंड की, तो वो सारा सिलसिला किस तरह से बना? यार असल में अब मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी ने किस किस्म के क्या कहते हैं करवटें ली हैं। तो सिलसिला कुछ ऐसा बना कि बचपन से मेरा एक शौक था, एक ही मेरी ख्वाहिश थी किसी तरीके से कि मैं अंग्रेज बन जाऊं। बस मैंने कहा था कि जब तक आप फूफा वाली इंग्लिश नहीं बोलोगे ना तब तक आप कूल नहीं होगे। तो इस चक्कर में हम इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में लगा कि फुल मुश्किल इंग्लिश बोलेंगे तो सब कहेंगे वाओ ही इज सो अमेजिंग। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द यूके आई रियलाइज कि एक्चुअली मेरे को इस चीज का फर्क पड़ता नहीं है। मेरे जो पूरे इंप्रेशन बना हुआ था ना, मुझे बस यही लगता था किसी तरीके से बस मैं बाउंटी बन जाऊं कि ब्राउन ऑन द आउटसाइड व्हाइट ऑन द इनसाइड। और वहां जब मैं गया तो मैंने कहा किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी को फर्क पड़ता नहीं है कि आप गोरे हो, आप काले हो, ये हो, जो भी हो, आप बस एक नॉर्मल इंसान हो तो मजा आता है। तो मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वहां पे कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहां पर एक खातून जो सारी जिंदगी इंग्लिस्तान में रही, वो गोरी गोरी खातून थी, मुझसे आके पूछती हैं कि क्या पाकिस्तान मेरा मजहब है, इस पाकिस्तान योर रिलीजन। और दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा ये कि आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, इज इट बिकॉज आपके ग्रैंडफादर यूके के थे? एंड आई एम जस्ट लाइक ये आप किस तरह, मतलब अजीब अजीब। एंड देन आई वाज लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर इफ यू आर व्हाइट, इफ यू आर ब्राउन, इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड, तो आपको जो करना है करें। तो इस ट्रेन ऑफ थॉट को लेते हुए मैं जहां रहता था तो उसकी गली के पीछे कॉमेडी की क्लासेस होती थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। उससे पहले मैं लॉल वाले कॉमेडी ग्रुप है तो उसका भी हिस्सा था। तो वहां कराची से मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रोव और कॉमेडी की भी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब पैसे देकर ये काम सीखते हैं। तो फिर पैसे देकर ये काम सीखा, तो ना शोहरत मिली, बस पैसे ही जेब से गए। बस ये अच्छा कि पैशन है। आई रियली एंजॉय डूइंग कॉमेडी। आपस की बात है, हम बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हुए चलते फिरते हमारी जिंदगी कॉमेडी है, तो लाइफ में कॉमेडी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। मतलब हम पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। अगर आप देखें कि हम मीम्स बड़े अच्छे बनाते हैं, कोई और सिचुएशन आती है हम उसको वी सी द फन साइड ऑफ इट। फॉर एग्जांपल जब नीलोफर का साइक्लोन आया, दुनिया दुआएं कर रही है, मुसल्ले पे बैठी है और दुआएं चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम हमारी समुद्र के अंदर उतर गई कि नीलोफर किधर है। तो मतलब काइंड ऑफ पीपल। अब कोरोना का टाइम हुआ, कोरोना पे लोग कह रहे हैं जी घर में रहें, सेफ रहें, हाथ धोएं, लेकिन लोगों ने ये बना लिया नहीं कोरोना जो है स्पेसिफिक दिन में स्पेसिफिक टाइम में आता है, ये लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया। बाहर निकल रहे हैं, मिल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये सीन है कि कोरोना के ऊपर पकोड़े बना लिए जी, कोरोना पे गाने बना लिए, कोरोना पे चीजें कर ली। तो हमारी अवाम बाय बर्थ बड़ी एक ह्यूमरस अवाम है।
यार हमारी आवाम ह्यूमरस आवाम इसलिए कि अगर ह्यूमर ना हो तो फिर तो डिप्रेशन में ही रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टू कवर इट अप वगैरह। अब देखें दुनिया भर के अंदर लोग कोरोना से मर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोरोना तुम आओ, तो तुम आओ, हम तुम्हें बताते हैं। हमें देखिए पाकिस्तानी आवाम को मरने से तो डर लगता नहीं है, सही है। आप पाकिस्तानी आवाम की बात सुन ले, बचपन से आप बूढ़े हो गए, बाल चले गए, मतलब आप कभी ना कभी पाकिस्तान में कब वबा नहीं आई, आप मुझे बताओ। मैट्रिक का टाइम था, क्या व्हाइट करोला के अंदर बच्चे किडनैप, और बचपन का टाइम था हथौड़ा गैंग और चड्डा ग्रुप घूमते थे, आपको शायद याद हो, याद है आपको ये कि हथौड़ा चड्डा ग्रुप की ये थी कि वो, हाँ कुछ ना कुछ हमेशा हैपनिंग रहती है। बट मोर ओवर इसके अंदर एक चीज ये भी है कि हमारी आवाम, यू नेवर नो, एक मजेदार साइड भी है, एक सीरियस साइड भी है, बट दैट्स हाउ थिंग्स गोज एक्चुअली। मतलब एग्जैक्टली ना, हमारा what I love about being a Pakistani is कि there's something is always happening. For example, for the Western world, कोरोना is the most exciting thing that has happened there, right? Mostly तो क्या हो रहा था कि वो यहाँ पे बमबारी कर रहे होते हैं। अंग्रेजों का क्या होता है, जब वो बोर हो रहे होते हैं तो चलो कहते हैं चलो अफगानिस्तान से तेल ले लेते हैं, पाकिस्तान पे ड्रोन भेज देते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट वहां पर होती रहती है, हम तो भुगत रहे होते हैं। लेकिन वहां पर पहली दफा ये चीज हो रही है तो उनकी हालत खराब है, हम चिलिंग में, हमारे यहाँ हर हफ्ते हो रहा होता है, हर हफ्ते पुप्पी के लड़के को क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, मेरा मोबाइल चोरी हुआ नॉर्मल बात है आपके लिए। मतलब आप किसी अंग्रेज को बोलो कि यार मेरा मगिंग हुई, वो फुल उनको पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम है, हम उसे कहते हैं हम पीर की रात, जैसे हम पीर की रात कहते हैं उनके लिए पीटीएसडी है। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट पाकिस्तान, देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ रहता है। तो आप मुझे बताएं, हाउ हैव यू बीन स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम इन कोविड? क्योंकि जाहिर है जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव लोग होते हैं, दे लव देयर स्पेस, दे लव देयर अलोन टाइम। तो इस टाइम पीरियड में आपने क्या दरियाफ्त किया अपने बारे में? यार मैं तो शैतानी कामों में लगा हुआ हूँ, और बाय दैट आई मीन कि आई एम लर्निंग म्यूजिक, और ये भी हो रहा है कि मैं अपना थोड़ा यूट्यूब वगैरह के मामलात को सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि एज पाकिस्तानी कमेडियंस, हम जितने भी कमेडियंस, हमको एक चीज का अंदाजा हुआ कि अगर हम लोग यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन पे नहीं आएंगे तो हम लोग फिर कॉमेडी कर नहीं सकते। पाकिस्तान की असल में मार्केट रियलिटीज ऐसी हैं कि शोज पर लोगों को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो अब हम लोग जितने भी लोग हैं, जिसमें से मैं खुद एक शामिल हूँ, हम लोग अपना ऑनलाइन कंटेंट वगैरह बनाने पे काम कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी एडिटिंग वगैरह सीखी, मैंने फिर क्या कहते हैं अपना म्यूजिक वगैरह बजाना सीख रहा हूँ, ये तो क्रिएटिवली चल रहा है। उसके अलावा मेरे अपने टीचिंग और ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो मतलब को मसरूफ रखा है मैंने। तो थोड़ा सा टाइम इम्पोर्टेंट सवाल हसन ये आता है कि एक जगह यू डू दिस स्टैंड अप कॉमेडीज आउट ऑफ पैशन बिकॉज यू लव टू डू इट, एंड ऑन द अदर साइड यू ट्रेनिंग पीपल, एक बड़े सीरियस चीज है वेयर आप करियर डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, स्किल मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइंस भी दे रहे हैं। तो एक जगह एक कॉमेडियन की प्रोफाइल और एक जगह ये सीरियस मेंटोर की प्रोफाइल, हाउ डू यू कैरी इट टुगेदर? यार बैडली तो मुझे पर्सनली, मुझे जो अपने बारे में एक चीज का अंदाजा हुआ है ना, मुझे असल में बहुत सारी चीजें करने का शौक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि मैं मस्खरा हूँ, मैं चोरी बातें कर रहा हूँ, तो वो उनकी मर्जी है। अगर लोगों को लगता है कि अच्छा मैं बहुत सीरियस बातें कर रहा हूँ, उनकी मर्जी है। मेरा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक पर्सनल फिलॉसफी ये है कि मुझे लगता है कि आई एम ऑन मल्टीपल क्वेस्ट्स, मैं बहुत सारी चीजों को एक ही टाइम पर करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे जिस चीज की खुशी है वो यही है कि एक टाइम पे मैं रैप को भी परसू कर रहा हूँ, मैं कॉमेडी को भी परसू कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, वक्तन फवक्तन लॉ भी कर लेता हूँ हालात के मुनासिबत को देखकर। तो मैं अपनी एक ऐसी पर्सनली मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं इन तमाम इंटरेस्ट को सही तरीके से जस्टिस दे सकूं। और बस मैं कोशिश ही है, बस मैं ये कहता हूँ जिसको जो समझना है समझे यार। मतलब कि जिसको छिचोरा समझना है छिचोरा समझे, जिसको कूल समझना है कूल समझे। हम तो यही ऐसे, जब इंसान के बाल जल्दी गिर जाते हैं ना उम्र में, तो उसकी बर्दाश्त करने की ज़र्फ बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है ना, मुझे लोगों की जजमेंट और ओपिनियन से फर्क पड़ता नहीं है। तो आई ट्राई टू डू जस्टिस टू व्हाटएवर आई एम डूइंग एट एनी गिवन डे। And that's the best thing to do because जो दुनिया में I believe सबसे बड़ी स्टॉपेज है ना ग्रोथ की, वो होती है ये कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की ओपिनियंस। So I think that's the most wonderful thing to do कि you believe in yourself, you move on towards your goals, what makes you happy, and as long as आप productive काम कर रहे हैं, you're serving back to the society, you're not causing harm to anyone, I think that's a brilliant thing to do. And moreover मेरे हिसाब से I believe it's the most difficult and at the same time most noble thing to do कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, because life is so full of stress, depression, frustration,
and then people like you who come up with stuff and content जिससे लोगों का मूड बेहतर होता है, चीजें अच्छी होती हैं. I think that is something very nice to do. और अगर आप हिस्ट्री को देख के हैं तो चार्ली चैपलिन और बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स रहे हैं जो बेसिकली हैं ही कॉमेडियंस लाइक, और उन्होंने चार्ली चैपलिन तो ही वाज अ लेजेंड, बगैर कुछ बोले दुनिया को हंसाते चले गए और एक बेंचमार्क सेट किया उन्होंने. पॉइंट इज दिस कि जो कॉमेडियंस को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट साइड ऑफ द स्टोरी. यार पाकिस्तान के अंदर जो मुझे एक चीज पता है ना, पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशन से ज्यादा लोग सक्सेस को रिस्पेक्ट देते हैं. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर समबडी हु reaches a particular level of success, or in this day and age it's based on the number of fans you have, the number of likes you have on your Facebook. अगर आपको वो critical point मिल जाता है then people automatically respect it, which I think is also fine. क्योंकि मतलब मुझे जो एक चीज समझ आती है ना वो यही है कि कोई आपको रिस्पेक्ट क्यों देगा. मतलब कि किसी को अगर एक बंदा है डॉक्टर है, उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी, वो मुझे लगता है डॉक्टर सही मायने में बहुत नोबल काम कर रहे हैं. सही है, इंजीनियर्स का मुझे पता नहीं है वो नोबल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन डॉक्टर सही मायने में नोबल काम कर रहे हैं. आपको रिस्पेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्क यू डू एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क विच यू आर एबल टू ब्रिंग आउट, राइट. वरना तो एंड मुझे पर्सनली यही लगता है कि इफ हमारा काम जिस दिन उस लेवल पर पहुंचेगा, जिस लेवल पर हमें पजीराई मिलनी होगी, हमें उस दिन पजीराई मिल जाएगी. कोई ये थोड़ी लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है कि कमेडियन है तो रिस्पेक्ट दी जाएगा. हमारा काम अच्छा होगा और रेगुलर होगा और उसको हम सही तरह कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हमें वो भी मिलेगी. इंडिया के कॉमिक्स के अंदर इससे भी, और एक इशू तो है, सीधी सी बात है कि एक तो ये वाला एस्पेक्ट है, तो ये तो माय वे ऑफ डीलिंग विद इट. दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर कामयाब भी हो जाओ ना तो लोग यही कहेंगे कि आप बेगैरत है, सही नहीं है. मतलब कि अमान उल्लाह साहब जो थे मशहूर जमाना कमेडियन, जब उनकी डेथ हुई आपको पता होगा ये कि उनको उनकी हाउसिंग सोसाइटी वालों ने दफनाने की जगह नहीं दी. आपको पता है ये बात? पूरी कंट्रोवर्सी. तो ये मुझे लगता है कि इसको हम कहते हैं जलालत के जुमरे में आ जाना. तो ये थोड़ा गलत है. ये मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्टफुल है कि आप लोगों को उनके प्रोफेशन से जज कर रहे हैं, उनकी इंसानियत से उनको नहीं देख रहे हैं. लेकिन जिसको रिस्पेक्ट भी मिल जाती है तो उसकी भी इज्जत किसकी है इस मुल्क में, आप मुझे बताएं. हाँ, जो लोग क्या कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस है उन पर मीम्स बन रही होती है, इज्जत किसकी है? कोई एक शख्स बताए जिसकी इज्जत है. इरफान जुनेजो की इज्जत है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है इरफान जुनेजो. हाँ, जुनेजो भाई की इज्जत है. आई लव जुनेजो. He was also a target and sadly he had to leave his work as well. So that's the कमबैक किया जुनेजो ने और तबाही मचा दी. हाँ, डेफिनेटली. बट देखिए, देयर इज एन आयरनी टू एवरीथिंग. जो भाई कनेक्टिंग टू योर ओल्ड थिंग दैट यू वर सेइंग कि जो लोग कहते हैं और लोगों के ओपिनियंस के ऊपर अपने आपको टैलेंट, पोटेंशियल और पैशन को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए. आपने इंडिया का जिक्र किया. वी हैव सीन दैट स्टैंड अप कॉमेडी वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से देखी जाती है, फॉलो की जाती है, एंड द नंबर ऑफ व्यूज एंड द ऑडियंस और जो उनके स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, आई कैन नेम अ लॉट, जिसमें जाकिर खान है, अभिषेक मन्यू है, बहुत बेताशा नाम है. द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. What can Pakistan do, to raise their levels and raise the awareness? क्योंकि देखिए यहाँ कंटेंट है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कंटेंट नहीं है यार. पाकिस्तान अपनी आबादी 1 अरब अगर कर लेना तो मजाक से हटके, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर जो कंटेंट है अमेजिंग, they're doing an amazing job. लेकिन वहां पर आप ये देखें ना कि वहां की आबादी चूंकि हमसे 10 गुना ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ व्यूज दैट they're getting is going to be much higher as well. मैं किसी और बंदे से ये बात कर रहा था आज कि वहां पर पुणे जैसे शहर के अंदर एक कमेडियन फुल टाइम काम कर सकता है और सरवाइव कर सकता है. यहाँ पर कराची जैसे शहर के अंदर कमेडियंस को वकालत करनी पड़ रही है, इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, मॉर्निंग शोज करने पड़ रहे हैं. तो असल में हमारा चैलेंज ही यही है ना कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वहां पे उनके पास नेटफ्लिक्स है, उनके पास अमेजॉन है, उनकी आबादी है, वहाँ पे पूरा मार्केट है. तो यहाँ पे चूंकि टैलेंट की कमी नहीं है, मार्केट की कमी है. अगर आप पाकिस्तानी कमेडियंस को देखें जाकर, मैं तो अपने आपको कमेडियन कहता भी नहीं, मतलब अपने आपको कंटेंट क्रिएटर कहता हूँ, रैपर कहता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस उस पर है. लेकिन अगर आप टॉप कमेडियंस देखें पाकिस्तान के, ताबिश हाशमी हो गए, मलिक जुनैद हो गए, अकबर चौधरी हो गए, अली अब्दुल्ला हो गए, कुमैल हो गए, अगर आप इनको जाकर देखें तो you'll realize कि फायजा सलीम हो गई. फायजा सलीम is also somebody who does amazing content but does amazing stand up as well. तो the point is कि हम लोगों को इतना पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी, क्योंकि इंडिया के नंबर्स और इतनी बड़ी मार्केट है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम पाकिस्तानियों को वो शो कर रहा होता है, लेकिन हमारी मार्केट ही इतनी बड़ी नहीं है.
लेकिन आप कंटेंट वाइज अगर आप जेडी और ताबिश भाई का कंटेंट देखें, आई थिंक इट्स बेटर देन इंडियन कॉमिक्स। एक और बात करते हैं, थोड़ी इसकी डेप्थ में जाते हैं क्योंकि टॉपिक हुआ है शुरू। तो ये डिजिटल अभी आया, ये सारा स्टैंड अप कॉमेडियन ऑन यूट्यूब अभी शुरू हुआ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह अगर आप पूरे एशिया में कहें, ये सिलसिला शुरू वो हमारे उमर शरीफ साहब है। आज भी अगर मैं आई वोंट बी रॉन्ग के वहां पे आज जो सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज शो चल रहा है वो आज भी उमर शरीफ के जोक्स के ऊपर ही चल रहा है। कितने लोग उमर शरीफ के जोक से बन गए, नॉट इन पाकिस्तान, इवन आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ बेहतरीन लोग नहीं थे, एक लेजेंड थे उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद की राइटिंग्स जो सीरियस कॉमेडी वो करते थे और जिस अंदाज से वो लिखते थे कि एक बंदा फैमिली के साथ बैठ के भी अडल्ट कॉमेडी आराम से देख सकता था। दिस वाज द लेवल ऑफ राइटिंग एंड द लेवल वी सेट व्हेन वी लुक एट अस टुडे। तो आज हमारा क्या है जी, कान में चीख रहे हैं, पीछे से बाजे बजा रहे हैं, दिस इज द कंटेंट वी आर क्रिएटिंग, टिकटॉक पे नाच रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे पर्सनली, आपने टिकटॉक का जिक्र किया, मुझे लगता है कि ज्यादा टीवी पर होता है, क्योंकि टीवी के अंदर जो थोड़ा सा चैलेंज होता है ना कि टीवी के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर है उसके पास कंट्रोल नहीं होता, प्रोड्यूसर और एडिटर के पास सारा कंट्रोल होता है। जिनको लगता है हम बोलेंगे डोइंग पोइंग पोचो पोचो पोचो, तो ये जो इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स दे देंगे तो फनी हो जाएगा। तो उसमें अगर द रियल चैलेंज है कि जो कॉमेडियंस और जो लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं ना, उनके पास पावर नहीं है ना, उनके पास रिसोर्सेज है टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ टेलीविजन। उस जमाने में मेरे ख्याल से स्पेस थी। अभी मसला सारा क्या है कि अभी जिन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, जो टीवी प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद कंटेंट अनलेस इट्स लाइक कि वो कहते हैं कि नहीं, ये वो स्पेस ही नहीं देते कि आप एक्सपेरिमेंट करो, वो स्पेस ही नहीं देते कि आप कोई फनी चीज बनाओ। और मसला क्या है कि जो फिर बाकी कॉमेडियंस हैं, उन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती कि हम खुद कंटेंट बनाएं। लेकिन अब देखिएगा कि अभी आप मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन है अलबत्ता कि हम लोगों ने भी क्या कहते हैं बहुत सारी चीजों से, गलतियों से सीखा यही है कि अब हमें यूट्यूब वगैरह पर अपनी प्रेजेंस करनी है। तो आप देखेंगे कि कराची पाकिस्तान के जो कॉमेडियंस हैं या कॉमेडिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनका एक वो उरूज आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ, ताबिश हाशमी, मलिक जुनैद, अकबर चौधरी, अली अब्दुल्ला, अगर आप इनके कंटेंट को फॉलो करें, अभी रिसेंटली इन लोगों ने अपना रेगुलरली चीजें लगाना शुरू की हैं और इनके माशाल्लाह से बड़ा तबाहकुन परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। और मैं तो रैपर हूँ, मैं तो कॉमेडी करता ही नहीं, मैं तो रैपर हूँ, मैं तो रैप करता हूँ, तो इसलिए मुझसे आप मुझे क्या पता कॉमेडी का। That's absolutely right. लेकिन देखिए एक चीज और है, जहाँ पे हम अपने आप को लिमिट करते हैं इस बात से कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमारे नंबर्स, अवाम की पॉपुलेशन इतनी है। पाकिस्तान स्टिल इज द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, स्टैंड बाय दैट अलोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप यूट्यूब पे आते हो तो आप सॉरी एक और भी बात, यूट्यूब 6 साल बंद भी तो था यहाँ पर। आप ये देखें ना, इंडिया की जो पूरी ऑडियंस थी, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें बंद है, जो करना होता है इंसान को वो कर लेता है। नहीं ये तो गलत बात है, तो आप बिल्कुल रैंडम बात कर रहे हैं ना कि कुछ, ये तो अगर एक बंदा है उसके ऊपर आपने मुश्किलात लाद दी हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते उस बंदे से जिसकी जिंदगी में मुश्किलात ही ना हो ना। आप भी इसी शहर में पले बड़े हैं, मैं भी इस मुल्क में शहर में पला बड़ा हूँ। हमारे वहाँ हमारी साइंस ये है कि जिस चीज पे बैन लगा होता है ना, इंसान को करना वही होता है। अब बाहर निकलने पे बैन लगा है, बाहर निकलना है। अगर ये चित्रौल भी तो पड़ती है ना उसकी, देखो उसका अलग एंजॉयमेंट है लोगों को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर आवाम ना, जो चीज मना करेंगे, जो चीज मना करेंगे, ये चीज नहीं करनी है, वही चीज वाजिब है करना। नहीं आप सही कह रहे हैं। मुझे लेकिन पर्सनली विद रिगार्ड्स टू कॉमेडी, मुझे इस चीज का अलबत्ता पूरा यकीन है कि कुछ हमारी कोताही भी है, और हमारी जो प्राइमरी कोताही है वो यही है कि हम लोगों ने डिजिटल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। इसी वजह से हमारा कॉमेडी का सीन जो है थोड़ा सा स्टंटेड है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि द रीजन वाई हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इज बिकॉज कि इंडिया के अंदर आप क्रिएटिव काम भी करोगे तो उसका आपको कुछ फाइनेंशियल आउटपुट चाहिए ना। हम बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा रिटर्न, बंदा कब तक कॉमेडी करता रहे और उसका आउटपुट ना हो तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्केट की भी रियलिटीज थी, थोड़ी हमारी भी कोताही थी। लेकिन आप देखो उमर भाई, हम आ रहे हैं मार्केट में बॉस, हम ला रहे हैं माल मवाद, गिराए जा रहे हैं। मैं नाम दोबारा दे रहा हूँ, जेडी, ताबिश हाशमी, अकबर चौधरी, उस्मान मजहर और अली अब्दुल्ला। आप इनका कंटेंट तो चेक करो, ये लोग इट इज इंडीड। और देखिए मेरे हिसाब से कॉमेडी इज जस्ट नॉट कॉमेडी, बिटवीन लाइंस बहुत से साइलेंट मैसेजेस और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी होते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। क्योंकि देखिए बहुत से सीरियस इश्यूज लाइफ के होते हैं जिनके ऊपर आप ओपनली बात नहीं करते, बट आई हैव सीन मेनी कॉमेडियंस मेकिंग फन आउट ऑफ इट, और लाइफ की हार्श रियलिटीज को हंसते खेलते वो जिस तरह एक साइलेंट मैसेज दे देते हैं,
I think that's like the most beautiful and strongest medium that content writers like you and others they do. Because हमारी आवाम का यही है, जब अगर मैं आपको बैठ के समझाऊं बड़ी सीरियसली कि भाई ये चीज है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं सुनेंगे। यही चीज मैं अगर बहुत मस्ती में, एंटरटेनमेंट में, तफरी में, कॉमेडी के वे में लाऊंगा तो उसको अडैप्ट भी करेंगे, समझेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लाइक इफ आई से क्लिफ के ऊपर से कूद जाओ, कोई भी नहीं कूदेगा। इफ आई हैशटैग इट jump off the cliff challenge, everybody will start jumping. So this is the people we live around, and I'm not pointing fingers. अच्छा, मुझे पर्सनली एक चीज का अंदाजा हुआ है ना कि कॉमेडी एज अ मीडियम फॉर सोशल चेंज को जो है ना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कॉमेडी सोशल चेंज के लिए नहीं है। मतलब मुझे लगता है उससे बेहतर रैप है। मैं चूंकि दोनों कम्युनिटीज का करीबी हिस्सा रहा हूं, तो मुझे अंदाजा हुआ कि कॉमेडी के अंदर जो है ना मोस्टली एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, और कभी कभी आप वो तल्ख हकीकतों को बयान कर देते हैं जिससे लोगों के अंदर आप वो सोच उजागर करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि हाँ अब मैं सुधरना चाहता हूँ, अब मैं वो गलतियां नहीं करना चाहता हूँ माँ। लेकिन रैप जो है ना मुझे लगता है कि एक ज्यादा बेहतर मीडियम है अगर आप लोगों को सोशल मैसेजेस देना चाहते हैं। आई फील लाइक कि वो ज्यादा एक इफेक्टिव और हार्ड हिटिंग तरीका है। देखिए, रैप को तो जो आपने जिक्र किया, आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो रैप की बेस के ऊपर रेवोल्यूशन हुई है पूरी। रैप की बेस पे पूरे कह सकते हैं ना कि कैंपेन्स चली हैं सिर्फ एक गानों की लिरिक्स पे। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं पर्सनली रैप की अगर बात करें तो टूपाक वाज द किंग ऑफ रैप। आज तक लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि उस लेवल को मैच कर सकें। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, हमने देखा जी, आपने बड़ा जबरदस्त 9 से 5 आपका बड़ा जबरदस्त रैप आया, उसके अंदर आपने बड़े तरीके से दिखाया कि जी किस तरह से एक 9 से 5 की लाइफ रहती है ऑफिस की। हमने देखा कि और हमारे पास एक बलूची रैपर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। लियारी के कुछ बॉयज थे, उन्होंने बड़ी अच्छी रैप। यंगस्टर्स आए हैं और बहुत से बीच के अंदर लोग आए। तो देखिए पोटेंशियल है। इनफैक्ट बोहेमिया भी जो आज इतने बड़े वो भी हमारी डिगरोड से ही है। तो ऑल्दो हम यूपी के, लेकिन है तो वो डिगरोड के ही। बोहेमिया डिगरोड के आपको नहीं पता? नहीं, ये नहीं पता था मुझे, ड्रिग रोड का नहीं पता था। ये तो फिर अपने हो गए, अपने इलाके के हो गए। अपने बॉय है भाई, बोहेमिया अपने बॉय है। तो he has roots from there, and the thing is कि आपके पास पोटेंशियल है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि रैप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। कुछ हम मैसेजेस भी शामिल करेंगे जी। हमारे अजीज फराज इकबाल हमें देख रहे हैं एट दिस टाइम, इबादत की रात है स्टिल काइंड इनफ कि जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं जी ह्यूज फैन। फराज इकबाल तो हमारे दोस्त है ना, तभी ह्यूज फैन है। हम भी आपके ह्यूज फैन है फराज भाई, सच बोले। इबादत की रात पे तो झूठ नहीं बोले, हमारे ताल्लुकात है। यहाँ पर भी जो है ना हम लोग पाकिस्तानी जो है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। फराज भाई, फराज आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फराज भाई ने तो हमारा इंटरव्यू सेट किया है, अब आज ह्यूज फैन कह रहे हैं। ह्यूज फैन है तभी तो सेट किया है। नहीं, मैं फराज भाई का आप उमर, मेरी आपसे ही बात हो रही थी इस बारे में। फराज भाई के हम ह्यूज फैन है। कितने तबाह कौन सिनेमाटोग्राफर है ये, नो डाउट। और इनकी सबसे खूबसूरत बात बताऊं कि जितना वो अच्छा काम करते हैं उतना ही अच्छा वो अपना काम पास ऑन करते हैं। ये स्किल बहुत कम लोगों में होती है कि वो अपना हुनर आगे पास ऑन करें, और बड़ी दिल से करें कि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट उनसे भी बेहतर काम करें। वो चाहते हैं उस्तादों के उस्ताद, ये कायदे उस्ताद। ये दिस इज द वन थिंग दैट वी लैक इन आवर कंट्री एंड इन आवर सोसाइटी, कि लोगों के पास जो हुनर होता है वो उसको पास ऑन नहीं करते हैं। फराज इकबाल इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो अपने हुनर को बिल्कुल आगे करते हैं। खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, और बाशऊर भी है, और बासलाहियत भी। मतलब ऐसे कम पाकिस्तानी होते हैं। इंडीड। अब हसन थोड़ा सा रैप की तरफ आते हैं। कुछ कोरोना की सिचुएशन चल रही है, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। बहुत से बच्चों ने जो है टू टेक इट टू अ लाइटर साइड तस्वीर लगा के चले जाते हैं आगे, और बहुत सी चीजें हो रही हैं अराउंड पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है हम फनकार लोग हैं, फनकारियां करते हैं। कुछ एक कोई रैप हो जाए हमारी स्टूडेंट्स के लिए, किस ऑनलाइन क्लासेस को लेके, कोरोना को लेके। मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपना कंप्यूटर पे कोई रैप की बीट लगाता हूं, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसकी इजाजत देंगे? नहीं, बिल्कुल। तब तक आप मुझसे जरा बातें तो करें, तो मैं जरा अपनी तकनीकी डिफिकल्टीज को हल करूं। राइट। तो बेसिकली हसन के बारे में जो लोग हमारे साथ ट्यून इन है और लेटर ऑन ट्यून इन करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट पे भी ये सारा सीन दिखेंगे। तो हसन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बाय प्रोफेशन ही इज अ लॉयर, और लॉयर होने के साथ साथ उनका पैशन है कॉमेडी का। ये आज का जो हमारा सेशन है वो बताने के लिए है कि कॉमेडी
सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्टेज पे आए, आपने लोगों को हंसाया एंड आप चले गए. It's much deeper than that. The deeper side of the story is, for example, आज मैं डिप्रेशन में बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जिंदगी में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है. इस पीपल लाइक हसान एंड अदर्स जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इनकी कोई वीडियो देखी एंड आई लाफ ऑन इट. मेरा मूड अच्छा हो जाता है. आई गेट मोर होप इन लाइफ. तो जहाँ पे हम मस्करों को मस्करा बोल के इनका मजाक उड़ाते हैं, वहीं पे आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है कि किसी को बेलौस तरीके से हंसाना. हमने हिस्ट्री में पास्ट में बड़ी मूवीज देखी हैं. इस हिसाब से जोकर के ऊपर मूवी बनती है कि और एक मूवी था जिसका एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि मैं सबको हंसाता हूँ लेकिन मेरे आंसू कोई नहीं देखता. दैट वाज वेरी डीप. और बात वही होती है कि वन हु कैन अंडरस्टैंड पेन is the one who spreads smiles around. So I think it is the most wonderful things to do कि आप अगर smile spread कर सकते हैं. And Hassan is one of the few people who is serving the cause, जो कि एक lawyer होने के बावजूद, एक intellectual होने के बावजूद, एक trainer होने के बावजूद out of passion comedy करते हैं और लोगों को हंसाते हैं. And he's an internationally trained comedian as well. तो ये बहुत बड़ी बात है. आई बिलीव हसन बीट के साथ रेडी हो चुके हैं. उमर मुझे लगता नहीं है. हेलो. हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ. उमर मुझे लगता है मुझे सादा खुशबू आना पड़ेगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने जो है ना अभी इंतकाल फरमाने का फैसला कर लिया. चले कोई बात नहीं. आप मुझे ये बता सकते हैं जरूर कि आपको किस तरह की बीट चाहिए. मैं कोशिश कर सकता हूँ उस तरह की बीट बजाने की. अरे आप किसी भी तरह की बीट बजा दें तो ये मेरा काम है कि मैं इसको किस तरह पकड़ूंगा. ये मेरी जिम्मेदारी है. आप मेरा फर्ज समझें. ये चले जी, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई एक बीट निकाल लें. एट द सेम टाइम जहां हम ये आज एक एंटरटेनिंग शो कर रहे हैं, दिस वाज शेड्यूल्ड वे बिफोर एंड फॉर पीपल मैं एक ये कहते हैं ना कि डिस्क्लेमर मैसेज देना चाहता हूँ कि वी डू नॉट इंटेंड टू डिसरिस्पेक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग द होली मंथ और दीज होली नाइट्स. ये हमारा प्री शेड्यूल्ड था एंड दिस इज व्हाई वी आर गोइंग बाय इट, क्योंकि जी कमिटमेंट था इसलिए पूरा कर रहे हैं. तो प्लीज भाई जो सारे जल्जले आने, हम बगैर बीट के भी कर सकते हैं. मतलब रैप के लिए जरूरी नहीं है कि बीट दी जाए. मैं आपको यूं ही सुना सकता हूँ. नहीं तो बस बीट मैंने तैयार कर ली है. आई होप ये आपके लिए सही हो. ये सही है बीट जी? बिल्कुल चल जाएगी. सही है. इस पे अच्छा मुझे आपसे एक चीज पूछनी है बिफोर द बीट स्टार्ट्स. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये गाना किस चीज के बारे में है और आप इसमें से क्या चाहते हैं कि मैं क्या क्योंकि मुझे अभी नहीं पता. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे अभी बना रहे होंगे. चले मैं चाहता हूँ कि ये आप हमारे स्टूडेंट्स को डेडिकेट करें और ड्यू टू द होल सिनेरियो ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस, कोरोना, स्टेइंग एट होम, लॉकडाउन, बाहर नहीं निकल सकते, तो इस सिचुएशन पे एक हमारे नौजवानों की जो दिल की आवाज है, एक उनको एंगेज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, आई वुड लाइक यू टू शेयर दिस. सही है. तो आप ऑल सेट हैं? हाँ सेट हूँ. अब आप अपना मुखड़ा दिखाएंगे तो मैं आपको ऑन स्क्रीन भी ले आऊँ ना जरा. मैंने ऑन तो किया हुआ है. ये खुल नहीं रहा क्या? नहीं खुला हुआ है, लेकिन आप जरा एंगल अपना सही करें. मैं लीव करके दोबारा एंटर हो रहा हूँ. एक सेकंड दे दीजिए. अच्छा चले जी. जितनी देर में हसान हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम एक फ्री स्टाइल रैप की तरफ चलेंगे, जो इनका एक अपना ओन क्रिएटेड स्टफ है, जो कि इन्होंने हाल में अभी जो मैंने अल्फाज इनके साथ शेयर किए हैं, वो अल्फाज मैंने इनको जो बताए हैं, ये उन वर्ड्स के ऊपर इंस्टेंट एक्सटेम्पोर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए रैप करेंगे. और ये बड़ा टैलेंट है. तो आई एम गोइंग टू हिट द बीट एंड लेट्स सी कि हसान के जो इतना भरपूर टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम विटनेस करते हैं. तो हसान, ऑल योर्स. बीट के जोन में आ रहा हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तलबा पे हुआ है वबा का गलबा, कोरोना ने किया है हम सब पे हमला, हो गई है हमारी हालत खराब, हालत खराब, हालत खराब. पहने थे जूते मैंने किए अपने सॉक्स डाउन, कराची है बंद, हो गया लॉकडाउन, हो गया लॉकडाउन. देखो मुझे है घर में रहना, कमरे में देखो मैं कैसे हूँ फंसता, दिल तो मेरा देखो कैसे धड़कता, मैं घर पे हूँ बैठा तड़पता, मैं बैठा तड़पता. मुझे उन्होंने बोला कि जाके तू घूम, अम्मी ने बोला तू ऑन करे जूम, क्लास में देखो आते हैं टीचर, मुझे तो वो बोलते हैं बोलते पर टीचर, मैं पहनता हूँ देखो शर्ट,
शर्ट शर्ट शर्ट। मुझे बोलते हैं ये कि तू बंदा कितना जबरदस्त दस्त। मैंने बोला अम्मी को मुझको आज पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस से मुझको आगे यूं नहीं बढ़ना है। उन्होंने बोला कि बेटा तुमको क्या फिर करना है, मैंने बोला कि दुनिया से मुझको नहीं डरना है। माना कि वायरस से आया यहाँ पर, उसने तो जिंदगी उड़ा दी है, मैंने तो फिर भी देखो ऐसे सबकी फिर यूं बजा दी है। मुझको है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मुझको तो देखो पढ़ना नहीं। कोरोना से मुझको भागना है, मुझे तो इससे लड़ना नहीं। हाथ तुमसे मैं मिलता नहीं, हाथ तुमसे मैं मिलता नहीं। मुझे सारे लोग तो बोलते कि तुम कैसे 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 तुम फाइटर। मैंने तो हाथों पे लगा लिया अपने हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। मुझे बीट असल में आ नहीं रही है, थोड़ी जा रही, मुझे लगता है लैग के मसाइल है। नहीं, मैं बताऊं, बिलीव मी आसान, ये इतना बड़ा टैलेंट है कि आप एक्सटेम्पोर जिस तरह से यूर गोइंग बाय इट, दिस इज लाइक एक्चुअली 8 माइल मूवी देखी थी व्हेन जैसे माय माइंड इज रेसिंग, so literally your mind was racing and the way you were making on words, I think it was just brilliant. और हमारा ये एक सेशन ना पोस्ट ईड होना चाहिए जहाँ पे we can actually what I'll try to do is I'll try to gather rappers और हम कोई एक रैप बैटल काइंड ऑफ थिंग करते हैं। मैं तो हाजिर हूँ। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, कि वो भी सीख सकेंगे। हमारे पास बड़ा पोटेंशियल कुछ बच्चे हैं जो बड़ा शौक रखते हैं रैप का, तो आपसे काफी कुछ सीख भी सकेंगे। एंड थोड़ा सा अपने इस रैप की जर्नी भी बताइएगा कि कहाँ से शौक हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। यार रैप की जो मेरी जर्नी है वो कुछ यूं ही है उमर के, मैं अगेन बहुत अरसे से कॉमेडी वगैरह परफॉर्म करता था। मैं एक इम्प्रोव ट्रूप का हिस्सा हूँ जिसका नाम है लॉल वाले, और लॉल वाले में होता क्या था कि हम लोग जो ना फिल बदी रैप करते थे। तो मैंने जो रैप की अपनी बेसिक जो बुनियाद रखी वो यूं ही होते थे कि हम लोगों के इंटरव्यूज लेते थे और उसी वक्त जो है ना मुझे उन पर गाना बनाना होता था। तो ये 2-2.5 साल मैंने किया। फिर मैंने कहा कि यार मैं तो मजाहिया गाने बड़े ही आराम से बना सकता हूँ, मुझे बड़ा मजा भी आता है, तो क्यों ना अब हम शायरी को इस्तेमाल करें। तो फिर कॉमेडी से कॉमेडी रैप की तरफ रुझान बढ़ा, फिर कॉमेडी रैप से एक्चुअल रैप की तरफ रुझान बढ़ा। तो अब मुझे जो है ना सीधी सी बात है बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको लफ्जों से बहुत ज्यादा इश्क है, मुझे लफ्ज बहुत पसंद है। तो इसी वजह से जो है ना बस एक कॉमेडी रैप, फिर रैप, और अब मैं फ्री स्टाइल रैपिंग वगैरह करता हूँ। और मेरा जो बेसिक रैप का जो शौक है ना, मुझे उर्दू पोइट्री को, मुझे असल में उर्दू पोइट्री से बहुत ज्यादा इश्तियाक है, बहुत शदीद गहरी दिली लगाव है। आपके जो तलफ़ुज़ है और अल्फाजों का चुनाव है उससे मुझे अंदाजा हो चुका है कि आप कितनी सलीस उर्दू और शाइस्ता गुफ्तगू के अंदर महारत रखते हैं। यार उमर असल में मसला ये है ना कि हम लोग हैं बिहारी, तो लखनऊ वालों तो है नहीं कि मतलब पैदाइश से ही शगुफ्तगी आए। आपको पता है बिहारी उर्दू में जब तक बदतमीजी ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना तमीज सीखनी पड़ती है। मतलब आपको अंदाजा नहीं है भाई कि कितना मुश्किल होता है एक बिहारी आदमी के लिए उर्दू सही बोलना। तो बड़ी दिक्कतें और बड़ी तकालीफ उठानी पड़ी है हमको। एक कॉमिक मैंने देखा था, वो स्कूल का एक बच्चा था, वो जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। वो भी मुझे वीडियो याद आ रही है, अभी आपने जिक्र किया। अरे हम है ना बाबू। आप कभी आपकी मुलाकात हुई है कभी किसी बिहारी से? अभी फिलहाल लाइव हो रही है, और वैसे भी मेरे रिलेटिव्स में भी, मेरे सर्कल में, मेरे दोस्तों में है। आप बिहारी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। बट आई थिंक ये जो ना सारी प्रोफाइलिंग हर जगह का, हर लोगों का आई थिंक एक खासियत है, एक यूनिकनेस है। और पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई अप्रिशिएट दैट। मतलब अब मैं कराची से अपनौर तक के रोड ट्रिप रेगुलर करता हूँ, एंड बिलीव मी व्हेन आई स्विच सिटी टू सिटी, जो चेंज ऑफ कल्चर, जो चेंज ऑफ लैंग्वेज, जो चेंज ऑफ ट्रेडिशन, यहाँ तक के खानों के टेस्ट में भी चेंज होता है, लोगों की जबान में, गुफ्तगू में, हॉस्पिटैलिटी में चेंज आता है। मैं उस सब चीज को अडोर करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दिस इज आवर कल्चर, ऑल ऑफ दिस इज पाकिस्तान। और जहाँ लोग पिकअप करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, आई थिंक it's all very special and beautiful. And I think all of this is our culture. I think I take complete ownership of all of Pakistan except for Lahore. I refuse to consider cultural capital होंगे सही है, लाहौर एक अच्छा शहर होगा, पर मुझे बहुत मुश्किल होती है इस चीज को तस्लीम करने में कि लाहौरी, और आप समझ गए होंगे मेरे तासुरात। मुझे जो है ना लाहौरी, ये आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आसान, आप लाहौर गए, आपको किसी ने गलत रास्ता बता दिया और आप मेरा
कढ़ाई गलत खिला दी है, I totally understand. मेरी फैमिली लाहौर में, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लाहौर में, लेकिन मेरा तासुब भी लाहौर में, मैं ये कहना चाहूंगा. बट एंड ऑफ द डे देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट इट, मजाक अपनी जगह ने सीरियस नोट, कि ये देखिए, ये जो मेरा हाथ है, आई डिफाइन दिस एज पाकिस्तान. ठीक है जी, ये मेरा सिंध है, ये पंजाब है, ये KPK है, और ये बलूचिस्तान है, एंड दिस इज माय कश्मीर. अगर अब मुझे कोई कहे कि अपने हाथ की कोई एक उंगली या कुछ काट दो, आई कैन नॉट. ना मेरे हाथ का वो वर्क रहेगा, ना वो खूबसूरती रहेगी. तो आप नाखून तो काटते हो ना? हाँ, नाखून तो काटने पड़ते हैं. नाखून तो काटते हैं, और कोरोना के आने के बाद तो हम लोग रेगुलरली हैंड सैनिटाइजर ही लगाते हैं. और हम लोग क्या कहते हैं, हाथ भी अब 20 सेकंड तक धोते हैं. तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ. समझ गया, रगड़ के 20 सेकंड तक हाथ है. हसन, इट वाज ग्रेट ऑनर टू हैव यू. बड़ी थैंक यू सो मच. और आई थिंक वी शुड डू अ सेशन पोस्ट ईद वेयर हम थोड़ा और खुल के बात कर सकें. we have more response from students as well, जो कि of course एक आज हमारी बड़ी रात है. people are absolutely repelling for the sins and all, और हम भी उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बड़े शैतानी काम है. and you know, we'll absolutely go towards the musalla right after the show. So we'll definitely have another one. आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे अच्छा ये लगा कि आप भी खर मस्तियों के लिए उसी तरीके से तैयार थे जिस तरीके से मैं था, और हमने कई चीजों की बातें की, हमने कई टॉपिक्स को छेड़ा, और इस छेड़छाड़ में वक्त का पता ही नहीं चला. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच टू ग्रेनिच यूनिवर्सिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. मैंने आपकी बकिया टॉक्स भी देखी हैं, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, एंड इट्स लवली टू हैव समबडी हु इज एक्टिवली एंगेजिंग द ऑडियंस, क्योंकि इस टाइम पर कनेक्शन एंड मीनिंग इज डिराइव्ड बाय अस एक्चुअली टॉकिंग एंड बिल्डिंग, लाइक यू नो, लाइक building each other through stories and each other's stories. और फराज इकबाल की अजमत को भी मैं सलाम देना चाहता हूँ, और thank you so much for having me. You're most welcome. और हसन, before I leave, मैं ये बहुत serious point भी है कि देखें, हम लोगों को आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए. कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, ऑल दिस रैप, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है. ये वो मीडियम है जो ग्लोबली हिट करता है, ग्लोबली एंगेज करता है, एंड जो पोटेंशियल आई बिलीव पाकिस्तान में है, हमारे यंगस्टर्स में है, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस बहुत ही पीसफुल तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. और जितने जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो कॉमेडी को परस्यू करना चाहते हैं, जो रैप को परस्यू करना चाहते हैं, हसन ने बहुत अच्छा आज मैसेज दिया कि भूल जाएं लोग क्या कहते हैं, गो फॉर इट, फॉलो योर पैशन, सक्सेस आएगा वक्त के साथ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज व्हाट्स मोस्ट. और मैं भी आपके बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी एक जीती जागती मिसाल हैं एक ऐसे शख्स की जिसको अगेन एंटरटेनमेंट और मीडिया को इस्तेमाल करना है फॉर सोशल चेंज. तो मतलब कि ये मेरे लिए भी एक बड़ा जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करते रहें, आप इसको यूज कर सकते हैं, यू नो, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू. तो उमर, आप भी एक इंस्पायरिंग शख्सियत हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. आई रियली अप्रिशिएट इट. ये मतलब पेड कंटेंट नहीं है, मैंने पैसे ग्रेनिच ने दिए, फराज इकबाल ने पैसे खिलाए, आपने नहीं, ग्रेनिच ने खिलाए. Thank you so much for all the fun talks, for all the humor. हसन, I wish you all the best, और इंशाल्लाह फिर डेफिनेटली मुलाकात होगी. तो गाइस, बिल्कुल आपने सुना हसन बिन शाहीन को, जो कि बहुत ही एक मजेदार शख्सियत है. हमने बड़ी फन फिल्ड अंदाज में कोशिश करी कि आप लोगों को एंगेज करें, थोड़ा सा हंसाएं, और बिटवीन लाइंस कुछ एक बड़े सीरियस बात भी है कि देखें, हम कॉमेडी को, रैप को बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आइडल चीज समझते हैं, कि बिल्कुल जो लोग कुछ नहीं करते वो कॉमेडी में चले जाते हैं. तो बिलीव मी, हमारे लेजेंड्स रहे, लाइक उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब मरहूम, बेहतरीन मिसाल हैं वो, कि जिस तरह से उन्होंने कॉमेडी लिखी, आई बिलीव पूरे एशिया के अंदर कॉमेडी की उन्होंने शक्ल ही बदल दी, जिस तरह का, जिस अंदाज से वो काम करते हैं. आई थिंक हमें ऐसे रोल मॉडल्स रखने चाहिए जो हम अपने पुराने कल्चर से, हमारी रिच जो हिस्ट्री रही है मीडिया की, कॉमेडी की, उससे हमारे यंगस्टर्स सीखें, इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में बहुत हेट्रेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है. And I think things like these comedy acts, the stand-up comedies, the humors, the raps, ये जितनी चीजें जो engage करती हैं लोगों को positivity की तरफ आने के लिए, we should definitely promote all this. So we'll continue on to these lively sessions जो हम post midnight किया करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि हम entertainment side से
कोई गेस्ट लेकर आए, आपसे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके व्यूज शेयर करें, और जितने हमारे ऑडियंस में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे व्यूअर्स में लोग ऐसी आर्टिस्टिक फील्ड्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने इस शौक को, अपने इस पैशन को कंटिन्यू कर सकें। तो दिस इज उमर खान साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, कल के दिन मुलाकात होगी हमारे रेगुलर सेशन में एट 10 PM। वी विल हैव आवर गेस्ट मिस्टर करीम तेली, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हम शेयर करेंगे, जिससे ऑफ कोर्स मुझ समेत आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जाते जाते की बात, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे सेशन फॉलो करते रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून्ड। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8, and the G20. The country has the world's third largest economy by nominal GDP and the world's fourth largest economy by purchasing power parity. It is also the world's fifth largest exporter and fifth largest importer. Japan ranked first in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the third lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook, and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there we went to Tokyo Tower, we went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan Production Plant, and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic. People in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who are so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met
they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they were very helpful in communicating that with us. Hosa University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot and all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Hosa University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were live like different culture and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great. My name is Ali Afandi. I am an alumni of Greenwich, and I work for an American firm by the name of Veruzzi. Greenwich is a great place to come and study.
Hello, my name is Ali. I'm currently working at LinkedIn in San Francisco. My current role is program management. Greenwich has been wonderful. You know, it has been great in terms of confidence building, in terms of communication. हम लोग के साथ जब भी यहाँ पे हम लोग बैठते थे, Miss Walika, I remember she was the first one who ever tested us on our communication. It's been great since then. Wherever I go, you know, I carry my LinkedIn flag very proudly. Great to be back here. It's been an exceptional experience meeting everyone around, and look forward to coming back. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I am the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. हुसूल जा की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. In a world which is always moving, photography lets it stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have a photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how
pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Audition Society, that you refine your audition skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Audition Society and working with you all in the future. Thank you. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। आमिर मकबूल नाम है मेरा एंड आई एम अलुमनी ऑफ ग्रीनविच। 1994 में मैंने ज्वाइन किया था
ग्रीनिच और 1997 में ग्रेजुएट हुआ था मैं. It was one of the best experiences I've had studying at Greenwich. मैं इससे पहले अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था and for various reasons I had to move back to Pakistan. तो I wasn't sure कि यहाँ का educational environment कैसा होगा पाकिस्तान का and will I be able to fit in or not और teachers कैसे होंगे यहाँ के. लेकिन it turned out to be a very good experience for me and काफ़ी मेहनत करवाई ग्रीनिच ने हमसे, बहुत ज़्यादा मेहनत कराई बल्कि. वी यूज्ड टू बैचलर्स भी यहाँ से ख़त्म किया मैंने मार्केटिंग में और MBA किया फाइनेंस के अंदर. सो वर्क वेरी हार्ड, मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड उस ज़माने में मुझे याद है जितने सेलिब्रिटीज़ भी होते थे वो भी ग्रीनिच ही ज्वाइन करते थे. दीपक परवानी था, फैसल कबाड़िया था, lot of models, celebrities, TV celebrities used to all join Greenwich. So Greenwich was very happening also. पढ़ाई के अलावा भी it was very happening and वो जो बैच था माशाल्लाह from what I've heard they've all done very well in life. मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ की डिग्री से. साउथ ईस्टर्न की डिग्री मिली थी. ग्रेजुएट होते ही वापस मुझे अमेरिका मूव होना था. So it was an American recognized degree and I was able to get a job right away in America. एंड यहाँ का जो वर्क एथिक्स थे और जो हमें रगड़ा लगाया था और जो मेहनत की थी यहाँ पे वहाँ पे जब हमने वही डिसिप्लिन्स इम्प्लीमेंट किए, डिड वेरी वेल इन अमेरिका ऑल्सो. आई केप्ट गेटिंग प्रमोशंस एवरी ईयर एंड आई रोज अप वेरी क्विकली वहाँ पे. एंड यहाँ के वापस आके भी डिड वेल इन पाकिस्तान. सो यस, ग्रीनिच से डेफिनेटली वो जो स्कूलिंग हुई, वो ट्रेनिंग हुई, उससे करियर में मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा. थैंक यू. Hello, my name is Aqib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world, and I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. My name is Asfan Nizami. I am working in Express Publications as Group Executive Director, Marketing and Sales. I am a proud Greenwich alumni. When I came to Greenwich, I actually flunked my entrance test. I started with a foundation, so I did a foundation. और today आज मैं जो भी कुछ भी हूँ वो Greenwich की वजह से हूँ. Greenwich ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और जो चीज़ में मुझे एक टीचर ने कहा था कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये होता है कि इंसान टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करता है. तो वो क्वालिटी इस तरह मेरे अंदर आई कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. थैंक यू ग्रीनिच फॉर दैट. बहुत शुक्रिया. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. My name is Ali Abbas Mirza and I am associated with, I'm a proud alumni of Greenwich University when it was Southeastern University since 1997. I've been working with various multinational companies, brands. The message I want to give the students is that Greenwich is not just another educational institution.
जितने भी लोग यहाँ पे आप हैं एलमनाइज हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, ठीक है ना. आई वॉन्ट यू टू कम टू ग्रेनिच, विजिट ग्रेनिच, सी ग्रेनिच एंड सिर्फ बिल्डिंग साइज़ वगैरह ना देखें, टीचर्स की क्वालिटी देखें, एलमनाई को देखें वो कहाँ पर है. और आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड. और जो ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स हैं एजुकेशन के, वो मैंने यहाँ से हासिल किए. एंड आई वेलकम यू ऑल. प्लीज़ डू विजिट ग्रीनविच यूनिवर्सिटी. थैंक यू. My name is Falia Alam Shahzada and I am the founder and chief halwai at Dher Sara Pyar, and I graduated from Greenwich in 1999, and I am an extremely proud alumni because Greenwich was not just home, but it forced you, pushed you, convinced you, and you were left with no choice but to follow your passion and work really hard. and welcome. Assalamu alaikum. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan और ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. आज ईद डे 2 है और जिस तरह कहते हैं ना पहला दिन है फिर दूसरा दिन है तो बासी ईद समझ लें शुरू हो गई है क्योंकि दूसरे दिन का भी इख्तिताम हो चुका है और आज के दिन we are going to celebrate Eid together क्योंकि मेरे साथ और भी हमारे ग्रीनविच के फैमिली मेंबर्स होंगे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैम शाजिया नासिर जो कि फुल ईद सेलिब्रेट करने आई है माशाल्लाह तैयार होके झुमके शुमके लगा के. तो मैम ईद मुबारक. कैसी हैं आप? ईद मुबारक उमर, ईद मुबारक एवरीवन. बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि ईद भी अच्छी गुजरी. आप सुनाओ कैसी गुजरी ईद आपकी? मैं तो अभी सुनाता हूँ लेकिन मैं पहले फुल स्क्रीन पे आपको लोगों को दिखाऊं. आपने माशाल्लाह इतना वक्त लगा के इतनी तैयारी की, लोग जरा गौर से देखें तो मेरे झुमके
बिल्कुल सही पे, क्योंकि देखिए एक तो पैंडेमिक चल रहा था, वैसे उस तरह से मिलना मिलाना भी नहीं हुआ और सारा सिलसिला भी नहीं हुआ, तो चलें इसी बहाने सही हम लोगों की मुलाकात तो हुई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है वो, मैं जब आपने ये कहा तो मैं आई वाज थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस कि देखो ये एक जो सिस्टम है हमारे एक दूसरे से एक तरह की मुलाकात ही है ना, मतलब सिर्फ ये है कि हम फिजिकली भी आर एट अ डिस्टेंस बट हम एक दूसरे को देख सक रहे हैं, हम बातें कर सक रहे हैं, हम एक दूसरे की खुशियां शेयर कर सक रहे हैं। सो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से और थैंक्स टू यू माशाल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया, रोज आना शोज आप करते हो और जबरदस्त प्रोग्राम आप कर रहे हो एंड एवरीबडी इज लाइकिंग इट, हम रोज आपको देखते हैं और आपकी एनर्जी माशाल्लाह जो फर्स्ट डे से थी वो आज तक हम देख रहे हैं और अल्लाह ताला आगे भी आपकी ऐसी ही एनर्जी कायम रखे। थैंक यू सो मच। लेकिन देखें इस पैंडेमिक के अंदर कुछ हो ना हो, आवाज बंद हो गई है। मेरी आवाज बंद हो गई है? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। वो थोड़ा सा शायद डिले से आया आपको, बट मैं ये कह रहा हूँ पैंडेमिक का आपने खूब फायदा उठाया कि आप मेरी ईदी गोल कर गई, फिर आपने मुझे कहा कि आम की पेटी आएगी, आम का सीजन निकल गया, पेटी भी नहीं आई, तो ये आपने खूब फायदा उठाया पैंडेमिक का। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए तो नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हारा जो है वो मुझे याद है, बट वो कुछ इस तरह सिस्टम नहीं हो रहा। आई डोंट नो, आप आ जाओ, अब तो हम मेरा ख्याल है स्टेज 3 लॉकडाउन में चले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ग्राफ हमारा थोड़ा नीचे आ रहा है, कर्व हमारा फ्लैट हो रहा है। लॉकडाउन सिर्फ उस वक्त है जब बहाना देना होता है, वरना कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं। चलिए मेरे साथ मौजूद है, कहते हैं जी ईद मुबारक, और बिल्कुल ईद डे 2 की सेलिब्रेशन भी हम साथ साथ करेंगे। मोहम्मद मुमताज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ईद मुबारक कहते हैं। मानूर भी हमारे साथ हैं और वो भी की विशेष देती हैं। अस्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं और वो कहती हैं लुकिंग गॉर्जियस मैम, ईद मुबारक टू ऑल। तो अच्छा, थैंक यू अस्मा, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक टू यू ऑल एज वेल। राइट, और अब जो आज के दिन का हमारा सरप्राइज है, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े स्टार, वो शख्सियत जो जब मैं लिटरली मैं इतना प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ कि जब आई वाज नॉट इवन बोर्न उस वक्त ही वाज वायरल, जब सोशल मीडिया नहीं होता था। तो आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हसन जहांगीर साहब। सर कैन यू हियर मी? आई थिंक मीनवाइल सर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं टिल वी फिक्स दैट। हसन जहांगीर का मैं बताऊं कि वे बैक इन 86 में उनका पहला गाना रिलीज हुआ था। हवा हवा जब आया तो उसने तहलका मचा दिया और मतलब हर शादी हर फंक्शन पे वो हवा हवा ने चलना और डांस करना, जैसे आजकल हमारे डिफरेंट सॉन्ग्स है ना जिसपे लोग बड़े डांस वांस करते हैं, उस तरह हसन जहांगीर का। सो इट वाज अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग और उनके और भी बहुत से अच्छे गाने आए, लेकिन वाकई गाना हिट ऐसे इतना बड़ा हिट था कि 89 से आज हम 2020 में और अभी भी कोक स्टूडियो में उसका रीमेक आया और ऐसा आया कि आज भी गाने की वैसी आग ही लगी है। इंडिया ने कॉपी किया वो गाना, फिल्म मुबारका के अंदर आया। और आपने गानों का जिक्र किया तो हटो बचो एक उनका गाना था, शादी ना करना यारो, और बेतहाशा। इनफैक्ट आई ट्राई टू वंस सर हमें ज्वाइन कर लें वंस अगेन, हमारा सारा इंटरनेट सॉल्व हो जाए तो फिर मैं वो गाने प्ले भी करूंगा ऑन स्क्रीन ताकि थोड़ा हम नॉस्टैल्जिक में जाएं। बट देन अगेन आप बताएं मैम, इस दफा की मुख्तलिफ ईद आपकी कैसी गुजरी? इस दफा वाकई थोड़ी उस तरह हमने जो एक ह्यूमन कांटेक्ट होता है उसको मिस डेफिनेटली बहुत किया, क्योंकि मेरा घर क्योंकि थोड़ा वो बुजुर्गों वाला है तो वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, हमारी एक पुरानी ट्रेडिशन है। तो क्योंकि मेरी फैमिली वाले आ नहीं सके थे तो हमने क्या किया कि हम हमारी बड़ी ईद पे पाया पार्टी करते हैं। सो वो हमने फिर होम डिलीवरी की सबके घरों में, क्योंकि लंच हमारे घर होता था तो हमने उनके घरों पे डिलीवर किया वो लंच, और फिर हमने बाहर खड़े होके गप्पे शप्पे लगा ली मास्क पहन के थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह हुआ। बट डेफिनेटली वो थोड़ी मिसिंग पार्ट था। बकरा मंडी हम नहीं गए, बकरा नहीं खरीदा, वो हमने ईदी में दे दिया। So these were the things, लेकिन इंशाल्लाह ताला let's hope for the best। अल्लाह ताला बहुत सी ईदें हमारी खुशियों के साथ लाए, और ये अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं और हमें इन चीज़ों से आई थिंक बहुत सबक सीखना चाहिए। और बहुत सी रियलाइजेशंस हुई हैं उमर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कि बहुत सी चीज़ें जिनको हम समझते थे कि इनके बगैर तो हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, वो पता चलते हैं कि दे वर लाइक मतलब हमारे लिए कोई वो अहमियत नहीं है उनकी, हमने खुद बना ली है, अपने ऊपर तारी कर ली है।
उन चीज़ों की अहमियत हमने अपने ऊपर खुद तारी की है। और कपड़े, जूते, ये सारी जो दीज आर द थिंग्स विच वी हम हर महीने जाके जनाब ये एग्जीबिशन तो वो एग्जीबिशन तो ये मतलब ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। व्हाट मैटर मोस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पहना हुआ क्या आज? मैंने पहना हुआ है एक एम्ब्रॉयडर्ड कमीज है, सना सफीनाज की है, लेकिन वो पुरानी वेट कर रहा था कि मैंने सना सफीनाज पहना है। पुरानी ईद के, मैं इसलिए कह रही, लेकिन ब्रांड होता है। वो पुरानी ईद का। आप मुझसे पूछे मैंने क्या पहना है? आपने क्या पहना है? मैंने ये एक कमीज, थाईलैंड में हम घूम रहे थे, वहां ठेले के ऊपर देखी थी वो कमीज। थाईलैंड देखो, थाईलैंड, सो यू नो ठेले की कमीज है ना। ईद के हम सेलिब्रेशन करेंगे। इमादुल करीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। डेफिनेटली यासीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कल के हमारे स्टार। और आपने यासीन भाई की वीडियोस देखी थी? जी, अमेजिंग भाई यासीन। क्योंकि मैं पढ़ी भी यहीं से हूँ, तो मुझे यासीन के साथ बहुत अरसा हुआ। और अभी बल्कि रिसेंटली जब स्टूडेंट थी उस वक्त भी इंटरेक्शन उनका बड़ा अदब और लिहाज वाला होता था, और जब फैकल्टी हुई तो तब भी उनका वही रहा है। तो इट वाज, देखो मेरा तुमने नजर लगा दी ना, मेरा झुमका गिर गया तो बाकी और सॉरी ये भी गिर गया। हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, जरूरी नहीं मेरी नजर लगी हो, इतने सारे लोग हैं। मैंने तो शुरू में ही माशाल्लाह बोल दिया था। नहीं, ये थोड़ा हलेस कर है। तो खैर यासीन भाई माशाल्लाह, ही इज एन इनक्रेडिबल मैन एंड ही डज हिज वर्क सो एफिशिएंटली कि अभी जब जाते हैं तो वो बुखार चेक करना और वो सारी SOPs का ही मेक श्योर कि नहीं आपने सैनिटाइज किए हैं हाथ, फिर आप अंदर जाएं। सो अल्लाह का शुक्र है कि ग्रेनिच के जो लोग हैं वो बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। एंड द क्रेडिट गोज टू द, वही बात है कि लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि आपकी लीडरशिप जितनी स्ट्रांग होगी ना, आपके नीचे वाले भी उतने ही स्ट्रांग होंगे। मेरे पास पिक्चर भी है कि वो किस तरह से, क्या ये देखें, ये वो माहौल होता है। आप देखेंगे इतना माशाल्लाह अच्छा इंतजाम है कि हमारे जो गेट पिक्चर उनके पास तक पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म और सारा इक्विपमेंट है। बिल्कुल। बट डोंट फॉरगेट कि वहां पे जो हमारे बिग ब्रदर है ना, ही इज वाचिंग फ्रॉम द कैमरा। अगर जिसकी नहीं लिया तो फिर वो आपको पता है सईद साहब फिर कहेंगे कि उसका टेम्परेचर तुमने नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे मुस्लिम आलम मैम हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी कहती है विशिंग यू अ हैप्पी ईद शाजिया। तो मुझे ये बताएं कि आपने इस दफा तो बिल्कुल ही हर तरह से जान छूट गई ना आपको गोश्त बनाना पड़ा, ना गोश्त बांटना पड़ा। सही बात। तो वरना तो बड़ा एक हैसल होता है, हर जितनी खवातीन है उनके लिए ज़ाहिर है पैकेट बनाएं, उसके ऊपर पर्चियां लगाएं, किसके घर जाना है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बहुत ज्यादा। और मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं कि शुरू में जब फर्स्ट मेरी ईद थी और यू नो द गर्ल्स आर नॉट यूज्ड टू ये सारा गोश्त वोश्त का करना, तो मुझे कहा गया कि नहीं जी 3 हिस्से करने होते हैं। लिटरली मैंने पूरे बकरे की बोटियां गिनी। मैंने एक बोटी गिनी और उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये 300 बोटियां, उसमें से 100 पार्ट्स करने। सो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, आई मस्ट से। इतना आसान काम नहीं है उनको बनाना। और फिर ये कि आपको बहुत क्योंकि अल्लाह के नाम पे आपको देना होता है, तो आपसे कोई गलती ना हो जाए। वही बात है कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत आयशा जब गोश्त बनानी थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा गोश्त तुम बांटो और बुरा अपने घर के लिए रखो, क्योंकि वो जो बुरा गोश्त है वही तुम्हारे काम आएगा आगे। ठीक है ना? सो वी नीड टू। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, आप ये इतनी आपने पुरानी बात की, सालों साल पुरानी, लेकिन आज भी आप गर्ल्स की कैटेगरी में काउंट होती हैं। दिल जवान होना चाहिए, उम्र की रखा। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और हमारी एक और ग्रेनिच के बड़े प्यारे हमारे अजीज फैकल्टी मेंबर ने हमें ज्वाइन किया, सर इमादुल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक सबको। मेरे पास इस वक्त हेडफोन माइक नहीं है, मैं इन लॉज के घर पे बैठा हुआ था, तो बस वो रब नवाज की कॉल आई कि आप ज्वाइन कर ले, तो मैं बस फोन से कनेक्टेड हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। और हम सब एक दूसरे से मिलने, दूसरे को मैसेज करते हैं, दैट्स ऑल दैट नीड्स टू बी फॉरवर्डेड।
और बस आपको देख लिया, आपसे बात हो गया। देख मैं किसी और जगह जाऊं, मेरी आवाज यहाँ पे बहुत लोगों की आ रही है। एक मिनट। आप इन-लॉज, ये जो है ना, पॉइंट टू बी नोटेड इज ही इज एट द इन-लॉज। तो जब इन-लॉज के घर होते हैं तो फिर आपको पता है कि बड़ा जरा खतरा होता है ना। जी खतरा होता है, लेकिन आप ये देखेंगे, मोहब्बत देखेंगे, इन्होंने बोला कि नहीं जी इन-लॉज पे डिनर है, कुछ भी है, लेकिन हम जो है आज ईद साथ बनाएंगे। तो सर एक तो आपकी इस मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि जैसे मैं शादिया कह रही है कि इन-लॉज खतरे की घंटी होती है, चाहे जितने साल गुजर जाए। मेरे इन-लॉज मेरी जो इन-लॉज है वो मेरे रिलेटिव ही हैं, आउटसाइडर्स नहीं। फिर तो खतरा डबल हो जाता है। तो सर आपकी किस तरह से गुजरी, सब खैरियत से हुआ, सारी कुर्बानी का सिलसिला हो गया पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही कोविड की सारी प्रिकॉशंस लेते हुए सारा कुछ हुआ, बस बच्चों के उस पर। लेकिन कुछ लोगों का बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हुए, जो ऑनलाइन लोगों ने कुर्बानी की मेरे खानदान में। तो उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया कि वो गोश्त घर पे आया और वो सब खराब था। मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम ऑनलाइन जा रहे हैं, तो बिल्कुल समझ गया। लेकिन मेरा बड़ा काफी लोगों के पूरी कुर्बानी खराब हुई ऑनलाइन कुर्बानियों में, बेचारों के पैसे भी गए और गोश्त भी कुछ सब खराब होके आया। एग्जैक्टली यही हुआ है। ऑनलाइन का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑनलाइन ही किया, लेकिन ये था कि मैं पर्सनली जाके कलेक्ट किया, तो ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बट देन अगेन यस, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया। इन द इयर्स टू कम अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो चीजें डेफिनेटली बेहतर हो सकती हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी मैं डिनर पार्टी खराब नहीं करना चाहूंगा, सो थैंक यू सो मच। बारबेक्यू पार्टी में आए हैं, बस ये लोग हैं और हम लोग ही हैं, बस दो फैमिलीज हैं। बस मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मेरी और उमर की तरफ से दो एक्स्ट्रा बोटियां खा लीजिएगा। ये सोचिए कि ये फरहाना भी कर रही है, सबको ईद मुबारक कर रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। और अल्लाह मियां आप लोगों की ईद बहुत अच्छी हो, सेफ और खुशियों के साथ आप लोगों को ईद दिखाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, खुदा हाफिज। सर अब ये देखें मैम, ये देखें बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं, टिक्का बोटी बन रहे हैं, देखें ना मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। आप भी तैयार हो, शुमके लगा के बैठी हैं, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन मुझे भी भूख लग रही है सुन के। नहीं, लेकिन ये एक कुछ हमें कुछ SOPs का ख्याल रखते हुए कुछ बारबेक्यू ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आई थिंक अब तो अल्लाह का शुक्र है, वही मैंने कहा कि कर्व थोड़ा नीचे आया है, सो हम 6 फीट का या 5-6 का करके मास्क लगा के पार्टी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक मुझे बात कर, आप चूंकि देखें माशाल्लाह टीचर हैं, कुछ आपके पास बड़े इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, मैं मास्क लगा के बोटी कैसे खाऊंगा? देखो बीच में स्लिप करो, हाँ, उसमें जिप लगाओ। अच्छा, जिप को थोड़ा सा आप जब खाने लगो तो जिप खोल लो और खा लो, फिर जिप बंद कर लो। आइडिया बड़ा अच्छा, लेकिन कोरोना बड़ा नॉटी, अगर वो जिप खोलने के साथ ही इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ कि जिप खुलेगी तो अंदर जाऊंगा। तो आपको किसने कहा है कि यू हैव टू कीप सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग? उमर, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बिल्कुल, लेकिन कोरोना बड़ा नॉटी है ना, वो थोड़ी समझता है, वो तो जिसको जहाँ आना होता है वो आ जाता है। लेकिन आई थिंक कराची में जब वो कराची आया और उसने सारी चीजें देखी कि किस तरह से लोग, अभी पानी जमा हुआ तो बच्चों ने स्विमिंग पूल बना लिया, डाइव लगा रहे हैं छतों के ऊपर, तो कोरोना ने बोला भाई मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं US और यूरोप में ठीक हूँ। सही बात है। हाँ, नहीं अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये है कि जो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, उसकी वजह से भी इट इज लाइक थोड़ा है कि थोड़ा बेहतर होगा, बट अल्लाह करे कि और ज्यादा बेहतरी आ जाए। अब क्योंकि सिर्फ ईद की बातें कर रहे हैं, थोड़ा आपसे पूछते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बड़ी लाइवली हैं, हर जगह की आप जो है वो महफिल की जान होती है, रौनक होती है। बचपन में व्हेन योर टीन्स एंड ग्रोइंग अप, बकरा ईद की कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करें। बकरा ईद की तो ऐसी मेमोरी है कि मतलब आज तक मेरा सब लोग मजाक भी करते हैं। हुआ ये कि हम लाहौर में थे और जनाब मैं बकरों से वैसे बहुत डरती हूँ,
तो मैंने गाड़ी पोर्च में लाके खड़ी की और वहां से मैंने देखा मेरा कुक जो है वो बकरों को सैर कराने नहीं जैसे शाम को, तो वो मैंने उसको बस दूर से देखा, मैंने चीख मार दी ना। अब वो जो बकरा साहब थे उसने कहा कि ये तो बस मेरा शिकार है, वो भी जरा थ्रेटेंड फील किया, वो मेरे पीछे लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग, उसने लिटरली 3-3 फुट की जंप्स लगाई हैं। मैं लॉन में से होती हुई अपने लाउंज से डाइनिंग रूम में से ड्राइंग रूम में गई हूँ, लाइक हमारा यूं था ना, यूं करके थोड़ा यू शेप में था, और वो बकरा मेरे पीछे आया है, ठीक है, और मैं ड्राइंग रूम के कोने में खड़े होकर आंखें बंद मैंने कर ली और मैं कह रही हूँ भाई मुझे माफ कर दे, वो बकरा सामने है, ठीक है, और वो सींगों वाला, एंड ही वाज रेडी टू अटैक मी। अब सोचो, हाँ मारने के लिए। तो वो मैं मजाक में कहती हूँ कि फिर वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मेरे हीरो की एंट्री हुई और नासिर ने उसको गले से दबा लिया और फिर उसको लेकर भागे। लेकिन अगर लिटरली अगर वो 5 मिनट की देरी होती तो वो उसने सींग मेरे पेट में घुसा देने थे। सो गुस्से, लेकिन नील वील फिर भी पड़ जाते यार, वो उसके वो सींग थे बाकायदा, यू नो, ही वाज वो पहाड़ी बकरा टाइप का, बाकायदा ही सींग होते हैं मैम, प्लास्टिक वाले तो भी लगाता थोड़ी तो बिल्कुल इस तरह की बड़ी मेमोरीज है। अच्छा मुझे बताएं, तो आपको क्या फोबिया, डर लगता था बकरों से, गाय से? या मुझे अभी तक है, मुझे काफी, और उस बकरे के बाद तो बहुत ज्यादा फोबिया हो चुका है कि मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आप बगैर सींग वाला बकरा नासिर भाई को बोलेगा, वो बगैर सींग का बकरा ले आएंगे। बगैर सिंह का यार, बकरा तो बकरा ही है ना वो बगैर सिंह का मतलब, मैं हाथ लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, इस तरह डर लगता है मुझे। और एक दफा ये हुआ था कि हमारे, वो बचपन की बात है कि वो रात में बकरे को कुछ उसकी लगा तबीयत, उसकी वॉमिटिंग शुरू हुई, तो हमारी अम्मी ने कहा कि ये सुबह तक तो मर जाएगा। तो फिर रात को मेरी अम्मी ने उसको ज़िबा किया। सोचो, वाओ, ये मेरी मदर डिड इट, माय फादर सेड मैं तो नहीं कर सकता। अम्मी ने कहा अच्छा मैं कर लूंगी। अम्मी उसके ऊपर बैठी, उसको अल्लाह अकबर किया, क्योंकि वो मर जाता सुबह तक। तो वो रात जो थी कुर्बानी की, ईद की रात, उस दिन हमने वो ज़िबा किया, खाल वाल भी खुद ही तो वो मेरे अब्बू कहते थे कि तुम बता दो कि तुम पीछे से कहाँ से हो, तो क्योंकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो कुछ और बता तो वाकई आपने ऐसे टैलेंट बताया कि ये तो चलें, आप हमारे भी घर में हम लोग खुद करते थे, लेकिन वो लेकिन आप बता रहे हैं वालदा ने आपकी एक अम्मी ने किया। आपने भी कोई गुण सीखा? क्योंकि फिर आपसे भी बच के रहना चाहिए, आपने भी छुरी उरी फेर दी हम पे। नहीं, मैं बिल्कुल इन चीजों से बिल्कुल दूर हूँ, मुझे ऐसे कोई गुण नहीं आते। एब्सोल्युटली राइट। तो ऑफ कोर्स घर के अंदर बच्चे भी होते हैं, बच्चों के साथ भी एक रौनक होती है, बच्चे बड़े रोना शुरू कर देते हैं जब खास तौर पे कुर्बानी का दिन आता है कि जी हम मेरी बकरे को ज़बा नहीं करें और ऐसे नहीं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि अली ने या उमर ने इस तरह का कुछ किया हो? नहीं, अली उमर तो दे एंजॉयड। हाँ, मायरा यूज्ड टू डू दैट बिकॉज उसको होता था कि नहीं करें इसको, इट्स वो नहीं देख सकती थी। लेकिन वो फिर डॉक्टर, हम पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गई, लेकिन खैर वो नहीं। लेकिन माय सन्स दे आर फॉन्ड ऑफ, मतलब वो लेकर आना, उन्हें दुख तो होता है क्योंकि वो, आपको पता है लड़कों को शौक होता है बहुत, बकरे सैर भी कराएंगे बच्चे, शाम में लेके उनको टहलाएंगे भी, और फिर जब वो जाहिर बात है कुर्बानी वाले दिन तो फिर उनको बताना पड़ता है कि बेटा कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आपकी जो पसंदीदा चीज है, आपकी ये बस आपको प्यार हो गया ना तो उसको आपने कुर्बान कर दिया। फिर वो सारी वो स्टोरी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की वो बताते थे। तो बेशक, क्योंकि देखिए वैसे तो हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे कुर्बान होता ही है, लेकिन ये जो फरीजा कुर्बान होने वाला ये बिल्कुल अलग है ना, इसको तो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि मेरे वालिद साहब एक बड़े मजाहिया नेचर के थे, लेकिन वो बात एक मजेदार तरीके से बड़ी अच्छी कर गए और करते थे। वो ये कि भाई बकरा ऐसा लेकर आओ जो पुल सरात क्रॉस करा दे। तो कहते थे कमजोर बकरा ना लो, ऐसा लाओ जो पुल सरात क्रॉस करा दे, क्योंकि सिलसिला होता है। बट बड़ी मेमोरीज है, स्पेशली मुझे जो याद आता है बकरीद के टाइम पे। एक तो विंटर्स के टाइम में, जब बचपन में अर्ली टीन्स में बकरीद होती थी, वो विंटर्स में होती थी, और फिर वो रात भर वो रात जगह हो रहा है और वो आग लगी हुई है, सारे लोग जागे हुए हैं, उसी आग के ऊपर हम भुट्टे भी पका रहे हैं, कढ़ाई भी पका रहे हैं जागे हुए, और उसी टाइम पीरियड में एग्जाम्स भी होते थे। तो बीइंग स्टूडेंट इतना गुस्सा आता था कि यार अगले दिन एग्जाम भी देना है, रात भर जाके बकरे की खिदमत भी करनी है, और फिर बच्चे होते थे तो शो मारने के लिए ना बकरे टलाने मोहल्ले में लेके जाना होता था। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने तो जैसे बताया कि आपको बकरों से थोड़ा फोबिया था, तो आप कभी टहलाने के लिए नहीं लेके गई? नहीं नहीं नहीं, नेवर नेवर नहीं, ये शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा। सॉरी, इस तरह मुझे के पता है, ये मुझे वाकई एक फीलिंग आ रही है कि जो ना आपका ये एक फोबिया ना हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फोबिया हम इंशाल्लाह ना आपका जल्द निकालेंगे। और हमें मजीद हमारे एक और फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे ग्रेजुएट फैमिली मेंबर, उन्होंने ज्वाइन किया है। अहमद फारूक साहब, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सब लोगों को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अपना पीछे कर लेगा ताकि हम सही से आपको पूरा आपका चेहरा देख सकें। जी परफेक्ट। तो सर, कैसी आपकी ईद गुजर रही है? शाजिया, नासिर और उमर, आपको दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी सर, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। सर, आपकी ईद गुजरी इस दफा मुख्तलिफ सी ईद थी, सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद थी। अब बिल्कुल ना मंडी जा सके, मिलना मिलाना भी, जैसे मैम शादी बता रही है, दावत भी नहीं कर सके, ना जा सके। आपकी ईद किस तरह से गुजरी? ये बात सही है कि under the present circumstances we had to observe certain SOPs which were different from all previous Eids. However, बात ये है कि in spite of that, ईद का अपना स्पिरिट एक होता है, वो तो कायम है। एक सेक्रीफाइस का एलिमेंट, एक गिविंग का एलिमेंट, तो वो अपनी जगह है। कुछ चीज़ें which were advertised and which were asked by the government to be practiced. For example, इज्तिमाई कुर्बानी एक थी कि उसमें अगर लोग हिस्सा लेंगे तो फिर इंडिविजुअल उनको जाने से पहले तो एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों की कुर्बानी हो जाएगी। तो वो एक वो था एज ए स्पेशल केस, इसमें गुड मूव। मैंने तो यही किया फिर कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लिया था। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये बात भी सही है कि आना जाना कम था। आई हार्डली मूव्ड, आई मीन आई वेंट फॉर नमाज, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थी। और उसके बाद मास्क एंड डिस्टेंसेस। उसके बाद द ओनली पीपल आई हैड वाज माय डॉटर हु हैड इनवाइटेड फॉर डिनर, वो आ गई थी। तो इसलिए और कोई दूसरे फैमिली, मेरी एक वन ऑफ माय डॉटर्स इज हियर फ्रॉम कनाडा, दिस वन इज गोइंग टू कनाडा नाउ, तो ये जा रही हैं, तो इसलिए ये आ गई थी। तो दैट इज ऑल वी हैड, फैमिली के बस। और फाइनली फिर हमें जिनका इंतजार था, हसन जहांगीर साहब, फाइनली वी हैव हसन जहांगीर साहब। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर हसन। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। Umar, मेरा ख्याल, let me just say it was just because of me. The moment I dropped in, Jahangir Saab जो है, he followed suit. So you should thank me first, and then Mr. Jahangir. And I have had the opportunity of listening to him live at one place. I remember many years ago. So Jahangir, हाँ, तो he is a class of his own, और अपना उनका एक मकाम है। तो आई हैव हर्ड हिम और ही परफॉर्म्स गुड। सो यू प्लीज गो अहेड विद योर चीफ गेस्ट। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड स्टे सेफ। राइट सर हसन, फाइनली वी आर हियर। बात वही है ना, जो रॉक स्टार होते हैं उनकी जो शो स्टॉपर वाली एंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव यू विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। ईद उल अज़हा मुबारक हो आपको, सेकंड डे ऑफ ईद। और मैं इतनी अच्छी बातें आप लोगों की मिस कर रहा था, थोड़ी बहुत जो सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, आप लोगों के साथ बात करके बड़ी खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। और आप लोग इस वेरी जीनियस लोग हैं आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि आई होप अच्छी बातें कर रहे होंगे। और बल्कि आज के हवाले से, जो कुर्बानियों के हवाले से, मैं एक बात ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म से एक बेनिफिट लेना चाहता हूँ, प्रिविलेज, बिकॉज कि आज जो रोडों पे जो लाशें लोग फेंकते हैं या गंदगी करते हैं, उनको इसका एहसास होना चाहिए कि ये उनका मुल्क है, उनका शहर है, उनकी गलियां हैं, उनके रोड्स हैं, उनको, उनके बच्चों को आना जाना पड़ता है। तो सफाई का बहुत ख्याल रखें, और सफाई जितनी भी रखेंगे उस जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक कहते हैं वैसे भी सफाई निफ्ज़ ईमान है। तो मैं समझता हूँ 10 वायरस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे।
और कुर्बानी की गोश्त जो है वो गरीबों में तकसीम करें, अपने फ्रिज और डिफ्रीज़र भरने के बजाय। अब आपके ये क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सॉरी। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और यही सही तरीकेकार है कि देखें कि जो असल मकसद है और जो फरीज़ा है वो यही है कि आप कुर्बानी करें। कुर्बानी का सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपने एक जानवर लिया, उसको हलाल किया, खून बहा और गोश्त मार दिया, लेकिन सबसे जो मेन मकसद है वो ये है कि एक कुर्बानी के साथ, एक जानवर हलाल करने के साथ साथ आप अपनी सारी मनफी आदतें भी कुर्बान करें। आप अपने अंदर से भूख, कीना, नफरतें, गुस्सा, अना, ये सब भी अपनी कुर्बान करें और गोश्त के साथ साथ लोगों में मोहब्बतें तकसीम करें, अपना फराज दिली तकसीम करें। तो ये असली मकसद है हमारी ईद कुर्बान का। एंड आई रियली होप के लोग इस चीज़ को अडाप्ट करें। सर, आपके आने से पहले मैम शाजी यही बात कर रहे थे कि आपका माशाल्लाह इतना एक लेजेंडरी स्टैचर है हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में। वी वर मेंशनिंग मैम शाजी, आई थिंक 89 में जब हवा हवा आया तो उस वक्त से आज तक 2020 31 साल गुजर गए, कोई ऐसी महफिल नहीं होती जहां उस गाने ने रौनक ना डाली। 87 बल्कि आई थिंक 87 में आया था हवा हवा। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी इतनी प्रेशर था मुझ पे कि लोगों ने मेरे नाम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बना लिए, इधर बना लिए, उधर बना लिया, और ये वेरी मतलब लोगों की शिकायत थी। तो मैंने अभी हाल ही में मतलब एक हाफली मेरे ख्याल से 7-8 मंथ या साल होने वाला है, एक मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जो मेरा अपना है, हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल। तो जितने भी लोग हैं आपके, हाँ, हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल, तो ये चैनल मैंने लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। और अभी तो ज़ाहिर है थोड़ी सी चीज़ें इसमें वो चीज़ें हम ऐड करेंगे जो कहीं और किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास ही है। और अब मैं इस पर काम शुरू किया सीरियसली, तो इंशाल्लाह अभी मतलब हार्डली 2-3 मंथ से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये शिक्षा है। डेफिनेटली एंड मैं आई विल बी द फर्स्ट वन टू फॉलो दिस राइट आफ्टर द शो। सर, आपका एक पूरी जर्नी रही है, पूरा एक एक्सपोजर रहा, इंटरनेशनली भी आपने एक्सपीरियंस किया, यू नो हाउ म्यूजिशियंस आर इंटरनेशनली, उनका क्या कल्चर है, आपने खुद इंटरनेशनली का परफॉर्म किया। जस्ट टॉक अस थ्रू द जर्नी, यू नो, फ्रॉम 89 टू 2020 नाउ। आपने you've seen it all, not even Pakistan, even outside of Pakistan. How would you like to summarize your journey and whatever trends you have seen that have changed in music over the decades? इज़ वेरी नाइस बिकॉज के मुझे तो नहीं पता, मैं बहुत ही समझ ले अंडर एज था, मुझे ना ये अवेयरनेस नहीं थी कि स्टार बनने में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और किन किन लोगों से, अब जिनको हम देखते थे, जो हमारे सुपरस्टार थे, जो हम उनको फॉलो करते थे, उनकी फिल्में देखते थे, अब वो जब आपके सामने आए और आपको कहा बिगेस्ट फैन ऑफ यू, और आपको कैसा लगेगा कि आप रात दिन उनकी फिल्में दुनिया देख रही है और वो आकर आपसे रिक्वेस्ट करें, लाइक अमिताभ बच्चन साहब से लेके माधुरी जी, मिथुन चक्रवर्ती साहब से लेके गोविंदा से लेकर एवरीवन जितने भी हैं, सोनम कपूर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, उनकी पूरी फैमिली मुझे सुनने के लिए पाकिस्तान आ रही है कि आपको शो देखना है। तो ये सब एक मेरे लिए, और फिर लिविंग लेजेंड माइकल जैक्सन साहब का, उनकी पूरी टीम से मेरी इंट्रोडक्शन मिलना, ये चीज़ें एक ड्रीम्स है मतलब। और मैं बहुत ही अंडर एज था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या बिहेव करना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, क्योंकि मैं जिनसे पूछता था, जो मेरे स्टार थे, जो पाकिस्तान में सीनियर थे मुझसे, मैं उनसे पूछता था मुझे ऐसा सा नाम और ये मुकाम, ये काम मिल रहा है, तो मैं इसकी क्या फीस लूँ या मैं क्या बिहेवियर करूँ। तो उनकी तो ज़िंदगी में वो लम्हात आए नहीं, तो वो कुछ बता नहीं पाते थे, तो मैं एक डार्क में रहता था। आप समझ रहे हैं, डार्क साइड हमारे पीछे लगा हुआ था। और मैं उसमें वो इतना ज़माना मॉडर्न नहीं था कि आपको यूट्यूब चैनल हो या नेट हो या मोबाइल हो कि आप कांटेक्ट करके इंटरनेशनल अवेयरनेस की आपको पता चले क्या हो रहा है। आपको पता है, जो अमेरिका में फैशन आता था वो पाकिस्तान में आने में 10 साल लग जाते थे। तो अब मैं उस चक्कर में रह के अब मुझे डर रहता था, क्योंकि मैं कुछ भी करूं तो एक मॉब ऑफ जर्नलिस्ट, अब प्योर जर्नलिस्ट होते हैं वो, ऐसे नहीं, वो मुझे फॉलो अप करते थे कि मैं किधर जा रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक फंसा हुआ हूँ। तो मतलब देखें,
जब मैं बॉम्बे बोलते थे उस वक्त, आप मुंबई बोलते हैं, जब मैं गया तो उसमें हर मैगजीन में 12-12 पेज के स्टार डस्ट से लेके मूवी मैगजीन से लेके फिल्म फेयर में लेके हसन जहांगीर हवा हवा सुई बॉम्बे, हसन जहांगीर फला, हसन जहांगीर ये फला, हसन जहांगीर, उनका एक स्क्रीन मैगजीन है, अखबार होता है जो मूवी के लिए खास होता है वो। तो स्क्रीन मैगजीन पे मेरे एक ही दिन में 3 ब्लोअप लगाए। 3 ब्लोअप के आने के माने आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री या इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो इंदिरा मिश्रा उसकी हेड है। मैंने उनको थैंक्स करके शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने कॉल की। कहले यू डिजर्व इट मिस्टर हसन, यू डिजर्व इट। और अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तो बिल्कुल ही वहाँ पता चला मेरे एक पीआरओ है, एक मेरा मैनेजर है, एक कुछ है। तो एक सिस्टम का मुझे पता चला कि शो बिजनेस में सिस्टम क्या होता है। जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो मैंने भी 2 पीआरओ, एक मैनेजर है, ये वो, तो लोग मुझसे खफा हो गए। उन्होंने कहा यार ये हम तो कल हम खुद बात करते थे, अब उससे उसके पीआरओ से मैं बात करूँ, उसके मैनेजर से। आपके लिए कमेंट आया है, रबनवाज साहब हमारे हार्ट बीट है ग्रेनिच की, और कह रहे हैं कि सर आई एम फॉलोइंग योर एडवाइस, शादी ना करना यारो। लेकिन मैं उमर बताऊं आपको कि उस वक्त फिर आप तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। मैं जब 87 में इनका हवा हवा आया, एंड हम उस पर बड़ी, हर शादी में डांस वांस भी उस पर होता था। बट आई स्टिल रिमेम्बर हसन जहांगीर साहब, आपके एक तो यू हैव अ स्टाइल विच ऑल द यंग मेन यूज्ड टू फॉलो, यंग जो लड़के थे, एक तो ग्लासेस, फिर आई स्टिल रिमेम्बर यू हैड वेरी सिल्की हेयर। तो जब आप वो वीडियो करते थे तो वो आपके बाल उड़ रहे हैं, इट गेव अ वेरी, वो हीरो, पक्का हीरो लगते थे। तो आपकी जो ड्रेसिंग होती थी वो ये लड़के फॉलो करते थे। और मतलब हालांकि उस वक्त कोई सोशल मीडिया या कुछ इस तरह नहीं था, बट आप, क्योंकि पीटीवी वाज द ओनली चैनल, उस पे जब आया और आपके वो अखबारों में, एंड देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ आप शर्ट है कोई चेक वाली पहनते थे, माशाल्लाह, he was a kind of a hero definitely. So आपका तो always we have admired you. थैंक यू सो नाइस। सब इतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग दे रहे हैं। और ये टॉनिक है, लाइका टॉनिक है, जो बातें आप लोग कर रहे हैं, और मैं इसी को प्लान करके करता था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने फ्लूक में लेके काम किया, मैंने इसको प्लान किया। क्योंकि अगर आपको स्टार बनना होता है तो आपके अंदर, क्योंकि मैं जब गाने सुनता था इंडियन फिल्म में, तो पता चला, बाद में मुझे पता चला कि गाता कोई और है, म्यूजिक किसी और की है, और परफॉर्म, डांस, एक्टिंग कोई और कर रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये सारी चीजें एक ही आदमी में होनी चाहिए, 3-4 आदमी मिलके एक चीज बनाते हैं। तो फिर मैंने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग की, मैंने अपना स्टाइल, अपना स्ट्रक्चर शेप अप किया, फिर मैंने अपने ग्रूमिंग की, बालों का स्टाइल देखा कि क्या होना चाहिए, फिर मैंने ड्रेसअप सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए जो कोई और नहीं करता हो, जो मुझ पर सूट करता हो। फिर लोगों के वो बातें जो मैं करता गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार क्या बाल है इसके, क्या स्टाइल है, क्या स्कार्फ, क्या ड्रेसिंग। तो ये चीजें तो मुझे बूस्टअप मिलने लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्शन। तो फिर उससे मुझे पता चला कि जो चीज़ आप करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स हैं बड़े बड़े। उस जमाने में मुझे शैम्पू की कंपनीज आ गई कि यार आपके बालों को बड़ा जबरदस्त है। आज भी लोग मुझसे शर्त लगाते हैं कि अब, मैंने कहा हाँ बहुत महंगा वीक लगाया हुआ है, ऐसे बोलता हूँ, मजाक करता हूँ उनसे। तो आप अगर हैंडल करें, अपने बालों का केयर करें, तो बाल रहते हैं आपके सर पे। अपनी फिटनेस का ख्याल रखें तो आप सदा आप फिट रहते हैं। जिस चीज़ का अपने डाइट का प्रॉपर रखें, हेल्दी फूड आपको खाना चाहिए, क्या क्या। तो मैंने पूरा इसमें टाइम लगाया, टाइम स्पेंड किया मैंने, और उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। और आज भी माशाल्लाह से मैं जब भी कॉन्सर्ट्स करता हूँ तो 4-4, 3-3 घंटे मुझे नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस देनी होती है। तो वो नॉन स्टॉप परफॉर्म करना, इस बहुत पावर एनर्जी चाहिए आपके अंदर। तो वो सारी चीज़ें मैं रोज़ एवरीडे ट्रेनिंग करता हूँ, फिटनेस ट्रेनिंग करता हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो मैं जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। बिल्कुल सही। फिर इसी बात पे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लोगों को जरा नॉस्टैल्जिक लेके जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोग जरा जाएं, और जो एक हटो बचो आपकी बहुत ही जबरदस्त गाना था, और सारा हमने बड़ा बेहतरीन उसको एक्सपीरियंस किया। मैं चाहूंगा कि लोग जो है वो हटो बचो भी जरा देख सकें। तो ऑन स्क्रीन आपकी इजाजत से इस वक्त आई वुड लाइक टू प्ले दिस सॉन्ग। आई लव इट। साला बहनों का दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना दो, हटो बचो दिल जो दुखा
ऐसी बातें कभी न कहो, हटो बचो, सिली मिली मिली सिली सारे गाए जो, सिली मिली वेरी गुड वो, सिली मिली जिसे लाभो आराम से इत्मीनान से, इजी होते काम से, परफ्यूम लगाकर विशिट करके थोड़ा पहले काम से, सब दोस्तों में जाइए परफ्यूम से उड़ाइए, झूठे न कोई बात से सबका दिल बहलाइए। ये कोई सोनी कुड़ी अगर झूठे खाप न दिखाओ, झूठी बातें न बनाओ कभी यारी, चीटिंग न करना किसी का न छोड़ो यारी, करके तुमने कोई चीटर मिले तुम्हें अगर अच्छी अच्छी बातें करो, उसे दाम पे ले आओ सेंसिटिव दिल होता है भाई, सुन सबको हंसाओ, रुके हुए को मनाओ, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी न गिरो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी न कहो, हटो बचो सिली मिली 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 सारे गाए जो, सिली मिली वेरी गुड वो, सिली मिली जिसे लाभो आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, फिर बन समझ के मेकअप करके थोड़ा पहले शाम से, अब दोस्तों में जाइए परफ्यूम से बुलाइए, झूठे लगोरी आँख से सबका दिल बहलाइए। वे वो मिलते हैं जो न्यूज़पेपर बेचते बच्चे, गाड़ी साफ करते बच्चे, हार्ड वर्कर जहाँ से ज्यादा मिले, एजुकेशन है जरूरी कर ये कमी वो पूरी भोले भाले, उनके पक्के है ये दिल, उनका है शिक्षा है ये बात, उसके बच्चे मिल जाए नहीं अगर है, इंजीनियर भी अच्छे बने, डॉक्टर भी अच्छे, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी न मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी न कहो, हटो बचो सिली को देखो, सिली बदल करो, सिली अच्छे बच्चे वो, सिली करना माने जो आराम से इत्मीनान से, सारे हो के काम से, परफ्यूम लगाकर किशिट करके थोड़ा पहले शाम से, दोस्तों में जाने परफ्यूम में बुलाइए, झूठे न कोई बात से सबका दिल बहलाइए, तेरा दिल मम्मा पापा का दिल, तेरा दिल तेरे बच्चों का दिल, तेरा दिल भाई बहन का दिल, तेरा दिल तेरे बहनों का दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी न मिलो, हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी न कहो, हटो बचो सिली हिट सॉन्ग, सिली सारे गाए दो, सिली वेरी गुड वो, सिली जिसे याद तो आराम से आराम से, होके काम से, परफ्यूम लगाकर किशिट करके थोड़ा पहले शाम से, दोस्तों में जाइए और तुम देखो आपसे सबका दिल बहलाइए, आराम से इत्मीनान से, बारिश हो तो काम से, परफ्यूम लगाकर किशिट करके थोड़ा पहले शाम से, दोस्तों में जाइए। Right. Amazing, very good. The nostalgic क्या feel है? थैंक यू यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ के लिए ये गाना मैंने गाया था, यूनाइटेड नेशन में चाइल्ड लेबर के लिए कैंपेन था, और मैसेज वाले गाने कम हिट होते हैं, दुनिया में बहुत कम गाने हैं मेरे, लेकिन मेरे दोनों गाने मैंने मैसेज वाले बनाए, शादी न करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ, एंड हटो बचो, दोनों हिट हुए अल्लाह की रहमत से, बड़ा मैं थैंक्स गॉड। और मैं वंस अगेन आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डेफिनेटली सर, और आपके जो दूसरा वाला जो आपका मैसेज सॉन्ग था ना, उसने तो पता नहीं कितने नौजवानों की जिंदगी बचा ली है, शादी ना करना यार। अब कितने लोग मेरी तरह देखें चहक रहे हैं, खुश हैं, सिर्फ आपकी एडवाइस की वजह से। मुझे बहुत लोग मिलते थे, मुझे कहते थे काश आपने 40 साल पहले गा दिया होता तो हम बच जाते। तो लेकिन उमर एक छोटी सी फरमाइश, हसन साहब आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, सो इट्स बीन माय ड्रीम के आपके साथ हवा मिलके गाऊं मैं। वाह क्या बात है। बिल्कुल,
हवा हवा आज आप देखें माशाल्लाह से 87 में लॉन्च हुआ, 86 में रिकॉर्ड हुआ, आज माशाल्लाह से 35-40 इयर्स का हो रहा है और माशाल्लाह से आज भी उतने ही पॉपुलर, उतने ही मकबूल है हर एज ग्रुप पे। आज की जो जनरेशन है, जो मेरी नीस वगैरह छोटी छोटी है, 2-2 साल, एक साल की, उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में रात दिन यही, वो हसन जहांगीर ये सुनो, ये तो वो डांस, मुझे कहती डांस करके दिखाओ, मुझे डांस नहीं आता। सर मैं मजे की बात बताऊं, मेरा अभी रेडियो शो था ईद का स्पेशल 6 से 8 बजे। आप यकीन करें मैंने आज के शो में भी हवा हवा चलाया आपका, और मेरा जो पहला दिन का ईद का शो था उसमें भी मैंने चलाया बुक स्टूडियो वाला वर्जन। वो मैं लोगों को भी वीडियो दिखाऊंगा कि माशाल्लाह आज भी आपकी जो परफॉर्मेंस है, एक तो चले गाना हिट है, लेकिन द वे यू परफॉर्म, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू सर। तो वो मैं आगे लोगों को भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैम शाकिया की जो फरमाइश है कि हम आपके साथ लाइव हवा हवा, हाँ ऑब्वियसली यू नो मेरे तो खैर बहुत गलतियां होंगी माफी के साथ, लेकिन ये लेट्स डू द जिंदगी धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने क्या कहा, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना, हवा हवा ए हवा इस दिल का दे, कहाँ खुली जुल्फों बता दे, अब उसका बता दे, जरा मुझसे बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। थैंक यू, वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा गा रही हैं आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। इसी बात पे सर, आपको जिस परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था वो मैं लोगों के साथ दिखाता हूँ। ऑफकोर्स पूरा नहीं, हम हाफ में दिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली जो माशाल्लाह आपकी उसकी परफॉर्मेंस थी, आई वुड लव टू शो इट टू द पीपल and how you know you went by it. उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, That was amazing. ये लाइव होता है, पता है आपको, सारी लाइव, नो रीटेक नो टेक, मतलब एडिट नहीं होता, लाइव होता है पूरा है उसमें, लाइव आपको गाना होता है। ये जो आप बीच में माशाल्लाह आप आए परफॉर्मेंस, क्योंकि आज भी एज आई सेड यू माशाल्लाह सच अ बिग परफॉर्मर, आज भी स्टेज पे आप नए बच्चों की भी छुट्टी करते हैं, सच अ परफॉर्मर माशाल्लाह। वो इम्प्रोम्प्ट था तो बीच में आप आ गए और गाने में घूमोगे, स्टार्ट डांसिंग, या इट वाज प्लान्ड? नहीं, मैंने सोचा जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उस दौरान मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने 1-2 महीने मुझे टाइम मिल गया, और तो मुझे वक्त मिल गया, तो मैंने किसी को बताया नहीं कि फ्रैक्चर है। अब उस जमाने में मैं फैट हो गया, जरा जाहिर है बेड रेस्ट पे रहा मैं बिल्कुल,
अब एकदम से कोक स्टूडियो करना पड़ गया मुझे। अब वो इत्तेफाकली थोड़ा लेट हो गया तो मुझे टाइम मिल गया। उस दौरान मैंने अपने आप को जल्दी जल्दी फिट किया और फिट करने के बाद फिर मैंने इस पे गाया। और मैं ये प्लान किया था, मैंने कहा कि समथिंग न्यू मैं करूंगा कोक में जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो इसलिए मैंने पूरा सोचा कि मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है और उस तरह से मैंने परफॉर्मेंस की। और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त हुआ। वो जब गाना हमने फाइनल टेक हो गया, ओके हो गया, साउंड ओके, और ये उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। वो पूरे क्रू जितने लोग काम कर रहे थे, बाहर से फॉरेनर्स थे, सब ऑन द फ्लोर आ गए जहाँ पे मैं परफॉर्म करने गया था। अब वहाँ पे वो गाना दोबारा पड़ा, सब नाच रहे थे, पूरी टीम को नाच रही एनर्जी जाती ना माशाल्लाह, कंपटीशन हो गया अली हमजा में और जुहैब काजी में, और मुझ पे कौन कितने डिप्स मारता है, और डिप्स लगा रहे हम लोग। बड़ा मजा, मतलब मार्वलस शो, मतलब एक यादगार है कोक स्टूडियो का ये। बिल्कुल, आई कैन टोटली एग्री। मैं सर यही तो बता रहा हूँ ना कि मतलब इस गाने की बहुत चंद गाने ऐसे होते हैं जो इतने एवरग्रीन है कि वो कभी पुराने ही नहीं होते। आज के जमाने में हम देखते हैं कोई गाना आता है, हिट आता है, टॉप चार्ट्स में आता है, मैक्सिमम 6 महीना और फिर गायब, कहाँ गया किसी को याद नहीं है। एंड देन वी हैव सर लेजेंड, लिविंग लेजेंड लाइक यू, कि आज 34 साल बाद भी देखें, आज भी अभी हमने प्ले किया, हम तीनों झूम रहे थे उस गाने पे, नाच रहे थे। इफेक्ट ऑफ एनर्जी आ जाती है ना। वो गुलपर्णा को पता नहीं था कि लास्ट नोट पे मैं होल्ड करूंगा। वो रिहर्सल में मैंने नहीं किया था, लेकिन जब मैं म्यूजिक करने लगा तो मैंने कहा सरप्राइज इनको देना चाहिए। तो मैंने कहा पूरा गाना ओके परफेक्ट जा रहा है, मैंने कहा लास्ट नोट पे अब वो वेरी डिफिकल्ट, आपको पता है कौन सा एंड कीबोर्ड के नोट है वो, उस पे होल्ड करना। आप इतना परफॉर्मेंस के बाद आप स्टेमिना परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं लाइव, तो वो ऊपर वाले की रहमत से, अल्लाह की रहमत से करम हो गया। अगर वो गुलपर्णा का एक्सप्रेशन भी हमने एंड में देखा था कि वो खुद भी सरप्राइज और शॉक थी कि क्या हुआ। शी वाज इन ऑ कि ये क्या हो गया। वो इतना हाई नोट है, इतना पावर होता है कि कान ब्लास्ट हो सकता है, पता है आपको? बहुत एनर्जी होती है, बहुत पावर होता है। तो देन अगेन सर, आज इस ईद के मौके पे हम सारे आज जमा हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे लिसनर्स को, सारे देखने वाले को, सारे नई जनरेशन को जो म्यूजिक में आना चाहते हैं and they want to make it big, what would you advise them? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को बाय प्रैक्टिकली मैं उनको बताऊं कि क्या होता है, किस तरह से करना पड़ता है, परफॉर्मेंस की क्या स्टाइल होती है, थिंकिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, आपको किस तरह से क्राउड को हैंडल करते हैं, एनहांस करते हैं, उसके अंदर एनर्जी लेवल हाई करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे बताने से नहीं होगा, ये तो जब तक प्रैक्टिकली आप देखें। जैसे भी अभी गाना आपने देखा तो आपको पता चला कि यार क्या एनर्जी, कैसे किया वो गाने। तो ये इसी तरह जब लाइव कॉन्सर्ट्स वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कितनी चीज़ें। बस ये मैं कहूँगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने आप को सोचें, समथिंग न्यू करें जब भी आपको चांस मिले। तो मेरा तो यही, मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा गाने जा रहा था तो गाना था मेरा इमरान खान इज अ सुपरमैन। वो क्रिकेटर को बड़ा हिट गाना था वो भी आपका, है ना। तो आप सोचिए कि जिसको जिंदगी में फर्स्ट टाइम चांस मिल रहा हो, कितना उसके अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस होगा कि वो ये सोच रहा है कि जो मैं गा रहा हूँ वो आग लगा देगा। अब वो लोग हंस रहे हैं कि यार कौन, किसने गाया है, इमरान खान लड़का आदमी पे गाना बनाएंगे, अब ये वो कौन सुनेगा, वही हिट हुआ गाना। इसी तरह मैंने ये फैशन के नए रंग है, टैक्सी हो या रिक्शा, मेरे जितने गाने हैं वो आम लाइफ से आपके। आजकल मेरा एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, चमक चलो, वो भी मैं नया में जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मैं अपने यूट्यूब में उसको लॉन्च करूंगा। मेरे बहुत सारे नए गाने जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं, तो मैं अपने चैनल पे इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल पे। तो आप इसको लोग, आपके लोग फैंस, म्यूजिक लवर्स मेंशन करना भूल रहे हैं सर, आप एक गाना मेंशन करना भूल रहे हैं, वो भी बहुत ही हटके था, बूबा बूबा बरारा। हाय हाय, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इस सारे, जब मेरे कॉन्सर्ट हो रहा था तो सारे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पे थे। जब मैं गाने लगा तो वो कोई सब ड्यूटी छोड़ के बुब्बा बुब्बा पे स्टेज पे आ गए। सारे जितने सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर लगे थे, मतलब हजारों पुलिस ऑफिसर सब नाचने लगे स्टेज पे आके।
बुब्बा बुब्बा बाररररा बुब्बा बुब्बा बाररररा। उसने कहा मिल के मुझे कल का दिन है हॉलीडे, साहिल पे हम जाएंगे, मिलकर हम तुम गाएंगे, बुब्बा बुब्बा बाररा बुब्बा बारा बारम। वाह क्या बात है सर। Wow, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह once the COVID is over और everything's normal तो definitely हम इस चीज का ऑनर चाहेंगे कि एक इंशाल्लाह लाइव कॉन्सर्ट जरूर अरेंज करेंगे। लेकिन आपने सर एक वादा करना है कि जब आप ये गाना गाएंगे ना हवा हवा, आपने मुझे स्टेज पे बुलाना है, मैंने डांस करना है आपके साथ। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये मैं बुलाऊं या न बुलाऊं, आप खुद खींचे आ जाएंगे। लोग रोक नहीं पाते अपने आप को, अपनी जगह पे रोक नहीं पाते लोग। ये अल्लाह की रहमत है इस गाने पे। नए नए वर्ड्स मैंने देखे, नई चीजें डाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नई लाइन है, मैं कुछ सब एक नई चीज की इंट्रोडक्शन मारता हूँ। जब भी मैंने काम किया ऊपर वाले की रहमत से, मैं कोई नई चीज करने की कोशिश करता हूँ। Indeed, and thank you so much, sir, for taking out time. It was a true honor to have you. It's always a pleasure कि आपसे जब बात करते हैं कुछ सीखने को मिलता है। और आप जाहिर आज बिजी थे, एक दावत पे थे, उसके बावजूद you joined us. Thank you so much for that. Thank you, sir. Thank you so much. It was a wonderful time being spent with you और बहुत कुछ वो सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा आपने आज कर दी। बहुत मजा आया। नहीं, आप लोग खुद इतने एनर्जेटिक है कि आपसे बात करके मेरा एनर्जी लेवल भी हाई हो गया। मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, किधर बैठा हुआ हूँ, किस पार्टी में आया हूँ। मुझे आप लोगों के साथ मेंटली मैंने गाड़ी भी पार्क गलत कर दी थी, वो आके चाबी बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी हटा। राइट सर, आपका म्यूट हो गया माइक। Meanwhile, till we connect, but thank you so much, sir. और indeed, sir, जी सर, परफेक्ट। भाई बात ये ना जी जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट होती है ना तो ये सारी चीजें हो सकती है। नहीं, बड़ा मजा आया और आप लोगों ने गाया भी मेरे साथ, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है, गाते रहिए। क्योंकि 4 दिन की चांदनी है, कल अंधेरी रात है, किसी ने नहीं देखा। और अब लाइफ इतना शॉर्ट है कि आपके होते अंधेरी रात नहीं आएगी सर, आपके होते अंधेरी रात नहीं आएगी, इस बात का यकीन है हमें। और मैं इंशाल्लाह उस दिन का इंतजार करूंगा जब आपके साथ लाइव साथ में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। उस दिन का मेरा इंतजार है। इंशाल्लाह हैप्पी आवर्स है, बिल्कुल जिंदगी को हैप्पी आवर्स समझ के गुजारें। क्योंकि बहुत जितना भी टाइम है अच्छी तरह से गुजारें, किसी को हर्ट नहीं करें। अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर गुजरें। सोचे नहीं कि किसी के काम, ये मत सोचिएगा कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो रिटर्न में आपके लिए करेगा, उसके तो आप भूल जाइए। वो आपसे उससे दुख आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने लिए अच्छा करें। ये जरूरी नहीं कि दूसरे आपको अगर उसके रिटर्न में आपको तकलीफ दें, हर्ट करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो इसकी हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के लिए अच्छाई करना छोड़ दें। क्योंकि वो बेवकूफ है जो आपकी अच्छाई का सिला गलत दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो खुद अपने लिए बुराई कर रहा है। आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू आपके सारे सुनने वालों को, सबको, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के सबको, सारे स्टूडेंट को, सबको मेरा सलाम। थैंक्स टू ऑल। और स्पेशली रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हवा हवा बाय हसन जहांगीर ऑफिशियल, और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। नई चीजें, नई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेंगी। जो बातें आज तक मैंने किसी से नहीं की वो आपसे करूंगा। बिल्कुल सर, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़। मैम शाजिया, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आई रियली एंजॉयड उमर, बहुत मजा आया। लिविंग लेजेंड के साथ हमने आज लाइव शो किया। मतलब हाउ इज योर फील? क्योंकि आपका शायद एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब ये गाना रिलीज हुआ था आपने वो पीक लाइव देखी, मैंने तो लेटर ऑन की। बट वो क्या फीलिंग थी कि शेयरिंग द सेम शो विद द लेजेंडरी फिगर? मतलब क्या था? मैं वो इट वाज सच अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग और इतनी जबरदस्त, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि जब इनका ये गाना रिलीज हुआ और हमने एक शादी पर उसको परफॉर्म भी किया, तो और हसन जहांगीर की एक मैंने बताया ना उनकी एक ड्रेसिंग और उनके वो ग्लासेस और बड़े, ही वाज अ हीरो टाइप ऑफ अ पर्सन। तो वो आपको पता है एट दैट एज वो बड़ा वो होता है। तो आज जाके उनके साथ इस बेसुरी ने भी उनके साथ गाना गा लिया, तो इट वाज रियली आई वाज ऑन द, वो कहते हैं सेवंथ हेवन वाली बात है कि बड़ा मजा मुझे आया। और ये बात जिन लोगों को नहीं पता, आपके स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मिस शाजिया भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। मैंने देखा, मैंने शी इज अ वेरी गुड डांसर माशाल्लाह।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं बच्चों, हाँ नहीं मेरे सारे स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हेडिंग द स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड यू नो आई एम अ लिटरेचर टीचर बट आई लव म्यूजिक एंड आई लव डांस एंड आई लव being head of School of Linguistics, you have to be a bit sophisticated, but we know the fun side of you. So, ma'am, छुपाए नहीं. Thank you, thank you. It was lovely having you, and it was आपने ईद दोबारा कर दी माशाल्लाह. Thank you so much, ma'am. Stay safe और ईदी और मैंगो की पेटी दोनों ड्यू है. Anything for you. Thank you, ma'am. So, guys, ये था हमारा ईद का स्पेशल शो. मैम शाजिया नासिर हमारे साथ मौजूद थी. द लेजेंडरी सिंगर सर हसन जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे. हमने कुछ उनके नॉस्टैल्जिक गाने भी प्ले किए. रिसेंटली कोक स्टूडियो में हवा हवा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, आपने देखा. एंड डेफिनेटली यू मस्ट हैव एंजॉयड एज मच एज वी डिड. और ये था हमारा आज का ईद स्पेशल. और कल इंशाल्लाह वापस आएंगे विद अनदर स्पेशल शो और उसमें भी बहुत सारा फन फिल्ड चीजें हमने आपके लिए सरप्राइज में रखी हुई हैं. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ और प्लीज अगर मिल रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs के साथ मिलें. कोरोना इज ब्रेकिंग डाउन बट स्टिल देयर, सो वी हैव टू बी केयरफुल. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, मास्क लगाना, ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखें. एंड बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स हैं जिसमें यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप. Number is on screen 0306448363. Our email is admissions@greenwich.edu.pk, or you can visit www.greenwich.university, where you can visit and see all the courses that are being offered, all the programs that are being offered, which includes BBA, MBA, MPhil, PhD, and of course English, linguistics, economics, finance, and B.Ed for all the teachers. जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, 50% ऑफ फॉर ऑल टीचर्स who want to start B.Ed program with Greenwich University. So greenwich.university पे जाएं, roll in, and 14 September से fall semester start है. Till then आप खुद experience करें how life is at Greenwich. तो उमर खान को दीजिए इजाजत. कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी again, same place, same time, और बिल्कुल अपना खास ख्याल रखें. Stay safe, take care, and of course stay positive, not corona positive. Until next time. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जियो मॉर्निंग विद समीन राशिद. आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ डिफरेंट करने के लिए. सो आए और मिलते हैं विद द वन एंड ओनली द फेमस कराची वाइन्स. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ओके, सो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम. बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हैंडसम हैं और मतलब लोग क्रेजी हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह है, मैं आपको बताऊंगा 2-3 जगह. आई बिलीव यू. अच्छा, तो हमारे साथ हैं सलमान, मंसूर, अजलान एंड असद. ओके, सो अब आप लोग बताइए सबसे पहले कि आप लोग ग्रेनिच में क्या करने आए हैं आज? क्या करने आए? हम किसी को उठाने आए. हम सोई हुई आवाम को सुबह रात को बताने आए हैं कि हम आए हैं. एग्जैक्टली. ओके, एंड क्या करने? मैं आपको बताता हूँ कि डे फ्रेश ने हमें हायर किया, बहुत सारे पैसे देके, और सीक्रेट बात है जब उन्होंने पैसे दिए तो हमें फिर परफॉर्म करना है. मजदूर आदमी है, मेहनती आदमी है, तो परफॉर्मेंस ही हमारी. उनका कोई ब्रांड मैनेजर प्रोग्राम आ गया ना, स्टूडेंट ब्रांड लेबर फोर्स के नाम से, तो वो हो रहा है. तो उसके अंदर उन्होंने हमें सिर्फ रखा है कि यार एंटरटेन करें लोगों को, कि हमारे नाम पे शो बिक जाए, दैट्स ऑल. तो इस वजह से हम लोग आए थे एंटरटेन करने. बेसिकली पीपल थिंक हम सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ स्टैंड अप भी कर लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी है, कुछ थिएटर भी है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत. मल्टी टैलेंटेड है, म्यूजिक भी कर लेते हैं. अच्छा, और कुछ मुझे तो कुछ पूछने की फोटोग्राफी भी कर लेता है, शादियों के इवेंट्स साथ भी ले लेते हैं, ये लिख भी लेते हैं, शायरी वगैरह आप गा भी लेते हैं. वेरी गुड, आई कैन वेरी गुड यू कैन राइट. ओके, और कोई मिमिक, आई कैन मिमिक. और मैं चलते पंक्ति में स्क्रू डाइट कर लेता हूं. इनका टैलेंट है. अच्छा, तो सबसे पहले मंसूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वेयर डिड कराची वाइन स्टार्ट फ्रॉम? शुरू कहाँ से हुआ था? कमरे से. तारिक रोड. या एग्जैक्टली सही बोला. कमरे से. हाँ, तो कमरे में सही बोला. अच्छा, ठीक है. अब देखिए, अब मैं इलैबोरेट. वेरी इंटरेस्टिंग.
TV1 पे एक शो था जिसके लिए हमें हायर किया गया। हम लोग क्योंकि कोई कहीं थिएटर परफॉर्म कर रहे थे और सीमा ताहिर जो वहाँ की CEO हैं उन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा, उन्होंने बोला यार ये कौन है क्रेजी लड़के यार 5-6 ना ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारे अंदर यूनिटी देखी। कौन थे आपके टीम मेंबर्स उस वक्त? सारे थे, यही थे सारे। और कुछ और लड़के भी थे बट मतलब यूनिवर्सिटी के ना, यूनिवर्सिटी में हो रहा था तो वो मेहमान खुशूसी थी, उन्होंने देखा यार ये कौन क्रेजी लड़के हैं और मजे की बात है कि इनके दरमियान कोई लड़की नहीं है इसलिए यूनिटी है। तो उन्होंने अच्छा लड़की नहीं है इसलिए यूनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मैं बड़ा पकड़ सही है। तो उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें फिर बुलाया कि यार जाएं, क्योंकि मैं उस वक्त वैली रोमांटिक सोसाइटी को हेड कर रहा था और मेरा जो मुझसे ऊपर था एक अब्दुल्ला हमारा दोस्त था जो मेरा सीनियर था, तो उसको उन्होंने बेसिकली वो इंटरफ्लो में काम करता था TV1 की जो एजेंसी है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार ये लड़के मुझे चाहिए अपने शो के लिए। तो 5 मिनट का हमें स्लॉट मिला था जिसके अंदर कहा था कि यार आपने कंटेंट बनाना है। अब हमने जो कंटेंट दिया वहाँ वो 50% रिजेक्ट हो गया, 50% जो बचा हुआ था वो कराची में इसकी सूरत है। तो एक दिन हमने सोचा यार ये जो रिजेक्टेड कंटेंट है इतनी मेहनत से हमने बनाया है इसको क्या करें। तो दानियल ने बोला यार लेट्स शूट एंड अपलोड समवेयर। मैंने बोला यार एक काम करते हैं फेसबुक पे पेज बनाते हैं, ठीक है, और उस पर अपलोड करते हैं। उसने दानियल ने मुझे बोला यार मेरे पास कैमरा है, मैंने कहा मुझे एडिटिंग आती है। बोले चलो बिस्मिल्लाह करो। तो हमने 150 रुपये का माइक खरीदा था, आई गेस पता नहीं कौन सी रेशम गली है कौन सी जहाँ से ना, वहाँ से हमने खरीदा। और एक माइक एक कैमरा ट्राइपॉड भी नहीं था, कभी कुर्सी पे कभी घुटने पे कभी कुछ इस तरह करके हम शॉट्स लेते थे और हम बनाते थे। अच्छा उस वक्त जब हम बनाते थे तो हमारा इतना कोई ज़्यादा मतलब वाइड एक्सपोजर भी नहीं था कि हमने कहाँ तक जाना है, हमें कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ फेम चाहिए था। फेम के तीन साल पहले की बात है। तो बस फेम यू नो कि फेम के पीछे जब भाग रहे होते हैं ना आप, तो आपको कुछ समझ नहीं आता आप क्या करो, तो उसमें हमने दिल खोल के जो दिल में आया वो बनाया हमने। तो ये नतीजा है कि आज माशाल्लाह कराची में लोग जानते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं। सलमान आपसे मेरा सवाल है कि फिक्र नहीं करिए। अच्छा सब जब आपने ये शुरू किया व्हाट वाज द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या थी? फैमिली, सोसाइटी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट बैरियर? फैमिली, क्योंकि आई वाज नॉट आप लड़कियों भी प्ले करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल नहीं होता वो इशू नहीं था, टाइम देना इशू था, क्योंकि माय फैमिली वाज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट ऑफ इट ना। उनको नहीं पसंद था, मेरे फादर थे वो अगेंस्ट थे इसके, लेकिन एक बार घर से निकाल दिया था। हाँ ये भी हो चुका है। मैं आप जस्ट इमेजिन मैं ये मसाला आपको यही मिलेगा। मैं घर से बाहर खड़ा हुआ रात के 11 बजे क्योंकि मैं शूट से वापसी आया था। ये सीन 11 बजे यार एक्चुअली मैं बताता हूँ सीन क्या था। हमने एक बनाया था एक अच्छा कहानी उनकी है, सुनाएंगे आप? आई एम अ गुड स्टोरी एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आप छोड़े ना, मैं कंप्लीट नहीं मैं बताऊंगा आप मजे से बताइए। बेसिकली एक एक्ट था इसके अंदर ना, हमने उसको लड़की तो हम नॉर्मली बनते थे, लड़की यूजुअली हम लोग क्या करते हैं दुपट्टा ले लिया बस एक्ट करनी होती। इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ दुपट्टा, ये ट्रेंड है, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है। सोशल मीडिया का ट्रेंड मुझे पूछना है, इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ दुपट्टा। सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट दिखता है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। मतलब आपकी एग्जीक्यूशन नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, अच्छी होती है। आप लोग ये ट्रेंड लाए, हम सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं, हम एग्जीक्यूशन पे करते ही नहीं है। मतलब हम 3 शॉट्स में जो है ना एक फ्रेम निपटा लेते हैं, मतलब एक पूरा सीन हम लोग मास्टर शॉट पे भी निकाले, सिर्फ कंटेंट आपके जो है ना जानदार होते हैं। तो एक कंटेंट था उसमें हमने कुछ ज्यादा क्रेजीनेस दिखा दी, इसको हमने साड़ी बना दी। अब ये माशाल्लाह से पूरा नाचा है, ये वगैरह उसमें क्या भरपूर नाचा है कि हमने तो वो यू नो गाँव तकिया वगैरह लगा फैमिली से हो गया था। उसके बाद निकल जाओ इस घर से और शक्ल नहीं दिखाना। तो ये वो तो जब अपलोड हुई यहाँ से ये अनलोड हो गए। नहीं वैसे ये चीज है स्पेशली द मीडिया इंडस्ट्री, और आप तो जबकि एक लड़के हैं लेकिन बहुत मुश्किल हुआ होगा ये उसका। अच्छा अगला सवाल जो है पूरी टीम से है, अभी तक आपके पूरे 3 साल की जर्नी में सबसे अजीब कमेंट क्या मिला आप लोगों को? सबसे अजीब, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फेसबुक कहीं। एक था, एक मुझे याद आया अभी। अच्छा कमेंट वो बेसिकली सपोर्ट में नहीं था, वो एक दिल की ख्वाहिश उसने बताई थी, अपनी इजहार किया था अपना। एक लड़का था, नाम मैं नहीं लूंगा, वो जिंदगी का क्रेजी कमेंट था मेरी, मतलब पूरे हिस्ट्री में है कराची में इसकी। वो क्या था कि एक कमेंट आता है यार थैंक यू सो मच दानियाल भाई, मानी भाई, आई लव यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बन गई। अच्छा मैंने कहा चलो कुछ मोटिवेशन, कुछ अच्छी बात समझ में आ गई हो, कुछ सीख गया हुआ। आगे नीचे लिखा हुआ थोड़े से गैप के बाद, यार आपकी वीडियो पे ना लास्ट वीडियो पे खूबसूरत लड़की का कमेंट था, मैंने वो कमेंट जाके लाइक किया और अभी आपका भाई उनके साथ डेट मार गया। मैंने कहा हम यहाँ पे बैठे हैं और लोग जिंदगी बना रहे हैं। मतलब कराची वाइज की वजह से लोगों को डेट मिल रही है, कराची वाइज को डेट मिल रही है। क्या कर रहे हैं ना, हमने तो सोचा यार कि मतलब क्योंकि हम उससे अर्निंग भी कर रहे थे वीडियो से, पैसे कहीं हराम तो नहीं कमा रहे हैं। चलो आइदर गर्ल्स या मनी। सो वैसे क्या पसंद करेंगे आप, लड़कियां या पैसे? किस वे में आप पूछ रहे हैं?
बहुत ही शरीफाना वे में पूछ रही हूँ। पैसे हैं तो फिर लड़के तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली पैसा हो तो फिर दुनिया पैसा नहीं होगा ना लड़की नहीं मिलने वाली। अच्छा अजलान आपसे एक सवाल है, सबसे ज्यादा व्हाट वाज द फनीएस्ट इंसिडेंट बर्फी के शो पे? एंड यू कैन टेल मी अबाउट बर्फी एज वेल। बर्फी हमारा एक शो था जो हमने रिसेंटली किया है ईद पे, या पे लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी हमने किया है। और बर्फी पे काफी सारे फनी इंसिडेंट थे, लेकिन एक जो मुझे जो सुनने में आया था, जो हमने, क्योंकि मैं उस टाइम उस मौजूद नहीं था उस जगह पर, लेकिन एक फनी इंसिडेंट ये था कि सलमान जो है आपस सरापा बन के घूम रहे थे एक मार्केट, वही जो आप अभी हमें दिखा रहे थे। बिल्कुल, तो ये दुपट्टा पहन के इनका एक कैरेक्टर है आपस सरापा, बोल के दिखाया कैसे? देखिए आ गए तुम्हारी दादी आ गए। तो ये कैरेक्टर था और ये मार्केट में घूम रहे थे और इनको ऐसे जबरदस्त प्यारे प्यारे बुढ़े लोग मिले थे। और एक होता है ऐसे जवाब थे कि दुपट्टे में था या पूरे अटायर में? ऐसे दुपट्टा था। एंटी गवर्नमेंट को जानती हैं आप? वो उसका सॉर्ट ऑफ अभी होता आदमी बुढ़ापे में लिहाज करता है, कुछ लोग ऐसे मिले तो घर से फारिग और उनके जवाब ऐसे कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। They were like dudes, बुड्ढे dudes, 90 years के dudes। यो तो भारत होता है, लेकिन इस तरह के बड़े मतलब होते हैं। अच्छा क्रेजीएस्ट थिंग मुझे याद है एयरवाई पे एक हुआ था, वो वहाँ पे ना जीतो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें जो क्राउड यूजुअली आती है ना, तो वो मतलब वो किसी भी स्टार को अगर देख लेना, चाहे कोई भी हो, मतलब ये एक्सप्रेशंस होते होंगे ना कि मतलब कौन आ गया सामने ना। तो एक बच्ची याद है वो जो आई थी, वो अच्छा अब बच्ची आई, बच्ची थी या लड़की? छोटी बच्ची, मतलब अच्छा बच्ची, लिटरली बच्ची कराची की, सॉरी टू से लैंग्वेज, 8-9 ठीक है, 8-9 क्लास की होगी मैक्सिमम ना, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस क्या था ना लड़कियों के मामले में। तो वो आई आगे बोलिए, हाँ वो कहती है कि यार मुझे पिक्चर लेनी आती है। चले ठीक है, सब खड़े हो गए, सब इधर आगे पीछे, ये वो छोटी सी थी उसको एडजस्ट किया, ये वो सुने मेरे को मोबाइल नहीं है। अरे बोलिए आप खींच के मुझे पेज पे अपलोड करते, वहां से कॉपी कर लूँ। मैंने कहा थैंक यू, मैंने पिक्चर तो ली लेकिन मैंने फिर वो अपलोड नहीं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो इस सब के अंदर आप लोगों के तासुरात क्या होते हैं, मतलब दिमाग में लिटरली क्या चलता है जब कुछ ऐसा व्हाट आई वुड कॉल अ भंड होता है, तो व्हाट हैपेंस फैंस के साथ? हाँ फैंस के साथ। देखिए मैं सीरियस नोट पे एक बात बताऊं कि बहुत से लोगों को लगता है हम लोगों के अंदर ईगो है या हम लोग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मजबूरी कह लें आप इसको या वक्त की ज़रूरत कह लें, करना पड़ता है। मैं इसे समझता हूँ कि आपका टैलेंट आपको फेमस ज़रूर कर सकता है, मगर आपको कभी स्टार नहीं बना सकता। आपका स्टार आप तब बनते हैं जब आपका एटीट्यूड डायनामिक हो, मतलब ना सिचुएशन के हिसाब से आप हम्बल रहें, लेकिन इतने भी ज़्यादा हम्बल ना हो जाए कि अगला आपको फॉर ग्रांटेड ले जाए, समझिए। मतलब कुछ लोग, मेरी शुरू की जब स्टार्ट हमें फेम मिला था तो कुछ एक्सपीरियंस बड़ा बुरा ये था कि जब हमें नॉर्मली लड़के मिलते थे या स्पेशली जो बाइकर्स बॉय टाइप के होते हैं तो कहीं पे भी मिल जाते हैं आपको, तो उनसे हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से करते हैं। तो 5 मिनट के बाद ना मतलब वो ना बदतमीजी कह लें आप उसको, या वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अबे तबे तू उतरा जानी, इस पे उतर आते हैं। तो वहाँ पर हमने रियलाइज किया यार एक अपने आप को ना थोड़ा सा एक बना के रखना है, डिस्टेंस बिल्ड रखना है। भले वो किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, रिसेंटली से यहाँ पे MUN वगैरह चल रहा है काफी ना, तो बल्कि ये भी नहीं कहूँगा मैं, एक और चीज़ कहता हूँ, अक्सर मैसेजेस आते हैं हम लोगों के बारे में, क्योंकि हम लोग की फेक आईडीज बहुत बनी है, तो लोग मैसेज करते हैं कि यार आर यू रियल? मैं उनको जवाब देता हूँ नो आई एम नॉट रियल। कहते हैं प्लीज़ बताएं ना ये वो। मैंने देखिए आपने बिलीव करना है, करें ना करना ना करें। तो आगे से क्या आता है, यार आप एक काम करें अपनी पिक्चर लेके भेजें या मुझे फला जगह पर पिक्चर पोस्ट करके प्रूफ दें। मैं क्यों आपको प्रूफ दूं, आप क्या समझिए। और आगे से मैं बोलूँगा यार आई डोंट केयर, आपको यकीन करना ना करो तो यार आप तो बड़ा एटीट्यूड है। मतलब लोग समझते नहीं है और जजमेंटल बड़े होते हैं। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्ट ऑफ द गेम, अगर आप ऐसी चीजें होती हैं, व्हाट कैन यू से, बस यही है कि थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करें। अच्छा अब हम आते हैं अपने DOP सर के पास। असद आप मुझे ये बताइए, अच्छा एक्चुअली आप लोग मुझे बताइए कि असद के बाद लाइक व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम, मतलब ये कैसे होते हैं ऑन सेट? ये मासूम बच्चा है हमारे पैक का, वो पता चल रहा है, वो बोल उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा ये मैं बताऊं, मैं सबके मत देखें, वैसे तो मुझे सबसे ही एक बराबर का प्यार है अपनी पूरी टीम से, इससे मुझे कुछ ज्यादा ही है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये बॉय ऐसा है कि रात को 4 बजे भी आप उसको बोलो यार असद भाई बोलिए कहीं चाहिए जाना, चलो आ जाओ, ये वो बनता है, ठीक है ना। इसको करूंगा टोपी कर देगा, इसको करूंगा कहीं और होगा, अब नहीं आऊंगा मैं, अब नहीं आऊंगा मैं। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें। लेकिन इसका ये बड़ा डेडिकेटेड बंदा है। जब ये शूट पे होता है ना मेरे साथ, तो मुझे टेक्निकल कोई टेंशन नहीं होती। मतलब मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, वरना मुझे खुद देखना पड़ता है अगर ये ना हो ना, क्योंकि किसी का भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है ना मेरा है। बाकी ये कि मैंने मीडिया में थोड़ा काम किया हुआ है, थोड़ा सीखा हुआ है, थोड़ा सा अपना जुनून कह लें आप उसको। सलमान काफ़ी अच्छे है, कभी कभी एग्जीक्यूशन ले आता है,
ठीक है ना, लेकिन एक चीज होती है ना कि आपको पता होता है कि यार आपने शूट करना है तो आपकी टेक्निकल हैंड हर कोई मतलब एक बंदा है जो संभाला, चाहे वो माइक से लेके, चाहे वो फ्रेमिंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो फ्रेम को मैनेज करना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं पड़ेगी, तो उस पर आपको नजर नहीं रखनी पड़ती, तो उससे बहुत काम आसान हो जाता है। इन शॉर्ट हम पहले जो है वो सब चीजें सब लेके चल रहे होते हैं, जब ये होता है हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, हमें सिर्फ अपनी एक्टिंग सब तो लोगों ने बता दिया, मैं क्या बताऊं। आप इनके बारे में कुछ तारीफ करते या तुम वो बताओ, इनके एक्सपीरियंसेस बताइए। शिकायत है हमसे। अच्छा आज सब बोल प्लीज बताइए। एक ही तो शिकायत है यार, ब्रेकिंग न्यूज। ये हर दफा यही होता है, क्या कहते हैं मुझे इंट्रोड्यूस कराना ही भूल जाता है हर जगह। ये हमारा पूरा क्रेडिट जो है ये तो ज्यादा नजरों में आज हम आपकी जो क्या कहेंगे आपकी शिकायत दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको मिलाते हैं कराची वाइन्स के सबसे बड़े स्टार से, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, द वन एंड ओनली मिस्टर एडी प्रोडक्शन है, ये ब्लैक स्टूडियो के मालिक है, ये बहुत मशहूर काम कर रहे हैं ये लोग ना। जितने शोज आप देखते हैं, जितने इनके व्लॉग्स आप देखते हैं, सब ये शूट करते हैं। ही इज द मैन बिहाइंड द कैमरा। एक और चीज जो हम लोग इंटरनेशनल थाईलैंड वगैरह के व्लॉग्स जितने भी आपने देखे, चाहे वो पानी के अंदर हो, पहाड़ के ऊपर हो, जहाँ से छलांग मारी, पैराशूट से छलांग मारी, वो सब इसने शूट किया। हम लोग छलांगे भी मारे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मेरा अगला सवाल है, आपका सबसे मजेदार एक्सपीरियंस क्या था थाईलैंड? थाईलैंड क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको थाईलैंड के बारे में। मेरा जो एक्सपीरियंस आया ना, जब भी मैंने किसी को बताया ना मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो सब हैं ये एक्सप्रेशन होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन थाईलैंड मैं समझता हूँ कि आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आप मतलब बहुत एग्री करते हैं। आप जैसे हमारा मीडिया से हमारा ताल्लुक है ना, आप अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें या वहाँ की जो लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है। नो डाउट पाकिस्तान का खूबसूरती में कोई आसानी नहीं, लेकिन वहाँ की एक डिफरेंट, वहाँ की जो आइलैंड्स हैं, इतने सारे आइलैंड्स हैं, मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आपको मल्टी कल्चर लोग मिलते हैं। इवन कि हमने वहाँ पे कुछ वीडियोस शूट किए हैं जो हमने अंग्रेजों के साथ किए हैं। हाँ, वो फीमेल भी हैं उसमें, लड़के भी हैं, मतलब मिक्स है ना। वो इतने मजे के लोग होते हैं कि आप उनसे एक तो लर्निंग आपकी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है। थाईलैंड इज द नंबर 1 कंट्री ऑन टूरिज्म, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, आपकी लर्निंग होती है, आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, आप उनसे बातें करो, आप उनसे ये पूछो कि यार आप बहुत कुछ क्या क्या मतलब आपकी मतलब जो आपकी कंट्री है उसमें ये चीज़ कैसे होती है, अपने बारे में बताओ। और इवन कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना अच्छा यूँ रहा है कि मैंने जब भी किसी से पूछा ना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने हमेशा अच्छे ही अल्फाजों में मतलब ना याद किया पाकिस्तान को। मतलब ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे होता है, लोग समझते हैं हम टेररिस्ट हैं या ये चीज़ है या हमारे बारे में एक बुरा इमेज है, होता है हर जगह होता है, लेकिन लोग हर जगह के बुरे होते हैं। हमारी यहाँ सीन है कि हमारे मशहूर है। जी मंसूर, आपका हो गया मैसेज? हम वेट कर रहे थे आपका। मेरा मैसेज मतलब ये होता है जब हम ब्रेक पे जाते हैं, सबके हाथों में फोन, और मेरे हाथ में फोन है, मैं यहाँ देखती क्या करें, डिमांड हाँ चलो किसी एक के पास नहीं, घर बसे हैं यार, मतलब यू नो लाइक जवाब देना। आएंगे हम इस पे, आएंगे हम इस पे। अच्छा मंसूर, आप हमें बताए थे कि थाईलैंड में क्या हुआ? अच्छा थाईलैंड में नहीं हुआ, ट्रिप के स्टार्ट में हुआ था, क्योंकि हमारा पहला जो स्टॉप था वो श्रीलंका था, 1 दिन का स्टे था वहाँ पे, फिर वहाँ से मैं थाईलैंड जाना था 10 दिन के लिए, फिर वहाँ से मलेशिया। तो श्रीलंका में हम जाते हैं और श्रीलंका के वीजे जब सबके लगे थे ना, तो सबके आए 24 घंटे बाद वीजे, मेरा आ गया 5 मिनट के अंदर। मैंने इतना इन लोगों का दिमाग खराब किया, मैंने बोले क्लास देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर। खैर ये हुआ, हम पहुंचे, लैंड किए हम लोग कोलंबो एयरपोर्ट पे। कोलंबो एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ पे सब लोग चले। अच्छा दानियाल ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि सबसे आगे दानियाल होगा, ठीक है ना, बाकी बीच में क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे ट्रैवल कर रहे थे, और सबसे पीछे होगा मानी, क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया हुआ दानियाल के साथ काफी। मैंने ठीक है ठीक है, तो सबकी टेंशन थी और सब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलते चले गए ना। तो दानियाल मानी तो निकल ही जाएगा। ये बंदा जाता है काउंटर पे और इस बंदे का जब पासपोर्ट और वीजा देखा तो उसको कहा कि आपका जो वीजा है इसमें गड़बड़ है। मानी की आवाज आती है, दानियाल पुलाव मानी। हम लोग इमिग्रेशन पर खड़े हैं, बाहर निकल 5 बज रहे, बोले पुलाव कहाँ से पड़ गया, बाहर तो निकले पहले जाके ना। दानियाल भाई पुलाव, बोले व्हाट पुलाव, मैंने कहा कोड वर्ड, माय कंट्री इज पुलाव इन द वीजा, द नेशनैलिटी इज वीजा वाज रिटन पुलाव, और ये एजेंट की गलती। अब मैंने आपको बताया ना 5 मिनट के अंदर वीजा क्यों आया था। वो जिस ट्रैवल एजेंट ने मेरा वीजा सिलेक्ट किया था ना, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होते हैं, उसमें पाकिस्तान से ऊपर था पुलाव, तो उसने पुलाव पे क्लिक कर लिया। गुरूर मरवा देता है इंसान को। तो ऑफिशियली हमारी टीम में सब ने 3 मुल्कों का ट्रिप किया था सिवाय एक बंदे के। नहीं देखो मुल्कों का ट्रिप हो गया था, मुल्क का मैं कदम रखे मैंने वहाँ पे जमा के। आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। एयरपोर्ट तो कोलंबो में था ना, तो उसका मतलब मुल्क में था ना या हवा में था कि एयरपोर्ट
तो हवा में हमने 10 घंटे हो गए। देखा यार, जीत गया भाई। सही है भाई, देखा इनके इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हमने किया कि उनकी आवाज आ रही है। कमाल, ये यही कर सकते। तो बहरहाल खैर इतना अच्छा एक सीन ये हुआ था कि यार मुझे वहाँ पे रूम दे दिया गया था एयरपोर्ट वाले की तरफ से। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो क्रेजीएस्ट थिंग थी वहाँ पे, चीज थी, वो ये थी कि ये लोग जब वापस आए ना, मतलब जब शाम वहाँ में अपना घूम फिर के अगले दिन जब वापस आए ना, जब ये एयरपोर्ट पे अंदर आए ना, तो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे वो तक मुझे जानता, पूरा एयरपोर्ट जानता था। पूरे एयरपोर्ट के स्टॉल वाले। आपकी सोच है, जो बंदा मिला उसको मैंने बैठ के आधा घंटा अपनी कहानी सुनाई। लिटरली हमें भी गार्ड ने बताया वो अपने दोस्त गुलाब ने तो वहाँ फिर रहा है, वो ऊपर है। जब ये लोग आए ना तो मैं एक चाइनीज लड़की के साथ बैठा हुआ गप्पे लगा रहा था, क्योंकि मुझे फ्री वाईफाई मिल गया था उसके पास। वाह। अच्छा अदलान, हम आप पे आएंगे। यू रिसेंटली जॉइन कराची वाइन्स, तो सो फार आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा है और जो है मंसूर के बारे में कुछ कहूँगा कि बताइए। चूंकि को फाउंडर है कराची वाइन्स के, और मतलब है ना ये इज लाइक कैप्टन ऑफ द शिप, लाइक कैसे लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना, तो ये सारी चीजें ये मैनेज कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत तंग करते हैं कि टाइम पे पहुंचो, टाइम पे, क्योंकि मैं अमूमन लेट हो जाता हूँ। मैं मेरे अंदर थोड़ी सी बुराई, मैं थोड़ा सा जब कॉल टाइम होता है सिर्फ 10 अच्छा, ये थोड़ा सा कितने घंटे है? थोड़ा सा एक समझ आ रही, तो वही सर थोड़ा सा मतलब दो लोग हैं, एक तो ये और एक हमारा भाई दानियाल जो कि मेरा पार्टनर है। उसको कैसे भूल सकते हैं? मैं सोचा था कि इस पॉइंट पे आके मैं उसकी बात शुरू करूंगा। स्टोरी मत बताएं, हम उस पे आएंगे जरूर। अच्छा अजलान, हमने आपके साइड में एक सरप्राइज रखा हुआ है। बिल्कुल। तो प्लीज हम जैसे मानी है, मंसूर है, ये पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह, और सलमान गाना बहुत अच्छा बजाते हैं, ये तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं। मैं मुझे थोड़ा बहुत गिटार आता है। क्या गाऊं मैं जैसे आपने कहा था ना कि घर वाले हैं, तो उन्हीं की याद में कुछ गाना। चलो भाई, फौरन आ गई। धागे तोड़ लाओ चांदनी से मुझे, घूंघट की बना लो रोशनी से मुझे, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से रहे मेरी सांसें, समीर राशिद कुरैशी। अरे भाई मुबारक हो। अच्छा ठीक है, हाँ कुछ कह नहीं दिया। ये होते हैं सस्ते जोक्स। वेलकम बैक टू द शो एंड हम अब शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड से। तो जी हम आपसे पूछेंगे सवाल, आप सबको अपने जवाब देने हैं, सच बोलना है। हो गया? और ये टाइम ले लिया तुमने, रैपिड फायर है भाई। ओके, तो आप सबको इंडिविजुअली जवाब देना है, कॉपी नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, और हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके सो जी जनाब, सो स्टूडियो में, अंधेरे स्टूडियो में ये पहनते हैं सनग्लासेस। क्योंकि रैपिड फायर में कुछ भी निकल सकता है, मैं फेस नहीं कर सकता। इट इज अ सब्लिमिनल मार्केट। अच्छा सलमान, सबसे ज्यादा कौन खाता है? सबसे बड़ा भुक्कड़ कौन है? इट शुड बी द क्वेश्चन। दानियल। He is very foodie actually, माशाल्लाह। He loves to eat. मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दानियल he loves to। मैं आगे बढ़ लूं? मुझसे आप पूछेंगे तो ये, क्योंकि हर वक्त तैयार रहता है खाने के लिए। तभी तो नर्वसनेस थी जवाब देते हुए। अभी कौन खा रहा था बैठ के? आप। हम हवा खा रहे थे। चले जी, कौन खाना खाता है? दानियाल। वैसे ऑनेस्टली दानियाल 2 points। दानियाल से बड़ा फूडी मैंने आज तक नहीं देखा। ही नोज अबाउट फूड, दुनिया जान है, खाना जानता है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, सब पता है उसको। लाइक तो मेरा वो दानियाल। माशाल्लाह। सेम दानियाल। आप जा सकते हैं। मैं अपने दोस्त की क्यों उस तरह की बात। तो ये आपके दोस्त नहीं है? पक्के दोस्त। मतलब दानियाल इज मतलब ये कच्चे हैं, कभी भी कटा। हम लोग यूं है, देखें यूं है, मैं और दानियाल मिसाल देना, ये जुड़ी हुई होंगी ना, मतलब साथ है हमारा, थोड़े से लिए जुड़ जाता फिर। अच्छा सी, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? सब पहले वो
ओके पानी नहीं यार अजलान आप एक सेकंड नहीं हम आएंगे आप अभी भड़क निकालिए। मैं वो नहीं कह रहा, मजाक में बोला या सीरियस बोला है? सीरियस सच बोलना, सीरियस बोल सच बोलना है यार, सच बोलना है। पार्ट ऑफ सच बोलिएगा, आपकी समझ नहीं आएगी। ले आसिम का नाम यार, ले दो अच्छा ना लगे ना यार, बुरा लगे। वैसे एक बार मैं कहूंगी, मुझे जितने कमेंट्स मैंने कराची वाइन्स के बारे में सुने हैं, आसिम इज अ वेरी गुड एक्टर, ये बात सब मानते हैं। मतलब माशाल्लाह से जब भी वो आपकी वीडियोस में आते हैं, जी हमें पता है, बिल्कुल मुबारक हो आपको। मेडल नहीं है वरना जरूर देती मैं। सबसे महंगा एक्टर है हमारी टीम में। उसकी इनवॉइसेस ना सबसे महंगी जाती है, सबसे एक मिनट इनवॉइस का वर्ड तुमने कहाँ से सुना? ये कल से ये कर रहा है इनवॉइस सुबह से दो कहाँ से पता चला तुम्हें? यार ये आजकल मेरे रेट भी बढ़े हैं। वो होते हैं ना कुछ चीज के रेट बढ़े हैं भाई, शादी ब्याह पे नाचने के रेट बढ़े। देखे बाजी देखिए हमारा एक बड़ा, जब हमें चिल होना होता है ना तो हम एक बात कहते हैं, आइए बाजी आइए, देखे यहाँ पे जोड़े भी है, कंगन भी है, पाले भी है, चूड़ियां भी है, दुपट्टे भी है, जानी बॉयज सारी पिंडी बॉयज। अच्छा आसिम और शहबाज, एक मिनट यार, आसिम और शहबाज, यू नो ये रैपिड फायर है जिसमें फौरन शहबाज मैं शहबाज से कहूंगा। आसिम और ये हर जगह है आपकी, ये हर जगह, ये तो बदला था लग रहा है। असली जवाब नहीं, ये बहुत खर्च करता है लेकिन किसी पे क्यों? अच्छा ये शहबाज ऐसी क्या कंजूसी करते हैं जो आप लोग सब शहबाज वो पैसे नहीं निकालते करेंगे? सच्चा आदमी मतलब सच्चाई के लेवल तोड़ दिया आपने। आपने एक पॉइंट मारा था ना, उसका जवाब देना। लेकिन मेरे बारे में जो जिसने भी कहा बहुत ही गलत है, ये आप अंधे को भी बोलेंगे। मानी बहुत खुले हाथ का, कहीं भी जाता है मानी ने पहले बिल, वो तो मजाक तो हमारे सारे बिल्कुल मानी जो है वो ऑनेस्टली। अच्छा ऐसा लग रहा है वो जो किसी को कमेंट देता हूँ तो बुरी लगती है, सारे से मनाने में लगे। कितना खुले हाथ का है, तुम दिख रहा है हमें। अच्छा सबसे ज्यादा देर से कौन आता है, अब आप बताइए। मैं बताता हूँ, दो लोग हैं। सही। एक तो ये, ठीक है, एक दानियाल का ये कि अगर आपने उसको 10:30 बजे बुलाया तो आप उसको 8:30 का टाइम दो, फिर भी वो 9:45 बजे आएगा। ये है दानियाल। मेरे हिसाब से सभी लेट आते हैं क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंच के सबको कॉल कर रहा हूँ, तो भाई इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। हाँ, दो चीजें इसकी जिंदगी में, मैं सबसे पहले टाइम पे होता हूँ हमेशा, एक फोटोग्राफी और दूसरी तंबाकूनोशी सेहत के लिए। जो इंसान अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत है वही होता है कामयाब। अच्छा ओके, अगला कौन सबसे ज्यादा अपने फोन पे रहता है? सलमान तो सबका एक सेकंड इस पे ये जवाब दे दे फिर। सलमान मेरा तो है, लेकिन ये भी बोलेगा मैं। सलमान इतना परफेक्ट है ये। एक सेकंड माशाल्लाह, मुझे इसमें कोई नहीं आ सकता। थाईलैंड में जिस हम होटल में रुके हुए थे ना, उसमें जो लॉबी में जो उनका स्टाफ होता है, वो दोस्त बन जाते सारे, उन तक को भी पता है कि ये बंदा ऑलवेज ऑन, उसके मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। कौन है जिनसे आप इतनी बातें ये तो पर्सनल हो रहा है। ये सवाल है, कौन है? अच्छा कितने हैं? सब देख रहे होंगे तभी मेरी गर्दाई कुटास लगने वाली। कितने हैं? अच्छा चले नाम मत बताएं, गिनती में बता दें। मैं तो चीनी लेने आया था। नहीं समझ जाए जिनको समझना है। एक मिनट, क्या बच्चों वाले सवाल, पर्सनल सवाल पूछो ना। पर्सनल सवाल मैं पूछूं, लेकिन आप दुबई ले जाओ इनको, दुबई जाना है, इनको दुबई जाना है, आप नोट करेंगे, दुबई जाना है, इनको दुबई जाना है। आप दुबई कब जा रहे हैं मंसूर? मैं, मेरा बस चले, मैं कल चला जाऊँ। देखा, आप समझे इस बात को, इनका बस चले कल चले जाए। अवाम आपको समझ नहीं आने वाली इनसाइड जो। अच्छा मूविंग ऑन, आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा देर तैयार होने में कौन लगा?